Good morning and a very warm welcome to everyone present here to the very first edition of the Udaan Conclave, a summit where we will collectively witness a flight of ideas, a flight of innovation, a flight of inspiration, and a flight of the very future right in front of our eyes. Designed as a one-of-its-kind conclave happening for the first time here in Bhopal, the Udaan Conclave aspires to bring to the young audience of today inspiring dialogues fashioned between veteran industry leaders and young professionals, representing the space of entrepreneurship and digital leadership. Through this day-long intensive summit, we hope to create a movement which redefines the very contours of the way we look at the present and future of entrepreneurship in India. Our conclave, hence, is aptly titled Udaan, which translates to flight. It presents a fitting metaphor for our ambition to collectively soar to new heights. Please join me in putting your hands together for the kind of day, for the kind of summit that we've all created for you, wherein we will witness some very interesting panel discussions, some truly enlightening and inspiring keynote dialogues, and an engagement and interaction which will stay with all of you for a long, long time to come. I want you all to once again put your hands together to welcome all of our dignitaries, and a special and a heartfelt welcome to Shri Vivek Tankhaji, without whose presence, support, and active mentorship, maybe Udaan would not have taken flight. Can we have a slightly more sonorous applause? This is the kind of energy we will hope to maintain throughout the day, so that discussions remain lively and we have a truly fruitful day ahead of all of us. And like is the tradition, we would like to begin today's conclave on an auspicious note with the ritual of Deep Prajwalan, for which I would like to invite ahead Shri Vivek Tankhaji, General Ajay Singh, Shri Kartikeya Sharma ji, Shri Maithili Saran Tiwari ji. May I request our volunteers to also please escort the dignitaries towards the lamp for the Deep Prajwalan ceremony. Shri Vishal Shivhari ji, Mr. Varun Tankhaji, Shri Sudhi Ranjan Mohanty ji, Shri Ramraj Karsolia ji, Shri Ramendra Karsolia ji, Shri Rajul Karsolia ji, Shri Gaurav Tiwari, Shri Ashish Mishra, Shri Karan Kukreja, Shri Anup Krishnan, and Shri Aryan Tripathi. Kindly join us for the auspicious lamp lighting. Shubham karoti kalyanam arogya dhana sampadan shatru buddhi vinashaya arogya dhana sampada shubham kurutvam kalyanam arogyam dhana sampada shatru buddhi vinashaya deepajyotir namostute deepajyotir namostute deepajyotir parabrahma deepajyotir janardanah deepajyotir parabrahma deepajyotir janardanah deepo hartu me papam sandhya deepa namostute o deepa brahma rupasvam jyotisham prabhuravyayah. I would also request the dignitaries to please join us on this stage to offer a pushparpan to to Goddess of Knowledge Saraswati, whose idol is placed on this stage. She remains an inspiration and a humbling deity for all of us. It's a very special moment for us. May I request all the dignitaries to kindly join us on the stage for pushparpan towards Goddess Saraswati. Like they say, well begun is half done.
I truly thank all of our esteemed guests and dignitaries for helping us begin today's conclave on the correct note, on the auspicious note, with the blessings of the Almighty. And on this note, I hand over the stage to Anuj to take the conclave forward. थैंक यू सो मच सौम्या, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज का ये दिन ना केवल उन सपनों को साथ लाने का है, बल्कि एक साथ मिलकर भारत के भविष्य की रचना करने की एक तैयारी है। और बखूबी कहा गया है, तेरे पंखों में अभी उड़ान और भी है, तेरे पंखों में उड़ान अभी और भी है, तो इरादा तो कर कि आसमान अभी और भी है। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें मैं अब इस मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं, जिन्होंने इस सोच को ताकत दी है और आज अपने विजन के साथ हम सभी को जोड़कर इस कॉन्क्लेव की रचना करी, जिसे साथ मिलकर के हम सब ने आपके बीच पेश किया है। उड़ान एक शब्द, एक साहस, एक परिकल्पना और एक उम्मीद है समूचे भारतवर्ष को और उसके भविष्य को तैयार करने की। आज का ये दिन समर्पित है उन विचारों को एक नई दिशा देने के लिए, उनके साथ साथ बल्कि आगे बढ़कर उन्हें वो ताकत देने के लिए जिस प्रकार से भारत इन युवाओं को देखता है। तो आइए अब इस मंच पर मैं उन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं, जिनकी ये सोच रही और वास्तव में उनकी ताकत के साथ, उनके विजन के साथ जुड़ा ये समस्त परिवार। स्वागत करना चाहूंगा हम सभी के बीच माननीय श्री विवेक कृष्ण तनखा जी, ऑनरेबल एडवोकेट एंड ऑनरेबल मेंबर ऑफ राज्यसभा, आज हमारे साथ इस मंच पर पधारने जा रहे हैं और शुरुआत करेंगे अपने उन विचारों के साथ, किस प्रकार से उन्होंने इस सोच को तैयार किया और आज आपके समक्ष वो लेकर आएंगे। A personality who holds the position of senior advocate at the Supreme Court of India and serves as the member of Parliament. He has previously held the prominent roles as the Additional Solicitor General of India and the youngest Advocate General of Madhya Pradesh. आप सभी की तालियां बनती हैं जोरदार इस मंच पर माननीय श्री विवेक तनखा जी के लिए। हार्दिक हार्दिक स्वागत महोदय इस मंच पर आपका। धन्यवाद मानसरोवर फैमिली और गौरव, धन्यवाद all the young friends of Gaurav and all the young people who've collected, जो लोग आए हैं और आज जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आते जाएंगे। ये कॉन्क्लेव अलग दृष्टि से है, अलग सोच से है। ये एक शुरुआत है, शुरुआत एक नई सोच की, एक नए तरीके की और एक नए अप्रोच की। आप कहेंगे कैसे? मध्य प्रदेश और भारत एक यूथफुल देश है। मध्य प्रदेश में 55% ऑफ पॉपुलेशन 30 to 35 इयर्स के नीचे है और यही लगभग स्थिति पूरे देश की है। चुनाव होंगे, जाएंगे, लीडर्स बनेंगे, उतरेंगे। क्वेश्चन है कि हमारा देश कहां जाएगा। अब्दुल कलाम जी ने कहा था, इस देश को हमको अगर आगे बढ़ाना है तो ignited minds have to come together. The bright minds have to come together. मेरा एक पीड़ा है, जब विश्व इस 50-60 साल में आगे बढ़ रहा था, इंडिया ने बहुत तरक्की की। ऐसा नहीं कि इंडिया ने तरक्की नहीं की, बहुत तरक्की की है। बट इंडिया ने वो तरक्की नहीं की जो इंडियंस जिसके लिए कैपेबल थे। वही इंडियन जब इंडिया के बाहर जाते हैं एक्सेल करते हैं, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट दिया जाता है एक्सीलेंस का। और वही इंडियन जब इंडिया में काम करते हैं तो उनको डैम्पन अप किया जाता है, उनको रोका जाता है, उनकी एक्सीलेंस को स्टाइफल किया जाता है। तो मेरा जो ये अभियान है कॉन्क्लेव, ये आज तो खाली शुरुआत है। और YouTube और यंग मित्रों के माध्यम से वी विल रीच मिलियंस। हम अपनी बात ये करना चाहते हैं कि व्हेन इंडिया हैज अ फ्यूचर, हु कैन स्टॉप दिस फ्यूचर। और आज इसी मारे मैंने कुछ 5-6
आइकॉनिक पर्सनालिटीज को शॉर्ट 10 मिनट्स की बात करने के लिए भी आमंत्रित किया है। मैंने आमंत्रित किया है सैम पिट्रोडा जी को, जो यूएस से बोलेंगे। कि मैंने कहा सैम साहब, आप तो टेलीकॉम रेवोल्यूशन लाए थे 1980 में। उसके बाद इंडिया में आईटी रेवोल्यूशन आया, इन्फोसिस, टीसीएस, आज वो उसी रेवोल्यूशन के प्रमाण है। फिर डिजिटल इंडिया आई, मेरे मित्र विजय शेखर, पेटीएम और सैकड़ों अदर यूपीआई, बहुत सारी कंपनीज आई, नए जनरेशन की जॉब्स आई। बट मैं सैम सर से ये पूछना चाहता हूं कि अगले 50 साल में क्या दिशा होगी इस प्रोग्रेस की? डिजिटल इंडिया से हम किस इंडिया में जाएंगे? हमारे यंग लोगों को बताइए कि आगे का विजन, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल विजन क्या होगा। इसी तरह हमारे साथ जनरल अजय आए हैं। जनरल अजय कुछ माह पूर्व तक इंडिया के सबसे सीनियर मोस्ट आर्मी कमांडर थे और इनकी स्ट्रैटेजिक विजन और सोच की पूरे देश में तारीफ थी। तो मैंने कहा जनरल अजय बताइए कि अगले 50 साल में इंडिया की डिफेंस एटमॉस्फेयर क्या रहेगा, एनवायरनमेंट क्या रहेगा। पुराने जमाने में हम पिक्चर देखते थे, ऊपर से चीनी बंदूक लेके खड़े हैं, नीचे से इंडियन सोल्जर बंदूक दिखा रहा है। हमने कहा वो एरा खत्म हो चुका है। आगे एरा कौन सा होगा? वर्चुअल वॉर, ट्रेड वॉर, सी वॉर? आई डोंट नो. जनरल अजय हैज टू टेल अस एंड एजुकेट इंडिया अबाउट इट. इसी तरह मैंने कपिल सिब्बल जी को बोला है, 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है। दिन भर हम कोर्ट में खड़े रहते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। लाखों करोड़ों वकील, लिटिगेंट कोर्ट्स में खड़ा रहता है दिन भर, पता चलता है पेशी हो जाएगी। क्या यही सिस्टम चलेगा अगले 50 साल? क्या इसमें बदलाव नहीं आएगा? और बदलाव आएगा तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे आएगा? क्या नया परिदृश्य जुडिशरी का क्या होगा? Nothing can remain static if you want to progress. Change is the name of the game. As I said, I'm looking for job creators. I'm not looking for job seekers. और this country में वो capacity है. We are leading the world in that. इसी तरह मैंने डॉक्टर नरेश त्रियान जी को इनवाइट किया। आप मुझे बताइएगा अगले 50 साल मेडिकल इंडस्ट्री कैसे चलेगी? रोबोटिक सर्जरीज होंगी, घर से ही ट्रीटमेंट हो जाएगा, हॉस्पिटल्स की कितनी सार्थकता रहेगी? क्योंकि आपको याद होगा हम जब यंग थे तो निजामुद्दीन स्टेशन में जाके अपना टिकट लेते थे जबलपुर का, और 2 घंटे हमको लगते थे अपना टिकट लेने में, क्योंकि हम क्यू में खड़े रहते थे। आज मेरा पीए मुझे 1 सेकंड में टिकट लाके दे देता है। द कॉन्टूर्स हैव चेंज्ड, टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड एवरीथिंग। आई वांट टू नो कि हाउ द हेल्थ पैराडाइम इज गोइंग टू शिफ्ट, चेंज। कैसे हेल्थ लास्ट मैन तक पहुंचेगी, हेल्थ के इशू इफेक्ट। विलेजेस को कैसे गुड डॉक्टरिंग, गुड ट्रीटमेंट मिलेगा विलेजेस को। 70% ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेजेस, रूरल एरियाज। इसी तरह मैंने कार्तिकेय जी को बुलाया है। कार्तिकेय जी इज अ मीडिया बैरन, ITV, इंडिया टीवी, संडे गार्जियन, न्यूज एक्स, यंग मैन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। कल उन्होंने कितना बढ़िया प्रोग्राम किया था दिल्ली में, रामनाथ गोयनका अवार्ड सेरेमनी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे, मैं भी था। कि बताइए कार्तिकेय जी, अगले 50 साल मीडिया के क्या होंगे? क्या हम मीडिया को गोदी मीडिया, भक्त मीडिया, इन्हीं परिचय से जानेंगे? मीडिया इज 4th पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम तो चाहते कि इंडिपेंडेंट मीडिया रहे,
मीडिया इंडिपेंडेंट हो, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंट हो। कैसे होगा? कौन करेगा? इसी के लिए मैं चाहता हूं पूरे एक ही जन कर सकते। देखिए, जब भी विश्व में चेंज आया है तो ओल्ड पीपल हैव नेवर ब्रॉट चेंजेस, इट इज द यूथ विच हैज ब्रॉट चेंजेस इन द वर्ल्ड। कभी भी वर्ल्ड ऑर्डर में अगर बदलाव आया है तो वो युवा ही लेके आया है। हम उन युवाओं तक पहुंचेंगे अपने बातों के जरिए, अपने प्रोग्राम्स के जरिए, अपने आइकॉन्स के जरिए, कि गेट इग्नाइटेड। दुनिया में चुप रहने से काम कहीं नहीं चलता है। आप शांत बैठे रहोगे तो आप स्टेटस को के पार्ट बने रहोगे। अगर आपको चेंज लाना है तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको असर्टिव होना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है, माधवराव सिंधिया जी को 1996 में जबलपुर के रोटरी क्लब्स को एड्रेस कर रहे थे और कम से कम 2,000 लोग थे, शाम की बात है। तो उन्होंने किस्सा बताया, कहने लगे मैं एड्रेस कर रहा था टालकोटोरा स्टेडियम में, लोग सुन रहे थे, सडनली लोगों ने ताली बजाने स्टार्ट कर दी। तो कहने लगे कि मैंने 2 मिनट सोचा कि मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी है जिसमें लोग ताली बजा रहे हैं। ही सेज, मैंने पीछे मुड़ के देखा फूलन देवी जी अंदर आ रही है। क्वेश्चन, और कहने लगे उसके बाद मैंने सोचा अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी स्पीच बंद करूं और जाके जनता के बीच में बैठ जाऊं। हमको अपने देश को किस मॉरल हाइट पे ले जाना है, हमको किस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस चाहिए, कैसे हम रूल ऑफ लॉ को इस देश में इन्फोर्स करेंगे, कैसे ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिसाइजेशन इस देश में खत्म करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस देश का यूथ हैज टू एड्रेस। अगर आप एड्रेस नहीं करोगे इन क्वेश्चंस को तो आपकी स्टेटस को विल नॉट चेंज। ये देश ना सिंगापुर बन पाएगा, ना वेस्ट एशिया जैसे ग्रो कर पाएगा, ना यूरोप जैसे बन पाएगा, ना अमेरिका जैसे हो पाएगा। 30 इयर्स में सिंगापुर कहां से कहां पहुंचा, उसके कारण आपको दिखते हैं वहां जब आप वहां जाते हो। दुबई, हम लोग यंग थे तो पिक्चरों में दिखाया जाता रहा कि दुबई, वहां पर खाली स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग होती है और हाजी मस्तान के नाम से जाना जाता था दुबई। आज दुबई एक मॉडर्न स्टेट बन चुका है, एक बिजनेस सेंटर बन चुका है, वर्ल्ड को अट्रैक्ट करता है। इंडिया कब इस प्रकार से चीजें सेटअप करेगा जिससे हम विश्व को अपने तरफ आकर्षित कर सके। इंडियंस आर डूइंग वेल, इंडिया इज नॉट डूइंग दैट वेल। अच्छा किया है, ऐसा नहीं किया है, बट दैट वेल। ये कॉन्क्लेव इज फॉर दोज इग्नाइटेड माइंड्स who want a change and who will work for a change, who will work for a better society and a better future. And इसके लिए यूथ से अच्छा कोई नहीं हो सकता। और ये जो हमारा कॉन्क्लेव है, जो हमारा समिट है, ये फर्स्ट है, इट्स अ बिगनिंग। और यहाँ से हम ग्रेजुअली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, डिफरेंट यूथ एरिनाज में जाएंगे और अपनी बात को अच्छे से पहुंचाएंगे जिससे लोगों में जागरूकता आए और लोगों में चेंज की एक भावना उत्पन्न हो। आई एम ग्रेटफुल, आप लोग आए हैं। अब आप दिन भर बहुत अच्छे लोगों की बातें सुनेंगे। मैं खुद बैठ के सुनना चाहता हूं। मैं सुनना चाहता हूं कि लोगों की भावना एक स्टेटस को के चेंज के लिए क्या है, अपने फ्यूचर के लिए क्या है, वो कैसा भारत चाहते हैं और कैसे इस भारत में वो प्रोग्रेस होगी जिसका हम सब सपना देखते हैं। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर।
वास्तव में शुरुआत किसी एक व्यक्ति से होती है जो बदलाव की शुरुआत करता है। वो कदम आपने उठाया है और उम्मीद इसी प्रकार से होगी कि हर क्षेत्र में जिस प्रकार से अपनी अपनी बात कही कि बदलाव की आवश्यकता है और बदलाव की शुरुआत हमें करनी है, वो आपसे हुई। एक बार तालियां बनती हैं जोरदार हम सभी के बीच माननीय श्री विवेक तनखा जी के लिए। एक ऐसी शख्सियत जिसने भारत को एक नई दिशा दी, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके साथ जिनकी सोच वास्तव में भारत के भविष्य को लेकर थी। आज का ये दिन उन्हें अब इस मंच पर ग्लोबल स्तर पर लेकर जाने की तैयारी है। जैसा कि माननीय विवेक तनखा सर ने कहा कि आज ये कॉन्क्लेव ना केवल हमारे स्पीकर्स बल्कि हमारे बीच मौजूद यूएस से आर वेरी ऑनरेबल श्री सैम पित्रोदा सर के सुनने की बारी आई है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, एन इंडियन इनोवेटर, a telecommunication engineer, and an entrepreneur, or whatnot, Sam Pitruda sir is nothing less than an inspiration for the entire nation. इतना ही नहीं बल्कि सर ने माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सलाहकार के रूप में भी कार्यभार संभाला। वहीं यूएन के साथ काम करते हुए आपने एक अतुलनीय योगदान दिया है और ऐसा कहिए कि आपके द्वारा लाए गए बदलाव में भारतीय टेलीकम्युनिकेशन के पिता के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। आइए, ये हमारे लिए बहुत ही हौसले की बात है। हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय महोदय को हम आज सुनने जा रहे हैं। तालियां जोरदार मिलें और स्वागत करें हम सभी के बीच माननीय श्री सैम पित्रोदा जी। Dear Mr. Tankha, ladies and gentlemen, greetings from Chicago. मैं आप जैसी हिंदी नहीं बोल सकता, so if you don't mind, I will speak in English. First of all, my compliments to you all for organizing an event like this in Bhopal. I really admire your initiative and want to thank you for giving me this opportunity. It is indeed a special honor and privilege for me to be here to say a few words on technology. We all know that technology has played very important role in advancing human civilization. In particular, in the last 20-25 years, almost everything has changed. Things have changed mainly because of the hyperconnectivity, information technology, IT, communication, smartphones. All of these things relate to what we call information revolution. Information brings about openness, accessibility, connectivity, networking, democratization, decentralization, and as a result, generational change. Today, because of hyperconnectivity, knowledge is being democratized, implementation is decentralized, and many of the services are being demonetized. Hyperconnectivity is all about communication, content, curation, and context. This is one technology which begins with the idea of communication, but ultimately moves on to automation, robotics, drones, AI. All of these new tools allow us to redesign our environment, redesign our work, redesign almost everything around us. In addition, there are other technologies related to environment, energy, biotech, nanotech, and materials. These 10 key technologies
are going to transform our world in the next 50 years. What does it mean to a country like India? One, if used properly, effectively, it will transform governance. Today, the biggest challenge from my viewpoint is that democracy needs to be put back on track. Our institutions are captured, media is not free, civil society has no place, and many of these technologies are equally responsible in spreading lies, hate, misinformation, and dividing people, creating polarized society. So the first challenge to use these technologies effectively to put democracy back on track, rebuild our institutions. Time and time again, I have said that in India, we have 50 million court cases pending. Sometimes it takes 8 to 10 years to get justice. With all of the technology available today, including AI, it should be possible not only to settle the backlog of 50 million cases, but also make sure that justice is provided within 18 months to 2 years. All of these things are possible today, provided we have political will, right policies, ability to use right tools. So first challenge is to really improve governance, not only at the central level, but also at state level, district level, and ultimately panchayat level. Second challenge is to really improve agricultural productivity and income of our farmer substantially by providing not only good information, but also good tools for weather forecasting, planting seeds properly, storage, distribution, delivery, market. Whole lot of this agricultural related initiatives require new tools and new technology, including things like drones and AI, satellite imagery, geohydrological surveys. Then to use this technology for education. We have come a long way in education, from 17% literacy to almost 75 or 80% today. But this literacy needs to be redesigned. We need to make people self-learner. And that's where AI, ChatGPT, and all the other new technologies will come handy. These technologies not only give you information, but they give you also knowledge. These technologies can read for you 150 books in 2 seconds, summarize things for you, cross-reference it, and really give you a gist in seconds. Today, ChatGPT and AI is becoming a very powerful tool in every walk of education, health, governance, manufacturing, business, finance, trade.
and the potential is just enormous. Third area is health, and I'm glad that Naresh Trehan is there to talk about it. But health is a big challenge. In the next 50 years, I'm confident that longevity will increase to probably 120 or 130 years. When I was growing up in India in 40s, average lifespan there was 40 years. People thought if you live to be 60, that would be pretty impressive. Today, I'm 81 year old, work 16 hours a day, and thanks to a lot of new technology, new tools that has been developed. Dr. Trehan knows because he worked on me in 1990 when I had my first quadruple bypass. Then I had my second quadruple bypass. In 2005, I had cancer. I have 5 stents. But the technology and tools available today allow me to extend and improve quality of life. New technologies will have huge impact on this. Environment is another area. So that's why we came down to this use case, logistics, जो last mile delivery होती है, वो जो मतलब सामान last mile में customer के पास जाता है, वो आजकल for e-commerce companies के लिए बहुत बड़ा challenge है. लास्ट माइल डिलीवरी का एक जिनको आइडिया नहीं, लास्ट माइल डिलीवरी आप ऐसा समझ लीजिए एक बहुत ही छोटा सा कस्बा है किसी कोने में, वहाँ जनरली कोरियर सर्विसेज की अवेलेबिलिटी के इश्यूज है, वहाँ पे अमेजॉन नहीं आ सकता डिलीवरी करने. अब क्या किया जाए उस चीज को, probably if I'm not wrong. Exactly, this is, and the second feature is like जैसे आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया, वो नासिक के किसी वेयर हाउस से गुड़गांव के वेयर हाउस तक आ गया, लेट्स से भोपाल के वेयर हाउस तक आ गया, बट वहाँ से वो पर्टिकुलर आइटम आपके घर तक जो आता है और वो बंदा जो लेकर लिफ्ट से जाकर आपके घर तक देकर आता, दैट इज द लास्ट माइल डिलीवरी. बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट आ सकते हैं, आप वहाँ पर हो गए या नहीं हो गए. एक छोटा सा पार्सल है, जो बंदा वो पार्सल देने जा रहा है, वो उसकी टाइमिंग्स क्या होती है, वो टाइम पर आता है, हो सकता है उसको कुछ काम आ गया, वो 2 घंटे लेट हो गया, आप उस सामान का 2 घंटे तक वेट ही करते जा रहे हैं. तो दैट इज़ द लास्ट माइल, जो एकदम लास्ट चेन में आता है. तो हम लोग को ऐसा लगा कि विथ आवर ऑटोनोमस व्हीकल टेक्नोलॉजी हम ऐसा कुछ डेवलप कर सकते हैं. सो वी डेवलप्ड समथिंग फ्रॉम द स्क्रैच विच कैन हेल्प द सोसाइटी फॉर द बेटरमेंट. So this was the main idea, and of course the wealth which we generate in the journey. But डर नहीं लगा, अच्छी stable job, and you were married. I mean, he has a kid who is about 6 years old, 5-6 years old now, and शादीशुदा आदमी हो तो घबराहट होती है यार कि नहीं चला तो. वो plunge कैसे लिया, वो leap of faith लेने की हिम्मत कैसे आई? So basically that particular decision comes with the clear of the thoughts. आपको अपने thoughts को clear रखना होगा कि मैं ये करना चाहता हूँ और ये प्रॉब्लम, मतलब यू हैव टू हैव अ एम्पैथी विद द प्रॉब्लम. आपको जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो ना, उसको आपको लेफ्ट एंड राइट अच्छे से समझना होगा, ताकि आपके अंदर से एक जो वाइब्स आनी चाहिए कि नहीं ये ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूँ. एक कन्विक्शन फैक्टर रहता है कि हाँ यार ये चीज़ वर्क करेगी बेसिकली. एंड उसके बाद द सेकेंड थिंग विच कम्स दैट यू हैव टू प्लान थिंग्स. प्लान ए, आई मीन प्लान फॉर द वेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. लाइक अपनी फैमिली से और अपने खुद के ही बैरियर्स के साथ हमें ये प्लान करना होगा कि हम कैसे, मतलब इफ आई एम गोइंग टू दिस पाथ, बेस्ट दिस कैन हैपन, वर्स्ट दिस कैन हैपन, एंड आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग. देन ओनली यू कैन टेक द डिसीजंस मोर इंडिपेंडेंटली बिकॉज आई एम प्रिपेयर फॉर एनीथिंग. Great. But So just one thing, that always whenever you feel demotivated, just feel that what happens if you get succeeded. Right.
सक्सेसफुल हो गए तो क्या हो सकता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया थॉट्स. एंड आई थिंक ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए आता है क्योंकि कई बार हम लोग इसलिए रुक जाते हैं, फेलियर अगर हो गया तो वो हो सकता है. एंड इट्स, आई थिंक it's okay to fail, but if you don't try, you surely fail out. Prasoon, you again started off in your college, and उस समय 2009 में startup as such term probably entrepreneur as a thought, हमको business पता रहता था. entrepreneur बोलना, उसकी spelling लिखना भी एक अपने आप में बड़ा सा चीज हो जाया करती थी. Why did you start? I mean, IIT में थे यार, जॉब लगनी थी अच्छी, प्लेसमेंट्स होने थे, क्यों? एक्चुअली करण, हम लोग जब आईआईटी में गए थे तब एक ही था कि कोई अच्छी जॉब लग जाएगी, निकलेंगे तो ठीक ठाक पैसे कमा लेंगे एंड देन आई थिंक वी विल बी हैप्पी. बट आई थिंक एक तो अपने कैंपस का जो माहौल था उसमें जिस तरह के लोग थे, मतलब तुम जैसे लोग, आशीष, आप सबके साथ मिलके आपको हमेशा ये तो लगता ही था कि कुछ बड़ा करना है, बिकॉज एवरीबडी वॉज अ जीनियस देयर इन सम वे और द अदर. एंड मेरे जैसे लोग भी थे जो शायद आईआईटी में आ तो गए थे, मतलब आई एम अ सिविल इंजीनियर बाय डिग्री, बट हमारी जब फैक्ट्री बनी अभी, वी हैड सेट अप अ ब्यूटीफुल लार्ज फैक्ट्री, बट जब मुझे पूछा गया कि भैया इस बिल्डिंग के डिज़ाइन में ये कंट्रीब्यूट कर दो, तो मैंने कहा मैं कंट्रीब्यूट करूंगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी. तो मेरे जैसे लोग भी थे जो शायद टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार करते थे, बट बिकॉज मेरे को हमेशा से एस्ट्रोनॉट बनना था, एरोनॉटिकल साइंस में इंटरेस्ट था, बट रैंक के हिसाब से आपको ब्रांच मिलती है, तो कभी ब्रांच में उतना इंटरेस्ट नहीं था. ठीक ठाक जीपीए से मैं पास हुआ, लेकिन जब मैं 3rd 4th ईयर में आया तो ये जो डिसओरिएंटेशन था ना कि मैं जो करना चाहता हूँ और जो मैं पढ़ाई कर रहा था उसके बीच में एक थोड़ा सा गैप था. एंड यही चीज़ मैंने जब लोगों से डिस्कस करी, और एक प्रोफेसर आए थे IIM अहमदाबाद के, प्रोफेसर सुनील हांडा नाम था उनका, उन्होंने हमारे यहाँ पर इसी तरह का एक छोटा फॉर्मेट में एक वर्कशॉप कराया, लेबोरेटरी फॉर एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन. और वो मेरे लिए एकदम ट्रांसफॉर्मिंग था, क्योंकि हम लोग जब उस वर्कशॉप में बैठे, उस वर्कशॉप के अंदर उन्होंने, मुझे नहीं पता कि जो आतंकवादी और टेररिस्ट होते हैं जिनको जिहादी कहते हैं उनको कैसे ट्रेन किया जाता है, बट उन्होंने हमें वो 2 दिन जो ट्रेनिंग दी वो शायद जिहाद जैसी ट्रेनिंग थी. उन्होंने हमें ये बोला कि भाई इस रूम से बाहर निकल के अगर तुमने एंटरप्रेन्योरशिप का शस्त्र नहीं उठाया, और तब तो एंटरप्रेन्योरशिप पता ही नहीं थी मतलब, बट उन्होंने ऐसी 10 15 20 स्टोरी सुना दी हमें लगा यही करना है लाइफ में. अभी तक मैं डिसओरिएंटेड था, अब मुझे अपना दिशा दिख गई है, मतलब यही भगवान दिख गया मुझे, तो मतलब यही करना है अब तो जब वहाँ से बाहर निकले तो मतलब कुछ 50-60 लोग थे उस वर्कशॉप में. मेरे ख्याल से 90% लोग फिर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, बट बाहर निकलने के 1 हफ्ते बाद वो शायद 50 में से 2-4 लोग रह गए. एंड अनफॉर्चुनेटली उसमें एक मैं भी था. तो आई थिंक किस्सा वहाँ से चालू हुआ, बट ओवर द लास्ट मेनी ईयर्स आई हैव रियलाइज्ड दैट इट वाज प्रोबब्ली द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, बिकॉज मैंने कभी इमेजिन नहीं किया कि मैं अब किसी और के लिए काम कर सकता हूँ. दूसरा, आई थिंक हर एक काम होता है, मतलब मेरे को नहीं लगता कि कोई अगर जॉब कर रहा है तो उसमें कुछ गलत है, बट आई थिंक जो बिजनेसमैन होता है ना, उसके साथ सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि आपको ये नहीं पता होता कि अगले दिन या अगले 1 घंटे में आपके साथ क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा. मतलब अनसर्टेनिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, और आई थिंक वो अनसर्टेनिटीज की जब आदत पड़ जाती है ना तो आपकी ज़िंदगी वैसी हो जाती है. मतलब आपके घर में भी, मतलब आपकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप वैसी हो जाती है. मतलब आप घर जाओगे, शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि आज तो बड़े दुखी आओगे, बट यू विल बी द हैप्पीएस्ट मैन. द नेक्स्ट डे शी थिंक्स दैट यू विल बी लाइक वेरी हैप्पी एंड यू आर नॉट सो हैप्पी दैट डे. बट आई थिंक द फैमिली ऑल्सो रियलाइजेज दैट. और आजकल मैं देखता हूँ पिछले 10-15 साल में, 20 साल में हमारे देश में काफ़ी इनोवेशन हुआ है. मतलब मैं तो 2009 की बात कर रहा हूँ जब फ्लिपकार्ट आई थिंक बड़े अर्ली स्टेज में था, और तब एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर चालू हुआ था देश में. और आई थिंक अब ये बढ़ेगा. मतलब आई थिंक द लास्ट 10-15 ईयर्स, 2009 से 2023 तक चीज़ें इंप्रूव ही हुई हैं. और आई थिंक इस तरह के जब सेशंस में हम लोग बैठते हैं, यही समझ में आता है कि ऑटोनोमस लॉजिस्टिक्स से लेकर मतलब लीगल फील्ड के अंदर भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है. तो आई थिंक द फ्यूचर शुड बी फॉर इंडिया, फॉर भारत. या सो मोहंती साहब, आप तो लॉयर थे, आप ट्राई लीगल में भी काम कर रहे थे. अगेन यू जम्प्ड इनटू समथिंग. तो कोविड आया था, कोविड में चीजें रुक गई थी, लगभग कंफ्यूजन्स थे लोगों के जीवन में, सभी थे, हम भी थे, आप भी थे, मोहंती साहब भी रहे होंगे. तो आदित्य, व्हाट वाज दैट फ्लिप? बिकॉज सी ब्रॉडकास्टिंग, सो हिज आइडिया इज वेरी यूनिक. स्पोर्ट्स हो रहे हैं, अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स हो रहे हैं, छोटे बड़े इधर उधर के,
उनको आइडेंटिफाई किया नहीं जा रहा क्योंकि उनकी प्रेजेंस नहीं है. अब डिजिटल मीडियम आया तो ही थॉट व्हाई नॉट प्रेजेंट देम डिजिटली इन अ वेरी वेरी रिफाइंड प्रोफेशनल वे. थॉट बहुत उम्दा है, बट व्हाट वाज द रीजन दैट प्रॉम्प्टेड यू कि यार इस दिशा में मैं बढ़ सकता हूँ? वर यू अ स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स से लगाव था, कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ, क्या चीज़ हुई कि जर्नी की शुरुआत करी, वो भी कोविड में? करण, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल. यार फेलियर सबसे ज़्यादा आपको पुश करता है टू स्टार्ट समथिंग विच इज़ डिफरेंट. सो मेरा हमेशा से इच्छा था टू बी इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स, एंड बिकॉज आई वॉज इन द लीगल फील्ड कभी स्पोर्ट्स से मैं जुड़ नहीं पाया. ऑलवेज एट द बैक ऑफ माई हेड वो चीज़ था कि मेरे को कुछ भी करके वापस इस चीज़ में आना है. While I was working in a corporate law firm for 6 years, I used to work like 14 to 16 hours a day. So थोड़ा सा कोविड के टाइम में, because it gave me a lot of time to reflect, थोड़ा सा ये फीलिंग आया कि अगर मैं 16 घंटे किसी और के लिए काम कर रहा हूँ, might as well put that amount of hours for something that I'm passionate about. The logic behind starting something in the sports field was कि 1-2 साल में अगर सक्सेसफुल हुआ, फेलियर हुआ, चलिए 5 साल भी अगर आपने ट्राई किया कोई चीज़, let me be satisfied about trying to do something on my own. Success and failure could be part of the journey, but अगर I'm 45, 50 and I look back and I think कि यार मैंने effort भी नहीं मारा, like I didn't try also, so I didn't want to live with that regret. बट So, ऐसा नहीं लगा कि यार अगर 45 तक नहीं हुआ, क्योंकि 45 या 40 इज अ फेयर एज वेयर, बिकॉज यू विल सी अ लॉट ऑफ योर फ्रेंड्स प्रोग्रेसिंग, डूइंग स्टफ, फिर पैकेजेस बढ़ रहे हैं, तो एक पीयर टू पीयर कंपैरिजन आता है, तो वो थॉट नहीं आता मन में कि यार अगर नहीं हुआ तो? very honestly, वो thought आता था when I was in my early 20s, but I sort of started understanding that money at the end of the day, वो अगर आना है वो आ जाएगा अगर आप कोई चीज़ अच्छे से करोगे. That wasn't a driving factor for me. The driving factor was doing something that I really care about. जैसे प्रसून जी ने बोला, there are days, there are uncertainties, there are times जब आपको लगता है कि mostly every day कभी कभी लगता है कि will this work out the way I want it to work out. But the happiness and the joy of, let's say, going to a state like Nagaland and covering a tournament for the first time वहाँ पे is something that can't be compared. So if I'm putting in the hours, I might as well put in for something that I really care about. Honestly, जैसे तनखा सर ने कहा था, एक environment create करने में जो होना चाहिए जैसे एथलीट्स के लिए, that was our agenda behind starting this thing. We wanted like a environment for athletes to showcase their talents. ऐसा कभी कोई नहीं बोले कि यार हमने अच्छा खेला कोई देख नहीं पाया तो इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. So that was the ethos with which we had started this. So it was a very weird journey, law field से broadcasting में जाना. But there was a massive market gap that we could potentially But see. any early. example that you saw? Because see, Indian context में मैंने ऐसा नहीं देखा कि इस तरह की कोई चीज़ हुई है. Any particular thing that prompted you? मेरा जो co-founder है, he's a national level swimmer. He's I shouldn't be saying this publicly. I'm not trying to fat shame him. He's slightly overweight. So when people look at him, they say कि आप national level swimmer कैसे हो सकते हो? The funny thing is, the potential that the individual had at that age, agar if it was highlighted or if it was showcased at that point, maybe wo swimming ko seriously leta. Maybe he wouldn't have become a lawyer himself. He's also a lawyer. So it just, the idea was just giving that opportunity to people from the grassroots level, from the very basic level. So that was the agenda behind all of this. Great. So you mentioned about your co-founder, and I think it's a very important thing that we need to have a right set of team to proceed and move ahead in things. Any one of you who would like to share some thoughts on how to build up the initial team? Because अकेले शुरू करने से अच्छे बहुत ज़्यादा रहता है, अगर आपके साथ और लोग हों तो work pressure सब distribute होता है. Any particular thought on those fronts that you would want to share with us? तो इसमें करण, मैंने तो जो फर्स्ट टाइम को-फाउंडर्स बनाए थे टीम में, वो मेरे कॉलेज के बैचमेट्स थे. और एक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि जो दोस्ती जैसे होता है ना, कई बार लोग कहते हैं इस दोस्ती को रिश्तेदारी में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो हमारे केस में भी यही हुआ. हमने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में कन्वर्ट कर दिया. बिकॉज स्टार्टअप क्या है, एक तरह से आप एक दूसरे से मैरिड हो जाते हो. बट इवेंचुअली मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि टीम चेंज होती है. जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तो उसके दोस्त बदलते हैं, उसके अभिभावक बदलते हैं. तो एक स्टार्टअप भी जैसे जैसे चेंज होती है ना, उसका नेचर चेंज होता है, तो टीम भी चेंज होती है. मतलब मेरे जो को-फाउंडर्स थे वो बदले, आज जिस टीम के साथ मैं काम करता हूँ वो एकदम ही डिफरेंट टाइप की टीम है.
और कहीं ना कहीं जो एक बंदा होता है जिसके विजन से स्टार्टअप चालू होती है ना, उस बंदे के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो स्टार्टअप के फाउंडर्स या टीम्स को कैसे इवॉल्व करे। तो इसलिए ये सोचना कि मैं अकेला हूँ, टीम नहीं बनेगी, ये भी ठीक नहीं है। और ये सोचना कि टीम है तो ही मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, वो भी ठीक नहीं है। You can start off alone. If you get a good team, nothing like it. Any thoughts, Ashish, that you have? Because you have a team of four co-founders, correct? Yeah. So basically, I think that initially at a founder level, जब आप बहुत ही initially idea generate कर रहे हैं, you are at the ideation level. उस time पर the co-founder should have the trust. जो भी हो, they should have the trust and they should have empathy to each other. क्योंकि they are going to go on a journey जिसमें अच्छा टाइम, बुरा टाइम और सारा टाइम आने वाला है। तो it is very important for them that they trust each other and they have the confidence to each other. And after founding team, यदि हम initial team की बात करें तो इसमें generally one mistake, I won't say mistake, but generally एक perception होता है कि हमें अपना कंपनी का culture same रखना है तो we will have the same like-minded people. But I'll say we should not do that. Always open to have someone which is not as like-minded as you, because it is always important to have the different point of views. I mean, different perception होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी, I mean, just we are talking about the technology, then a lot of platforms also comes, जो भी हम लोग भी एक platform use करते हैं, and we are very happy that we are using that, जिसमें actually they gives a certain questions, the person will fill the question and it will tell that what kind of personality you are having. Like either you are disruptor or you are influencer or you are doer or you are executor. So we always ensure कि हमारा जो circle है उसमें हर quarter में हम लोग बंदे रखें, so that it makes the team complete. Any thoughts, Aditya, you have? I was very fortunate that I knew my co-founder for around 75% of my life. So that जो सर कह रहे थे trust factor होना चाहिए, that comfort level होना चाहिए. Apart from that, there's this emotional connection also where you understand what the other person's sort of going through and working accordingly. I've been very fortunate, but I've also seen my friends working with fairly new people and I've seen that disconnect kabhi kabhi wo cheez aata hai. So I agree with all the other panelists also when they say that there has to be a certain level of trust, confidence and also knowing the individual, because at least starting stage mein the journey is a massive up and down. So you need to have that person who stabilizes you. So that's important. Great. So we have more sessions coming up, and हम लोग का समय, as I see, it's already 11 plus, and the idea was to introduce you guys to some of the good founders, startups team. They have raised fundings, they have worked for years. अगर आप लोग को इसके बाद कुछ भी ज्ञान या किसी भी तरह की चर्चा initiate करनी है, they will be here for a couple of more hours. You can surely come along, have a word with them, funding, the journey, the ups, the downs, coping up with failure, stress, anxiety, a lot of things that you have in your mind. You're more than welcome to come along. यहाँ आस-पास में हम जाकर के बैठ सकते हैं and we can carry on the discussion. But yes, the idea is you should start. If you have something in mind, रुकना नहीं है. Idea को live लाओ, आगे बढ़ाओ and carry on with your journeys. So yes, thank you so much for being here. Thank you all the panelists. Thank you everyone. Thank you. Thank you very much. Am I audible? Yes. I was like, thank you Karan, spoken like a true entrepreneur. ऐसे ही inspiration दी जाती है हम जैसे लोग जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं by veterans who have been there, done that. On this note, I would request you to stay with us. I would like to invite on stage Shri Vivek Tankhaji to kindly honor all of our speakers with a little memento. Vivek sir, we need your presence on this stage. Can we have the mementos on the stage, please? The magic is to be the IIT. All of you are IITians, not him. On behalf of the Udaan Conclave, I would request Vivek sir to please present a memento and a medal to Shri Prasoon Gupta ji. To Ashish Gupta ji.
to Aditya Mohanty ji, and of course to our dynamic moderator, Karan Kukreja. After this, can also all the panelists join us together for a picture of the entire panel with Sri Vivek Tankha ji? Thank you so much. And to take the proceedings forward, Anuj, you're requested to be back here. थैंक यू सो मच सौम्या सभी की तालियां चाहूंगा जोरदार वास्तव में शुरुआत बहुत खास हुई है और आज इन सभी रंगों से उड़ान बहुत ऊंची होने वाली है अब तैयारी हमारे बीच अगले सेशन की ओर चलने की है एम्पावरिंग मिलेनियल्स द DIY revolution in financial literacy entire entrepreneurship landscape is transforming rapidly और आज के वक्त में हम इंतजार नहीं करते तभी तो DIY यानी कि खुद हम कैसे इस फाइनेंशियल लिटरेसी की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं To start with the panel, let me introduce and welcome all the panelists along with our moderator. To welcome on stage, we'll be having Mr. Nakul Kelkar, the entrepreneur, Mr. Vishal Shivhare from Vyapar Shastra, Abhishek Kar, investor startup trading YouTuber, and also Mr. Shiv Sharma, who will be joining us online, along with our moderator, सौम्या कुलश्रेष्ठ आप सभी की तालियां चाहूंगा जोरदार और अनुरोध करूंगा हमारे पैनलिस्ट से कि आप में ज्वाइन करें एंड नाउ let me welcome all of them together. And as we all know, we have the next panel ready with us. And let me, first of all, introduce you to our first panelist. Can I request all the panelists to please quickly join us on stage? Lovely, we have everyone. Absolutely. So let me introduce, firstly, our panelist, Mr. Nakul Kelkar, who has been a graduate from IIM Ahmedabad and the founder in the fintech and blockchain space. He has been the co-founder for Walrus, a bank for teenagers in India. So a very warm welcome on stage with us. Sabhi ki taliyan chahunga zordar for Mr. Nakul Kelkar. Next we have with us Mr. Abhishek Kar, inspirational speaker, investor, stock trader, and best-selling author. Abhishek Kar is a dynamic figure who has impacted the lives of over 15,000 students through his training initiatives. He firmly believes in a mantra that merely existing is not living, and his life work is a testament to this belief. Abhishek is also the author of the best-selling book, Stocks and Life, which quickly became an Amazon hot seller, selling 10,800 copies within 12 hours of its launch. With 1 million followers, including impressive 7 million on YouTube, making him one of the most followed writers worldwide on financial and stock market topics. Let me welcome on stage, we have Mr. Abhishek Kar. Sabhi ki taliyan chahenge zordar. Next we have with us Mr. Vishal Shivhare, author of Vyapar Shastra, an entrepreneurship advocate. Vishal Shivhare is the author of Vyapar Shastra, a book that delves into Indian business practices. Beyond his role as an author, he is on a mission of foster entrepreneurship in India with the goal of creating 1 million entrepreneurs or Vyaparis. His work as an entrepreneurship advocate aims to empower individuals and contribute to India's vibrant business landscape. Let me welcome on stage Mr. Vishal Shivhare. And also we have with us online joining Mr. Shiv Sharma, who serves as the Vice President International at Stock Twist, where he brings his wealth of experience in the financial and investment sector. Prior to this role, he held a distinguished position at Cisco Investments. Shiv is an alumnus of INSEAD, one of the world's leading business school. With his extensive background and expertise, he plays a significant role in shaping and influencing international financial market. Let me welcome online Mr. Shiv Sharma. Sabhi ki taliyan chahenge zordar. And guys, let me introduce to the one of those vivacious personality moderating this session. We have Soumya Kulshreshtha. Soumya is a writer, poet, educator, public speaker, communication specialist, and wherever she goes, she creates an impact. Welcoming her on stage, she has been organizing various workshop courses and performances organized over the past many years. She has
already been writing various poetries as in form at everyone and can understand and relate with. She engages with public in Sanskrit, Urdu, Hindi and English poetries and craft narratives as well. Welcoming her on stage, she has been a passionate educator and a teaching poetry, mythology, literacy and marketing communication. She's the best person to go ahead on stage for this panel. Absolutely. Poet को बिठा देंगे financial panel पे तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है. But maybe the conversation will go somewhere interesting. And I think it's absolutely wonderful that a financially illiterate person is sitting on this stage to enable a conversation around financial literacy. But before I go to our esteemed panelists, as a young person, still young, yes, and as a woman, we have been extremely uncomfortable with money. We've not managed our own money. We've not understood. We don't have a good relationship with money. In India, we don't talk about money. Salary कितनी है, savings कहाँ पे जाती हैं, earn कितना करते हो, खरीदते क्या हो, पैसा क्या मायने रखता है life में. These are not conversations we have very openly or very flamboyantly. And I think ये जो under the carpet, ये हम इसको brush करते रहते हैं, यहाँ से पनपती है a lot of financial illiteracy, which as I grow up and as I do jobs, as I try to build my own ventures, it is absolutely crippling. I mean, I want to have ideas and I want to do good work, but I do not understand how to monetize it. I do not understand how to master the money quotient of everything that I'm doing. And with this, I set the premise of today's conversation. We are definitely in the world of DIYs, जहाँ पर हम सब कुछ खुद कर सकते हैं. छोटी से छोटी चीज़ से लेकर sensitive से sensitive चीज़ तक. And I think I would like the context of this conversation to be set by Nakul. Now, Nakul's introduction, all of you have heard, but very interestingly, he has been working relentlessly in the area of financial literacy, especially by creating very hands-on models, wherein teenagers can have bank cards and they can deal with money and they can manage their own money. So, Nakul, I would actually like you to probably take my conversation forward about why is there this lack when it comes to financial literacy and set a basis for the importance of it as early in life as possible. Right. Thank you for inviting me. I mean, the lack of financial literacy, first of all, it's not just an Indian problem, right? Like, it's across the globe. There is almost no country where it's like a standard curriculum where, you know, it's taught as to like how to save taxes, how to invest, how to manage your life. Maybe there are some cultures which are more open about talking about money. I mean, India में क्या है कि money is the root of all evil. और फिर बच्चे को अगर आप पैसे के बारे में बताओगे तो आप वो it becomes a little perverse. फिर वो ऐसा हो जाता है कि वो उसके पास में कितना, मेरे पास कितना. I think money minded किसी को बोल देना is almost like a cuss word. कि तुम कितने money minded हो. Exactly. So like 1980s की Bollywood movie में जो एक villain होगा वो एक अमीर आदमी होगा जो गरीब को कुचल रहा होगा. And काफी सालों से जैसे तनखा जी ने बोला हम grow किए लेकिन उतना नहीं किए. So जो भी अमीर बना वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इधर उधर किसी और से लेकर बनाए. And इसलिए वो एक culture में एक हमारे है कि अगर आप अमीर हो तो most likely कुछ तो गलत किया होगा आपने. And इस चक्कर में हम पैसे के बारे में बात नहीं करते हैं और जब तक I think आदमी 30 का हो जाता है काफ़ी सारी उसकी सैलरी जा चुकी होती है. एंड जो अर्ली ईयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग है जहाँ पर एक्चुअली आपको सारा रिटर्न आएगा बाय द टाइम यू रिटायर, वो टाइम भी जा चुका होता है. एंड इसमें भी आई थिंक देर आर लेट्स से व्हेन यू टॉक अबाउट अवेयरनेस देर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट, राइट. वन इज जस्ट द लिटरेचर पार्ट ऑफ इट, जस्ट नोइंग व्हाट टू बी डन, एंड देन देर इज अ प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट जहाँ पर एक्चुअली में इन्वेस्ट करना है. सो जस्ट गिविंग माई एग्जाम्पल, आई एम ग्रेट एट द लिटरेचर पार्ट, राइट. आई कैन डू ऑल द कैलकुलेशंस यू टेल मी, पर मुझसे जीरो था ग्रो खुलता नहीं है. मेरे से Amazon आपसे भी नहीं होता. So again, like मुझसे पूरे लाइफ में नहीं होगा. It's a thing about practice, right? So in my family, my wife does the investments, right? मैं सिर्फ Amazon खोलता हूँ. मेरी wife खोलती है Zero Dha Grow and like she does all the money handling, right? Because she's more responsible, she knows how to take care of money. I am more, a little chillax about it. So again, like these are some societal elements, in general, that conversation has been changing about it. And I think a lot of people are doing a great job in like just talking about money and like bringing that conversation out, right? And not treating that as a taboo topic. Like it's okay to talk about money. It's okay to manage money. It's okay to teach kids on how to manage money as to like live a more,
prosperous and a very fulfilling life. Absolutely. Right. Absolutely. Thank you for starting this off for us. And you mentioned this word taboo. So I am very, very... I have to take the conversation to Abhishek now. ये taboo से YouTube तक का जो सफर है, which you have undertaken. Number one, I want to understand that journey. And I also want to understand, see, I personally don't associate social media with a lot of seriousness. Social media is fun and entertainment and sharing quirky moments in life. But is it really a place I can go for sound financial advice? Great questions. सबसे पहले सभी को नमस्कार and thank you so much for inviting me. So to answer your question, it started with something which he himself mentioned. देखिए हमारे देश में क्या होता है? I'll just mix Hindi and English. Please don't judge me. I can speak in English as well. But हमें गर्व होना चाहिए जब हम थोड़ी हिंदी भी बात कर लें. So that's why I'll try to keep it in both Hindi and English. So the first thing is एक stigma चलता रहता है, जैसे कि you guys already discussed. What happens is in common societies there is a stigma not to talk about finances, as he rightly mentioned. Even in Indian affluent families, we have seen, at least in most of the families, we have seen that they also think कि यार ये सारी चीज़ें इस उम्र में उनसे बात नहीं करनी चाहिए. Because for two reasons. First of all, if our kids get to know कि हम इतने wealthy हैं, उनका दिमाग खराब हो सकता है, which is also right. That's why आप देखेंगे काफ़ी सारे rich families, जैसे वो एक famous कहानी चलती है कि काफ़ी सारे वॉरेन बफेट सर की अगर मैं बात करूँ तो उनकी बेटी ने एक बार बोला था मेरे घर में फर्नीचर का काम चल रहा है, मुझे आप पैसे देंगे क्या? तो बोले हाँ मैं दे दूंगा, कितना चाहिए? तो बोले $30 million. तो बोले लोन ले लो, इंटरेस्ट रेट 6%. So this is how they were trying to train their family as well. कि बाहर जाओगे तो rate of interest ज़्यादा है, मुझसे कम है, but that is exactly. So affluent families के साथ भी ये हुआ, and गरीब जो थोड़े से मतलब middle class family बोल सकते हैं या lower class families हो गई, तो वहाँ पर because they don't want their kids to know about the economic vulnerabilities, and इसलिए शायद वो डिस्कस नहीं करते. Now going ahead, ये वाली चीज़ मैं भी देख रहा था, आसपास ये सारी चीज़ें काफ़ी हो रही थी. And because I used to get invited by a lot of colleges to impart education, including I've given sessions in 6 IITs, some IIMs, as well as SRCC, Hansraj, बहुत सारे. तो वहाँ पर एक चीज़ होती थी सेशन के बाद, the kids themselves used to come कि सर आप YouTube पे क्यों नहीं आ जाते हो? And I was like कि YouTube पे क्या है? Because एक physical का एक अलग मज़ा रहता है. You get to connect with people, you get to speak with people, एक अलग माहौल रहता है. But then I thought कि why not? Let's try. The first video, which is right now private, was why pre-wedding photo shoots are a waste of money. That was my first thing. और इस प्रकार से वो जर्नी शुरू हुई, जिसके बाद मुझे बेहद प्यार मिला, काफ़ी ज़्यादा वहाँ से फॉलोइंग बढ़ी. Then across the platforms, currently I've got more than 1.8 million across the various social media platforms. काफ़ी अच्छी reach and all those things मिली. तो कहीं ना कहीं यहाँ से मेरी YouTube की शुरुआत हुई. Now coming to your second question, मेरा ये कहना है कि प्लेटफॉर्म पे we don't have any control, but what we consume, we have our control. मतलब देखिए प्लेटफॉर्म्स आज बहुत सारे हैं, क्रिएटर्स बहुत सारे हैं. मैं एक जैसे रेड फ्लैग्स जिसको कह सकता हूँ, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडेज टाइम, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस. फर्स्ट रेड फ्लैग, इफ समवन इज शोइंग और फ्लॉन्टिंग अ लॉट ऑफ वेल्थ. मेरा ये मानना है जिसके पास बहुत होता है वो दिखाएगा नहीं. और सबसे मजे की बात है, लोग वेल्थ दिखाने के बाद चॉपर से उतर रहे, हेलीकॉप्टर से उतर रहे, और उसके बाद गाइस 500 रुपये का मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो. आई मीन no offense to anyone, but this is the harsh reality. That is number one. Second red flag which becomes is quick money. Specifically because I also cater to a domain called trading, which actually picked up in our country after 2020, क्योंकि एक सीरीज आई स्कैम 1992, उसमें हर्षद मेहता जी के बारे में बात करी, और जिस बंदे के पास जेब में 500 रुपये भी थे वो बोला मैं अगला हर्षद मेहता बनूंगा आफ्टर लुकिंग इनटू द सीरीज. नाउ प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक सीरीज देख के, एक दो वीडियोस देख के आप रातों रात अमीर बन सकते हैं. बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु पुश दिस ड्रीम्स कि आप इंटरनेट पे आइए और आप 21 दिन में पैसा डबल, जस्ट लाइक श्री अक्षय कुमार सर सेड. तो वो वाली चीज़ होती है, विच इज़ रॉन्ग. अनदर रेड फ्लैग. एंड तीसरा रेड फ्लैग ये रहेगा कि समटाइम्स आपको शांति से सोचना है, अगर पैसा कमाना इतना आसान होता, सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा कल डालो और परसों पैसा निकल गया, तो यहाँ पर बैठे जितने व्यक्ति ने वो कोई और काम नहीं करते, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही दिन रात बैठे रहते. सुबह आपने दुकान खोली, शाम तक बंद हो गई, यही करते हैं. राइट. सो दीज आर फ्यू रेड फ्लैग्स जिसको आपको ध्यान रखना है. यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस. देयर इज नो शॉर्टकट टू मनी, देयर इज नो इजी मनी, बट येस, इफ यू गिव
good efforts. If you learn from legit examples like Warren Buffett sir हो गए या फिर Charlie Munger हो गए, there are plenty of example in our country. Vijay Kedia sir हो गए, Motilal Oswal के जो chairman हैं, Ramdev Agrawal sir हो गए. If you learn from these people, what do they have common? One, extensive reading. They are voracious readers. तो पहली हो गई reading हो गई है. दूसरी उनके बीच में क्या है? They learn through hit and trial. They don't depend on others. And तीसरा एक stock market में कहावत होती है. Again, not to offend anyone, but टिप आपको सिर्फ वेटर को देनी चाहिए. आप किसी और को पे करके अगर टिप ले रहे हो फॉर स्टॉक, दैट इज नॉट राइट. अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच. आई एम श्योर आपने किसी को ऑफेंड नहीं किया. I think I'll pick from here and actually go to Shiv. I think it's relevant, Shiv, that you enter the conversation right now. Now, Shiv has been working with the world's largest social media platform for investors, and he works with content creators all the time. Shiv, I would pass on this particular thought to you as well. Is social media now where we actually have to go to get all of our financial literacy? What's happening to the other systems of traditional education? Where do we go? What do we do to be richer and wealthier and more sustainable in life? So first off, thank you for having me here. Super excited. I think this is a great event. Great question. This is my favorite question, I think, I guess, on this topic that you've asked me. So I think investing is hard. Okay. Why is investing hard? In order to be a good investor, you have to know four key pillars. Right. One is to understand macroeconomics. Macroeconomics is, GDP trends, employment trends, economy, basically. Two, you have to understand fundamental analysis. So you have to understand the basics of business, industry trends, a competitive landscape, competition, the P&L, income statement. Then you have to understand charts and technical analysis to know, okay, this stock is a good buy, but if the market thinks I'm wrong, then what should I do, right? I guess when should you buy this stock that you want to buy? And then four, you have to be experienced and you have to have the right psychology. Everyone is an investor until they see their portfolio is all red and down lakhs. Then it's very common they panic sell, right? So these four pillars is not easy to learn. They're four unique disciplines and very different subjects that schools, even investment firms, for example, don't teach you. For example, if you go speak to a famous investor, okay, he likely does not have knowledge on all four of these areas. He's likely a great IT analyst, or he's a macroeconomic expert, right? So that's why social media has now come in, because where else do you go? The school system is not meant to solve this. India, US, anywhere. It's going to take years for that to be solved, right? So you have YouTube, you have Twitter, you have Instagram, you have places like StockTwits also, right? So that's the issue. And then I think secondly, investing is an apprenticeship game. You learn by doing. You learn by opening a Zerodha or Grow account, and you learn by putting in $500, $1,000, seeing the emotion of seeing a financial crisis happening in one country that's impacting your portfolio. You'll then, by the way, go to the mall and start watching to see which stores are full, what brands are my friends buying, what cars are my friends buying. You'll still start caring about these things over time. So it's a long journey. And I think the key to this is to find the right mentors who can guide your apprenticeship. You may have one good mentor for macroeconomics. You may have one good mentor for IT sector. You may have one good mentor for technical analysis. So how do you put that all together and have your own strategy? Because basically everyone is a portfolio manager of their own life, and no one can do this job for you. And so it's a journey. It takes years and years, but in this DIY world, there's ways to, start small and start with less risk. But over time, I think people will become more experienced. I think YouTube is huge for this. So I think that's the trend we're seeing here. And that's why social media is huge for this sector. Thank you. Thank you for that holistic insight. Lovely to hear to you. Okay, amongst the students seated here, how many of you want to be really rich? Really rich? Okay, on that note, I have to come to Mr. Shivhare. You've written a book called Vyapar Shastra, right?
And I believe you are one person who can actually talk to us about how to establish this really good relationship with money, how to manage and master money, and how to basically, I know we're talking about financial literacy, but I'm not sure if we've understood a baseline of what financial literacy essentially entails. What money is, how the nature of money has evolved ever since the digital world sort of came into our... I was having a conversation with Sir last night, where he said in the pre-digital era, you were at max having, say, 2-3 transactions on an average per day. You have endless, countless transactions going on today. How does that impact our own money health, and how does it impact the future wealth? So I know I said a lot of things, but did you get the question, sir? Perfect, over to you. Thanks, Soumya, for inviting me. See, the topic financial literacy for Indian is not the right topic to discuss. The right topic to discuss is the financial literature. What I mean by financial literature, if you go back to Indian history, we used to be called as a Sone ki Chidiya, our nation as a whole. So, and this was a thing which was given to us as a upadhi types. It was not a post which somebody has given, but we have earned it by doing something. So what does it mean by Sone ki Chidiya? We had wealth. And if you look at the historical accounts, you realize that a lot of invaders had come and they've invaded our wealth and looted us countlessly. What does it mean also when somebody loots you or a country? They takes away everything. But after 50 years, 60 years, 100 years down the line, you see another invader is coming. So what does it mean? It means we are, again has created wealth. So that is inherent in our DNA to create wealth. Even if you look at the recent example, after 1990, after the liberalization in now 2023, in 35 years, from third world country to third in the world. So we have already done it. So Indians don't need financial literacy. They need financial literature. Even it is true for the millennials as well. This is how I understand for that. Wonderful. And so just a little brief, Papa, what is your book Vyapar Shastra about? So it's a book on same as Vyapari and how to create wealth and how Indians have created in the past and they can do it in future as well. And let me give you an example as he was saying, he's right. Money in India is seen as a taboo. And supposedly we live in a contradiction. India is a country of contradictions. One side we want to become third largest economy in the world. But we don't want people to be richer as a businessman. If India needs to be third in the world, then there has to be hundreds of billionaires, thousands of crorpatis, and millions of millionaires. So we need to accept them. We need to have a acceptance for the money and the people who have the money. Right. Point number one. Point number two is, more and more so, the institutional support for richer people should also be there. As one of the panelists was saying, the money, if I have money, you're seeing OTT platforms where this thing, Harshad Mehta or something, you have examples filled with history as in the present, where people have created wealth with positive hard work. Absolutely. So this is what we need to teach the young generation, and this is where they will be heading for. Understood. And with that, by saying that, you've actually brought us back to the topic of our panel, which is empowering millennials, right? So thank you for your inputs. Nakul, I just want to know from you now, what is it that we truly need to do to empower millennials when it comes to financial literacy and their future insofar as businesses, growth and success is concerned? In very short, I want all of your comments now. Sure. So at least I believe that formal education will play a very limited role in this sector. I think mostly it will be people, content creators who will educate. I mean, like all societal change cannot be brought by, changing the CBSE curriculum. Let's be honest about it. I mean, like that has to be done by people on the ground, by doing conversations, employers teaching their employees, parents teaching their kids, teachers teaching their kids. And more importantly, if you are a financially literate person, you go and teach your friend. Like usually what we have seen is like in a group of, let's say 5 or 6 or 10 people, there would be one person who knows how to invest, decently, or at least like knows how to take care of money. Go ask them, how do I do that? Can you teach me, right? Rather than, saying that, hey, take my money and invest it for me. उनसे पूछो कि यार मुझे सिखाओ, मैं करूँगा. So more dialogue.
more engagement. Like, let's at least start talking about money, it'll start there. If we start talking about money, I think half of the problem is solved. Is solved, right? We have like 2 minutes left in this panel. So Abhishek, quickly coming to you, what is the true way to empower millennials and where do you see this divide revolution going, exploding or coming down? It will explode for sure. The way is obviously to educate and increase awareness. Awareness बढ़ानी पड़ेगी. The only thing which every person sitting over here should understand that you need to believe in the growth of India. That's it. अगर आपने faith रखा, belief रखा India पे, and there is simple things. 4 quick points बता रहा हूँ. First is demographic dividends. That is nothing but हमारे पास youth population सबसे ज़्यादा है. Consumption भी वही करते हैं. और एक 80-year-old के chances कम है, but एक 30-year-old के chances ज़्यादा एक Mercedes खरीदने की इच्छा चाह रखने के लिए. तो consumption वहाँ से बढ़नी है, no doubt. The second thing is obviously data. Thanks to Jio, तो instead of watching day and night काचा बादाम, अगर हम interesting, informative videos देखेंगे वो ज़्यादा better रहेगा. That is the second thing. And finally, अगर मैं इस चीज़ पे एक बोलना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा awareness already बढ़ रही है. You have to be just be a little selective, and this is just going to shoot up from here. That's right. Perfect. Shiv, finally coming to you. Social media is what you make it to be, right? And on that note, what are your closing comments about this topic? Just 2 steps. One is to get started. Open the Zero Then Grow account. Put some money in. Feel it. Buy a mutual fund if you're risk averse. It doesn't matter. Just get started. 2 is find good mentors to learn from. It won't take time. This is a journey. This will take you. You'll go through 20, 30, 40 of these people. They're SEBI registered people. They could be content creators who are not registered. But either way, go through this journey and spend the time. And I think in 5, 10 years, you'll be very happy you did. Perfect. And I think on that note, I will close this panel. If nothing, at least some bit of inspiration may have been created amongst all of us. I am still very scared of dealing with my own money. It is my father's, someone's CA, who sort of looks into what is happening with my bank account. And I think that is one of the things I want to stop doing for myself. Thank you so much to all the panelists. It was lovely engaging with you. Can we have a huge round of applause for the kind of insights, information, and absolutely bebak opinions that were shared on this stage today? That brings us to the end. Anuj, over to you. Thank you so much, Soumya, and all the our panelists. I would request you to please be on stage. I would request our Honorable Mr. Kartikeya Sharma, sir, Member of Rajya Sabha, to please join on stage and hand over the special mementos to our distinguished panelists and moderators. मैं सभी की तालियां चाहूंगा जोरदार इस साथ में. First of all, I would request him to please hand over the memento to Mr. Nakul Kilkar. Nakul sir, please join in forward. So Shiv sir, we are missing you here on stage, and I hope that you soon come to Bhopal and to our city. Absolutely. Moving ahead, I would request you to hand over the memento to Mr. Vishal Shivhari ji. दोस्तों आप सभी की तालियां चाहेंगे जोरदार. Also, I would request you, sir, to please hand over the memento to Mr. Abhishek Kar. जी हाँ, put your hands together. आप सभी की तालियां चाहेंगे जोरदार. इसी प्रकार. And finally, to our fantastic moderator, Soumya. Shiv sir, we are handing over your memento to our Honorable Vivek Tankha sir. So please join on stage and receive on behalf of him. जी हाँ, सभी की तालियां जोरदार मिलें और जैसा कि ये साथ बहुत बखूबी आपके साथ होने से हमें मिला है. Thank you so much, Tankha sir, to please and have such amazing personality in our panel. सभी की तालियां जोरदार बननी चाहिए ताकि उन तक भी ये तालियां, ये सम्मान इस मंच पर पहुंचे. So yes, let me tell you guys, Shiv sir is the son-in-law of Honorable Vivek Tankha sir. सभी की तालियां बनती हैं जोरदार. And yes, thank you so much guys. Can we have a group picture together? Please join us.
Thank you so much, everyone. I would request you to please join in front of the stage. So, ladies and gentlemen, it's time to call upon another distinguished personality with us, a person who has been a true inspiration to all of us, and it's high time to call him on stage. Let me invite our very honorable Lieutenant General Ajay Singh Ji, awarded with Param Vishisht Seva Medal, साथ ही साथ Ati Vishisht Seva Medal. He has been a distinguished retired officer of Indian Army, holding significant accolades and distinctions. He notably served as the 16th Commander-in-Chief of the Andaman and Nicobar Command, and yes, always been a personality who has been taking over youth, and his vision has always been towards the future of India. मैं आप सभी की जोरदार तालियां चाहूंगा उस शख्सियत के साथ जिन्हें सुनने के लिए हम सभी यहाँ मौजूद हैं. सर, बहुत बहुत स्वागत इस मंच पर आपका. Thank you. Good morning. Jai Hind. Before I start, can I just ask everyone who's over 60 to please raise your hands? So like someone rightly said, Mr. Tanka rightly said at the beginning, this audience is largely under 30 and definitely under 40 years of age. Those who are under 30, can you raise your hands, please? So I'd request you to please look, most of them are under 30 here. So this fulfills a wonderful need. Thank you. At the outset, I'd like to share a small but true story. When I was a young boy, I read a book. The book was Westerns, in our time Westerns, Southern Louis L'Amour were the flavor of the season. The book was about a few ranchers driving a few hundred cattle from the west coast to the east coast of America. It was a journey which took many months. Every evening, after traveling for the day, they will put the cattle into an enclosure, take the saddlebags of the horses, make a little fire, cook some food, and in the dying embers of the fire, the book talked about one rancher from his saddlebag taking out 40 torn pages of a book. एक किसी किताब के 40 फटे हुए पन्ने printed. And every day, for those months on end, he would read those same 40 pages again and again and again. How many of you can honestly say that you've read a book 5 times? Even 3 times or 2 times. And here was this person reading not even a full book, only 40 torn pages of a book every evening. I remember that example because what it said is that when that person had never seen a printed word, for him, those 40 pages permitted his mind to take flight and have imagination. By reading about what was written there, he could think of something beyond what he was doing every day, moving those cattle. It was a form of an Udaan. So it was the Udaan of his mind. And I would like to say that this happened because of the power of the printing press. 15th century, 1450 something. And today, we all study about it and we call it the Gutenberg Revolution. I will speak about it once again. It became a pivotal moment in human history, the printing press. I would like to, having said that, compliment the organizers, the chief patron, Mr. Tanka, the Gaurav and his team, Mansarovar team, the patrons, Mr. Karthike, Ajay Shekhar, Varun, Maithili Sharan Tiwari ji, the advisory board, the organizing team, many others, the influencers, the media, but most of all of you, especially those under 30, because you've decided that you want to further explore this Udaan, this flight of fancy, where that person only had 40 pages to take his mind somewhere. But you have a world of opportunity and wonderful panelists sharing their experiences on what you can do for yourselves. You have to identify it. My gratitude to the organizers for considering me suitable enough to be amongst you and share a few words. I'm Lieutenant General Ajay. I retired from the Army 4 months ago. After 40 years nearly of service, 4 years of training, so 44 years of uniform.
I think it's a wonderful profession because it makes you see a lot of different things. I'm really grateful to the Army. I'm also grateful that in the last 6 years, I've had opportunity to chair sessions on artificial intelligence, machine learning, deep learning at 2 important Army events and seminars. In the next 5 minutes, and remember 3 words, please. Big data, machine learning, artificial intelligence. Without going from big data to machine learning, you cannot reach artificial intelligence. I will speak about 3 things to you today. Essentially, it's just a keynote address. The first is technology changes over years. Because unless you understand this, where you're coming from, you will not understand where you're going. And I want to leave you, the entrepreneurs of tomorrow, with something to think about. How these have impacted us, especially AI, which is at a very formative stage. It is going to change the nature of many jobs. And thirdly, what you can do to benefit from it. What you can learn from these panelists to benefit from these changes. What are the 3 major changes? There are lots of them. We heard Mr. Petroda speak about 10. I'll speak about 12, 8 which are still in process, and 4 which are still in process, and 8 which are behind us. But the 3 important ones, I spoke to you about the printing press, the Gutenberg revolution. The second is the internet. If the Gutenberg revolution spread knowledge, because पहले तो गुरु शिष्य का रिश्ता होता था, अभी वो knowledge किताब कोई भी पढ़ सकता है. So it spread knowledge, and with the spread of knowledge, it imparted the masses. जिसने knowledge सीख ली, उसका advantage. And it became a catalyst for change by learning knowledge and broad basing knowledge. But this was from the printing press. पहले हमें भी कुछ सीखने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था. कुछ लाइब्रेरी ज़्यादा अच्छी थी, मगर वो दूर थी. What did the internet do? The internet provided global connectivity. We all refer to Dr. Google, and the medical profession is most worried. They keep saying, stop referring to Dr. Google, because those are more, there are other issues, you'll understand. Information became accessible. The digital economy, we've already heard about it in the large session, came into play, and social empowerment took place. So the second revolution was the internet revolution, and the third revolution today, and these are inflection points. These 3, which are major turning points in our history, is artificial intelligence. Other than the 10 I told you, मैं आपको 8 चीजों के बारे में बताऊंगा, put it in perspective. Agricultural revolution, 10,000 BC, 12,000 साल पहले. Next, industrial revolution, late 18th century, 19th century, early 19th, 1700 और 1800. Electricity and telegraph, 19th century. Please understand the timelines we are talking of. The automobile, late 19th century, earlier 20th century. कार का आविष्कार तो पिछले शतक में ही हुआ था, 1900. Telephone, late 19th century, Graham Bell. Radio and television, mid 20th century, 1950. Computers, mid 20th century. Smartphones, 21st century. और smartphones के बारे में मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा. When the software is free, you are the product. और आपसे वो जो big data एकत्रित कर रहे हैं, उसी से algorithm बन रहे हैं. So when the software is free, please remember you are the product. Please protect your privacy. You can learn more about it. 4 जो ongoing है, जिससे आने वालों दिनों में बहुत तब्दीली होगी. I'm not even talking about war fighting, that is a part of it. Artificial intelligence, renewable energy, biotechnology, blockchain and crypto. And आपको मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा. ये सुबह बैठे मैंने कुछ नोट्स बनाए थे जल्दी उठ के. But 2 दिन पहले I attended a seminar or a major session on artificial intelligence. To educate myself for it, one day earlier I was reading up on it on the computer. And my younger daughter happened to come. And she looked, she said, Papa, आप इतनी देर से क्या लगे हुए हो? तो I said, बेटा ऐसे ऐसे कर रहा हूँ. She says, use ChatGPT.
अब मेरे ज़माने के वो ओवर 60 वाले पढ़ा था चैट जीपीटी, कंप्यूटर भी सेल्फ टॉट हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट, ऐसे बेटा बहुत टाइम से मैं सीखना चाह रहा हूँ. She says, Papa, open the YouTube, you'll get 2-3 YouTube videos. I said, you tell me. She said, no, you will not learn, you learn yourself. And she was so right. Believe me, in 30 minutes, I got Chat GPT to make a PowerPoint presentation for my presentation here today. And I said, I want you to give me 14 slides. It made me the VBN note. I had to translate it back into a PowerPoint presentation. I learned that on another YouTube video. And these 12 points, I'm sorry, Sam Petroda sir gave 10. He may be better, right? This is only Chat GPT. These 12 points have come to me from Chat GPT. This is how fast technology is changing. What was Moore's law? मैं डॉक्टर गूगल से कंसल्ट कर रहा था अभी पीछे बैठे हुए उधर. 1965, one of the founders of Intel, he said that every 2 years the number of transistors on a chip will double and the price will halve. He predicted it will last for 10 years. It was an algorithm-based prediction. It is already 65 years and it is still valid. It is bringing, they say on an iPhone today you have more computing power than on the first Apollo satellite which landed on the moon. So, how do they impact us? I told you I'll speak about 3 things. How they impact us is, computers आने के बाद बैंक की यूनियन ने हड़ताल शुरू करा कि हमारी नौकरी चली जाएगी. You all remember that? मैं भी यंग ऑफिसर था, स्ट्राइक होती थी कि नहीं कंप्यूटर मत लाओ बैंकों में. I don't think नौकरियां गई हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एटीएम आएगा, टेलर वाला जो आप लाइन लगते थे, पर्ची काटते थे, विड्रॉल स्लिप टेलर पे जाते थे, वो टेलर की नौकरी चली जाएगी. अब जगह जगह एटीएम है, वी प्रेफर इट इज फास्टर. It is the nature of the beast which is changing and we have to understand it and adapt. Change is the only constant. Cost of production. How did China beat the system? Factors of production, land, machinery, building and works was subsidized by the state. If you were export oriented, you got an interest-free loan, 100% money up front, land free of cost. जो लड़ी लाइट चांदनी चौक में 20 रुपए की बिकती है और उसमें भी प्रॉफिट होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगी अगर एंटी डंपिंग नहीं है उसमें? तो यू वांट टू वाइप आउट दैट कंट्रीज मार्केट. And that's how they became the manufacturing base of the world. They're shifting to high-end. That's again a different topic. What was India? That it must narrate to something. It narrates to all of you and your jobs tomorrow. How does it narrate to us? Are we losing something in the bargain with these changes in technology which I spoke to you about? We remember doctors जब आपको कुछ prescription देते हैं तो आधी बार वो खुद नहीं पढ़ पाते क्या लिखा है. तो शुरू में हम सुन रहे थे कि खासकर केरला was very advanced. वो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन को कंप्यूटर पे चढ़ा के, रिमेंबर ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन, वो शुरुआत उससे हुई थी. देन बिकेम बीपीओ सेक्टर. देन वी हर्ड what was this facilitated? We have trained manpower. We have so many technology institutes. And it's not only IITs, they are engineering institutes. You have so many of them in Madhya Pradesh itself. Next, AI is a major growth engine. Today, Python language permits each one of you to program in AI. If a non-formally educated in computer person like me can learn Chat GPT in 30 minutes and generate a program to make a presentation for today and put it into a PowerPoint slide all within 30 minutes, that is the power of computing. Every one of you here can be AI programmers tomorrow. You don't have to learn C++ anymore, or COBOL, or any of the other languages. And this is that empowerment and broad basing which I spoke to you about in the earlier 2 revolutions. So what can you do? What is AI and what can you do? I will not again go down that road. There are major technologies you can benefit from. You don't have to be a science geek. I've also only done a BSc in 1979-80. Computer science, machine learning, deep learning, robotics, computer vision, cognitive science. There's a whole lot of subjects you can do, use Chat GPT and come to know of it. But what we saw today, or for a long time before today, everyone who was doing very well in IITs, there was a brain drain, they went to America. और आज हमें फक्र होता है that there is a reverse brain drain. कल परसों पेपर में आ रहा था, Hyderabad has become the new center for people who are setting up IT shops here. What is India? What is it that India has? We have people who are very brainy. We have accessibility
very good data networking in our country. Remote location is possible. You saw the way someone spoke about how Paytm has set up a center in Jabalpur. So you don't have to be in the center, you can be interconnected through the same data backbone. And we have the availability, the maximum in the world of people qualified in these issues related to computers. And what is AI? AI is all about making algorithms to do something for you. The nature of the job is changing, you have to understand that. I must take a minute or two about the defense sector. Situational awareness. Napoleon said 400 to 600 years ago, I spent most of my life wondering what is on the other side of the hill. अब other side of the hill आपको wonder करने की ज़रूरत नहीं है. Satellite बताएगा, networked environment बताएगी, drone उड़ा लीजिए, आपको drone input बताएगा. So situational awareness is a field which is increasing greatly. Autonomous weapon systems. बिना आपकी अनुमति के फायर भी खोल देगा अगर कोई इंट्रूडर घुस रहा है, though there has to be a man in the loop. Cyber security, personal training and simulation, logistic and supply chain, we just heard about it a little earlier. Strategic planning and analysis, human assistance, disaster relief. इसके बारे में I would like to say, war fighting technology often drives technology into the civil street. Many of what you take for granted today has come from military needs, American or anyone else who has developed it. Gunpowder, 9th century, industrial revolution, which permitted quickly iron and all that, more uniforms, more weapons to be created, larger armies to be raised, First World War. Tanks, First World War. Aeroplanes, Second World War. Atom bombs, Second World War. Information age, late 20th century, Gulf War I, network, J-stars. Cyber warfare, 21st century. And autonomous weapons. And today in the army, in the services, Army, Navy, Air Force, it's a generic term, we say the whole of the nation approach. It's not only the soldier who fights, it's your economy who fights, your country who fights, cyber security, everyone sinks and sails together. If I start practicing cyber warfare, I disable your airports, your electricity grids, your dams, open up the water, I don't even possibly have to reach that stage, so we have to harden our systems and protect. What can you do to benefit from it? Before I reach that slide, or that only slide which I asked someone to send me this morning, I want to reassure all our youth. I think our Army, Navy and Air Force are most ahead of the wave in this. आपको बॉर्डर गार्ड करना है, आप कितनी टेक्नोलॉजी ले आओ, जमीन पे वो इन्फेंट्री सोल्जर चाहिए, वो सैनिक चाहिए बॉर्डर प्रोटेक्ट, सरहद प्रोटेक्ट करने के लिए, मगर उसको एम्पावर करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं. I have seen in my 39 plus years of service, जो मैंने 30 years में नहीं देखा, पिछले 9 साल में टेक्नोलॉजी आर्मी में आते हुए मैंने देखी है. ड्रोन्स, नेटवर्क सिस्टम्स, एयरफोर्स में, and all three services. Today with emergency powers, I have been DG Financial Planning, with emergency powers, the amount of weapon systems the Army, Navy and Air Force have bought, I would like to assure you, we are amongst the most modern services in the world today. Even China is not ahead of us, and much of it is getting artificial intelligence driven. So I want you to be reassured on that count. But I also want to share one thing with you. It costs money. Someone just spoke about a BMW and 80 years old and 30 years old, who will buy it? I will also ask you that if there is this much budget, how many BMWs will you buy? So when this niche technology costs a lot, you have to balance the budget. It cannot be a bottomless pit where you keep demanding more funds, and action on that is also at hand to have balanced growth. And towards that, in this hall on 1st of April, I was here for the Combined Commanders Conference. What I heard on 1st of April, I heard at Kevadia in my previous conference which I attended. In both of them, it was the three services being told and reminded by the Prime Minister that please theatrize. आप पढ़ते होंगे theatrization के बारे में. Theatrization is all about integrating your Army, Navy and Air Force operational response on the Pakistan front and China front, so that you can have faster response, integrated response, and use these technologies together. It's not Army ki technology, Navy ki technology and Air Force ki. And all our young people would be very happy to know
that under the first and the current CDS General Chauhan, we have made very good progress in this. Very good progress in theaterization. With that, all I would like to say is, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि इस AI की उड़ान में आप उसका फायदा ले सकें. How many of you played hockey? एक हॉकी का वर्जन होता है 6-a-side हॉकी, 6 दोनों टीम में और बाउंड्री वॉल सी होती है ताकि बॉल बाहर नहीं जाए. हमारे पास एक रेजिमेंट में एक ऑफिसर थे, वो 4 आदमियों को तो आराम से ड्रिबल कर सकते थे, नेशनल लेवल के प्लेयर थे, रिटायर्ड एज ब्रिगेडियर पाठक. जब भी वो बॉल लेते थे 4 आदमी तो कहीं नहीं जाते थे, मगर अगर वो अपने डी पे बॉल मांगेंगे और दूसरे टीम में 6 आदमी हैं तो वो कभी दूसरे गोल पे पहुंच नहीं पाएंगे. तो अगर वो उनको बॉल मांगना है, वो हमेशा हाफ लाइन पे खड़े रहते थे और बॉल मिलते ही गोल करते थे. तो अगर वो हाफ लाइन पे नहीं खड़े होंगे तो उनको बॉल मिलने के बाद वो कैसे गोल करेंगे? ये एग्जाम्पल आपको मैं इसलिए दे रहा हूं, आप बॉल लेने के काबिल तो बनिए, नहीं तो वो बॉल लेके आप जाएंगे कहां? अपने आप को ये सब पैनलिस्ट के माध्यम के जरिए अपने आप को इम्पावर करें, so that you can remain ahead of this AI wave. I will just show you now. The army has done a lot of work on this. When I did the study on reorganization of army headquarters, एक हमारा बहुत अच्छा आर्मी डिजाइन ब्यूरो है, उसमें मैंने 8 ऑफिसर और दिए थे ताकि वो इस काम को और आगे ले जा सके. और आज मैंने उनके डीजी साहब, एडीजी साहब जनरल चरणजीत मान साहब को फोन किया. मैंने कहा एक व्हाट्सएप पे अपना वेबसाइट दी ना, ताकि आप में से जो भी इधर हैं, I will leave this with Gaurav. Gaurav, if you have that slide, this is on the army web. Any of you can Google Indian Army, you will reach this web. Next slide, please. This is from this web, the Army Design Bureau. Someone spoke about drones. The Army is giving a lot of money for this development. Similarly, the Navy and Air Force have their websites, and there's going to be a separate website soon on Army Design Bureau. Next slide, please. The numbers of the officers who want to be contacted. Next slide. Next, please. Yes, all their numbers are there on the website. So, my recommendation to you, जब आप अपने आप को इस काबिल बनाते हैं कि you can take advantage of this revolution which is already on us, you can take ideas from them, ring them up if you want to join the services in whatever you want to do. But अपने आप को ज़रूर इस काबिल बनाइए that your entrepreneurial spirit can take the wings of Udaan, what this conclave is all about. Thank you. I'll hand over to the next speaker. Thank you so much, sir, for your valuable speech and absolutely well said कि टेक्नोलॉजी से डरे नहीं बल्कि उसको अपनी ताकत बनाए. सर, मैं अनुरोध करूंगा आप मंच पे बने रहें. आपको मोमेंटो देने हेतु मैं अनुरोध करना चाहूंगा हम सभी के बीच माननीय श्री मैथिली शरण तिवारी जी, आर पेट्रन उड़ान कॉन्क्लेव, हमारे मंच पर होंगे और ये स्मृति चिन्ह आपको भेंट करेंगे. आप सभी की तालियां मिलें जोरदार. वास्तव में सर आपकी एक एक बात बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से कभी सैनिक नहीं डरता आने वाले हमलों से, उसी प्रकार ना युवा और आने वाला भविष्य ना डरे बल्कि उसके साथ अपने आप को उस काबिल बनाए कि वो उस भविष्य के साथ बेहद उतनी ही शानदार तरीके से इस भविष्य के साथ जुड़ा रहे. सभी की तालियां चाहेंगे जोरदार फॉर आवर वेरी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह जी. जी हाँ, तालियां जोरदार मिले आप सभी की. Thank you so much, sir, for your valuable words. Moving ahead forward to our next keynote speaker, we have another amazing youth personality who has been inspiring youth since years. Let me welcome on stage our very honorable Mr. Kartikeya Sharma ji, member of Rajya Sabha. He has been a multifaceted Indian figure, wearing hats as a politician, entrepreneur, and media magnate. Presently, he serves as the member of Rajya Sabha, the esteemed upper house of Indian Parliament, representing the state of Haryana. And he has been always working for youth and their betterment, and for youth how they can actually nurture their future. Thank you so much, sir, for joining in on stage for Udaan Conclave. Thank you. Many thanks to the organizers for giving me this opportunity to speak and to be here today. As always, the pioneering efforts of Shri Vivek Tankhaji are going to leave a mark on so many thousands of lives. It was a pleasure listening to you, sir, Lieutenant General Ajay Singh ji, and all other notable speakers before me. See, I'm going to talk about media, and I'm going to talk about the evolution of media and the future of media. What it means in a country like us, which is as diverse as India, and what the future holds. But before I talk about that, I'd like to speak about
the history of media. It is very important to understand the history before you look into the future. General Ajay before me just spoke about the printing press founded in the 1400s. From the advent of the print to the evolution of radio, to the evolution of television, subsequently digital and social media. Media has evolved in many ways, in many manifestations. You have to understand that, and the reason I speak of it is to understand how media has changed and how you have to integrate with it, how do you engage with it. I'll give you an example. A lot of people read newspapers still, and when you read a newspaper, the human brain is configured to read from left to right, not the other way around. And there's a sensibility to that. You read from left to right, you scan the paper, you read a headline, you read a byline, and then you make up your mind whether you want to read an article or not. And after reading that article, you make up your mind whether you agree with it or not. Now, in the world of AI, as speakers before me were talking about it, that's an option which does not exist. Because the algorithms and the machine learning will only regurgitate whatever you want to go, whatever you want to read, whatever you want to engage with. So, from a medium which allowed you to read, form an opinion, make up your mind about it, you move to another medium where you are not just a seeker, but you are being told what to learn. You have to understand it because it's a very intrinsical manner in which technology has changed and affected us, how we consume content, data, how we analyze, and how we evolve. We used to react reading a story or watching a video. Now we are seekers and we are proactive about it. And that's a very big change. Because we don't get an alternative opinion. Because we don't get the other side of the story. Or we don't even the right to disagree is also snatched away because you are not even reading. So how do you know whether you agree or disagree with it? That is a very fundamental premise and a very good example of how media is changing. You know, most of the people younger than me today are getting the latest from WhatsApp and Instagram. Social media began as such a wonderful thing. We could all have presence. We could all be instantly connected to everyone. A revolution, a people's movement for sure. That's how we coined it. But then we realized that with the infinite scroll, 60-second clips, the YouTube shorts, all of that is not enough. And we need a new revolution. A new world is upon us. A new generation that needs to reinvent the next. I'm a believer in the next. I'm a believer in technology. I'm a believer in the future that is yet unknown. It's exciting, it's inevitable, it's almost unimaginable. So what is next in media? What is the future? The answer to the question is not AI, not machine learning, not algorithms. Deciding what you can watch or will watch, what goes viral, what doesn't, what tends and what doesn't. From the trillion-dollar companies which control how we consume content, I'll quote you a fact, 89% of the world's search engines are monopolized by Google. Through your smartphones and all other devices that we use to seek information, 89% in the world are, I repeat, are monopolized by Google, and they spend $10 billion a year to monopolize and maintain that monopoly. But what is missing is the enigmatic depth of perspective that only humans are capable of. Like sir, like General Ajay, I also asked GPT to write me a portion of the speech. This is what it churned out, and I quote, on the topic I'm speaking.
The media landscape in India is rapidly evolving with new technologies and platforms emerging every day. The youth of India must be prepared to navigate this ever-changing landscape and use it to their advantage. They must be aware of the power of social media and how it can be used to influence public opinion. Unquote. The language is fine. It sounds okay. It sounds human. But like good special effects in a movie, that's all it is. Almost but not quite. Imitating the real, but doomed to be unreal. ChatGPT doesn't know me, what I wanted to say or what I should say. It wants to tell me to stop thinking. It wants me to spew out words that may mean something or may mean nothing. It wants to reduce the human imagination to a reassembled jigsaw of what was said or written way before. Ladies and gentlemen, boys and girls, the Amrit Kal is upon us. This is the Bharatiya Punarjagran, the Indian Renaissance. Think of the Dark Ages in Europe. They ended with a classical revival, the rediscovery of philosophy, roots and arts that led to Michelangelo's and Da Vinci's. The Da Vinci's led to the Newtons. The Newtons led to a hunger for science, and the science to the Industrial Revolution. A new Bharat is being born. The Bharat is rediscovering its civilizational heritage. The Bharat is landing on the moon. This Bharat is understanding that perhaps it held the answers to all age-old problems of humanity all along. There is no sovereign entity in the world that is as diverse as we are. Never in the history of humankind have so many young people been in one place at one time. It will never happen again. The future of media is then simply telling stories. The stories that define our age, the stories that define the Amrit Kal, the stories that define the Bharatiya Punarjagran. The stories of people who build rockets, the stories of people who build roofs, the stories of people who make rotis. The future of media is you, the youth of the country. With more than 65% of our country's population under the age of 35, we are the youngest country in the world. And I must take this opportunity, to tell you that you are the future, you are the change. Like Sir said, change is the only constant. But you have to be the change you want to see in the world. And that has to be understood, that technology, while it's an enabler, it's ultimately the youth of the country that are the agents of change. And the humane aspect is what keeps us different from artificial intelligence, from technology. While we are to use technology to our advantage, we are not to become subservient to it as far as media is concerned. I want to take this opportunity, a lot of my friends asked me, is media dead? Are news channels dead? Is media going to be relevant in future? I often tell them that the nature of the medium is such that the immediacy and urgency of news, by its true nature, cannot die. No matter what the platform is, no matter in what manifestation it comes out, no matter how you reach, whether you reach through a television box, you reach through a live OTT streaming, or you reach through social media. Any of these mediums, these are just evolutionary platforms which are changing. But what doesn't change is the essence of news. That is the most important thing. I'll give you another example. Recently, during the COVID pandemic, when for the first time in I think hundreds of years, the newspaper industry went through a flux where for almost 3 months, no newspapers were printed. And there was suddenly a very big gap on information. We had not seen, at least not in my lifetime, fortunately, unfortunately, we had not seen anything like that. And we were confronted with the problem of fake news, of fake narratives that were propagated by social media. Now,
That is a time where the entire world was wanting to know what's happening, what is correct, what is true, and how do we actually use the media to our advantage. We at ITV Network used that opportunity to take the OPD on television, only so that we can help people by and large. This was a time where there were a lot of narratives floating, a lot of misinformation floating. People didn't know what to consume. They didn't know how to consume, what was right, what was not. And that is where the credibility and the humane aspect comes in. The credibility of, you can call it traditional media, you can call it media which has roots, a system of checks and balances, a system which works, which just does not put out whatever comes to your mind, or what people call the WhatsApp university. So, I really would like to encourage you. Like I said earlier, the future of media is you, the future of stories. So go out, write them, tell them to your friends and family, tell them to the world, become the change you want to see, leverage the algorithms and the machines, but bask in the glory that is to be human. Bask in the wonder that is to be alive during India's new golden age. May good vibes and good energy follow you and emanate throughout your life. Thank you very much. Thank you, Kartikeya, but I would request you to please come back to the stage. We cannot let you go without expressing our sincere appreciation, and how wisely did he contextualize for us that no matter the amount of AI revolutions that you may see, what is essentially human and humane will survive, and not just survive, it will thrive. Kartikeya, thank you for that beautiful keynote speech. And on that note, I would like to invite on stage Honorable CMD, Mansarovar Group, Mrs. Manjula Tiwari ji, to kindly present a small token of gratitude on our behalf to Kartikeya ji. Namaskar, ma'am. Thank you so much. And on that note, we will move towards the next panel, the third panel discussion for the day, which is titled Soulful Creations, Nurturing Wellness and Spirituality Through Content. For this particular panel, I would like to invite on stage all of our esteemed speakers, Arun Kumar Tiwari ji, Bhaskar Indrakanti ji, Acharya Pankaj, and Akshat Gupta. Can we have all of our esteemed panelists with us here on the stage? We will need one more chair. And along with all of our panelists, may I also invite on stage Gaurav Tiwari ji, who shall be the dynamic moderator for this session. Let's fill these silences with our applause. Yes. I would now like to take a moment to introduce all of our panelists to you. I will begin by introducing Arun Tiwari ji, who is a distinguished expert in the field of astrology, palmistry and numerology. With a remarkable legacy spanning 48 years, he has conducted over 50,000 consultations, providing profound insights and guidance to individuals seeking clarity and direction in their lives. Arun ji, welcome on the stage. Such an honor to have you with us. Moving on, I would like to introduce Bhaskar Indrakanti to all of you, who is a visionary leader thriving on challenging the status quo and fostering creativity in its most radical forms. As the founder of Orange Owl, he embodies the spirit of an educator, an entrepreneur, as well as a content creator. Absolutely the perfect fit for this panel. Bhaskar ji, welcome on the stage. So happy to have you with us. We also have with us Acharya Pankaj, who is a leading Vastu consultant and the founder of Vastu Shikhar.
His expertise in Vastu Shastra has guided countless individuals in harmonizing their homes, offices, factories and hotels with the principles of Vastu. And what is very interesting is that he is making all of these ancient sciences accessible to the masses under his own guidance by providing a comprehensive online audio-visual course. Acharya Pankaj, thank you for being with us on the panel today. And our last panelist is Akshat Gupta, who is known for his nationally best-selling books and captivating TEDx talks, and who is a shining star in the Indian literary and film industry. His Hidden Hindu series, with over 1 lakh copies sold, has earned him a well-deserved place in the literary world. Beyond his success as an author, Akshat's talents extend to screenwriting and dialogue writing in the Indian film industry. Akshat, welcome on the stage and welcome to the Udaan Conclave. And I cannot miss out on our moderator, Gaurav Tiwari, Honorable Vice Chancellor, Mansarovar Global University, and this university has also been instrumental in getting together this entire conclave. Aside from being an educationist at his heart and his core DNA, Gauravji is also a social worker, carrying philanthropy in the very DNA of all of his endeavors and his heart. Gauravji, over to you. Let's have an engaging panel. Thank you so much, Soumya. I'm really happy that you did what I couldn't have done. You know, you've introduced all our stars today. For the last 3-4 hours, we have been talking about technologies, AI, defense, medicine, you know, but I think there is a time has to come when we have to talk about the human element as well, the spiritual element as well. And that is when this panel becomes really important. I'm really happy कि हमारे साथ इस क्षेत्र के बहुत अच्छे लोग हैं अरुण तिवारी जी जो कि पिछले 48 साल की इनकी लेगेसी है इनके पेरेंट्स भी मुझे लगता है कि इसी दिशा में काम कर रहे थे भास्कर इंद्र क्रांति जी के मैं वीडियोस रेगुलरली देखता रहता हूँ जिसमें वो 3 तरीके बताते हैं कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखा जाए कैसे अकेलेपन को दूर किया जाए कैसे जब एक बच्चा अपने घर को छोड़ के जाता है किसी नई जगह में तो वो कोप अप कर सकता है और वास्तु शास्त्री जी पंकज जी इन्होंने भी हमेशा एक बड़े साइंटिफिक तरीके से अपनी बात को बोला है इनको हम सुनते हैं और इनको फॉलो भी करते हैं अक्षत गुप्ता जी ने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी द हिडन हिंदू और हमें माइथोलॉजी के बारे में अपनी भाषा में हम युवाओं की भाषा में इतने सुंदर तरीके से बताया कि हमारा उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट जागा अब मेरा पहला प्रश्न अक्षत गुप्ता जी से ही है क्योंकि कल मैं उनसे मिला तो उन्होंने बोला कि सबसे पहला मुझसे पूछना और मुझे मत बताना क्या पूछोगे तो अक्षत जी आपकी जो डेफिनेशन है हिंदू की मैं चाहता हूँ कि एक बार यूथ के सामने यू प्लीज टेल दैट डेफिनेशन अगेन हु इज द हिडन हिंदू एंड हाउ डज ही इम्पैक्ट द नेशन एंड हाउ डज ही इम्पैक्ट द यूथ ऑफ द नेशन Hi guys, my name is Akshat Gupta. I am a full-time house husband, part-time author, screenwriter, poet and lyricist. सुशांत यहाँ पे हैं क्या? सुशांत कहीं बैठे हैं? ओके, कल हमारे साथ डिनर पे सुशांत नाम के एक व्यक्ति थे और गौरव जी का सवाल है कि वाई द हिडन हिंदू, हिंदू क्या होता है? तो मेरी लिखी हुई एक कविता है उसी से शुरू करते हैं विच सेज कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ प्रणाम मैं हिंदू हूँ धन्यवाद चिता की अग्नि गंगा का पानी कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ भोला हूँ सरल भी तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ घोल भी दूँ तुमको और घुल भी जाऊँ तुम में कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ प्रणाम मैं हिंदू हूँ प्रणाम का भाव भी मैं हूँ आक्रमण का घाव भी मैं हूँ सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ प्रणाम मैं हिंदू हूँ
सभी दर्शकों को हम चारों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और सच कह रहा हूँ, हम तीनों ने ड्रेस कोड डिसाइड करके हम यहाँ नहीं आए। ये इत्तेफाक है कि हम तीनों एक जैसा कपड़ा पहने और इनको हमने बाइकआउट भी नहीं किया है, ये भी इत्तेफाक ही है। सो ओवर टू यू गौरव जी। ब्यूटीफुल। मैं अरुण तिवारी जी से पूछना चाहूँगा। सर 48 साल आपके दादाजी भी कर रहे थे काम, आपके पिताजी ने भी इस क्षेत्र में काम किया, आप भी कर रहे हैं, पर आपने टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कर लिया है। पहले वो 1-to-1 कस्टमाइज्ड व्यक्ति के पास जाके और उनकी पत्रिका देखने वाला काम था। अब आप मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के साथ हर रोज़ लाखों लोगों को बताते हैं कि उनकी पत्रिका उनका भाग्य कैसे बदल सकता है। क्या इसमें साइंस है? और अगर है तो उससे यूथ को कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा मिल सकता है, या उसके फ्यूचर के बारे में वो कैसे उसको बेहतर बना सकता है? वो हाउ कैन इट बी यूज्ड एज एन एड टू द यूथ? थैंक यू सो मच गौरव जी, और यहाँ पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, और लगभग हर दूसरे दिन मुझसे ये क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ ही लेता है कि क्या ये सारी जो ग्रहों की बातें हो रही हैं, ये शनि, ये मंगल, ये राहु, ये सच में कुछ होता भी है या फिर सिर्फ एक भ्रम है? तो मैं कहना चाहूँगा, ये ज्योतिष मैंने नहीं बनाया, ये सैकड़ों सालों से, हज़ारों सालों से यहाँ मौजूद है। इसका सबसे पहला प्रमाण ऋग्वेद में मिलता है, उसके बाद ज्योतिष वेदांग में मिलता है, उसके बाद जो गीता हम पढ़ते हैं, वेद व्यास जी ने जो लिखी है, उनके पिताजी ने ज्योतिष लिखा है, जिनका नाम ऋषि पराशर है। उनकी सबसे पहली पुस्तक आई थी बृहत पराशरी होरा शास्त्र, जहाँ पर ज्योतिष के सारे नियमों के बारे में बताया गया था फर्स्ट टाइम डिटेल में। सो ये वहाँ से चला हुआ आ रहा है। उसके बाद कई सारे ऋषि आए, वारामिहिर आए, जिन्होंने इस ज्योतिष को और ज़्यादा लिखा। आपने कहा साइंस, मैं कह रहा हूँ इसमें फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, एस्ट्रोनॉमी भी है, और इन सब से मिलकर ज्योतिष बनता है, एस्ट्रोलॉजी बनती है। अगर आप देखोगे तो पुराने टाइम में जब पता करना होता था कि कोई प्लेनेट कहाँ बैठा है, जैसे अभी मुझे पता करना हो कि मुझे भोपाल में इस उड़ान कॉन्क्लेव में आना है, तो मुझे एक लोकेशन दोगे आप, एक एड्रेस दोगे, मैं उस एड्रेस पे पहुँचूँगा तब यहाँ पे आ पाऊँगा, मैं उसे गूगल करूँगा। लेकिन वो प्लेनेट का एड्रेस क्या है? वो मंगल घूम रहा है, वो शनि घूम रहा है, विच ऑल हम सब जानते हैं कि प्लैनेट्स घूम रहे हैं सौरमंडल में, उसका एड्रेस क्या है? उसका एड्रेस सबसे पहले डिसाइड करने के लिए पूरा सिस्टम बनाया गया कि सूर्य को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ एक गोला बनाया गया और उसे 12 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया गया, और इन 12 भागों को बोला गया कि ये राशि है। तो आपको ये बोलेगा कि मंगल के मेष राशि में है, तो मुझे पता है मंगल यहाँ बैठा है। इसे और एक्यूरेट बनाने के लिए इसी गोले को 27 और भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो अब मुझे बोलेगा कि मंगल मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में है, तो मुझे और एक्यूरेट उसकी पोजीशन पता चल जाएगी। इसको और एक्यूरेट बनाने के लिए नक्षत्रों को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया। अब मुझे कोई बोलेगा कि मंगल मेष राशि अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में है, तो मुझे और एक्यूरेट उसकी पोजीशन पता चल जाएगी। तो पिन पॉइंट लोकेशन ऑफ प्लैनेट्स को अचीव करने के लिए पूरा सिस्टम उस समय बनाया गया जब टेलीस्कोप नहीं थे। सो ये बहुत बड़ी बात है ज्योतिष में जो हिंदुस्तान ने सबको दी है। ज्योतिष शास्त्र हमेशा से गुरुकुल परंपरा रही है। मैं गुरु हूँ, मैं अपने शिष्य को बता दूंगा और सुना दूंगा। जिस पुस्तक की मैंने बात की गई, इवन वो पुस्तक भी लिखी नहीं गई है, वहाँ पर ऋषि पराशर अपने शिष्य मार्तंड को बता रहे हैं ज्योतिष का ज्ञान, और कोई और है जो तीसरा खिड़की से देख के उसे लिख रहा है। ये सच में ये बात है। यही गुरुकुल परंपरा हमेशा से भारत में चलती चली आई है। इस वजह से कई सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट नहीं हो पाई, और इसी का अभाव है कि कई सारे लोग इसे अंधविश्वास समझते हैं या गलत भी समझते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ अगर गलत होगी वो इतने सैकड़ों साल तक नहीं टिकेगी। झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता। इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक भी छुपा हुआ है। जैसे कि बेसिक ज्योतिष क्या है कि प्लैनेट्स ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट करते हैं। यही है ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी यही है। 2 प्लैनेट्स तो आप अपने आप देखते हो। अगर सूर्य नहीं होगा तो आप और मैं यहाँ नहीं बैठेंगे, ये धरती का अस्तित्व नहीं होगा। वहाँ पे आपको सामने से पता चलता है कि हाँ यार, एक प्लेनेट तो दिख रहा है, उसका अस्तित्व है, उसकी वजह से हमारी लाइफ है। चंद्रमा जो आपको दिखता है, उसकी वजह से आप कहते हो कि हाँ रात होती है तो एक दिन में शेड्यूल बना हुआ है। उसकी ग्रेविटी की वजह से समुद्र में टाइड्स आते हैं, वो हमारे इमोशनल स्ट्रक्चर को, ये सब साइंस ने अब प्रूव किया, जिनको आप देख सकते हो। अब आप जिनको नहीं देख सकते हो उन पर आप निगेट कर रहे हो कि नहीं, उनका कोई रिजल्ट नहीं होगा। अभी तक इतने साल बीत गए, अब जाके हम चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंच पाए। ठीक है, अभी तो बहुत लंबी जर्नी बाकी है। तो जो चीज़ें शायद ज्योतिष ने बहुत पहले बता दी हैं, प्लैनेट्स हम पर अफेक्ट करते हैं, तो एक दिन साइंस भी उनको एक्सप्लोर कर ही लेगा। कहाँ देखते हैं 50 साल बाद हमारे देश को?
आप ग्रह और नक्षत्रों की दशा को देख के क्या बता सकते हैं कि भारत देश और को हमारा यूथ 50 साल बाद जिसके लिए आज हम उड़ान कॉन्क्लेव में बैठे हैं, कहाँ लेके जा रहा है? मैं सबसे पहले जो हमारा स्पिरिचुअल या फिर जो ज्योतिष का ज्ञान है इसके नज़रिए से अगर आंसर करूं तो आने वाले देश में लोगों का जो टेम्परामेंट होने वाला है बहुत लॉजिकल होने वाला है। पीपल जो लोग हैं, मैं जैसे एक टीचर भी हूँ, मैं सिखाता भी हूँ ज्योतिष को अपने गुरुकुल में, उसका नाम अकल गुरुकुल है। वहाँ पर भी लोग लॉजिक से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, और रिसर्च कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने अपने सिद्धांत भी निकाल रहे हैं। लोगों की दिलचस्पी इस साल से अगले पिछले कुछ सालों से इस सब्जेक्ट में बहुत बढ़ रही है, और सिर्फ इसी सब्जेक्ट में नहीं, अंक ज्योतिष में, रीकी हीलिंग में, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इस अकल्ट की दुनिया के पार्ट है, उनमें भी बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है जो लॉजिकल टेम्परामेंट और साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जो स्पिरिचुअल टेम्परामेंट है, ये भी ग्रो होने वाला है आने वाले 50 सालों में। परफेक्ट। पंकज जी, आप पे आते हैं। आप भी एक पुराने हमारे देश के दिए हुए साइंस पे काफ़ी समय से अध्ययन कर रहे हैं, वास्तुशास्त्र पे। हमारे देश का वास्तु, नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं, साउथ में सागर है, जहाँ तक मेरी समझ है कि नॉर्थ जो है वो हल्का होना चाहिए, साउथ हैवी होना चाहिए। तो क्या यह विरोधाभासी है, और अगर है तो इसका क्या इफेक्ट हुआ है और आगे क्या होगा? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जिस धरती पे अभी हम बैठे हैं, राजा भोज की स्थान है, राजा भोज का स्थान है, और हमारे इतिहास और वास्तु के क्षेत्र में राजा भोज को जितना नॉलेज था, अभी तक किसी को उतना नॉलेज नहीं हुआ। और उन्होंने किताब लिखी थी आज के 1000 साल पहले, सम्रांगण सूत्रधार, और आज भी सभी वास्तुशास्त्री उसको स्टडी करते हैं और उसी को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। वास्तुशास्त्र सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, वास्तुशास्त्र एक एनर्जी है। मैं थोड़ा सा पहले वास्तु के बारे में बताना चाहता हूँ, फिर मैं आपके टॉपिक पे आऊँगा। मेरा मेन क्वालिफिकेशन, मैं MBA हूँ फाइनेंस से, मेरा कोई लेना देना नहीं था वास्तु से। नेचर ने मुझे अचानक यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी तरीके से कनेक्ट किया और मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के फील्ड में आया। तो पहले मैंने कैलकुलेशंस पे फोकस किया कि क्या कैलकुलेशन से ही पता चलेगा। जब मैं इसकी गहराई में गया तो मैंने देखा नहीं, ये तो एनर्जीज हैं, प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं, इसके हिसाब से आपको नेचर अपने ही जगह पे उठा के ले जा रही है, बस हमें पता ही नहीं है कि ये मुझे मिला ही क्यों था। और प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमो भाव, सतो भाव, रजो भाव, कई लोग तो जन्म से ही तमस, रजस और सतो में आते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सक्सेसफुल होने के बाद 40-45 की एज में आके अचानक से उनके अंदर तमस की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। लोगों को समझ में नहीं आता कि इतने अच्छे व्यक्ति थे, अचानक इनको क्या हुआ है। कभी कोई जानने का प्रयास नहीं करता, कोई साइकेट्री के पास ले जाता है, कभी उसके पीछे के साइंस को समझने का प्रयास नहीं करता कि आसपास की ऐसी कोई एनर्जी तो नहीं है जो इनके सबकॉन्शियस माइंड को बदल दिया है। उस एनर्जी के बारे में कोई नहीं जानता। तो ये जानने की जरूरी है कि हमारे आसपास जो ऊर्जाएं हैं, वो ऊर्जाएं हमारे माइंड को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे ऑरा को, हर चीज को इम्पैक्ट कर रहे हैं और उसी से हमारा जीवन चल रहा है। जो भाव है हमारा, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो हर समय बदल रहे हैं। क्षेत्र बदलते ही इमोशंस बदल जा रहे हैं। ये जो क्षेत्र का प्रभाव है सबसे ज़्यादा हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे होता है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, कुछ झगड़ा भी हो जाए आप उसको रिएक्ट नहीं करते क्योंकि क्षेत्र ही ऐसा है, आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं। वहीं आप कहीं 5 स्टार होटल में चले जाओ, वेटर आपको कुछ बोलते आप तुरंत झगड़ा करना शुरू करते हैं, मैनेजर को बुला देते हैं, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से हमारे भावनाएं बदल जाते हैं। कहते हैं जब भाव ही बदल जाएगा तो शरीर भले ही ऐसा ही दिखता रहे जैसे आप पहले थे और अभी दिखते हैं, लेकिन इंटरनली पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो मैं इस रिसर्च में करते करते लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने भी कहा था कि हमें अडेप्ट करना पड़ेगा, और चार्ल्स डार्विन तो कह के जा चुके हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पहले हमें नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू सर्वाइव करना था, अब हमें टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये बात सही है कि AI इज़ डेफिनेटली गोइंग टू चेंज द गेम वर्ल्ड का, जब काम की बात करें या फिर पर्सनल लाइफ की भी बात करें। बट अगर हम अडेप्ट कर पाएँ, और वो भी एक स्किल होता है, टू अडेप्ट इज़ ऑल्सो अ स्किल, इसलिए मैं स्किल करता रहता है। तो अगर ये चीज़ हम समझ पाएँ तो ये ज़रूरी है कि अगर यूथ को ये समझ में आ जाए कि यार ये अडेप्ट कैसे किया जाए, आसान हो जाएगी। एंड आपने बोला AI इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आज हम IQ के ज़माने में नहीं जी रहे हैं, आज हम EQ के ज़माने में जी रहे हैं, इंटेलिजेंस क्वोशंट के ज़माने में जी रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, सॉरी इमोशनल क्वोशंट के ज़माने में जी रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द नेम ऑफ द गेम, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत है
बट इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए इतने सारे इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करके रखने के लिए। रावण को भी 10 सर लगे थे, हमारे पास तो सिर्फ अभी एक ही है। ग्रेट। तो इनका ये कहना था कि हम लोग इंस्टिंक्ट पे थोड़ा सा अपने भरोसा करें, अपने इंटरनल इंस्टिंक्ट पे भरोसा करें। हम अक्सर माइथोलॉजी में देखते थे कि जब भी कुछ गलत सही हो रहा होता था तो आकाशवाणी होती थी। तो वो आकाशवाणी भी क्या इंस्टिंक्ट, इट्स अ फनी क्वेश्चन, और आकाशवाणी भी क्या इंस्टिंक्ट होती थी या व्हाट इज योर व्यू अबाउट इट? मैं तो पहली बार आकाशवाणी सुना था जब मैं एकदम छोटा था। दूरदर्शन में आकाशवाणी आती थी, समझ नहीं आता था कहाँ से आ रही आवाज़। तो अभी भी एआई में कोई ज़्यादा समझ है नहीं मेरी। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, ये तो सच है कि बहुतों की नौकरी जाएगी। मेरे को भी डर लगता है मेरी ना चली जाए। तो कुछ 7 फिल्में हैं मेरे पास, और अभी बड़े यंग ऐसे राइटर्स आए हैं। सी आई हैव टू टेल यू गाइज दैट राइटिंग इज़ अ स्किल। हम लोगों को राइटर बोला जाता है, मुझे लगता है ये डेजिग्नेशन ही गलत दे दिया है हम लोगों को। थिंकिंग इज़ एन आर्ट, राइटिंग इज़ अ स्किल। एनीबडी कैन टीच एनीबडी हाउ टू राइट। पंक्चुएशन मार्क कहाँ लगाना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्या होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स क्या होते हैं, बेटर सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है, वर्ड्स कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ राइटिंग के अंदर आती है, जो कि एक स्किल है। लेकिन नोबडी कैन टीच नोबडी हाउ टू थिंक, बिकॉज थिंकिंग इज़ एन आर्ट। आप पेंटर को ब्रश चलाना सिखा सकते हैं, पर उसके दिमाग में कौन सी आकृति उकेरेगा वो, और उसको कैसे कैनवास पे डालेगा, वो कोई किसी को सिखा नहीं सकता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाले हम ही लोग हैं। आकाशवाणी पता नहीं भगवान जी ने बनाया होगा, लेकिन ये आकाशवाणी तो आर्टिफिशियल है, इसमें वर्ड ही आर्टिफिशियल है। सो कुछ कितना भी कर लें, लेकिन हमसे एक कदम पीछे ही रहना पड़ेगा उसको, क्योंकि आपके हाथ की बनाई हुई चीज़ आपसे आगे नहीं जाती है। वो उतना ही जान सकती है, उतना ही समझ सकती है जितना हम समझ सकते हैं। तो अभी इन्होंने जो बोला इमोशनल क्वेश्चन की बात है, इमोशनल व्हाट वाज दैट वर्ड, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अभी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन्स एंड रोबोट्स टू बी इमोशनल विद अस। तो ठीक है, अभी और समय है हमारे पास बच जाने के लिए। वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच। इफ एनीबडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग एल्स फॉर द क्राउड, फॉर द ऑडियंस, वीड लव टू हियर फ्रॉम यू। एआई की बात हो रही थी, तो मैं भी काफ़ी यूज़ करता हूँ अपने काम में एआई को, और जॉब्स वगैरह रिप्लेस होने का कुछ ऐसा डर नहीं है, क्योंकि पहले भी जैसे अभी जनरल साहब बता कर गए कि पहले भी हो रहा था कि कैशियर की जॉब चली जाएगी, इसकी जॉब चली जाएगी, कंप्यूटर्स आ जाएंगे, सब बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम उसके आने की वजह से कई सारी और इंडस्ट्री और ओपन हो जाती हैं। जैसे जियो आने की वजह से कितने सारे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स आ गए, हम लोगों का धंधा चलने लग गया। तो एक इंटरनेट, एक नई टेक्नोलॉजी आई जिससे कि और सारी जॉब्स बन जाती हैं, और सारे हॉराइजन ओपन हो जाते हैं, जिस वजह से किसी की जॉब नहीं जाती, बस नई जॉब और क्रिएट हो जाती है। मेरा ये मानना है एआई को लेकर। ग्रेट। एक आखिरी क्वेश्चन जो मैं बीच में पूछ नहीं पाया, और मैं अक्षय जी से भी पूछना चाहूँगा। मुझे पता नहीं कि ये सही प्लेटफॉर्म है पूछने का कि नहीं। जब एक युवा व्यक्ति स्ट्रगल करता है तो उसके पास बहुत सारे टूल्स नहीं होते। व्हेन यू हैव गॉन 35 years 40 years in life, then you have a lot of tools which help you to cope up with your mental health, with your emotional health, your emotional intelligence, etc., etc. But when you are only 25, you don't have so many tools, you know. A similar incident happened with you as well in 2014. Yeah. So do you have a message, you know, what happened, why it happened, how can it be avoided for the people who are listening to it, and what inspired you, you know, to get back on track and do the things you did and be who you are today, you know? गौरव जी ने जो सवाल इनडायरेक्टली पूछा है, मेरा मान रखते हुए मैं उसको स्ट्रेट आपके ऑन योर फेस दे देता हूँ। 2014 आई ट्राई टू कमिट सुसाइड। इंदौर में रहने वाला शख्स हूँ मैं, जो अब मुंबई में रहता है। उसके पीछे की कहानी जो है वो दुख भरी है, पर उसमें जाएंगे तो बहुत लंबा समय ले लूँगा मैं, इसलिए उस पर नहीं जा रहा हूँ। और उसके बाद ऐसे ऐसे कटाक्ष सुने हैं कि जब 5 दिन अस्पताल में एडमिट होने के बाद बच गया था, तो कुछ नापसंद करने वाले मेरे मुंह पे ये बोल गए थे कि देखो कितना बड़ा फेलियर है ये आदमी, कि सुसाइड करने की कोशिश किया और उसमें भी फेल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे टॉन्ट सुनते सुनते आगे बढ़ा। तो आप लोग में से ज़्यादातर लोग, सर ने भी पूछा था कि अंडर 30 कितने हैं, बहुत सारे हैं। मैं अब मुंबई में रहता हूँ यार, वहाँ पे लगातार समंदर मेरे घर के बहुत पास है, लहरें उठती रहती हैं। तो विद टाइम एक चीज़ समझ में आई है कि आप में से कितने लोग समंदर के अंदर गए हैं, कभी पाँव रखा हो, है ना?
तो जिन लोगों ने रखा है ना उनको समझ में आएगी ये बात। क्या होता है कि हम समंदर के अंदर जब जाते हैं ना तो हर 30 सेकंड में एक लहर आती है। आप जैसे जैसे अंदर जाते हैं ना वो लहर जोर से आपको हिट करती है, करेक्ट? हम क्या करते हैं कि हम 4 कदम चलते हैं, फिर हम लहर के सामने खड़े हो जाते हैं तन के। वो लहर इतनी ज़ोर से हिट करती है कि आप 2 कदम पीछे चले जाते हैं। फिर आप 4 कदम चलते हैं, अगली लहर आती है, वो आपको फिर 2 कदम पीछे भेजती है। इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप 4 कदम चले, 2 कदम पीछे चले गए। वो 2 कदम पीछे जाने में एक एनर्जी लगी, आपका एफर्ट घट रहा है, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। आप फिर 4 कदम चले और फिर 2 कदम पीछे आ गए। सही कायदा समंदर में ज़्यादा अंदर जाने का ये है कि जब जब लहर आए आप उस पर सबमर्ज हो जाइए, आप अंदर चले जाइए, लहर को ऊपर से क्रॉस होने दीजिए, फिर 2 कदम आगे चलेंगे ना तो वो 2 कदम जो पीछे गए वो बचेगा और 4 कदम जो आगे गए वो टोटल 6 कदम आगे ले जाएगा आपको। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी हर दिक्कत से ना लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमेशा लड़ना सॉल्यूशन नहीं होता है। कभी कभी वी नीड टू लर्न टू सबमिट एंड सरेंडर टू आवर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। आप लोगों में ओके, तो मैं एक दिन कोई प्रोग्राम देख रहा था, उस प्रोग्राम में एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे। उन्होंने बोला कि कोई नया शायर, कोई नया कवि क्या ही लिखेगा अब, क्योंकि घर के बाहर की जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब जावेद अख्तर साहब ने रख ली हैं कि फूल, परिंदे, सरहद, आसमान, और घर के अंदर की सारी चीज़ें गुलजार साहब ने रख ली हैं कि सारी खिड़कियाँ, दरवाजे। तो वो सब बोलते बोलते उन्होंने गुलजार साहब के अंदर एक शब्द लिखा, बोला, वो है सीलन। तो मैं सुना, मैंने मुस्कुराया, मैं बोला बात तो सही है, अब हम जैसे लोग इतने देर से पैदा हुए हैं, ऑल थैंक्स टू आवर पेरेंट्स, तो हम क्या ही करेंगे। तो वो सीलन शब्द कहीं, सीलन का मतलब पता है? सीपेज बोलते हैं अंग्रेजी में। वो दीवार पे आपको एक है ना, क्या होता है कि दीवार पे जब वो लाइन दिखता है, कमिंग टू दिस डिप्रेशन थिंग आई एम टॉकिंग इन रेफरेंस टू डिप्रेशन, वो जो लाइन पड़ती है ना दीवारों पे, वो उस दीवार का लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर होता है। सालों पहले बाहर से पानी पड़ना शुरू होता है, वो ईंट के बीच से उसको तोड़ते हुए कतरा कतरा करके अंदर तक आया, तब जाके आपको घर के अंदर किसी दीवार पे सीलन दिख रही है। उसके बाद आप उस पर कोई भी रंग पोत लीजिए, वो उभर के बाहर आ ही जाएगा। आप ब्लैक करोगे वो ब्राउन लाइन दिखेगा, रस्टिक ब्राउन, पर वो दिखेगा ज़रूर, क्योंकि उसको जितना नुकसान होना था आपकी नज़र पड़ने के पहले हो चुका है। तो मैंने 4 लाइनें लिखी कि दीवार पे जब सीलन दिखती है तब मालूम पड़ता है कि कतरा कतरा कर पानी रिस रहा था अंदर ही अंदर धीरे धीरे कहीं। बहुत सिंपल है, समझ लेंगे आप लोग कि दीवार पे जब सीलन दिखती है तब मालूम पड़ता है कि कतरा कतरा कर पानी रिस रहा था अंदर ही अंदर धीरे धीरे कहीं। मुझे शक है कि ऐसा सिर्फ दीवारों के साथ होता है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। मैंने देखी हैं वो शक्लें हैं, मैंने देखी हैं वो शक्लें जो कतरा कर रह जाती हैं, आंखों से रिश्ती नहीं, अंदर ही अंदर टूटती हैं, दीवारों की तरह ही घुटते घुटते एक रोज वो भी ढह जाएंगी। तो ये हम लोग दीवार नहीं है ना, दीवार बोल नहीं सकते। हालांकि एशियन पेंट्स के ऐड में बोल सकते हैं, दीवारें भी बोलती हैं, मगर असल में दीवारें नहीं बोलती हैं, पर हम लोगों को भगवान ने ज़ुबान दिया है। तो अगर आप डिप्रेस्ड हैं, अब देखिए अभी बारिश का टाइम है, अभी इसके बाद ठंड आएगी, ठंड में जब हम लोगों को खराश होती है ना तो डॉक्टर और माएँ दोनों बात, बचपन में सबसे पहले एक बात बोलते थे, बेटा कफ आ रहा है तो थूको। सबको बोला गया है कफ को निगलो मत, कफ को थूको। डिप्रेशन ऐसे ही होता है साहब। तो अगर आपको डिप्रेशन की फीलिंग आ रही है तो एक बेसिन ढूंढिए, अपना भाई, अपना दोस्त, अपनी पत्नी, अपना पति, अपने पापा, अपनी मम्मी, जो आपको सुनने को तैयार है वो आपका बेसिन है। तो अगर डिप्रेशन फील हो रहा है तो एक बेसिन ढूंढिए और वो जो कफ अंदर जम रहा है ना, बलगम बनने के पहले निकाल दीजिए उसको। और अगर आपको डिप्रेशन की फीलिंग नहीं आ रही है तो किसी और का बेसिन बनो यार, क्योंकि आसपास कोई ना कोई तो है जो बेसिन ढूंढ रहा है। जब आप बोलना चाहते हैं तो कोई सुनना नहीं चाहता है, और जब कोई और बोलना चाहता है तो आप सुनना नहीं चाहते हैं। उस चक्कर में दीवार पे सीलन पड़ जाती है। तो उस दीवार पे सीलन ना पड़े उसके लिए ज़रूरी है कि हम दीवार ना बने, बोलें। तो मेरे लिए तो यही है। मैं जब बोलना शुरू किया तो मैं ठीक हो गया। 2014 में सुसाइड अटेम्प्ट किया था, इंदौर छोड़ के बॉम्बे गया। मुंबई में ये किताब लिखी जिसका नाम द हिडन हिंदू है, 3 पार्ट में है। महेंद्र सिंह धोनी साहब की कंपनी है, उस पर 3 पार्ट में फिल्म बना रही है। 7 फिल्में और हैं मेरे पास। देश का सबसे ज़्यादा बिकने वाला किताब है ये।
तो एक बार अगर आप डिप्रेशन से लड़ लेंगे, जब लगता है ना कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तब इंसान, बड़ा आसान है गौरव जी बोलना कि बुज़दिल होते हैं जो लोग जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, वो अध्यात्म की ओर अग्रसर हो चुके होते हैं, उनको लगता है कि अब दुनिया में मेरे लिए कुछ बचा नहीं है ना, तो उसके लिए हिम्मत भी चाहिए। हालांकि आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ व्हाट आई ट्राई टू डू, बट आप ये देखिए कि वो करके मैं जानबूझ के बचा, गलती से बचा, वो एक अलग डिबेट हो सकता है, पर बचने के बाद अगर मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ 33 साल की उम्र में अपना नया करियर ऑफ राइटिंग शुरू करके, तो आप लोगों के पास तो बहुत टाइम है यार। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस क्वालिफाइज फॉर द कंक्लूजन एज वेल। भास्कर जी वांट्स टू ऐड समथिंग। या सर, आपने बोला कि टूल्स अवेलेबल नहीं, सर ने डिप्रेशन वर्ड यूज कर लिया है और बहुत अमेजिंग एनालॉजी दी, थैंक यू सो मच। एंड मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, डिप्रेशन इज़ वेरी रियल। अगर आप लोगों के घर में कोई ऐसे बात करता है ये सब कुछ नहीं होता वगैरह वगैरह वगैरह, प्लीज़ उसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन या निमहांस की साइट पे ले जाके दिखाइए डिप्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, उन्हें समझ में आएगा। और यहाँ पे एक शब्द आपको देना चाहूँगा, साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक का मतलब है जो बदन पे हो रहा है ना वो दिमाग पे इफेक्ट डालेगा, और जो दिमाग के अंदर हो रहा है वो बदन पे इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। ये साइंस है। एंड स्पिरिचुअलिटी और साइंस कैन गो हैंड इन हैंड, क्योंकि मेडिटेशन की बात कर लो तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, रेकी इज एनर्जी एक्सचेंज, ये सारी चीजें, these things are firmly placed at the confluence of scientific findings and spirituality। तो इसको डिस्काउंट मत कीजिए। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आर रियल थिंग्स, और सिर्फ सूडो मोटिवेशन के जंजाल में मत फंसिए। और जैसे कि सर ने बोला कि आप अपने कंफर्ट जोन में रह के लोगों से बात कर सकते हैं, अदरवाइज देयर आर मेनी अदर टूल्स अवेलेबल आउटसाइड। काउंसलिंग एक सही चीज़ है, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट का बीच का डिफरेंस जानिए। अगर आपको डिप्रेशन है तो साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, और इसका डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल कन्वर्सेशन सर। थैंक यू भास्कर जी, थैंक यू अरुण जी, थैंक यू अक्षय जी, थैंक यू पंकज जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द इम्पोर्टेंट टूल्स फॉर माइंडफुलनेस। थैंक यू जी। जी, मैं जब दिल्ली आया था तो हमारी जब MBA का जब मैंने कंप्लीट किया, मैंने जॉब करने लगा, तो मुझे जॉब में बहुत स्ट्रेस आया, लगा कि मैं छोड़ ही दूं, और सच में मैंने छोड़ दिया। उस समय मुझे मेडिटेशन की एक लत सी लग गई थी कि मैं कमरे में बैठ बैठ के रात को 2-2 बजे तक ध्यान करने लगता था, कभी 12 बजे बैठा 3 बज गया। तो फिर थोड़ा सा ब्लैंक हो गया कि जॉब छोड़ के करेंगे क्या, और घर वाले भी गुस्सा करने लगे कि ये तो दिल्ली गया था पढ़ने के लिए और पढ़ाई छोड़ के अब ये क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं माइंड ब्लैंक होने लगता है, कि स्ट्रेस सा क्रिएट होने लगता है। मुझे बिलीव था नेचर पे, और मुझे बिलीव था लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, कि अगर मैंने लाइफ में जो सोचा है वो मुझे मिलेगा। कैसे मिलेगा ये मुझे नहीं पता था। नेचर ने मुझे एक रास्ता दिखाया, मुझे एक हाथ में एक ज्योतिष की किताब आ गई, मैंने उसको पढ़ने लगा और एक अलग सा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, शायद मेरे प्रारब्ध से कहीं रहा होगा। मुझे लगता है कि आपके अंदर की जो ऊर्जा जो दबी हुई है ये निकलती ही मेडिटेशन से है। ये आपकी आकाशवाणी थी। ये जो भीतर से जो निकलती है, जो हो सकता है प्रारब्ध के थ्रू आपके अंदर दबा हुआ है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ये निकलता ही तब है जब आप मेडिटेट करें, ध्यान करें। तब की जर्नी कैसी थी, लोग देखते थे, एज भी बहुत कम था, लोग सोचते थे ज्योतिष और वास्तु वाले तो बुजुर्ग लोग होते होंगे। उस समय मेरी एज जो थी 22 से 23 साल की थी, तो लोग कोई मानने को तैयार नहीं होता था कि इसे एस्ट्रोलॉजी आती होगी। तब से हमने जर्नी शुरू करी, लेकिन मुझे 2 चीज़ों पे हमेशा विश्वास रहा है। हमेशा ध्यान करें, 10 मिनट निकालें, क्योंकि योगा लाख कर लें वो बॉडी के लिए है, मेडिटेशन माइंड के लिए है। मेडिटेशन 10 मिनट जरूर करें, और साथ ही साथ जो भी चीज़ पाना चाहते हैं उस पर विश्वास करें और फोकस करके आगे बढ़ते चलें। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आपने शिद्दत से अगर उस चीज़ को चाहा है और अगर आपने ध्यान पे फोकस किया है तो वो ज़रूर मिलता है। हो सकता है थोड़ा विलम्ब हो, लेकिन हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया इसे। इसलिए काफ़ी सारे बुक्स भी पढ़े थे मैंने, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकल मैंने किया इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये 100% फैक्ट है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है। Great, thank you so much, thank you. So we'll conclude the panel discussion here. Thank you so much, everybody. Thank you for your peace of mind, or I'm sure everybody has learned a lot from you. Thank you. Thank you. And this discussion actually needs a very, very big round of applause for opening up such pertinent topics. And जितने candor के साथ सारे panelists ने अपनी कहानियाँ भी share करी, I think I have deep, deep respect for what all of you brought out in front of the audience. Thank you so much. Vivek ji, we would request you to please join us on stage one more time to honor all of our panelists. Can we have the mementos please brought onto the stage?
Vivek ji, please present a small token on our behalf to all of our panelists. Arun Tiwari ji. Arun Tiwari ji. Bhaskar Indrakanti ji. Acharya Pankaj. Akshat Gupta ji. And of course, we cannot forget Gaurav Tiwari ji for holding the discussion together so beautifully. And we have all the panelists together for a group picture with Shri Vivek Tankha. The applause can sound nicer than that. Let us put our hands together once more. And we will now move into the last discussion before we break for lunch. And this one is going to be super duper interesting because this is called Creators Unleashed, Understanding the Business of Content Creation. Without wasting any time, I would like to invite on stage all of our panelists, Naman Deshmukh, Ashutosh Pratihas, Ashish Urf Commerce Baba, RJ Ved and Aryan Tripathi. Can we have all of our esteemed speakers and guests on the stage, please? Along with all the speakers and these fabulous content creators, I would like to invite on stage our very, very articulate host and moderator, Anuj Pathak. Anuj, can we have you on the stage as well? Absolutely. This is one power-packed panel, I am sure. And while the panel settles down, I will just take a moment to introduce all of our panelists to you. I will begin by introducing Ashutosh Pratihas, who is a prominent figure in the startup and influencer world. As the founder and CEO of iDigitalpreneur, he has carved a niche as a renowned public speaker, author, investor, and mentor. His substantial online presence with over 5 lakh YouTube subscribers and 2 lakh Instagram followers underscores his influence and ability to connect with the youth of the nation. Ashutosh, so glad to have you on the stage with us today. Please put your hands together for him. I move on to our next panelist, Naman Deshmukh, who is popularly known as Tech Plus Gadgets and is a rising star in the world of modeling and social media. Hailing from India and now based in the United States, he has garnered widespread fame as a fashion model with notable presence on Instagram with over 138,000 international followers. His YouTube channel with 122,000 subscribers further cements his status as a notable online influencer. Naman, so glad to have you amongst us today. Thank you for making time for us. I would now like to introduce Ashish Chaudhary, who is a mentor, educator, content creator, and an entrepreneur. He's famously known as Commerce Baba on the internet. His career started off as a teacher at the age of 18 and to now becoming a YouTube sensation by carrying out various experiments in the education sector. Since then, he's been teaching and exploring India in search of the unique opportunities life presents, sharing his insights on anything from starting a business to becoming financially secure to discovering and pursuing your true calling. Very, very dynamic, very multifaceted. Ashish, welcome on the stage. Thank you for being with us.
We of course also have with us RJ Ved, who is a radio jockey by profession and hosts evening shows on 94.3 My FM. He is very popular and known for his reels on Rani Kamlapati railway station, Bhopali Metro and so much more. I'm sure you recognize him. Ved, thank you for being with us on the stage. And have I introduced everyone? Have I left? Yeah, I'm sorry, it is a very, very big panel. Who have I missed? Aryan, yes. So Aryan he started his career as a digital content creator and YouTuber, posting tech-related videos for his audience. And soon after, he founded Adamize, an advertising agency that has collaborated with big brands, influencers, and with influential people. Aryan's expertise in the realm of digital marketing led him to launch LearnMize, which is an edtech platform that provides online education in the field of digital marketing to students all across India. Aryan, apologies and welcome onto the stage. Thank you for being with us. And our moderator for this panel, who you've been seeing all through the morning, is Anuj, who has been into the field of radio and hosting and comparing since the last 8 years. He has been hosting regular shows at Doordarshan named Good Morning MP and started his freelancing hosting career since 7 years. And as much as I can say about him, I think his skills stands testament to himself for all he has been doing here since the morning. Anuj, over to you. Let's have a powerful panel. Absolutely, thank you so much, Soumya. एक बार तालियां बनती हैं जोरदार सौम्या के लिए भी. And before I start, guys, एक सवाल बहुत सिंपल सा. आप में से कितने लोग हैं जो स्मार्टफोन यूज करते हैं? बिल्कुल, किसी व्यक्ति का हाथ ऊपर नहीं आए तो वो वास्तव में एक बात सोचने के लिए होगी कि आप एक्चुअली दुनिया से बहुत अच्छे से अपने आप को संभाल कर रखा है. बट अब एक सवाल, आप में से कितने लोग हैं जो सबसे पहले सुबह उठकर फोन देखते हैं? राइट, बहुत बढ़िया. आज से पहले कुछ सालों पहले तक अगर ये सवाल मैं पूछता तो बात होती कि हाँ, हम सबसे पहले अपने चेहरे को देखते हैं, हम अपने माता पिता को देखते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं. लेकिन अब वो समय आ गया है जब कुछ और हो ना हो, सबसे पहले दुनिया व्हाट्सएप खोलती है, इंस्टाग्राम की रील्स खोलती है, या फेसबुक पर जाती है, और या फिर लिंक्डइन पर जाकर कुछ इंस्पिरेशनल वीडियोस देखती है. अब दुनिया बदली है. हमने आज तक इंस्टाग्राम को, फेसबुक को और इन जगह को ऐसे देखा था जहां पर आप टाइम वेस्ट करने की जगह है. मम्मियां अपने बच्चों को बोलती थी, क्या कर रहा है फोन में, क्या देखा जा रहा है, कुछ और जिंदगी में करना है कि नहीं. ये सब सुनने को मिलता था. पर अब दुनिया बदली है. कुछ पिछले 5-6 सालों से जब आप बात करते हैं तो अब सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन एक बिजनेस फॉर्मेट में बदल कर आया है. जिन्होंने इसे इस रूप में बदला है और एक असली सही उपयोग करा है इकोनॉमी को और बूस्ट करने के लिए और भारत को डिजिटल एम्पावर्ड बनाने के लिए एक बहुत बड़े कदम लिए हैं. ऐसे क्रिएटर्स हमारे साथ हैं. एक बार तालियां बनती हैं आप सबके लिए. अब मम्मी भी और पापा भी बड़े प्राउडली कह सकते हैं कि हाँ, मेरा बेटा रील्स बनाता है और कुछ अच्छा काम करता है. सो यस, स्टार्टिंग ऑफ विथ द फर्स्ट पैनलिस्ट विद अस, नमन मेरे साथ हैं. नमन, मैं पहले तो उनसे बहुत रिलेट करता हूं खुद को, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूं, उसके बाद एक आर्टिस्ट बन के स्टेज पर उतर गया. और वास्तव में कहा गया है कि एक इंजीनियर वही होता है जो 4 साल बाद क्या कर लेगा उसको खुद पता नहीं होता, और वो इस तरीके से अपनी जर्नी को तय करता है. और वैसे ही कुछ हमारे साथ एग्जाम्पल सामने होंगे. टू स्टार्ट विथ नमन, मतलब सबसे बड़ा कदम आज के समाज में दुनिया क्या कहेगी को छोड़कर आपने अपनी 4 साल की सफल एमएनसी की नौकरी को छोड़ दिया और उसके बाद आप आ गए कंटेंट क्रिएशन में. और अब जब आप आ चुके हैं तो आपके 7 मिलियन प्लस फॉलोअर्स अक्रॉस सोशल मीडिया बन चुके हैं. आप 2.9 फेसबुक फॉलोअर्स हैं, 2.5 मिलियन यूट्यूब पर फॉलोअर्स हैं, और अब आप पैशनेटली अपने हर वीडियो में एवरेज 2 मिलियन प्लस व्यूज पाते हैं. नमन, बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. समाज को कैसे दूर रखकर आपने मम्मी पापा को कैसे कन्विंस किया अपनी एमएनसी की फुल टाइम अच्छी खासी आईटी की नौकरी छोड़कर? क्योंकि मम्मी तो कहती है ना कि बेटा कोई लड़की नहीं देगा अगर नौकरी नहीं है तो. सेम मेरे से ये चीज़ बोली गई थी. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. एंड ये चीज़ मुझसे बोली गई थी जब मैं अपनी जॉब को क्विट कर रहा था. मैंने 2022 मार्च में अपनी जॉब क्विट की थी. एंड मैं अच्छा खासा डेवलपमेंट की जॉब कर रहा था, बेंगलोर में था, सैलरी वगैरह भी ठीक ठाक थी. बट एट द टाइम व्हाट आई थिंक कि 2019 से मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर दी थी. एंड आई यूज्ड टू क्रिएट वीडियोस ऑन यूट्यूब जहाँ पे मैं टेक गैजेट्स इन सब के बारे में हम जो है रिव्यू करते थे, लोगों को उनके प्रोज एंड कॉन्स बताते थे, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए सारी चीज़ें. तो तब से ही जो है स्टार्ट कर दिया था. बट द थिंग इज़ कि मेरा पैशन हमेशा से जो है वो टेक को लेके ही रहा है, इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की.
एक डेवलपर बना, वो भी एक पैशन को लेके ही किया। लेकिन जो टेक्नोलॉजी होती है, जो कंज्यूमर बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है, उस पर मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था शुरू से ही, और उसी चीज़ को मैंने जो है अपनी हॉबी में, अपने पैशन को लेके जो है जॉब के साथ साथ ही जो है अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट किया। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी जॉब जो होती थी वो 9-10 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना रहता था। शाम तक हम लोग जो है अराउंड 8-9 बजे तक घर आते थे, मतलब घर में आता था, उसके बाद मैं वीडियोस बनाता था, खुद ही एडिट करता था। अभी हालांकि हमारी अच्छी खासी टीम है, बट एट द टाइम आई एम दी ओनली पर्सन जो सारे काम हम करता था। रात को 2-3 घंटे सोए, फिर उसके बाद अगले दिन फिर से ऑफिस निकल लिए। तो ये रूटीन मेरा 2 से 3 साल रहा। बट जब से कोविड हिट हुआ और जब लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जैसे कि सबको पता है कि स्टार्ट हो गया, और उसके बाद से टाइम ज़्यादा मिल गया। और टू बी ऑनेस्ट वो टाइम बहुत ही कह सकते हैं कि अप्स एंड डाउन से रिलेटेड था, क्योंकि मेरी मदर जो है वो एक स्टाफ नर्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उनको जाना पड़ता था अपने जॉब के लिए। तो उस वजह से मुझे मेरे फादर को, मेरी बहन को 2 से 3 बार कोविड हुआ। ऑलमोस्ट हर वेव में हम लोगों को कोविड होता था, क्योंकि नॉर्मल हो गया था वो एक वेव के बाद में, क्योंकि वो मम्मी जाती थी, उनको जाना ज़रूरी रहता था। तो बट वो टाइम ऐसा था कि उस टाइम पे मेरे को बहुत कुछ सोचने को मिला कि यार अब जो है इस चीज़ को एक तरीके से फुल उस पर हम लेके जा सकते हैं। एंड बहुत सारे लोग हैं जो शायद अपने जॉब के साथ साथ में पैशन को फॉलो करते हैं, और उनके दिमाग में भी ये डाउट आता होगा कि यार हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, इतना अपना फुल टाइम 10 घंटे 12 घंटे देते हैं, क्यों ना हम अपने लिए खुद करें। तो वो दिमाग में थॉट था। लेकिन एज अ मिडिल क्लास फैमिली से जब हम बिलोंग करते हैं, तो वो एकदम जो एक होता है ना कि एक चंक ऑफ मनी जो हमारे हर मंथ हमारे अकाउंट सैलरी में आ रहा है, अकाउंट में गिर रहा है, उसको हमें छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल सा होता है। वही सेम मेरे साथ हुआ था। बट 3 से 4 साल तक मैं कंटिन्यू दोनों चीज़ों को संभालता गया। बट एक टाइम ऐसा है कि लोग कहते हैं ना कि यार कब तक 2 नाव पे सवार करके चलोगे, या तो एक पे आ जाओ या फिर दोनों ही छोड़ दो, ऐसा चीज़ हो गई थी। तो उसके चक्कर में जो है मैंने फिर डिसीजन लिया कि यार चलो छोड़ते हैं, अपन फुल टाइम इसको करते हैं। एंड ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ को लेके कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं लाइफ में, क्योंकि उनको पता है कि यार ये कुछ ना कुछ तो कर लेगा। स्टार्टिंग से उनको ऐसा बिलीव करके रखा हुआ था मैंने, तो इस वजह से उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। थोड़ा बहुत बोलते थे कि यार अच्छी खासी जॉब थी, ऐसा सब, वो तो जो नॉर्मली सभी बोलते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट उसके बाद से जो है हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और उसके बाद हम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह आए। इंस्टाग्राम पे जब रील का वेव आया, उस टाइम पे हम लोगों ने जो है वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। काफ़ी सारा प्यार हमें ऑडियंस की तरफ से मिला। राइट नाउ हम लोग इसी साल हम लोग बात करें तो हमने 4 महीने में ही जो है 1 मिलियन टच कर गए थे। लेकिन अगर 2023 की बात करें तो हम 2 मिलियन प्लस और हो चुके हैं, अराउंड 3 मिलियन हम हो चुके हैं। फेसबुक पे हम लोग 3 मिलियन प्लस है, यूट्यूब पे हम 3 लाख प्लस है। तो इस वजह से अब वो एक कॉन्फिडेंस आता गया, और अब जो है यही है जो है, अब यही करना है, पैशन को ही फॉलो करना है। और यहाँ पे ऐसा ना कि जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो तो आपको टाइम उस सब का फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले जब मैं सोचता था कि यार मैं 10-12 घंटे काम कर रहा हूँ तो मैं ठीक है, इतना अपना जब खुद का करूँगा तो मेरा वो रहेगा। बट सच बताऊँ, अब मैं 24 आवर्स जो है काम करता हूँ, 24/7, जब भी देखो, जब मेरे दिमाग में वही चलता रहता है। सो इट्स समटाइम इट्स ईजी, बट ऑब्वियसली आपका पैशन अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वो ईजी हो जाता है आपके लिए। एडिंग ऑन टू दिस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप वो हैं जिन्हें इंडिया टीवी से लेके सभी प्रोमिनेंट चैनल्स फीचर कर चुके हैं अपने चैनल्स पर। सो एक बार तालियां बनती हैं जोरदार नमन के लिए। नमन, एक सवाल इसी में ऐड ऑन करते हुए आपसे पूछूंगा, बहुत क्विक जवाब आपसे चाहूंगा कि लोग या हमारे जो यूथ हैं उन्हें अभी ये कहना कि इसे एज अ फुल टाइम करियर बनाना, इससे उतने अच्छे अर्निंग करना, क्या ये टाइम सही आ गया है, या वी शुड वेट मोर फॉर इट कि अभी टाइम सही आएगा? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट टाइम टू टेक इट एज अ फुल टाइम करियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली द थिंग इज कि पहले आप लोग सुना होगा कि आज से 2-3 साल पहले इंजीनियर्स की काफ़ी वेव थी, हर कोई इंजीनियर्स बनना चाह रहा था। लेकिन आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर्स की वेव आप देख रहे हो। सबको जो है पता पड़ने लगा है कि ये रियल बिजनेस है। यहाँ पे हम सिर्फ फेमस नहीं हो सकते, हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, हम पैसा कमा सकते हैं, और वो सारी चीज़ होने के बाद हम अपने बिजनेस को और इंक्रीज कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन का अगर जवाब दूँ, ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो मैं ये बोलूँगा कि आप अपना सब कुछ छोड़ के जो है इस फील्ड में एकदम से ना घुसें, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने रिस्क नहीं लिया। मैं जॉब करता था, उसके साथ में किया। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी, बट धीरे धीरे करके आप वो चीज़ों को कर सकते हो। बट टू बी फ्रैंक, ऑब्वियसली ये 100% सेफ है,
कि आप कैसे कर रहे हो, बट एक चीज़ है कि आप किसी और को देख के कंटेंट क्रिएशन में मत उतरना, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इज़ लाइक कि आपकी जो नीश है, आपको जो पसंद है, जैसे मैं हूँ, मेरे को टेक बहुत पसंद है, तो मैं टेक के बारे में बहुत सारा कंटेंट बना सकता हूँ दिन भर। आप मुझे स्टेज पे बोलोगे तब भी मैं एक स्क्रिप्ट लिख के आपको दे दूंगा 5 मिनट के अंदर। बट अगर मेरे को बोले कोई कि फैशन रिलेटेड कंटेंट बनाओ, फूड रिलेटेड कंटेंट बनाओ, तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा पैशन नहीं है। तो अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, अगर आपको इसी को सब कुछ बनाना है, तो आप ऐसी फील्ड में उतरिए जहाँ पे आपका नीश हो, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही है कि बट आपका जब मतलब क्वेश्चन का जवाब यही है कि ऑब्वियसली ये एक अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है। हम भी उस चीज़ में कर रहे हैं। हम बड़ी बड़ी ब्रांड, सैमसंग हो गया, शाओमी, सारी जितनी ब्रांड्स है स्मार्टफोन्स रिलेटेड, टेक रिलेटेड, उनके साथ हम काम कर रहे हैं अभी। तो डेफिनेटली अप्रोचेबल है, काफ़ी ज़्यादा बिजनेस भी अच्छा ग्रो होता है, टीम अभी हमने बनाई है, तो यस, ये पूरी तरीके से सक्सेस है। ग्रेट। अब मैं अगले सवालों पर बाद में आऊंगा, बट थैंक यू सो मच नमन। मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे बीच एक और ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने एजुकेशन को एक नया रूप दे दिया है। हम सभी जानते थे कि एजुकेशन ने कितने ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं, और पढ़ने, पढ़ाने और सिखाने के लिए यूट्यूब हैज बिकम वन ऑफ दोज अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स जिसे लेवरेज और बहुत अच्छे से यूज किया हमारे बीच आशीष चौधरी जी, आका कॉमर्स बाबा ने हमारे साथ हैं। सभी की तालियां चाहिए एक बार जोरदार, जिनकी फॉलोअरशिप अपने आप में, उनके नंबर्स उनकी सक्सेस को बताती है। एजुकेशन में आजकल यूट्यूब पर आने वाले सभी पढ़ाने के तरीके जो कि बहुत ही जनता से जुड़े हुए होते हैं, यूथ के साथ, उनकी बातों के साथ होते हैं, ट्रेंड को फॉलो करते हुए होते हैं, और टीचिंग मेथड भी बड़ा ही फन, एंगेजिंग होता है। आप जो कि मात्र 18 साल की उम्र से ही आपने शुरुआत कर दी टीचिंग की। जब इंसान खुद सोचता है कि उसे फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है, तब आपने सोच लिया था कि आप टीचिंग के फील्ड में आगे बढ़ेंगे। पर इस फील्ड में आना, यूट्यूब पर एजुकेशन को लाना, आप भी उसमें एक बड़ी योगदान आपका माना जाता है। ऐसे बहुत क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब पर अपने चैनल के जरिए लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, उन्हें अच्छा खासा गाइडेंस दे रहे हैं। सो सर, आप पर आते हैं। इस जर्नी के साथ साथ एजुकेशन के ट्रांसफॉर्मेशन को आपने देखा है। हाउ डू यू सी यूट्यूब एंड वहां से जनरेटिंग इनकम, वो किस तरीके से खास होती है? देखिए, यूट्यूब पे सभी जानते हैं कि यार भाई पैसा बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है, बट ये रियलिटी और जो सच है, मतलब मैं सब पर आने वाला था कि जो एक अंकल आके घर में पूछते हैं कि बेटा कितना कमा लेते हो, तो ये सवाल पर हम आएंगे, पर आप पर भी आते हैं सर कि हाउ डू यू थिंक अबाउट इट? जनरली जो हम देखते हैं कि YouTube से पैसा आ रहा है, मैं आशुतोष सर के साथ इसलिए बैठा हूँ, आज मैं उनसे भी इसी बारे में बात करूँगा। मोनेटाइजेशन से कुछ पैसा नहीं है। तो देखिए, मैंने जब शुरू की थी अपनी जर्नी, जब मैं 18 साल का था, तो मेरे को एक चीज़ पता था कि पापा पॉकेट मनी नहीं देंगे। घर पे अपन नहीं, लड़के होके अपन पैसा नहीं मांग सकते। पापा का पहला क्वेश्चन होगा चाहिए क्यों, और आंसर नहीं होता था कि हमें पैसा क्यों चाहिए। तो मुझे मालूम था घर से पैसा नहीं लेना है, तो क्या तरीका बेस्ट है जिससे हम कमा सकते हैं। मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो मुझे पता था कि मैं पढ़ाऊंगा तो मैं पैसा कमा लूंगा। यानी मैंने वो होम ट्यूशन्स लेके शुरुआत कर दी थी कि किसी तरह पैसा, मतलब सोशल मीडिया, यूट्यूब ये उस टाइम पे था ही नहीं, और ना मैंने कभी सोचा था कि मैं इस इंडस्ट्री में उतरूंगा। इट वॉज मोर अबाउट कि मेरे को बस पैसा कमाना है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी चालू करना है। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एक चीज क्लियर थी कि पैसा कमाना है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। आज हम जो मेन प्रॉब्लम देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर कल्चर इतना ज्यादा है, बट फिर भी जो कमाने वाले लोग हैं वो बहुत कम है। वो इसलिए हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंस होकर आ रहे हैं इस मार्केट में। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि पैसा कमाना है, उन्होंने देखा दूसरा कर रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है, मैं भी पैसा कमा लूंगा। ये बहुत ईजी तरीका है, ईजी मेकिंग मनी है, मनी मेकिंग तरीका एक पैटर्न बन चुका है। लेकिन एक चीज समझना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है, जो मैं भी कर रहा हूं एजुकेशन सेक्टर में, जिस तरह से ग्रोथ की है, आपको डिसाइड करना जरूरी है कि आप किस तरह से पैसा कमा सकते हो। अब उसका मैं आपको पैटर्न समझाता हूं। जैसे मैं यूट्यूब पे जब आया, मैंने 2 साल सिर्फ फ्री में पढ़ाया, क्योंकि मेरे को मालूम था मेरे को ब्रांड वैल्यू स्टैब्लिश करनी है, मेरे को गुडविल स्टैब्लिश करनी है। मैं बात कर रहा हूँ 2017-18 की, जब कोई पैसा देने को तैयार नहीं होता था, स्पेशली ऑनलाइन में तो बिल्कुल नहीं। कोविड के बाद सिनेरियो बहुत अलग हो गया, लेकिन उससे पहले नहीं था। तो मुझे पता था कि मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, एक इमेज बनानी पड़ेगी, एक उनको कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म बना के देना पड़ेगा जहां उन्हें मालूम है कि बेस लेवल तक तो उन्हें एजुकेशन मिल रही है। वो ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस था। अब इधर से ही जब मैंने शुरू किया, उनसे बोलना कि यार ठीक है, अब ये कुछ कोर्सेज हैं जो मैं ऑफर कर रहा हूं, क्या तुम पढ़ना चाहोगे? आप कभी भी मोनेटाइजेशन में ये नहीं सोच सकते कि आप एकदम से रैंडमली बहुत पैसा मांगना चालू कर देंगे। एजुकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। जिस दिन मैं ये समझ गया था, मैंने जिस दिन से एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करना चालू कर दिया था, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे आई रियलाइज्ड कि दिस इज नॉट द ओनली वे थ्रू विच आई एम गोइंग टू अर्न माई इनकम। तो अगेन मेरा दिमाग फिर क्या चलने लगा, ठीक है मैं एजुकेशन में बहुत अच्छा हूं, एक प्लेटफॉर्म मैंने बहुत अच्छा खड़ा किया है, यहां से अर्निंग हो रही है, बट आई नो ये इनफाइनाइट नहीं है।
आप इससे फॉरएवर, ऐसा नहीं है कि हमेशा आप आने वाले 20-25 साल इसी से पैसा कमाएंगे, क्योंकि अकेले आपको ही काम करना पड़ेगा, बच्चा आपके फेस से ही फेमिलियर है। फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग की साइड उतरा, मैं प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन में उतरा, जहां से मैंने एक अपना डिफरेंट बिजनेस चालू किया बनाना, एंड वहां से फिर रिसोर्सेज मैंने एजुकेशन में लगाना चालू किए या अपने पैशन में लगाना चालू किए। मतलब होल्स ओवर अगर मैं आपको एक जिस्ट बताऊं तो जो भी आज काम चालू करो, क्योंकि जनरली हम मेहनत से क्यों भागते हैं, हम किसी स्पेसिफिक डिग्री से क्यों भागते हैं, हमें मालूम है कि उसमें बहुत घंटे लगने वाले, साल लगने वाले, बहुत टाइम लगने वाला है। जहां से भी अच्छे से पैसा जल्दी आ जाए वो कर लेते हैं, 4 वीडियोस बना के डाल देते हैं, अगर वहां से पैसा आ गया तो मालूम है कि लाइफ टाइम पैसा आ जाएगा। अगर आप इस माइंडसेट के साथ जा रहे हो तो आप कभी नहीं कमा पाओगे। आप अगर इस माइंडसेट के साथ जाते हो कि कल मेरे को अगर ये चीज छोड़नी पड़ी और मैं दूसरी चीज को अगर मुझे शुरू करना पड़ा जिसमें मेरे को पैसा मिलेगा, तो आपको उस चीज के लिए पहले से तैयारी करके रखनी है। दैट मीन्स आप अगर अपनी लाइफ में आने वाले 15 साल के लिए करियर ऑप्शंस देख रहे हो तो आपको 2 से 3 स्ट्रीम्स अपनी चूज करके चलना चाहिए जहां से आप पैसा कमाओगे, बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। अगर एक चीज आपको पैसा कमा के दे रही है तो बट फॉर श्योर ऐसा होने वाला है कि दूसरी चीज पैसा डिमांड कर रही होगी, ना कि कमा के दे रही होगी। वेल सेड एंड एब्सोल्युटली वेल सेड कि हमेशा बैकअप और प्लानिंग जरूरी है। आप एक्सीडेंटली हर जगह पर, हमेशा आपका वो एक्सीडेंट हिट नहीं हो सकता या आपका किया हुआ काम हिट नहीं हो सकता। इसी जर्नी में आगे बढ़ते हुए अब मैं बात करूंगा हमारे बीच रेडियो जॉकी वेद, आरजे वेद हमारे साथ हैं। रेडियो हैज चेंज्ड इट्स वेज, मतलब जहां पर हम पहले कहते थे कि रेडियो सिर्फ सुनाई देता है, लेकिन अब रेडियो दिखाई देता है, जहां पर खुद आरजेज एक क्रिएटर बन चुके हैं। मे इट बी दी एंटरटेनिंग वीडियोस, कुछ इन्फॉर्मेशन की बात देने की बात हो, या अपने शहर को बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ पेश करने की बात हो, तो जिस तरीके से आपने भोपाल को पेश किया है, मे इट बी दी रानी कमलापति स्टेशन की रील की बात हो जो बहुत वायरल हुई, बरसात की बात हो, और या फिर हम बात करें ऐसे कई सारे वायरल रील्स की हम बात करें। दुनिया वायरल होना चाहती है, लेकिन क्रिएटिविटी पर जब बात करते हैं तो वो शायद कहीं ना कहीं डेड हो जाती है और फिर वो लगातार नहीं हो पाती। एंड व्हेन इट कम्स टू रेडियो, आप तो एक ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं जहां पर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने आप आती हैं। मैं ये सवाल इसलिए आप तक ला रहा हूं क्योंकि आज बहुत जरूरी है कि इंस्टाग्राम का एक क्रिएटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और कैसे उसे यूज करे अपने अर्निंग सोर्स तक लाने में, और किस तरीके से उसे इतना क्रिएटिव बनाए कि जनता उससे भी एंगेज हो। वरना आज क्या होता है कि कोई भी क्रिएटर पर अगर हमने कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट देखा उसका कि वो किसी ब्रांड को एंडोर्स कर रहा है तो तुरंत उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, अरे अब तो ये पेड काम करने लगा। ये मेरे ख्याल से आप सबने फेस किया होगा कि अरे भाई साहब अब आप भी पैसों के लिए काम करने लगे, विच इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी जो आपको करना है। और इंसान तभी कहता है कि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हमारे क्रिएटर्स बन रहे हैं। वेद, इस पर आपका मैं कमेंट चाहूंगा, कैसे आप इसको देखते हैं और किस तरीके से एक क्रिएटर को ही काम करना चाहिए? मैंने रेडियो लगभग 8-9 साल कर लिया है ऑलरेडी। बिल्कुल। रेडियो में रह करके एक चीज़ ये तो समझ आ गई कि देखो क्लाइंट की बेसिक नीड ये होती है कि सपोज अगर सोशल मीडिया की भी बात करूं कि आप 30 सेकंड की एक रील अगर जो चाहते हैं, क्लाइंट आपसे चाहता है, तो वो ये कोशिश करेगा कि 10 बार आप उनका नाम ले लो कम से कम। आप कुछ मत करो, कोई कंटेंट मत डालो, आप उनका नाम लेकर के बैठ जाओ, बार बार रटते रहो, वो सबसे ज़्यादा खुश होंगे। आपकी जिम्मेदारी, जैसे अपने जिम्मेदारी वाली बात बोली कि जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं वो आपको अनफॉलो करते हुए वक्त नहीं लगाएंगे। एक सिंपल क्लिक एंड देन खत्म कि अब वो आपको फॉलो नहीं करेंगे, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्वियसली वो एक जर्नी है, वो ज़रूरी है कि आप पैसा कमाएंगे उस प्लेटफॉर्म से, उसके बाद में ही आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उस ऑडियंस के लिए भी है जो आपको फॉलो कर रही है, जो आपको आपके कंटेंट के लिए फॉलो कर रही है, किस तरह का कंटेंट आप बनाते हैं। तो एक ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस चीज़ को समझें कि सिर्फ पैसे के लिए आप एकदम ही पेड कंटेंट ना बना दें। रेडियो में एक टर्म होता है आरजे मेंशन। आरजे मेंशन नॉर्मल एड से इसलिए अलग होता है क्योंकि आरजे उसको अपनी स्टाइल में प्रेजेंट करता है, अपने कंटेंट में उसको इंटीग्रेट करके प्रेजेंट करता है। तो जब भी आपके फॉलोअर्स आपका वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको कुछ तो मिले आप अपने कंटेंट में। और सबसे पहले आप ये पहचानिए कि आप किस तरह का कंटेंट करते हैं, कौन सा ब्रांड आपके साथ में जेल करेगा। तो अगर जो आप ये पहचान लेंगे और उसी तरह का ब्रांड लेंगे, आपके कंटेंट में इंटीग्रेट करेंगे। जाकिर को कितने लोग फॉलो करते हैं, कितने लोगों ने देखा है जाकिर खान को? मैक्सिमम लोग हैं। जाकिर खान ने कुछ दिन पहले एक रील शेयर की थी जो गूगल के साथ में थी। आई थिंक उससे बेहतर स्मार्ट इंटीग्रेशन हो नहीं सकता। वो इंसान जब भी कोई प्रमोशनल पोस्ट भी करता है तो भी इतना दिमाग लगा के, और उसमें जाकिर का एसेंस रहता है। तो क्लाइंट फर्स्ट नहीं हो, आपका कंटेंट फर्स्ट हो और क्लाइंट का एसेंस उसमें रहे कि इतना स्मार्टली आप इंटीग्रेट कर लो। देखो अल्टीमेटली सबको धंधा चलाना है, सबको पैसा कमाना है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, उनको निराशा दे रहे हो। तो कंटेंट में अगर आप स्मार्टली इंटीग्रेट करते हो
तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, इंस्टाग्राम का एक टैग है पेड पार्टनरशिप विद वाला, एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको आप यूज़ करें ताकि जो ऑडियंस है उसको पता रहे कि आप पेड पार्टनरशिप में कर रहे हैं। अदरवाइज जैसा अभी आपने बोला कि फिर यही हो जाएगा कि यार ये तो बिके हुए ही पोस्ट करता है सारे के सारे, तो वो टैग ना लगे, कंटेंट का लगा रहे कम से कम। वेल सेड, थैंक यू सो मच वीर फॉर योर अमेजिंग कमेंट ऑन दिस। मैं सभी की तालियां चाहूंगा और अब आगे बढ़ते हुए हमारे बीच एक वो शख्सियत है जो कि ऑनरेबल विवेक तनखा सर के सपने को भी पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहा है कि कैसे एक इन्फ्लुएंसर एंटरप्रेन्योर बनता है और किस तरीके से वो जॉब्स क्रिएट करवाता है और करता है। आर्यन हिमसेल्फ जो कि स्टार्टिंग में एक इन्फ्लुएंसर रहे हैं और उसके बाद बढ़ते बढ़ते कैसे उन्होंने इस जर्नी को एक एंटरप्रेन्योरशिप में बदला है, जो कि उनके 2 स्टार्टअप्स एडिमाइज एंड लर्नमाइज अपने आप में अब एक बहुत बड़ा नाम पूरे इंडिया भर में बन चुके हैं। इनके स्टूडेंट्स केवल भोपाल नहीं, सेंट्रल इंडिया नहीं, पूरे इंडिया भर में हैं। आप कई जगह पर सेशंस लेने जाते हैं ऑन द इन्फ्लुएंसरशिप एंड ऑल्सो द वेरियस हाउ कैन एनीबडी अर्न थ्रू इंटरनेट। सो आर्यन, स्वागत है आपका। ये जर्नी मेरे ख्याल से आप सही सबको बता पाएंगे कैसे एक इन्फ्लुएंसर अर्निंग सोर्स को बढ़ा सकता है और कितने सारे वेज हैं इस फील्ड में इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होल्ड पाने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आज सबसे बड़ा क्वेश्चन जो एक इन्फ्लुएंसर का रहता है वो कहीं ना कहीं एक तरह से आ जाता है कि पैसे कैसे कमाएं। क्योंकि जैसे आशीष भैया ने भी अभी मेंशन करा कि मोनेटाइजेशन से उतना पैसा नहीं आ रहा है, तो पैसा आता कैसे है। तो सबसे पहले हम साइकोलॉजी सबसे पहले समझें। तो कभी भी जब भी हमें पैसा कमाना है तो हमें कुछ एक प्रोडक्ट या एक सर्विस बेचना पड़ता है। प्रोडक्ट एंड सर्विस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वाइट लेबलिंग और बहुत सारी चीज़ आ गई हैं। बट एक बिजनेस जब ही चल पाता है जब उसमें सेल्स होती है, जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा सेटअप रहता है। और आज की न्यू एज में सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंसर्स हैं। सो आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सुना होगा, डिजिटल मार्केटिंग सुना होगा, और उसी को जब हम लोग कर रहे थे स्टार्ट, यूट्यूब पे मैं 300 से ज़्यादा वीडियोस डाल चुका था। मैं भी टेक गीक रह चुका हूँ, मेरा भी एक चैनल हुआ करता था टेक ऑप्टिमाइज़र, बट मैंने बहुत पहले गिव अप कर दिया था नमन भाई के लिए तो उसमें मेरे पास फ़ोन तो आते नहीं थे, तो जस्ट फोटोज़ निकल के आते थे कि रेडमी का ये फ़ोन लॉन्च हुआ है। तो मैं भी जिसकी वीडियो आई है पहले मैं वीडियो देखता था, उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया करता था। बट इस जर्नी के बीच में ये समझ में आ गया कि इससे पैसे नहीं कमाने वाले हैं। कभी भी एक इन्फ्लुएंसर वीडियो से कभी भी पैसा नहीं कमा सकता है। वो कमाता है अपना प्रोडक्ट बेच के या फिर किसी और का प्रोडक्ट बेच के। आप ब्रांड इंटीग्रेशन देखते होगे, जैसे भैया ने भी बताया कि उनके पास इंटीग्रेशन आ रहा है। तो कोई ब्रांड जब एक इंटीग्रेशन दे रहा है वो कम से कम 10x रिजल्ट आपको दे रहा है। और ये साइकोलॉजी मेरी निकली यूट्यूब से, जब मैं 300 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका था। तो यूट्यूब कैसे पैसा कमा रहा है, ये जो बड़े बड़े टेक्निकल चैनल होते थे, टेक्निकल गुरुजी हुआ करते थे, उनको फ़ोन्स आ रहे हैं, वो कैसे पैसे कमा रहे हैं। तो पीछे एक निकल के आया कि ब्रांड्स हैं, ब्रांड के पास सबसे बड़ी ताकत रहती है कि वो यूट्यूब को भी अपना कट दे देता है 45% का, अपने क्रिएटर को भी दे देता है, और उसके बाद भी वो प्रॉफिट बना ले रहा है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी दे रहा है, ऑफिस का रेंट भी दे रहा है। सो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट और उसकी बात आई, फिर धीरे धीरे मैं शिफ्ट हुआ, वो जो यूट्यूब का टैग था उधर से निकल के डिजिटल मार्केटिंग में आए, क्योंकि ये पता चल गया था कि बेचना सीखना है। प्रोडक्ट्स बहुत सारे थे और उसी तरीके से निकला। सो अगर आप देख रहे हैं कि आपको एक पैसे कमाने हैं, आपको आपका ब्रांड लॉन्च करना है, सो प्रोडक्ट वाइट लेबल हो सकता है, सर्विस आउटसोर्स हो सकती है। बट अगर आप खुद में एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, सो आप डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप कर रहे हैं जो कि बाकी बिजनेसेस के पास नहीं है, जिससे एक्चुअल में सेल्स जनरेट होती है। सो यस, इन्फ्लुएंसर बन के आपका जो ये मार्केटिंग का पैसा है, सेल्स का पैसा है, जो खर्चे बोलते हैं एक्चुअल में, जो कि इन्वेस्टमेंट होती है, आप वो खुद में बचा सकते हैं और एक अच्छा खासा कैश फ्लो आप प्रिपेयर कर लेंगे, जिससे आप आगे एक बहुत अच्छा सिस्टम बना पाएँ और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएँ। थैंक यू आर्यन। इतनी यंग एज में इतने एक्सपीरियंस के साथ और टेक्निकल टर्म्स के साथ बात करना, एक व्यक्ति जिसने बहुत काम किया उस फील्ड वही कह सकता है। थैंक यू आर्यन फॉर योर वर्ड्स। मूविंग अहेड टू द फाइनल ऑफ आवर पैनलिस्ट, एक ऐसे व्यक्ति जो कि इच्छा से नहीं, एक्सीडेंट के जरिए क्रिएटर बने, जो कि एक सेट कंपनी के सीईओ हैं, जिन्होंने अच्छा खासा काम उनका चल रहा था और कोई दिक्कतें नहीं थी, बट ये क्रिएटर बने एक्सीडेंटली। ये कैसे हुआ और उसके बाद किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर के लिए इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर बनना जरूरी है या किस तरीके से उसको फायदा देता है। बिकॉज यहाँ पे कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि हाँ देखिए, क्रिएटर बनने के लिए कोई एज नहीं चाहिए होती, इसके एग्जाम्पल्स कई सारे हमारे पास हैं। और आपने इस
मिथिक को तोड़ा है कि हमें क्रिएटर बनने के लिए जर्नी चाहिए होती है, आप एक एक्सीडेंटल क्रिएटर बने। कैसा था ये सब कुछ? आप एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं। एक बार तालियां बनती हैं इनके लिए जोरदार। CEO ऑफ आई डिजिटलप्रेन्योर, राइट? प्लीज। हाय भोपाल, हेलो। तो सबसे पहले यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उड़ान इज लाइक दिस वर्ड, आई एम वेरी मच इमोशनली कनेक्टेड टू दिस वर्ड। बहुत बचपन की बात है, 9th-10th की बात है, एक बहुत अच्छे स्पीकर आए थे, उन्होंने एक लाइन बोली थी जिस लाइन की वजह से अभी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें कर पाया हूँ ना, तो वो काफ़ी हद तक मोटिवेट करती हैं। तो वो लाइन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि क्यों ज़मीन पे बैठ के आसमान को देखता है, क्यों ज़मीन पे बैठ के आसमान को देखता है, ये जहान तो सिर्फ उड़ान को देखता है। तो आज आप इतने सारे लोगों को, हम लोगों को सुन रहे हैं, तो थोड़ी बहुत सबकी कुछ ना कुछ उड़ान रही है, तभी आप सुन रहे हैं, नहीं तो नहीं सुनते। शाहरुख खान ने एक बात बोली कि फर्स्ट बी रिच देन बी अ फिलोसोफर। तो आपको कुछ करना पड़ेगा तब जाके आपकी बात कोई सुनता है। तो क्यों जमीन पे बैठ के आसमान को देखता है, ये जहां तो सिर्फ उड़ान को देखता है, और अपनी किस्मत तो खुद लिख सकता है, क्योंकि इतिहास वो रचता है जो अपनी आंखों से आने वाले तूफान को देखता है। तो द पॉइंट इज कि डिजिटल इज द फ्यूचर। और ये मेरे को बहुत शुरुआत में आपने बोला एक्सीडेंटल क्रिएटर, एक्चुअली एक्सीडेंटल क्रिएटर हूं, बट उससे पहले बिजनेस सेटअप नहीं था। उस टाइम पे तो 6000 की नौकरी भी कैसे करी थी वो मुझे पता है, राइट? तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने ये देखा है 2001, 2002 में कितने लोग 2-3 साल 4 साल के थे? कोई भी नहीं था। मतलब उस एज में कौन 1990s के बच्चे कितने हैं यहाँ पे? है ना? आपको याद है हमारे घर में एक फोन होता था, लैंडलाइन होता था, याद है? और आस पड़ोस के भी फोन उसी लैंडलाइन पे आते थे। अगर किसी का घर में अच्छा खासा घर है तो आस पड़ोस के भी फोन उसी लैंडलाइन पे आते थे। अब उस टाइम पे अगर कोई पागल आदमी आके बोलता कि एक टाइम ऐसा आएगा जब सबके जेबों में फोन होगा जी, और 2-2 फोन होगा, क्या बोलता उसको? क्या बोलते आप उसको? ये पागल हो गया है ना? भारत पानी पिलाने का देश है, मेहमानों का मतलब ऐसा है कि यहाँ पे धर्म है पानी पिलाना। उस टाइम पे अगर कोई बोलता कि यार बिस्लरी का प्लांट लगाएंगे, पानी बेचेंगे, क्या बोलता? आप क्या बोलते हो उसे? ये पागल हो गया है, राइट? बट आज के टाइम पे उसी गंगा किनारे पानी बिकता है, राइट? बिस्लरी की बॉटल्स बिकती हैं और आप पैसा दे के पानी पीते हैं। मतलब आज से 5 साल पहले अगर कोई बोलता ना कि यूट्यूब पे पैसा आएगा या यूट्यूबर पैसा कमाएगा, इन्फ्लुएंसर पैसा कमाएगा, तो हो सकता था उस टाइम पे मजाक उड़ाते उसका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज से 5 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था, अचानक आया और एकदम गेम टेक ओवर कर गया, राइट? तो हमें ये समझना है कि कंटेंट क्रिएशन इज द फ्यूचर। मैं कंटेंट क्रिएटर क्यों बना? बिजनेस करने की कोशिश होती है, हर इंसान कोशिश करता है, यहां वहां धक्के खाता है। मैंने क्या किया, 19 साल की उम्र में मैंने एक ऐसी कंपनी में काम किया जिसके बारे में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जानते होंगे आज के टाइम पे। क्लास प्लस नाम है उस कंपनी का, मुकुल रुस्तगी, भास्वत अग्रवाल उसके फाउंडर्स हैं, सेकोया कैपिटल से फंडेड है। बट उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया था तब वो सिर्फ एक फ्लैट के अंदर काम करते थे, एक छोटे से फ्लैट में काम करते थे, और मैं 5वां एम्प्लॉय था वहां पे। तो 14,000 रुपए की नौकरी मैं कर रहा था, और वो लोगों ने 1-1.5 करोड़ का बिजनेस सेटअप कर दिया था 22 साल की उम्र में। तो एक लड़के का दिमाग होता है ना, दिल्ली वाले लड़के का दिमाग में कीड़ा काटता है कि यार ऐसे कैसे, 3 साल का गैप है, मैं यहाँ पे 14,000 की नौकरी कर रहा हूँ और ये 1-1.5 करोड़ रुपए का व्यापार कर रहे हैं, तो क्या सीन है? तो वहां पे फ्लैट था, फ्लैट के अंदर ही उनका, मैं जब मतलब वॉशरूम जाना है तो उन्हीं के रूम से गुजर के जाना है, तो उनके रूम्स में कुछ किताबें दिख जाती थी मुझे कि कुछ किताबें वो पढ़ रहे हैं। तो वहां पे किताब दिखी, रिच डैड पुअर डैड। अब मुझे आने जाने में, बस में, मेट्रो में टाइम लगता था 1.5-2 घंटे का, तो क्या करूं, मेरे पास फोन भी नहीं, छोटा सा फोन। तो वो किताब पढ़ के थोड़ा सा दिमाग बदला, बिकॉज आई हैव बीन अ स्टूडियस गाय, पढ़ाई बहुत करी है। बचपन में मम्मी पापा ने यही सिखाया कि अमीर बनना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो 10th में 10 CGPA, 92% PCM, फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो पढ़ाई करी लेकिन रिजल्ट मिल नहीं रहा था। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, 3rd ईयर वाले बच्चे बात कर रहे हैं कि अब क्या करना है आगे, ठीक है? तो वहां पे एक वो हुआ, पूरा गेम बदला। मैंने बिजनेस की तरफ दिमाग लगाना शुरू किया। फिर मैंने कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनके डिस्ट्रीब्यूटर बना, उसको किस तरीके से सेल करना है ये कोशिश करी। जब नहीं हो रहा था ना कुछ भी, तो मैंने कुछ बढ़िया लोगों को, मेरे से 2-3 साल बड़े लोगों को देखा कि यार यूट्यूब पे ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। उनके सिर्फ 15,000 सब्सक्राइबर्स थे। उन्होंने एक इवेंट किया दिल्ली में जिसमें मैं भी गया, मैं उनका नोन था। तो 600 लोगों की सीट्स थी और 600 के 600 भर गए थे। तो आई वॉज लाइक शॉक्ड। मैं ऐसी ऑडियंस में बैठा हुआ था वहां पे, ठीक है, एंड ब्रोक, मतलब कुछ नहीं है अपने पास, बट देखने आया हूं क्योंकि भैया ने बुलाया है। तो भैया की उम्र मेरे से 3 साल बड़ी,
भैया के पास 15,000 सब्सक्राइबर और भैया ने 600 लोगों को पेड टिकट्स बेच दी, 500 रुपए की पेड टिकट्स थी। मेरे दिमाग में चल रहा है, कैलकुलेशन चलता है ना, मोमोज वाले के दुकान पे खाते खाते हम सोचते हैं भैया कितनी प्लेटें बिक जाती है आपकी, हैं कितना कमा लेते हैं, हम दिमाग में बना रहे होते हैं कैलकुलेशन। तो मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा। उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि छोड़ो, बिजनेस बढ़ा लेंगे, क्योंकि बिजनेस का एक फिलोसॉफी होती है, नो ट्रस्ट बिजनेस। याद रखना जितने भी यंग लोग सुन रहे हैं, अगर आपको धंधा करना है तो आपको उस बंदे के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। रोड पे चलता हुआ कोई इंसान अगर आपको बोलेगा ना कि ये खरीद लो, मैंने 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदा था, आपको मैं 50,000 में दे रहा हूं और 2 दिन पहले खरीदा था, आपको मैं बिल दूंगा, सब कुछ दूंगा, आप नहीं खरीदेंगे। बट वहीं एक इंसान आपका नोन है ना, वो आपको समझा के बोलेगा, तो ट्रस्ट अगर आपका है आप खरीद लोगे। सही है? यस नो? सही है ना? तो ट्रस्ट जरूरी है, और ट्रस्ट बनता है भाई अगर आप वीडियोस क्रिएट कर रहे हो। आज के टाइम पे यहां पे जितने भी लोग हैं आप देख लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए, अक्षत भैया आए हैं, अक्षत भैया की किताबें इतनी ज्यादा बिक रही हैं क्योंकि वो विजुअली एक्टिव हैं, इंटरनेट के ऊपर वो दिख रहे हैं, दिखेगा तो बिकेगा। समझ रहे हो? तो धंधा करना है, कोई भी धंधा हो, आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे डिजिटली आना पड़ेगा। जितना ज्यादा दिखोगे आर्यन है। अब बहुत सारे लोग हैं यार जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं। ये क्यों इतना ज्यादा तेजी से आगे भाग रहा है? क्योंकि ये डिजिटली विजुअल है, लोगों को दिख रहा है। तो दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन, दैट आई केम ऑनलाइन जस्ट बिकॉज कि मुझे बिजनेस को बूम करना था। 2020 में मैंने अपनी कंपनी की शुरुआत करी, 18 दिसंबर मुझे आज भी याद है, और आज 3 साल अभी तक पूरे नहीं हुए और हमने बहुत अच्छा खासा, मतलब मैं नंबर्स नहीं बताऊंगा बट करोड़ों में व्यापार किया है। क्या बात है जी। एक जो अपने आप इंस्पिरेशन है, फ्रॉम अटेंडिंग अ फेस्ट टू क्रिएटिंग इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल अस्तित्व, जहां 17,000 ऑडियंस सर के फेस्ट में ऑलरेडी आ चुकी है। तालियां बनती इनके इस क्रिएशन के लिए। So we recently, on 30th of April, we recently hosted the biggest youth festival of India, Astitva, where Anubhav Singh Bassi performed, Paradox performed, and Paradox is also performing today in AIMS Bhopal. So I have got the invitation. इसके बाद मुझे वहाँ पे जाना है। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि छोटे से ऐसे ही इवेंट से भारत का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल IGI स्टेडियम, जो एशिया का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, वहां पे हमने 17,000 ऑडियंस में एक इवेंट होस्ट किया था। अगले साल अगर मौका मिलेगा आप सबको, हम सर को जरूर इनवाइट करेंगे। एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। रियली ऑनर्ड गाइस, क्योंकि समय कमी है तो वन लास्ट क्विक कमेंट फ्रॉम एवरीवन, वन कॉमन क्वेश्चन। यहां बैठी ऑडियंस या जो भी प्लेटफॉर्म पर आपको देखा जा रहा है, आखिरी सवाल, क्विक हाफ अ मिनट में आपको जवाब देने हैं। जो शुरुआत करना चाह रहा है इस फील्ड में, अर्निंग के सोर्स की तरह देख रहा है, एक आपकी एडवाइस क्या होगी? स्टार्टिंग ऑफ विद यू, या सर जो भी कहना चाहें। फोकस ऑन अ स्किल, बिकॉज सिर्फ स्टार्ट करने से कुछ भी नहीं होगा। आपके अंदर कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो सीखना ऑडियंस चाहे। अगर आप रैंडमली अपने कैमरा को ऑन कर रहे हो और कैमरा ऑन करके आप बात कर रहे हो, तो फिर वो बहुत रेयर होगा कि आपके व्लॉग को कोई पसंद करेगा। कहते हैं ना लोग सौरभ जोशी है, तो सौरभ जोशी के उसने पहले एक ड्राइंग करी थी, ड्राइंग करके उसने अपनी ऑडियंस गैदर करी थी, उसके बाद उसके लाइफ में भी लोगों को इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। तो यू हैव टू हैव अ स्किल जो आप अगर सिखाओगे तो जनता आपके सीखने के लिए वापस आएगी। अगर आप रैंडम वीडियोस बनाएंगे तो लोग शायद ना देखें आपको। प्लेजर। सबसे पहले चीज़ ये कि जो भी कंटेंट क्रिएशन में आना चाह रहा है या उसको एज अ बिजनेस देखना चाह रहा है, सबसे पहले स्किल्स जो इम्पोर्टेंट है। सेकंड थिंग इज कंसिस्टेंसी। आप ऐसा नहीं है कि आपकी एक वीडियो वायरल हो गई और फिर उसके बाद आप उसी तरीके की वीडियोस बना रहे हैं तो लोग बोर हो जाते हैं यार। लोग देखो क्या होता है ना, कंटेंट क्रिएशन में स्पेशली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में लोगों का, मतलब मैं ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट लोगों का ज़्यादा दिमाग नहीं चलता है, उनका थंब चलता है, ठीक है। और हमारी जो चीज़ होती है एज अ कंटेंट क्रिएटर, हमें उनके थंब को रोकना है। जहाँ पे हमने उनके थंब को रोक लिया तो समझ लो कि आपकी वीडियो पे वॉच टाइम ज़्यादा आ गया। वॉच टाइम ज़्यादा आ गया तो ऑटोमेटिकली जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब है, उनकी एल्गोरिदम्स जो होती हैं वो आपके कंटेंट को ऑटोमेटिकली पुश करता है, ठीक है। तो कंटेंट क्रिएशन में अगर आना है या फिर आपको इस चीज़ में करना है तो बी कंसिस्टेंट रहो, प्लान करो कि कब कब आपको कंटेंट डालना है, क्या डालना है। सेकंड थिंग इज कि अगर आपको जल्दी ग्रो करना है, अगर आपको एक खुद के लिए ब्रांड बनाना है तो इंफॉर्मेटिव चीज़ों पे आओ। इंफोटेनमेंट जिसको बोला जाता है आज के टाइम पे, कि इंफॉर्मेशन के साथ में एंटरटेनमेंट को प्लस करो, क्योंकि ऑडियंस आज के टाइम में ज़्यादा बोर नहीं होना चाहती है। और डोंट थिंक अबाउट बिजनेस, पैसों के बारे में सोच के कंटेंट क्रिएशन में मत आना, क्योंकि एट सम पॉइंट वो पैसा आपके पास खुद चल कर आएगा। क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं ये ब्रांड से इतना चार्ज करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बट इवेंचुअली वो आपके पास खुद आ जाता है। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं बस यही एडवाइस दूंगा कि बी कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन रहो। कंटेंट क्रिएशन अगर सीरियसली करना चाहते हो तो सीरियसली सोचो। एंड लास्ट थिंग इज कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपको वो नहीं करना है जो लोग कर रहे हैं,
क्योंकि फिर वो लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इंडिया में। और लास्ट चीज़ यही है कि मतलब आज के टाइम पे बिजनेस करना सच में बहुत इजी हो गया। पहले जब मैं अपने मम्मी पापा के टाइम की बात करूं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो एग्री करेंगे कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर कोई लेटर लिखना पड़ता था, अगर किसी बिजनेस ओनर को भेजना है तो हमें पूरे दिन या फिर एक हफ्ता एक महीना वेट करना पड़ता था। बट आज के टाइम पे वो चीज़ नहीं है। आज के टाइम पे बस आपको ईमेल पे सारी चीज़ हो जाती हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, डीएम के थ्रू। तो अब जो है बिजनेस ऑनलाइन बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है। बस ये कि थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है कि कैसे आपको चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, एंड दैट्स इट। थैंक यू। आर्यन, प्लीज योर कमेंट ऑन दिस। या प्लीज आशीष जी, गो फॉर इट। मेरी तरफ से अगर एक सिंपल सजेशन मैं दूं तो सिंपल बात है, बी डिसिप्लिन। अगर आप 18-19 साल की उम्र में ये सोच रहे हो कि मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा एंड वही मेरा करियर ऑप्शन होगा, एंड कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ करने के लिए डेडिकेशन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, बस ट्रेंड देख लिया कि आज ये चल रहा है, इसके नंबर्स आ रहे हैं, ये देखो क्या लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, मैं भी ये करता हूँ, मेरे भी नंबर्स आएंगे और मेरी भी ऐसी लाइफस्टाइल होगी, तो ऐसा कभी होगा नहीं। वो एक बहुत बड़ा मिथ है। तो एक डिसिप्लिन लेके आओ, अपने को एक जगह एक ऐसी स्किल पे फोकस करो जहां तुम्हें ही मालूम है कि तुम्हें बहुत घंटे लगने वाले हैं, बहुत टाइम लगने वाला है, बट एट द सेम टाइम एक जर्नी होने वाली है वो, जहां पे नंबर्स का खेल नहीं देख रहे हो तुम, पैसे का खेल नहीं देख रहे हो, 2-3 साल सिर्फ सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो। अगर उतना डिसिप्लिन 2-3 साल के लिए लिया है तो वही जो बोला गया कि ना पैसा देखना पड़ेगा, ना उसके बाद करियर ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, सारे रास्ते अपने आप खुलना चालू हो जाएंगे। तो पहले वो पैसे का डिसिप्लिन होना चाहिए, वो करियर का डिसिप्लिन होना चाहिए, जहां यू आर विलिंग टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग, जहां आपके पास कुछ नहीं है, ना आपको कुछ चाहिए, आपको सिर्फ आपका पैशन चाहिए, आपका करियर चाहिए और उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। जिस दिन ये अचीव कर लिया उस दिन लाइफ में पैसे की कभी कमी नहीं होगी। वेल सेड, बहुत खूब। आर्यन, गो फॉर योर कमेंट लास्टली। मैंने रिसेंटली एक व्हाट्सएप स्टेटस देखा था, तो उसमें बताया गया था कि जब एक इंसान पहाड़ चढ़ता है तो वो थोड़ा झुक के चढ़ता है, आगे झुका रहता है, वो चढ़ता जाता है चढ़ता जाता है, और जब कोई एक पहाड़ उतर रहा रहता है तो उसकी पीठ जो रहती है वो बिल्कुल पीछे साइड रहती है। तो इससे जो आपको एक लाइफ लेसन मिलेगा कि जब आपको ऊपर जाना है तो आपको थोड़ा झुक के रहना पड़ेगा। आप में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ फेम आ सकता है, कुछ पैसा आ सकता है, वो सब चीज़ छोड़ के आपको जो भी है झुक जाएं, भले ही आपसे छोटा है झुक जाएं, क्योंकि वो आपके लिए एक आगे रास्ता के लिए लेके जा रहे हैं, तो वो आप बढ़ते देखेंगे। तो और किसी को आप देखते हैं कि थोड़ा सा अकड़ है तो वो आप देख पाओगे मतलब पहाड़ उतर रहा है। सेकंड चीज़ कि आप जब भी किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप कोई भी ट्रांजैक्शन मतलब वो ना सोचो कि मुझे इसके बदले मिलेगा क्या। ये चीज़ मेरे मन में भी थी जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाया करता था। वहाँ पे उस टाइम यूट्यूबर्स बोलते थे कि यूट्यूब के लिए पैसा नहीं करना चाहिए। अभी भैया लोगों ने भी बोला वीडियोस जो है पैसे के लिए नहीं डालो, तो मैं उस टाइम मेरा आंसर रहता था कि आप लोग क्यों डाल रहे हो, कर दो एडसेंस बंद, कर दो मोनेटाइजेशन ऑफ और करो समाज सेवा। बट अब जाके वो चीज़ समझ आती, जब हम लोग पैसे के पीछे काम करेंगे ना किसी रीज़न को, वो जब तक नहीं आएगा। जब आप एक पूरा छोड़ दोगे, कोई लालच छोड़ दोगे, जब वो चीज़ जस्ट आप वर्किंग दे रहे हो, वो कहाँ से आपके पास रिटर्न बैक होके आएगी उसका कुछ भी नहीं है। तो कोई भी मोह नहीं रखो, कोई भी लालच नहीं रखो किसी के लिए हेल्प करने के लिए, किसी के साथ जुड़ने के लिए। और दूसरा, हमेशा झुक के आगे चलते जाइए। Beautifully said. And Ved, to conclude, you're the last one to comment on this session. Yeah. आई थिंक जो पैनल में लोग बैठे हुए हैं या इतना सक्सेसफुल लोग, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही लिमिटेड है। मतलब देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, हमारे देश में ही 200 करोड़ इन्फ्लुएंसर्स हैं ऑलरेडी, और हर इन्फ्लुएंसर वैसा नहीं कमा रहा है। इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा लोग बीपीओ में कमा ले रहे हैं। तो एक तो आई थिंक सब बता ही दिया है कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। बस ये है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मत जाओ, आप अपना बैकअप रखो कुछ, और कुछ एक बेसिक, यार आप इंजीनियरिंग के लिए भी तो पढ़ाई करके ही जाते हो ना। आप कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में जब भी शुरू करने जाते हो, बेसिक रिसर्च करते हो, अपनी उसकी तैयारी करते हो, फिर बढ़ते हो। तो उतना समय तो उसको दो, और एक बैकअप ऑप्शन हमेशा रखो साथ में, और देन थिंग्स और टाइम समय के साथ में चीज़ें वैसी बदल जाती हैं। थैंक यू सो मच। सो दिस वाज इट। वास्तव में सही कहा गया कि जो कहानी सामने दिखती है जरूरी नहीं कि वैसे ही हो, पीछे की बहुत बड़ी जर्नी हर व्यक्ति की है, और ऐसे एक सफल क्रिएटर की होती है। सो दिस इज हाउ creators unleashed. Thank you so much. And Anuj, as much as I like listening to you and to everyone, I'm really glad that you gave us so much information in such concise chunks, and I'm sure everyone really enjoyed. Can you show us how much you enjoyed this particular panel?
And I would like to invite on stage Lieutenant General Ajay Singh to kindly be with us to present our tokens to all the panelists present on the stage. So much to learn, so much to grasp, and a lot of this ready to implement in our lives as well. I would like to make amends by first of all inviting Aryan in front. So kindly present a memento and medal to Aryan Tripathi. I would next like to invite R.J. Ved. Ashish Chaudhary. Urf Commerce Baba. Naman Deshmukh. Ashutosh Pratihast. And last but not the least, Anuj, who held this session together so beautifully. He could be a content creator himself. I'm sure he is. Would love for all the panelists to now come together for a group photo op. And while that happens, I would like to inform all of you that there's just a slight change in our programming. I need all of you to stay with me just for a couple of minutes more. We have two very important people logging in who are not available post-lunch hours. So we have a keynote speech now by Udaan Conclave, who will be talking to all of us about entrepreneurship. I've been told he's already logged in, but I'd like to take this opportunity to introduce him. Udaan was born and raised in India, and coming from an army background, he lived in many cities, including Jabalpur, Jhansi, Mathura, and Kolkata. He graduated from St. Stephen's College, Delhi, with a first-class honors degree and completed his MBA in London, UK. His career has spanned several decades, and he has held positions as CEO, board director, and consultant, working for many renowned international companies. Udaan is a recognized coach and mentor in the workplace and is passionate about nurturing future talent. He describes himself as a Bharatvasi first and always, and in every sense of the word. Udaan, welcome to the Udaan Conclave, and over to you. Would love to hear your thoughts on entrepreneurship and India. Can we please put our hands together? Thank you very much. May I start? Can you hear me clearly? Absolutely, yes. Please start, sir. Thank you so much. Thank you for that introduction. That was too kind. I'm sure totally unworthy of those very generous words. I'd like to start, if I may, by mentioning that I'm so pleased to be part of this conclave because Shri Vivek Tankha is not only a childhood friend, but is someone whom I've respected and have great admiration and affection for all the years I have known him and the good work he has done at a national level and at the Madhya Pradesh level. So I'm a very much at heart a person from Jabalpur. So that's the start. I certainly don't want to come between you and lunch. I'll keep my comments brief. My message and my topic for discussion is simply to say that today's world is so different from what our world was 25 years ago. Those days we used the term virtual reality. Today, reality is virtual. So I am actually with you virtually, but it's also real. And why I'm touching on this theme is because India is at the center of it. India's exports in IT are only too well known. The industry is $250 billion a year.
About 200 billion of that is in exports. So all the big companies like Infosys and Tatas and all are also well known. But look where the world has gone from and come from and where it's going to. From manufacturing of cars, it's going to self-drive vehicles. From precision engineering, it's going to conducting surgery on humans. We're going from learning about computers to actually having digitizing textbooks. Again, from analyzing customer data to directly helping customers via chatbots and virtual assistants. The world has moved so fast, and India is right at the heart of it. And this earlier panel that we had where the gentleman said, let's think outside the box, that's what we have to do. Now, where I'm joining the dots is you've got Chandrayaan-3, India's sending a rocket towards the sun to gather data and information that no one else has done before. What does this really mean for us as entrepreneurs of the future, particularly you young people who are going to be employers, not the employed? The answer lies in, if you looked at the top 10 IT hubs in India, and IT revolution is where India is at, and we should continue to expand on that without any hesitation and with an accelerated pace that has never been seen before. The 10 hubs we used to talk about, led by Bangalore, is now gone on to 26 plus cities, including cities like Bhopal, you've got Guwahati, of course, Delhi, Pune, and all are so well known. So bottom line, where I'm concerned, sitting in Australia and being very much an Indian at heart, my message to all of you is do not stop that momentum. We have 5 million people in India that are known to be many, many more than that, but 5 million recognized employees in the IT revolution, the IT industry. We've got to create 100 million jobs, but it is through you, the entrepreneurs will do it. We've got to think outside the box, which means no longer should we be just the back office of the world, but we must be leading edge. We must ensure that we create brands like Apple. We already have Infosys and Tata global names, but we are now on a launch pad. So if Chandrayaan has done it for us, 3 has done it for us, you sitting in the audience today and participants in this, without doubt, will be our future leaders. I'm a cheerleader, I'm sitting on the sidelines, and I'm waiting to hear all your wonderful and successful stories. I would like to say only one other thing, which I learned in Jabalpur when Vivek and I were in Mr. Chaube's class. He taught us Sanskrit. He always says, Karmane made karasti ma phaleshu kadachan mate sangotma akarmani. So we have to do our best and we leave the rest. And on that note, may I turn to Shri Vivek Tankha in case he has any questions. I wish you all the best. And remember, even though we live in a virtual world, it is all one family, which is Vasudev Kutumbakam. Over to you, Shri Tankha. Any questions, any comments? I'll be very happy to answer and not come between you and lunch. Thank you very much. Thank you, Drone. Instead of Mr. Vivek Tankha, I am taking over. My name is Soumya, and what a pleasure listening to everything that you said. And indeed, Vasudhaiva Kutumbakam, thank you for helping us bridge the gap between here and there and being a part of today's conclave and making it truly global. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye. And we now move on to something which is so important that lunch can definitely wait. In India or anywhere in the world for that matter, when you think of cardiac care, when you think of cardiology, there is only one name that sort of resonates in our mind, which comes to our mind, which is of Dr. Naresh Trehan. We are so privileged, we are so lucky that the next keynote speech is by Dr. Trehan himself. Can you please put your hands together for him? And Dr. Trehan is an institution in himself, and as much as I might speak about him, I think my excitement is giving away in the sense of how privileged I feel that today we will be getting to hear from him directly. Allow me this opportunity to read out a little bit about him. Dr. Naresh Trehan is a renowned Indian cardiovascular and cardiothoracic surgeon, a proud alumnus of King George's Medical University in Lucknow, India. He further honed his skills at New York University Medical Center,
Center, Manhattan, USA, where he practiced from 1971 to 1988. Upon his return to India, he established the eminent Escorts Heart Institute and Research Center, further cementing his legacy in the field of cardiac care. We are going to just wait a few moments to have Dr. Trihan log in, and not forget that to hear from him, we've actually covered a diversity of topics today. We've gone from content creation to financial literacy. We will be moving on to talk about legacy businesses and whatnot. And health needs to form an important part of the kind of dialogue that we are engendering here. So I will be... Do we have Dr. Trihan with us? Yes. So we are just going to stay put and wait for this luminary from the field of health sciences to greet us, to talk to us, and to be with us. Dr. Trihan, what an honor to have you with us at the Udaan Conclave. My name is Soumya, and I humbly welcome you for this dialogue today. So, thank you so much, Anya, for that undeserved introduction. But it's a pleasure and an honor to be part of this program. And of course, Mr. Tankha, you don't never say no to. So that's the other overwhelming power that there is in Udaan. Absolutely. So I think, Yeah, thanks to Mr. Tankha, we have you, and I give this gathering to you now. Kindly address all of our dignitaries and audiences assembled here. Thank you. So, I was getting guidance from Vivek about what should be the subject that I would like to talk about. And he said 10 minutes, and you give the future of medicine in 10 minutes, which is, I'll try to do, but it usually takes days to do it. So, just to give you a brief preamble, we became doctors to treat disease. Then we said, why do we let people get so sick? Can we not detect it early and make them not so sick and treat them early so the outcome would be better also? So that's when we said early detection. And in the early detection era, all these MRIs, CT scans, all the other equipment that came out, nuclear scanners, came out in that era. Then we said to ourselves as professionals that why do we let people get sick at all? So let us do preventive health. And as you know, the last decade has been very intensively towards trying to work on preventive health, to say what is healthy, what you should do, what you should not do. Then we said, because we are recommending the same set of recommendations to everybody, whether they are at risk or they are at not, we keep telling them, don't eat this, don't drink this, you exercise so much, do this. So if you tell the whole population of the world the same story, the compliance would be less than 5%. Because people want to live. And we should not deprive people of living if they are not vulnerable. So then we said, let us do now personalized predictive health. In other words, making a medical Janam Patri for each individual. And in that medical Janam Patri, there are three main factors which play a role. First is your genetics. We know that genome sequences can be done at a reasonable cost. Less than 10,000-15,000 rupees, maybe your whole genomic structure can be now established. And more genes are being identified which are associated with disease. Like in cardiac, we already have 3 genes which we can identify to say this person who has this combination of genes has a higher chance of developing blockages in the arteries or a heart attack or a death by irregular heartbeat. Those things are now available and progressing very rapidly. So within the next 2-3 years, we will have certainly more identification like cancer. There are many cancer genes that we can detect now in people, as you may have heard already, especially for breast cancer. So the whole movement of medicine has gone to the
biomolecular state, the genomic state. The next thing that is important is what we call phenome. Phenome is a person's lifestyle, the mannerisms, your thought process, what kind of life you lead, what is the stress factors in it. So all those put together add up to the genomic structure, and then comes the digital health. Now, digital health of an individual we know, and a lot of us are wearing those Fitbits and other devices, that we can tell when somebody walks, what the heart rate goes up to, what is when they are sleeping, what it goes down to, how well do they sleep. So all these factors are also factored in and also will tell you how often do you lose your temper, how often your blood pressure goes up. All these things can now be actually calculated. So if you put these three things together, then it gives us the predictive model for a given individual. And that we hope that if we are going to tell the right people the right things, that the compliance will be much better. Maybe only 5% of the people of this world need this kind of restrictions as we place on everybody today. So that is one aspect of medicine where it is going, and I think the shape of medicine will change by, as far as personal health is concerned, what we call the roadmap for each individualized roadmap. So let's park that aside. Then comes technology. Now, as we all know, technology is progressing faster than anything else in the world. And we have been incorporating digital applications into healthcare, not from now, for the last 30 years when the monitor was made, which can then over the period of time, more and more things could be measured and more accurately and more remote. So the other thing that is happening today is that one super specialist, their ability to treat thousands of more people by digital connection has become a reality. And if it was going slowly, the pandemic has made it accelerate to a level that today, I will give you my own example. If I was doing 3-4 teleconsults, a video consultation in different parts of the country before pandemic, I'm doing up to 15 to 20 a day personally. As an institution, as Medanta, we were doing about 200, 250 consults a day. We are upward of 1,000 or more today that patients are being able to access us without having to travel all the way of long distance to come and sit in front of us, where we can do this whole engagement on a video conference. So that's the other shape that will change, that patients will not have to travel for their first consultation, and if they need some procedure, they can come directly after that without having to waste time and money and family time by just for consultation. So that's the other part which is going to improve more and more. Now the third is the favorite subject right now, that is AI. So artificial intelligence has been incorporated into medicine in a very small way already, where we have developed algorithms to say, who is the person, can you predict when somebody is very sick, somebody has had a heart attack, can you predict before they die that this person is on the path to death in the next 4 hours, 5 hours, 6 hours? That has been very valuable in cardiac care because we have been able to develop that algorithm. But if we try to apply it to everything else, it is now in work in progress. So you can say today, the first question that comes to a person who has cancer, the type of cancer, the type of treatment they will need, today we cannot predict how long they will live, or how aggressive the cancer is, or what are the extra things we can do before it comes back again. So that is where AI and ChatGPT is the ultimate example of it, which is growing very rapidly and actually threatening the world with whether it's going to be good or bad for the world. But these are
billions of pieces of information that are going into our predictive model. So I think that there is going to be a huge change as we move forward, not only identifying those people who need to take care of themselves more intensely than others. If you can tell somebody in a very reliable manner that how much life is left, somebody who's used to drinking, if I can tell him today what is the exact structure of the liver today, and if it goes on like this, within 5 years, you're going to be having cirrhosis of the liver. That's the best thing that can happen to an individual. Because if you see a black and white, okay, I've used my reserves and now I am on the downward trend, maybe I should stop drinking. Or maybe I should reduce it drastically. But we don't have that today. We only say it's not good to drink. So that doesn't mean anything to anybody because they will still want to drink. But if you can show that 2, 3, 4, 5% whose liver is getting damaged so badly that you can actually predict how long it's going to take to kill them, they may pay attention. That's the whole purpose of medicine, where it's going. So now, of course, medicine is one thing, treatments is another, affordability is the other thing. And I think this is one of the things that is on top of the mind of us as thinkers of healthcare. That how do we make it possible to have the entire population of India be able to access healthcare? And it's no rocket science. We know that health security has to be not only in the realm of prevention, not only in the realm of treatment, but in the realm of our entire lifespan. So today, if you look at countries like the US, UK, Japan, all of Europe, that they are the ones who have had, most of them have had national health, especially UK and European countries. They have well financed that, but the progression of science is at such a rapid pace that it costs money to produce newer modalities, newer techniques. And so much so, as in this period of time, the population has aged to a very 60% people are now over the age of 60 in some of the countries. That taking care of older people has become a big problem, which is also going to become a problem for India because it is estimated by 2030, 13% of Indians will be over the age of 65. 13% of 1.5 billion and 50% or 40% of 200 million, numerically it's a much larger number. So as planners, as healthcare providers, as politicians, as economic planners, we must prepare ourselves for the future. So the government has taken some steps, definitely. And part of that is the Ayushman has helped a lot of people. There were other schemes, and state governments have started making their own schemes so that more and more people can get relief from illness. But all the money in the world will not be able to treat everybody in a country like India unless we stop the progression of the disease. So I think as thinkers, as people who are involved in the media, people who are involved in politics, that is your responsibility to do the planning of how we are going to actually provide preventive health, how are we going to provide civic amenities, how are we going to prevent people from getting sick so that the burden does not become so big that we have a lot of misery in our country. So with that, I think that's the best I can do in 10 minutes. Of course, if I'll wait for instructions from Mr. Tanka, am I excused, or are there any one or two questions we can take, or what would you like? Naresh sir, Tanka sir has no instructions for you, but I think all of us only have gratitude and probably the desire that the next time we get to have this engagement, we want you here in person so that we can, yes, so that we can learn and be inspired. And of course, thank you so much for sharing all the nuggets of wisdom as well as very practical
very practical advice around what is that a country like India needs, what is it that we personally need, and wherein technology can really come in and help us imagine what our future will be so that we take care of our present in the right manner, in the correct manner. Thank you so much, Naresh sir. Absolute honor and loved having you with us. Can we have Thank a round you, of applause for him? and the best to Udaan in that huge effort. I will of course try to be there next time. Thank you. Perfect. Thank you so much, Naresh sir. We'll hold you to that promise. And on that note, I mean, what a beautiful, inspiring morning. And I think it could just go on and all of us will remain interested. But yes, the tummy does call, and now we will break for lunch. The lunch is served on the first floor. We have a limited capacity for hosting people. So serve yourself well, but also allow others to move about seamlessly. Thank you. See you on the other side of lunch in about 30 minutes. Yeah, and there is lunch served for everyone who's in this hall, everyone who's participating, everyone who's here as an audience. Please do go and have some good, healthy, nourishing food. Also, let us thank all the amazing supporters. First of all, Mansarovar Global University along with ESR Entertainment, Dhwani Entertainment, Learn Nice, The Conversions, Technocrate Group of Institutions, White Walls Media, Bhopal City Update, and Sriram Group, Jabalpur. Chew. Check. Thank you so much, everyone. Welcoming you once again. And we'll be starting off our next session in the next 5 minutes. Would request everyone.
chick, hey. Chick, chick, hey, hey. Chick, chick, hey. May I request everyone to take their seats? We are going to begin very shortly. I request everyone to take their seats. Thank you and welcome once again, everyone. I would request all the participants, all the attendees, and our honorable guests to please take your seats. We'll be shortly starting off with the next session after lunch. So, yeah, we are ready with our honorable guest with us. We are ready with the next panelist with us, and we are be ready with our moderator as well. So, we request everyone to please take your seats and be ready for the next session. And let me tell you guys, आज की ये शाम न केवल इन सभी पैनलिस्ट के साथ बल्कि एक म्यूजिकल ट्रीट भी हम सभी को मिलने वाली है, जहां हमारे साथ होंगे कविश सेठ, द वेरी वेल नोन सिंगर एंड एन आर्टिस्ट वर्थ बीइंग देयर अलोंग फॉर. सो मैं चाहूंगा कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें और तैयार हो जाएं हमारे इस अगले सेशन के लिए. बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर. और भी ऐसी ही कई सारी चीजें सीखने को, जानने को आपके बीच होने वाली हैं. सो यस, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आइए जल्द से जल्द हम शुरुआत के लिए तैयार होंगे. And also would request हमारे सभी attendees and guests जिन लोगों ने lunch कर लिया हो, आप सभी से request है, I would request everyone to please join us for the session as well. Hey, hey, chick, chick one, hey, chick. Chick, 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 hey, hey, chick.
Check one. यही वाला है क्या? I would request all the honorable guests to please settle down along. सभी मेहमानों से अनुरोध, आप सभी स्थान ग्रहण करें एक बार फिर, और हम तैयार हैं हमारे अगले सेशन के आगाज के लिए. बहुत बहुत विनम्र अनुरोध. I would request all the distinguished personalities all together to please gather along, and we are all set to begin our next session. Thank you so much, everyone. Please have your seats. एक बार फिर अनुरोध करना चाहूंगा आप सभी मेहमानों से, आप सभी स्थान ग्रहण करें, खास करके हमारे सम्मानीय जन जो हमारे साथ हैं. सर प्लीज आप भी साथ बैठें, और हम अपने आगाज के लिए तैयार हैं आज के इस अगले सेशन के लिए. Okay, so gathering, before I start, I want सभी की जोरदार तालियों का साथ मिले ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप हमारे बीच तैयार हैं. Yes. Thank you so much and welcome back once again everyone. This is your amazing day जहां पर हम मिलकर के आज एक सोच को actual तैयारी में बदल रहे हैं, जहां पर बदलाव की तैयारी है, जहां तैयारी है इस भविष्य को तैयार करने की, तैयारी है खुद को तैयार करने की उस भविष्य के साथ कि कैसे हम सब मिलकर उड़ान के साथ अपनी उड़ान को और शानदार बना सकते हैं. स्वागत एक बार फिर. उड़ान कॉन्क्लेव 2023 आप सबका स्वागत करता है. एम्पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया. जिस प्रकार से आज की शुरुआत हुई है, वास्तव में बहुत कुछ सीखने को मिला है, और अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाली ये जर्नी और भी खास होगी जब आप इस लर्निंग के बारे में, सीखने के बारे में हमारे साथ जुड़ेंगे. चलिए बिना देरी करे मैं आगाज करूंगा, और हमारे 5वें पैनल के लिए तैयारी करते हुए आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज आर ऑल द ऑनरेबल पैनलिस्ट. First of all, our very honorable Mr. Ali Rashid ji, Director Januma Hotel, Mr. Rajiv Agrawal, a well-known industrialist, welcoming Mr. Pradeep Karambelkar ji, venture capitalist, along with Mr. Pradeep Joshi ji, who is an amazing business management consultant, along with our moderator Soumya ji. बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर. सभी की तालियां हो जाएं जोरदार. मैं अनुरोध करूंगा हमारे सम्माननीय जनों से इस मंच पर आप स्थान ग्रहण करें. बहुत बहुत स्वागत. ठीक हेलो ठीक आ गया. आइए सभी ने अनुरोध करना चाहूंगा आप सभी का साथ मिले. And to start with, as we all know, every personality holds a very beautiful space in the industry and as well as the way they have been to this place. इस मंच पर आप आए हैं तो बहुत कुछ कार्य करके अपने लेगेसी के साथ आए हैं, और आज जो हमारा टॉपिक है बिल्डिंग लेगेसी बिजनेसेस, इस पर आप सभी का प्रकाश होगा. मैं आप सभी को अपने पैनल से रूबरू करवाना चाहूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मिस्टर अली राशिद जी. ही has been the 13th generation Bhopali with a deep-rooted connection to the culture and heritage of Madhya Pradesh. His family's legacy includes the iconic Jahanuma Palace. Ali's passion for wildlife and adventure led him to establish Jahanuma Wilderness, an umbrella brand for wilderness properties like Renibani and Bori Safari Lodge. He promotes sustainable and responsible tourism, emphasizing unique experiences like walking safaris, canoeing, night safaris, and many more. So he has been successfully taking the legacy of Jahanuma Palace. Let me welcome him, आप सभी की जोरदार तालियों के साथ, our very honorable Ali Rashid ji. Next we have with us is Mr. Rajiv Agrawal, who has been a prominent industrialist known for his significant contribution in the industrial sector. With a rich background of business and industry, he has played a vital role in driving economic growth and innovation. His leadership and vision have led to the establishment and success of various industries and ventures, making him a respected figure in the business community. Rajiv ji continues to make strides in the industrial arena. Sir, बहुत बहुत स्वागत. A very warm welcome on behalf of Udaan Conclave.
Guys, we have the next one, the amazing personality, Mr. Pradeep Karambelkar, sir. He has been an accomplished and influential individual known for his remarkable contribution as an entrepreneurial ecosystem in Madhya Pradesh, particularly in Bhopal. As the executive director of BNI Bhopal and founder of Vision Based Opportunities Network, he has played a vital role in cultivating and thriving networks. Through his organization, Vision Biz, he has established partnership with more than 250 startups and has personally commitment and invested in 15 of them. Sir, बहुत स्वागत this मंच पर. You guys are the true personalities to join us on the panel. And finally, we have Mr. Pradeep Joshi, sir, an alumni of IIM, and he has been a seasoned business management consultant known for his expertise in the aviation industry with a major background of aviation industry. He has been a wealth of experience and insights, and he provides valuable strategic advice and solutions to the organization aiming to thrive in the competitive corporate world. Pradeep ji's consultancy services are highly sought after making him a trusted advisor to numerous companies. Sir, we are really, really honored to have you, and we are looking forward to your amazing advices to this amazing show. बहुत swagat, and as we all know, once again, the Energy Power Pack, Swami is all there with me. Let's go ahead once again. Thank you so much. Thank you so much, Anuj, for creating all of that energy, because after lunch, I expect everyone to just be wanting to take a nice nap. But we wouldn't allow that, because right now we are entering another extremely important topic with very significant guests who are seated with me on this stage. And this particular panel is titled Legacy Businesses in Tier 2 Cities. The previous panel that I hosted, I told all of you that I've got nothing to do with the subject. And here again, I am completely out of my depth, which I think is great, because then I can ask you the most innocent questions that come to my mind about the topic, and I can have you take the conversation forward. And I think the wording of the panel is such that I do not really need to create a premise for it, and I will straight away jump into questions, because I would much rather learn from all of the seasoned veterans who are sitting with me on this stage. I would begin by talking to Pradeep Karambelkar ji. My first question will come to you. I had a beautiful chat with Pradeep ji last night about the way he is investing in the startup ecosystem, the way he is empowering entrepreneurs, the way he is personally guiding and mentoring the entrepreneurial ecosystem surrounding many, many different geographies, but Madhya Pradesh in particular. And you know, when we think of entrepreneurship and when we think that, you know, to become a great entrepreneur, you have to be in a place that enables you, you have to be in a place which has the legitimate infrastructure and ecosystem, our thought organically goes towards the metropolitan cities. Our thoughts organically go towards cities which are already developed, they're there, where startups are thriving, businesses are happening. But what happens to tier 2 cities in terms of the perception? What has been your on-ground experience of the way entrepreneurial thought and execution is functioning across Madhya Pradesh, and if we can take this as a case study for other tier 2 cities and beyond in the country? Thank you, Soumya, for this question, and welcome, and thank you everyone. मेरा गला थोड़ा खराब है, लेकिन I try कि मैं उसको जोर से बोल सकूं. As far as entrepreneurship is concerned, it's basically a thought process, or you can say a mental status. And I don't find anything in Madhya Pradesh which is lacking, or whether it is two-tier city or anywhere. Even if you see all the big legacy businesses, including Dainik Bhaskar to RNTU to Jagran, they are all coming from, including Jahanuma, they are all coming from the tier 2 cities, and they are expanding everywhere. Even multiple businesses are coming and started from, and people shifted from Bhopal and other places, and they have done great in entrepreneurial journeys. So you won't say that entrepreneurs only born in big cities or metro cities. Smaller towns are having more creativity, I must say, and they have more innovation. Even Mukesh Ambani's father, Dhirubhai Ambani, is also shifted from a smaller town to a bigger town. So everybody has started their journey somewhere in B town, and I believe, just in last 10 years, I'm working with the startups. I think more than 1,000 or 2,000 startups I've been interacting with. And I found that all the startups which are coming from tier 2 cities, they are more relevant for
social problems, the problems which is more related to the groundwork, rather than coming into the gaming zone or some zones which are generally the tier 2 cities startups or entrepreneurs are those entrepreneurs who are looking forward for the solution of this problems which are related to our state, our locality, our local problems. Generally, those people who are coming from outer states or bigger cities, they are into tech industries or from gaming industry or some those industries which are of the next level. So it's not like that. The difference of thought process is there because they find some other problems which are prevailing in our cities or in town two tier. But when they modified it, they definitely move ahead and they can become big companies. All big unicorns ultimately have started from smaller towns only. They might, you may say that because of exposure to bigger towns, they may transform themselves into agri-tech or fintech or any tech. But ultimately the thought process and ground reality starts from tier 2 cities only. So entrepreneurship is not only belongs to metros, it comes from tier 2 only. It comes from everywhere. The possibilities are everywhere. I think I would move on now to Pradeep Joshi ji. And I would like to know from you that when it does come to assessing the potential of the kind of entrepreneurial ventures that can and should come out of tier 2, tier 3 and beyond, what are the key factors which are our opportunities? What are the key factors which are our challenges? Right, ma'am. Thank you so much. I would like to answer into at least 2 or 3 parts. Number one is that the definition of legacy business is changing. It used to, or rather getting merged with the family business. Someone started, the next generation, third generation, but now it is changing. The original forefathers are not there, but their industry is there. So we call it legacy business. But nowadays, it has changed, evolved to a further something. The first person, second person in the family is not there. Their product and services are not there. But what is legacy about it? It is the ideology. The ideology remains of the forefathers same. So this is the legacy business. I take this point of ideology out of the legacy business and convert it into our present scenario, particularly, sir, when we are talking about empowering the youth and the country and all, as we all understand, the charity begins from home. So I would like to start it from the Bhopal or the Madhya Pradesh itself, when we are talking about the tier 2 cities and all. Because almost 90% of my experience and expertise lies around aviation, I'll quote just one practical example out of it, sir. In tier 2 cities, we have a very sustainable competitive advantage over metropolitan cities. The places like Bhopal, I would say Jabalpur, we have a very competitive, sustainable advantage. And that advantage is the space. Coming to my field, my industry, I would say, 2 airlines like Air India and Indigo, they have ordered more than 1,000 aircraft and they are going to get delivered in months to come, years to come. This aircraft will not be having place to get parked in Bombay, Delhi, Madras, Calcutta or any other place. They are going to come to the cities like Jabalpur and Bhopal. So my strong suggestion at this juncture is that to create the employment creators, let us have a better airport with the better parking facilities. So when the aircraft would park over here, I foresee not less than a number of 50 to 100 aircrafts getting parked at Jabalpur and Bhopal, sir. When the aircrafts are there, there comes the opportunity for the local youth. You can have the aircraft maintenance and services facilities available here. They get serviced overnight. It's a very big business. And you can employ one single agency employs 100 to 200 people. All of them are well skilled and all. This is how you can make advantage of the tier 2 cities. Because of this one particular
advantage over others. Right. And it is sustainable. It is going to be there for you, with you for all the time. Let us not understand ki what is lacking me and the industry, what is the gap. What is you already have the advantage here. So let us make use of the advantage and let's go ahead, ma'am. Absolutely, perfect. And since Bhopal has been mentioned already and we've tried to define what legacy businesses are, Ali, of course, I'm going to come to you next because you are a part of such a legacy business which, you know, which shines very brightly as a crown jewel amongst the heritage of Bhopal. Number one, what is it like to be an entrepreneur and a part of a legacy business such as yours? I'm sure there are challenges, I'm sure there are opportunities, and I also understand that the entrepreneurial spirit and the ideology, it may be in continuation, but the entrepreneurial spirit is also very original. You also have certain ideas, you also have certain ideologies. So how do we create expansion in legacy businesses while ensuring continuity? So your experience of being a part of a legacy business, your experience of expanding it, your experience of ensuring the continuity therein. Yeah, thank you, Soumya. You know, being part of a legacy business, I'll give you a bit of a background about Jhanuma itself. It's, you know, 40 years since we started the hospitality brand. And we believe that, you know, that aspect of the brand as a business has been 40 years. But, you know, the hospitality part of it, you know, we would like to imagine that it's come down from at least our great-grandfather's time when he established Hanuma as it is today, the palace as his residence. And, you know, when you go back into the history of, you know, Bhopal and you see the journals, there are records of people enjoying the hospitality of Bhopal, dignitaries, contemporaries coming to the city, enjoying the cuisine, the hospitality, you know, also enjoying the outdoors, you know, exploring Bhopal on horseback, on boats. And these are the things we have kind of continued, you know, coming to 2023. You know, of course, Jahanuma Palace has been, you know, instrumental in having good cuisine for the audience of Bhopal, and then going beyond, which is my own personal journey of setting up jungle lodges, where we have kind of continued what we have, you know, inherited into a evolving legacy of a kind of a business model where, you know, in the forest you're exploring, you know, in different ways, going out to see the wilderness and things like that. So the challenges, of course, would be to stay relevant, you know. Of course, you need to bring in professionalism to that sort of lifestyle-related business. So the next, we are the second generation which is now running the business. So, you know, some of us are heading the marketing part, some are, you know, in the operations and learned the hotel trade through formal school. So, you know, how to remain relevant is a major challenge, especially, you know, with other competition which comes in to places like Madhya Pradesh. But I think if you kind of establish your core strengths and you kind of understand where you've come from, then it becomes much easier to move ahead. And that's what, if you follow your core strengths, then that differentiates you from, you know, the other multinational brands which have certain other inherent strengths which you cannot, you know, compete with. So I think that is, of course, and of course, adopting to different, you know, best practices, technologies. Absolutely. These are all in a company which is 40 years old. It becomes a little more difficult to implement these systems. But as we move along to become more efficient, we have to kind of adopt these things. Absolutely, and I think you very rightly mentioned that it's also what individually you are passionate about and what you stand for. Somewhere that also has to manifest in the way you're taking the business forward, and that's going to be my follow-up question to you, but I will come back to it. I would come to Rajiv ji now, and we are talking about how we need an enabling ecosystem so as to sort of spot the growth
of startups, of business ventures, but I think it also happens the other way around. Like if you look around in this hall, there is this standee which says a small step towards a future where Indian youth become prominent job creators. So we're not just talking about that, oh, we need to create jobs for you, but the fact that this potential is out there, this potential is of yours, wherein you can become enablers of an ecosystem as well. Now, you're an industrialist. You represent the industrial background on this panel, if I can say. And I want to understand how running an industry, running something that I'm not even calling a business, an industry, how has it changed the ecosystem around what you do, what you professionally do? Is there any kind of enablement that has happened around your business, around your venture? Rajiv ji. Thank you. Thank you very much, Soumya ji. First of all, I mean, the questions that you have already addressed, ecosystem in 2 years, it is changing. Udaan is proof. This Udaan could have value had happened in Indore. But thank you, Adani Vivek ji, because you brought it to Bhopal. This proves that ecosystem in tier 2, 3 cities is changing. Problem kya hai? Problem is that here you can start business, but there is a limit that you will grow. You will not become 1,000 crore business here. You will definitely move out. What is lacking? Already Pradeep ji said, maybe airports are needed, maybe those kind of mentors are needed who help us. Maybe there is a culture where people talk about 500 and 1,000 crore. I mean, the business is defined by the people whom you talk with and whom you move with. Absolutely. If you are talking with people of 10, 100 crore, you will be 100 crore businessman. And if you want to, I mean, grow beyond certain limit, you have to go to maybe Bangalore, Mumbai, Delhi. That is one. Second, business is business and it is doing its part wherever they are setting up business. If I have to set up a unit, whether in Bhopal or in Indore or in Mumbai or in Avashi, we have 6 units, I mean, all across country. We have been fighting for Bhopal for a long time. There is invest in Bhopal kind of thing. There's one voice person. We are saying that, yes, we have potential, we can come. Now, how do we help people to understand that industry is creating potential? One, not many startups that are coming, they are talking of manufacturing. I mean, all of you will agree, whatever startup comes, they all talk about the computers and deliveries and whatever. I hardly come across anything that says, no, we want to do a startup in manufacturing. Because that moment a manufacturing unit starts up, it creates a whole ecosystem. Traveling industry will come, hotels will grow, there will be auto wala, there will be taxi wala, there will be canteen, there will be stationery supplier, printers, everyone grows the moment a business comes. So that is one that is needed in tier 2 cities. Second, we are doing our bit by making difference to the society where we are operating in. For example, I'm heading an industries association at Mandi, where we have 450 industries. तो हमने वहाँ पर क्या बड़ा एक चेंज लाया जो किसी ने सोचा नहीं था. There are young boys and girls, maybe in college time they were in a demonstration or something and a small criminal activity happened. और तो वो एक black label लग गया तो कोई उनको लगा नहीं रहा black dot की वजह से job में. तो we said with small things, if people want to change and if they want to improve, let us give them chance. That is one. Second, we are very much aware of our fact that balance sheet में ये तो दिख रहा है कि purchase क्या हुई, sale क्या हुई, salaries क्या दी, but environment को क्या डैमेज हुआ, धुआं कितना छोड़ा, उसकी क्या कॉस्ट थी, धरती से क्या निकाला, दैट इज मिसिंग. वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट. वी आर टेकिंग केयर ऑफ द फैक्ट कि कोविड में गैस ऑक्सीजन चाहिए तो कितनी चाहिए. आई कैन प्राउडली से दैट इन लास्ट 3 years वी हैव क्रिएटेड ए इकोसिस्टम दैट हैंस फॉर गॉड ब्लेस कभी दोबारा कोविड में, इफ इट हैपेंस, इंडस्ट्री इज अवेयर दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ द पीपल. सो ओवरऑल इन एजुकेशन, इन हेल्थ, इन क्रिएटिंग ए इकोसिस्टम, वी आर डूइंग इट एंड वी वांट मोर. How lovely. Lovely to hear that from you. Ali, I think I'm going to come back to you, right? Because the moment Rajiv ji has spoken about enabling things around, right? And we've spoken about tier 2 cities. I believe in your experience, you've actually ventured beyond even tier 2. You've actually ventured into areas where no one sees economic opportunity. But through finding that opportunity, through keeping your focus, you're also a conservationist, as I believe, right? Through keeping your focus on sustainability, through finding integration opportunities with local economy, local population, where actually something was considered a threat, you have converted that into an asset. I would love for you to share that story. Sure. So, my personal experience in slowly expanding the companies towards jungle lodges, which we've set up in Satpura Tiger Reserve and the Bori Sanctuary. So there, these are remote areas, mostly the major population is Adivasi people. And the idea of, entering that landscape, of course, I have a passion for wildlife and wanted to, I always thought it's best to do
what you love doing and convert that into a business. So when we started up, the idea was to, create a local economy. And of course, in India, we have this sort of, most people think that tourism se to tiger disturb hota hai ya wildlife disturb hoti hai. Of course, over tourism can cause that. But one of the key elements of tourism in these landscapes where there's very few income opportunities is the employment aspect. Where we are in Hoshangabad, Narbadapuram district, what it is now, Satpura Tiger Reserve actually employs more than 1,500 people, including the tourism and the forest guards as well as the Pachmari part, which is one of the largest industries in that district. And usually, like the people, there's almost 80-90% of people who work in our lodges who are local. A lot of them are, not educated beyond 5th standard. Some are 8th. Some are not even, haven't been to school, but through vocational training, they are able to deliver world-class experiences to both domestic travelers as well as international travelers. And, I wouldn't say that, and those same people actually earlier, not just in our lodge, in the other hospitality brands, people who've become drivers, guides for tourism, those same people were either collecting forest products or they were farmers whose crops were being raided by herbivores, or their cattle was being killed by tigers. So now that employment has led to the wildlife becoming an asset. People come and pay money to see that animal which was anyway a kind of threat to them. So those sort of, and MP is, I think, with our 6 tiger reserves, with 25, more than 25 wildlife sanctuaries, we have a lot of potential in the rural landscape, and a huge population is there also, which can be employed, and we can make this a big opportunity in the state of Madhya Pradesh. Absolutely, wonderful. Pradeep ji, I'm going to come to you again for a little bit. You have been a strategic advisor, you've been a business management consultant, and you have years and years and years of experience behind you. And I do want to know from you, when it comes from the journey from starting a business to scaling it, to taking it somewhere, what is that mindset that the youth, the younger entrepreneurs must start imbibing today if they are to start a business, open a business, but then also scale it, but then also look forward to taking it towards a legacy business? I personally have this feeling, when I was young, after my engineering graduation, everybody was telling me to go and get the job. But somehow the excitement was not there, because the further journey was more or less clear. You go, you get married, you have a family, you do job, you make money, and you get retired. So it was not exciting. So I feel the excitement works probably number one. Why do I entered into business? Why do I started my own industry some time back? So it is the excitement. It is the thrill for the new thing, the new ventures. I would say even to me, the failures excited me. When I committed some mistakes, made some losses, but I was not disheartened. I was not depressed. I was happier because I was learning and it was a new thing. So I consider that is the excitement to travel to the uncharted territory. It is, motivates you. Absolutely, wonderful. So excitement, just the drive that there is something new to be done and there is this gap to be filled, and I'm able to see something that probably other people are not. Thank you. Pradeep ji, I will come to you next. I have a lot of questions for you, but I'm going to try and summarize all of them. So with the kind of experience that Pradeep ji, I'm talking about this Pradeep ji now, he has not only invested personally in startups, but in a conversation he told me that he has been he's been in and around the story of about 1,000 entrepreneurs whose empowerment, whose journey he has personally seen, right? And you also head the BNI chapter for Bhopal, for Madhya Pradesh, if I'm not wrong, which does its own bit
to create an entrepreneurial spirit and ecosystem. So basically, if I think of and you are a first generation entrepreneur yourself, right? So when I think of the word entrepreneurship, ये आपको हर तरफ से घिरे हुए है, right? So number one, how do you place yourself as an entrepreneur? I want to understand that. What kind of an entrepreneur are you? And since you are an investor, what are the top 3 things that you look for in a potential venture that you think, okay, like even if I keep to my topic and I say, okay, this is a startup, this is an entrepreneurial venture, but I can see it go far. I can see it go beyond generation. Top 3 things I want to know from you. See, as far as entrepreneur is concerned, the entrepreneurial definition itself says that a person who take risk to have financial benefits, right? So I'm in the same category of entrepreneurs who have taken a step to a risk to become a financial wellness and contribution towards society. And definitely we started with a small investment company. Then we went into incubation center, the first incubation center of Madhya Pradesh, and so on. We are running all hospitals of government of Madhya Pradesh, almost 47 district and civil hospitals. So all these businesses we are doing. BNI is one of them where we got an opportunity that let's bring one of the marketing referral platform to the Bhopal, because in all over our states, especially in Bhopal, Indore, Jabalpur, everywhere, if you find people are not able to generate businesses. We don't have such connects, networks, where we can connect to the outer cities, the outer people, and we himself, even if it's Mandideep or Govindpura, we don't have such platforms where people can do businesses together. So what happens, you don't enable each other, and that's how you don't grow. So BNI is such organization which empower each other and they grow together. The same thing everywhere when we go to the startups also, in startup world, innovation comes. And as far as the investor is concerned, when I see somebody as investor, one is mentor, right? So when I become a mentor, I am a startup mentor for national, almost more than 25 plus institutions. So when I see as a mentor, then philosophy is different. Then you become, then you want to mentor that person who's having just a capacity to grow their businesses. Sometimes I feel when I started to mentor startups from 2012 or 2011, so that time I used to see that, okay, fine, if you are in a startup, even if you can establish your business and as businessman, may not be in startup because the startup definition was not there that time. Now in 2017 onwards, when we have a particular definition of that startup, it should be in this innovation, scalability, sustainability, then definitely as an investor, we have to also see around the world that what type of investments we have to make so that the next level of funding should also come. So now investment patterns are different. In 2016-17, I was a seed investor, where I just help people because I'm mentoring them. So just to take off, we give funds. But later on, if I see today, if I go with various AIFs or if we go with various venture capitalists, then we have to see the startup in the way that whether the next level of funding will come or not. Right. Whether somebody is scalable enough that he can attract more funds in the next level also. It should not be only at this stage and it moves out. So there is a big difference now between a startup investment and a business investments. If you go to an entrepreneur who is a business owner, then the investment is quite different. But if somebody is a startup, then we see in the parameter of that where we can exit or not. Now the whole philosophy is about exiting the businesses. Right. Now it's not about remain in the businesses. The new philosophy says that if you, even for me, like I am now 20-year-old entrepreneurs, recently I have been with one of the investors from Rajasthan, Mahavir Sharma, and he asked me, Pradeep, कब तक business करोगे? इसको बेच दो और कुछ नया शुरू करो. So now the businesses are like that, how you can exit. So all business model should be, पहले हम business model बनाते थे कि इसमें हम generation से generation बने रहेंगे. अब जो business model के startups बनाते हैं वो बनाते हैं कब हम exit होंगे. So the basic difference comes that now startup thinks कि हम exit कब होंगे. When we create the profitability, कब इसको हम next level पे ले जाएंगे, and now the business is more important than who is running it. Right. So now it's an entity which is working. Right. It is not that कि यही चला रहा है. So somebody can be founder today, somebody can be investor today, and after 5 or 10 years down the line, there can be another person who is running it to the next level. Because I can run my business up to a certain level. After that, I need somebody to take it to the
next level. So the difference of all these things are happening. So as an investor, we always see the things which can take it to the next level. Absolutely. And these distinctions that you've made are so critical, I think, for the upcoming generation to understand. I'm also not too very sure that I understand this ecosystem completely. And with the kind of diversity that we have on the panel itself, I believe we have gotten some very nice perspectives of thoughts. Unfortunately, I have only time enough to take one final comment. And for that, Rajiv ji, may I please come back to you? I loved it when you said that businesses are not just about balance sheets. They are slightly bigger, more richer than that. And I genuinely, honestly believe that entrepreneurship is not just a skill, it's an entire mindset. It's something that inhabits your being. It's something that inhabits the world around you. So if you can help me conclude on a note of what are the opportunities and what are the advices that we need to bear in mind in a country like India. What are our biggest opportunities? What are the biggest warnings that we must keep in mind so as to prosper, grow, and thrive as a nation of entrepreneurs? Perfect, thank you. So what are the opportunities? The world is changing in a big way. I remember one seminar I attended. Steam engine was discovered 200 years ago. Someone took out the coal from the earth, created that steam engine. It was a buzzword, और ऐसा लग रहा था कि he will got a Nobel Prize, and it would have had there been. आज वो सबसे बड़ी समस्या हो गई, and it has become a source of pollution. 200 years ago, something that was a hero has become a villain now. About 100 years ago, Neil Bohr, he broke that atom and created that atom bomb. He was a hero कि nuclear power आएगी and whole world will get all the power. 100 years down the lane, Hiroshima and Nagasaki happened, and today it has become a villain. 50 years ago, computers came, heroes, बहुत हो जाएगा, ये हो जाएगा. E-waste has become a problem. The technology that was a hero 50 years ago has become. So what I'm trying to tell, the world is going towards sustainability. All the boys and girls listening this, be careful. We are thinking in terms of the things which can save this earth. Technologies are fading away fast. They are becoming obsolete very fast. You need to become very alert and agile to understand how world is changing. Though cloud computing aa gaya hai, things are changing, technologies are becoming obsolete in 10 years, maybe in 5 years. So be ready. One is be sustainable. Find out the things which can help this earth and move forward. So that was one question. What was the other question that you said? One was? I said opportunities and advices. Advices. So advice to aa gaya, sir. Advice, finally, that is good. I am good at. So I always say anyone wants to start the business, mera घिसा हुआ बात है, most of people must have heard. Anyone who wants to start a business need to have 3 factories. One is the ice factory in your head. Because things will go wrong, your best laid plans will go wrong, you will have fight with your father, your brother, your spouse, your orders will not come, your payment will not come. If you let it heat up, your things will go wrong. You will fail, your best laid plans will fail early, I say. That is first advice I want to give you. So have a ice factory in your head, have a sugar factory at your tongue. Things will go wrong, you will be taken advantage of, your credit will be taken away, आपकी कोई गलती नहीं होगी, आपको डांट पड़ जाएगी, you will do 10 things right, nobody will notice one wrong thing and you will be fired left, right, center. But keep your tongue soft and sweet. कितना भी हो जाए, the word is more damage. पूरी दुनिया में तूफानों, ज़ल्ज़लों, भूकंपों से इतने लोग घायल हुए जितने शब्दों से हुए. Be careful. So anyone who is looking to be an entrepreneur need to have a sugar factory on his tongue. And finally, a third factory, a steel factory in your heart. All best laid plans will go wrong. People will desert you. You will have a breakup. You will have no money. You will have sleepless nights. Have a strong heart. If you break down, nobody will be there. You will be all alone. Even the ecosystem will not help. If I die today, the banks will be on my wife and my children's head to recover their money. So be ready for that, but have a strong heart. So if you have 3 factories, advice is ice factory in your head, sugar factory on your tongue, and steel factory in your heart. Thank you very much. I couldn't have created. And before I conclude, thank you We very have much. one more thing coming up. Yes. We have one more thing coming up. Yes, sir. And thank you for this, Udaan. आदरणीय, this is fantastic. तो मुझे 2 लाइन के बगैर मैं चाहूँगा तो बात बनेगी नहीं कि नापना है अगर आज की इस उड़ान को, नापना है अगर आज की इस उड़ान को तो कुछ और ऊंचा कर दो इस आसमान को तो कुछ और ऊंचा कर दो. Thank you very much. I don't think I have any business summarizing this session for anyone. Rajiv ji, you've done that so well. Thank you so much to all the panelists for being with us here.
India is a country of many countries. There are many Indias in India, and each of that India has a potential, not just the metropolitans, not just the tier 2s, not just the tier 3s, but anywhere and everywhere there's an opportunity. All we need is the spirit, the mindset, and the jazba to go along. Thank you so much. Thank you so much, everyone. I would request everyone to please stay back on stage, and to give away the mementos, I would request Honorable Gaurav Tiwari, sir, Pro-Chancellor, Mansarovar Global University, to please join on stage and hand over the mementos to our esteemed panelist with us. So yes, first of all, requesting Mr. Ali Rashid ji to please step forward along, and I would request Gaurav sir to please come up and thank our honorable panelist on stage. दोस्तों सभी की तालियां जोरदार मिलें एक बार, बेहतरीन तालियों से इस जोश को आप पूरा करिए. We would like to thank our very honorable Mr. Rajiv Agrawal sir for filling us with such insightful words and amazing poetry as always. Would like to thank Mr. Pradeep Karambelkar sir for his insightful talks on the very useful topic for our youth. We would like to thank Mr. Pradeep Joshi sir for his valuable words and his experience throughout his journey. Everyone put your hands together once again for all the amazing panel together. I would request, thank you so much Soumya once again for being a great support. Yes, would request everyone to please join us for the group picture. Thank you so much everyone. Thanks a lot for being such an amazing speakers, and thank you for giving all the insights about the industry. Thank you so much guys. Thank you. So guys, let's move ahead forward because it's time for a success story. हम सभी जानते हैं कि कोई भी business, कोई भी startup बिना कहानी, बिना failures, बिना रुकावटों के पूरा नहीं होता, पर जो उसे पूरा कर लेते हैं वो अपने आप में सिकंदर कहलाते हैं. एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी बहुत ही यूनिक वे में आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं. यहाँ पैनल नहीं होगी, यहाँ वन मैन आर्मी होगी. एक ऐसी शख्सियत जिसने खुद ही इस पूरी जर्नी को जीते हुए मार्केटिंग सॉल्यूशंस के लिए वन स्टॉप व्यक्ति अगर कोई रहा है, so वो हमारे साथ आने वाले गेस्ट रहे हैं. And it's time for our panel number 6, that is the Shebang story with Harshil Karya. स्वागत करेंगे मंच पर, जैसा कि ये सेशन कहता है, the one amazing personality Mr. Harshil Karya, to please join on stage, and to moderate the session let me welcome on stage once again Mr. Karan Kukureja. सभी की तालियां चाहिए जोरदार. बिल्कुल, तालियां लगातार जोश से भड़की होनी चाहिए, जोश के साथ होनी चाहिए, क्योंकि यही जोश हमारे इस स्पीकर को और ताकत देने वाला है. थैंक यू सो मच. सो प्लीज जॉइन अस ऑन द सीट्स. मैं शुरू करूं इससे पहले लेट मी टेक यू टू अ ब्रीफ जर्नी ऑफ Shebang एंड मिस्टर हर्षिल कारिया. Harshil Karya, founder of Shebang, co-founder of Level Supermine. Harshil Karya is the founder of Shebang and a co-founder of Level Supermine. Shebang, also known as Shebang, operates with a mission to provide fully integrated and holistic marketing solutions, combining creative, media, and technology services under one roof. Harshil's approach aims to simplify the client experience by offering a one-stop shop for all their marketing needs. His commitment to a comprehensive strategy ensures that Shebang's solutions transcend individual mediums, delivering a combined impact that truly moves the needle for their clients' businesses, creating a Shebang effect in the marketing world. Welcoming you on stage, sir. We are really honored to have you and looking forward to the amazing creative session all through the journey. And to take away through the journey, we have the one amazing man, Mr. Karan Kukureja, who himself has been creating such amazing market for his industry. Welcome, sir. Welcome both of you, and it's over to you. Welcome, Harsh. Before we begin, I think बहुत important होता है, creative चीज़ है और creative काम है Shebang का. तो
before we begin what the journey is about and hear it from the man himself, we would want to showcase a small short video of what exactly Shebang does. Can we have the video, please? Can you play it? Welcome, Harshal, to this beautiful city of Bhopal. I think you just need to put Thank you very much. And पहले तो मैं thank you कहना चाहूँगा to Tankha sir for inviting me, Gaurav sir for inviting me, and Aryan ji for inviting me. बहुत अच्छा लग रहा है भोपाल में आके. It's such a beautiful city. सुबह गया था आपके बड़े तालाब पे, so it is stunning. I can't believe कि आप इतने lucky हो कि आप ऐसे शहर में रहते हो. So I am very lucky to be here. We are equally lucky to have someone like you who has. So एक होता है brands. हम सुनते हैं इतने सारे हमने brands के नाम देखे हैं. और एक होते हैं वो जो brands को brands बनाते हैं और खुद एक अपने आप में brand बनते हैं. Shebang is in true sense one such story that you have been able to create in a short span of say about 5-6 years. It's 8 years old now. 2015 में आपने इसकी शुरुआत करी. उसके पहले भी आप इसी फील्ड में थे. You were running another startup in the same field, Foxymoron के नाम से. But 2015, your journey changed. Your vision, your experiences led you to something. Again, a brilliant name, I must say. The logo that you have, hashtag with an exclamation mark. कैसे? I mean. See, I think this conclave, Udaan Conclave जो आज हो रहा है, I think the mission is very, very strong. Yeah. Mission is job creation. And I think what happened, why I think this mission is very strong, because my inspiration from entrepreneurship, for entrepreneurship, came at age 21. 21 years का मैं था और what I used to do is कि college में जब भी मैं था, तीन साल मैंने जो college की, that time every year I used to do a different internship.
And why I say that this mission that is chosen for this conclave is very, very strong, because in my third year of internship, I was working with a gentleman called Rajiv Dingra, who was running a company called What Consult, What Blog. उन्होंने कंपनी बेच दी डेंसू को, काफ़ी अच्छे वैल्यू पे उन्होंने कंपनी बेच दी डेंसू को, और मैं उनकी कंपनी में इंटर्न था. तो अगर इकोसिस्टम स्ट्रांग हो, ज़्यादा जॉब्स हो, तो मेरे जैसे इंटर्न होंगे कंपनीज में. और वहाँ मैंने देखा कि अच्छा कंपनी ऐसे चलती है, वो भी स्टार्टिंग स्टेज पे थे. तो मुझे लगा कि वो तभी मुझे सैलरी दे रहे थे 16,000 रुपीज़ की. अच्छा. तो मैं काफ़ी ऐसे, मतलब आई थिंक जो भी ये रूम में है, मैं सेफली कह सकता हूँ कि जो भी यंग यूथ जो ये रूम में है, आपकी वजह से आपका घर नहीं चलने वाला. तो मेरी भी सिमिलर सिचुएशन था कि मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है 16,000 रुपीज़ का रिस्क है, और अगर आप वो सैलरी घर पे नहीं लेके आए तो ठीक है, आप बिजनेस करो. और मेरी वो 16,000 रुपीज़ की जो सैलरी थी उसको मैंने डाला. हम लोग 4 पार्टनर थे, हम लोग ने 64,000 रुपीज़ डाले. और उस समय बॉम्बे में, अगर आप लोग वीटी स्टेशन पे आए हो बॉम्बे में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे, उसके सामने एक मैकडॉनल्ड्स है. तो वो मैकडॉनल्ड्स की गली में हमारी पहली ऑफिस थी. छोटी सी ऑफिस थी 200 स्क्वायर फुट की, नो विंडोज़, नो टॉयलेट, कुछ नहीं. पैसे डाल के ऑफिस बनाई और फिर अच्छी कंपनी बनाई हम लोगों ने. 250 लोगों की कंपनी बनाई फॉक्सी मोरॉन के नाम से. फर्स्ट फ्यू फास्ट मूवर्स थे हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेस में. This was 2009 when you started. 2008 में शुरू की थी वो ऑफिस, वो कंपनी. और फिर वहाँ से मैंने एक एग्जिट ले लिया और फिर मैंने शुरू किया शबैंग, क्योंकि मैं ज़्यादा इंडिपेंडेंटली काम करना चाहता था. वहाँ 4 लोगों की पार्टनरशिप थी. फिर मैं यहाँ एक इंडिविजुअली एक विजन उसको डायरेक्ट करना चाहता था, तो मैं निकल गया और मैंने शुरू किया शबैंग. But was it easy? Because see, when you're working with 4 people as a part of your team, against the idea of you leading the deck now all alone, अभी तो क्या है कि रिस्क बढ़ रहा है. तो अगर वो होता है ना बात कि यार मैं डूबा तो मेरे साथ 3 और डूब रहे हैं, और मैं बढ़ा तो 3 और बढ़ गए. सर कोई प्रमोटर होता है तो शेयर होना चाहिए. हाँ बिल्कुल. और वो मतलब आई थिंक यू कैन वर्क विद को फाउंडर्स अर्ली इन योर करियर, बट आई एम श्योर कि आप जैसे बढ़ते जाओगे ना, तो जितना आपका विजन क्लियर होता जाएगा, आप लीड फाउंडर बनना चाहोगे मेरे हिसाब से. But when you started off, so you would have started off alone, but you would have gone for the hiring spree, or is it something that you started off with pitching initially alone and then? No, so we had in day 1 of Shebang, I took a risk. If you all know about Mumbai का real estate prices, तो मैंने जाके पहले दिन पे 10,000 स्क्वायर फुट की ऑफिस ले ली. ओके, क्योंकि मैं had hired anyone then? हाँ, मतलब 20 लोग हायर किए थे. ऑफिस की कैपेसिटी ऑलमोस्ट 170 लोग की थी. 20 लोग हायर किए थे. वो रियल एस्टेट ऑलमोस्ट एम्प्टी जा रहा था. इन हाइंडसाइट शायद लोग बोलेंगे कि स्टूपिड डिसीजन, लेकिन क्या हुआ था वो दिन कि मैं मार्केट को दिखाना चाहता था कि आई एम रेडी, आपको जो चाहिए आप मुझे भेजो, इंक्रीज करने की कैपेसिटी है और मैं आपको सर्व कर दूंगा. तो क्योंकि मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस था, थोड़े कॉन्टैक्ट्स थे, तो मैंने 20 लोग डे 1 पे रखे और एक 10,000 स्क्वायर फुट की ऑफिस ले ली थी. और मेरे पहले दो क्लाइंट जो आए थे वो आप कुकरेजा मतलब सिंधी हो? पंजाबी. लेकिन मेरे पहले 2 क्लाइंट जो थे, पहला क्लाइंट था फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिंधी कंपनी है. और सिंधी कंपनी अगर आपको काम देगी उसका मतलब स्टैम्प ऑफ ट्रस्ट कि कंजर्वेटिव कंपनी होती है ज़्यादा. और दूसरी और कंजर्वेटिव कंपनी गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पारसी लोग. तो अगर पारसी लोग और सिंधी लोग आपको पहला काम देंगे ना, तो फिर मार्केट को पता चल जाता है कि ठीक है इसको काम दे सकते हैं. मतलब ड्यू डिलिजेंस किया होगा इन लोगों ने. बट ये भी अपने आप में बड़े ब्रांड्स हैं. और हाँ, बहुत बड़े ब्रांड्स हैं. एक नई, सो ऑफ कोर्स आपने एक्सपीरियंस था, काम किया हुआ था, बट अब आपने एक नई शुरुआत करी है. हाँ जी. और अब आप उनको जाके पिचिंग कर रहे हो. हाँ. तो बहुत आसान रहा कि गए पिचिंग करी और क्रैक हो गया, या किस्मत थी कि हमने पिचिंग करी एंड वी वर लकी इनफ टू जस्ट गेट होल्ड ऑफ 2 बिग ब्रांड्स? बिकॉज पहला कदम तो कठिन होता है, पहला ब्रांड लाना भी मुश्किल है. अगर कोई भी आप मेरी लाइन में आना चाहते हो ना, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिच. अगर आप सपोज मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी को पिच करना चाहते हो और उनको मतलब उनके 15,000 स्टूडेंट्स है और उनके क्या क्या सब डिविजन्स है, उनका बिजनेस मेन कहाँ से आता है, उनके पेन पॉइंट्स कहाँ से है,
आप मार्केट में थोड़ा स्टडी करोगे, स्टूडेंट से रिसर्च करोगे, उनके एम्प्लॉयज़ के साथ रिसर्च करोगे, और फिर उनको आप क्रिस्टलाइज करके बता सकोगे कि एक्चुअली आपके बिजनेस में ना आपको ग्रोथ यहाँ से अनलॉक होने वाला है। अगर आप पिच में वो अच्छी तरह से बता सकोगे तो क्लाइंट आपको बिजनेस क्यों नहीं देगा। मीन्स एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट फॉर मार्केटिंग, इट इज़ योर जॉब to make sure that you understand the client's business as well as the client understands their business. बिल्कुल, बट उनके कोई एजेंसी ऑलरेडी होगी, ये तो पुराने ब्रांड्स हैं हाँ, जो उनका काम कर रही होगी। अब एक नया ब्रांड आया शबैंग, एंड टेक्निकली आप उनको साइडलाइन करके मैंने प्राइस अंडरकट भी किया स्टार्टिंग में। थोड़ी भीख मांगनी पड़ी, बेगिंग बोल के साथ जाते हो आप अर्ली डेज पे, तो मतलब कॉम्बिनेशन की चीज़ें होती है कि आप प्राइस भी अंडरकट करोगे, आप क्वालिटी बेटर दोगे, आप थोड़ी ह्यूमिलिटी के साथ जाओगे, आप रिक्वेस्ट के साथ जाओगे, आप थोड़ा टाइम फ्री काम करोगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ते फ्री काम करोगे ताकि आप काम दिखा पाओ उनको। हाँ, उनको क्वालिटी दिख जाएगी, बिकॉज मार्केट को भी वो एक डाउट होता है ना कि ये सर्विस बराबर देंगे कि नहीं। बिल्कुल, बट यू कुड क्रैक इट अप, यू गॉट 2 clients. I was lucky, yes. So you would rate luck as an important parameter in the process? You can say yes. I mean, in anything you will, I think if we take concept of, if we take the concept of Bhagavad Gita, what is Bhagavad Gita teaching us is concept of detached, dutiful work. So you do the work with your full detachment to the outcome, with your full duty, and then what comes is comes. So some part of it is luck. Some part of it is luck. But 20 लोगों की कंपनी से शुरुआत करी आपने 2015 में। हाँ। और अभी मेरी बैक स्टेज इनसे चर्चा हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही पूछा अभी कितने लोग होंगे, तो 2015 में शुरुआत करी, मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार 20 लोगों की टीम होगी, कुछ 150-200 लोग तक तो पहुंच गए होंगे। 1200 लोगों की टीम के साथ मेरे ख्याल से जो नंबर ऑफ कंट्रीज और सिटीज जहां पे आप आज अपने ऑफिसेज वर्क कर रहे हैं, दैट इज एक्सट्रीमली, इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, इट्स अ प्रीटी गुड ग्रोथ। ये ट्रैजेक्टरी कितनी आसान थी, और क्या ऐसा बीच में कभी आया एलिमेंट, क्योंकि आपने इनिशियली अपने पैसे इन्वेस्ट किए, आपने रिसोर्सेज हायर करी, तो क्या ऐसा हुआ कभी बीच में 2 साल 3 साल बाद कि इनिशियल क्लिक तो मिल गया बट आगे के स्टेप्स शायद उतने आसान नहीं हो रहे थे और चीज़ें मुश्किल थी, और उस बीच में कभी क्या ये थॉट आया कि यार मूवमेंट नहीं हो रहा है तो अब पिवटिंग करें, कुछ और करें, एनीथिंग? आई मीन नहीं हुआ था। मैं आपको ये कहानी बताता हूँ। लास्ट पैनल में इन्वेस्टर्स थे, तो मैं आपको इन्वेस्टर्स की कहानी बताता हूँ। मैंने डाले थे, जब भी मैंने शबैंग शुरू किया तभी मैंने डाले थे करीबन 4.34 करोड़ रुपीस स्टार्टिंग में डाल दिए थे। ये आपका अपना पैसा था? हाँ, मेरा पैसा डाल दिया था मैंने। फिर पहली कंपनी तो मैंने 16,000 रुपये से शुरू की। सेकंड कंपनी में तभी थोड़ा एक कैपिटल बेस था, तो फिर मैंने डाल दिया, मतलब जो भी था डाल दिया। और पैसा क्या होता है ना, अभी आप जब भी बिजनेस प्लान में लिखोगे, मेरे बिजनेस प्लान में पहले साल का लॉस था 1 करोड़ रुपए का, लेकिन आप एक्सेल शीट पे लॉस लिखोगे और जब भी आपका खून जाता है ना, जब भी 1 करोड़ एक्चुअली जाते हैं, तो आपको पता है पेन क्या होता है। नींद खराब हो जाती है। तो नींद खराब हो जाती है, मतलब आप और आप पकड़ो ना, मेरी प्रीवियस कंपनी में मेरा मंथली इनकम था सपोज 5-6 लाख रुपीस पर मंथ, तो आपके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छे ड्राइवर है, आपके पास मतलब आप खाना अच्छी तरह जगह पे जा रहे हो, नाइट क्लब जा रहे हो, ये सब बंद हो गया। और लाइफस्टाइल कट बैक हो जाती है। लाइफस्टाइल बहुत सिंपल हो गई मेरी, उसकी वजह से मैं बहुत सीखा भी। तो आप मेरी सैलरी हो गई 5-6 लाख से 20,000 रुपीज़ अ मंथ। तो क्योंकि मतलब सब पैसे मैंने डाल दिए और मैं अपने आप को कम सैलरी दे रहा था। टीम की सैलरीज में जा रहे हैं, टीम की सैलरीज में जा रहे हैं, और फिर वो जो लॉस रेड देखा मैंने एक्सेल शीट पे 1 करोड़, तो मुझे थोड़ा टेंशन हो गया, बहुत टेंशन हो गया। मैं इन्वेस्टर्स ढूंढने लगा कि चलो आप आ जाओ। उसमें एक हमारे इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े एक लेजेंड है सैम बलसारा करके, मेडिसिन कम्युनिकेशंस ग्रुप चलाते। मैं उनके पास गया, मैं बोला सर आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे? तो उन्होंने मुझे सीधा डील दे दिया कि मैं 51% ले लूँगा, तूने जो पैसे डे 1 पे डाले तुझे दे दूंगा, मैं 51% ले लूँगा। मैं बोला मस्त, इन्वेस्टर ऐसे सोचता है। तो मैंने कुछ करके डिली डाली करके ऑलमोस्ट 16 महीने वैसे बिता दिए उनके साथ एक अग्रीमेंट करते हुए, क्योंकि मैं देखता रहा कि इन्वेस्टमेंट की बातें चलती हाँ, मतलब एक बॉस कैसे सोचता है वो। मेरे इंडस्ट्री मतलब उनका टर्नओवर आप पकड़ो तो 5,000 करोड़ का टर्नओवर होगा। तो वो मतलब
मैं उनके साथ देख रहा था, एक लॉ फर्म को मैंने पैसे दिए थे और वो लॉ फर्म आई वुड से कि मतलब लॉ फर्म वाले जनरली तो बहुत महंगे होते हैं और बहुत यू नो इट इज़ अ एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट, बट वो मैं ऑलवेज कहता हूँ कि वो एक मेरा अच्छा एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट वर्थ इट था वो, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट के जरिए मुझे देखने मिला कि एक महारथी कैसे सोचता है, कि वो मेरे पैसे देना चाहता था, वो 51% रखना चाहता था, इन अ वे मैं उसका मैं उसके लिए ही काम करूंगा। सीख रहे हो और आप चीज़ें हाँ, प्रोसेस बिल्कुल। तो फिर मैंने थोड़ी धीरज रखी, स्लोली मैंने नेगोशिएट किया कि सर नहीं मुझे ये क्लॉज चाहिए, नहीं मुझे वो क्लॉज चाहिए, मुझे ये क्लॉज चाहिए, नहीं मुझे वो क्लॉज चाहिए। वो भी मुझे एंटरटेन करते गए और तब तक 16 मंथ्स गए, तब तक मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगा। तो मैंने बोला सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं निकलता हूँ, मैं ये डील नहीं कर पाऊँगा। और फिर मैं कंटिन्यू करता गया और फिर 2017-18 में मुझे एक चटका आया कि भाई ये हमारी तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है और अगर हम आईटी इंडस्ट्री को देखेंगे वो तो हमारे मतलब नेक्स्ट लेवल पे डबल बाप है हमारे, क्योंकि अगर हम एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को देखते हैं, ऑर्गेनाइज एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वो केवल 50,000 लोगों को एम्प्लॉय करती है। और अगर आप आईटी इंडस्ट्री देखोगे, ऑर्गेनाइज आईटी इंडस्ट्री, तो 5.4 मिलियन पीपल आर एम्प्लॉयड बाय ऑर्गेनाइज आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। तो मैंने देखा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे एक्चुअली। और फिर मैंने एक मतलब आप कह रहे हो कि 1200 लोग की कंपनी अच्छी है, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है, बिकॉज हमें जो अपॉर्चुनिटी है अभी आके, क्योंकि इंडिया आईटी इंडस्ट्री जितनी बड़ी बनी, अभी क्रिएटिव इंडस्ट्री बन सकती है। मैं आपको थोड़े स्टैट्स देता हूँ यूके के बारे में। यूके इंडस्ट्री, अगर आप सोच रहे हो कि इंडियन क्रिएटिव इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइज क्रिएटिव सर्विसेज इंडस्ट्री 50,000 लोगों को एम्प्लॉय करती है, कोई गेस कर सकता है यूके में कितने एम्प्लॉयड है? अगर इंडिया में 50,000 होंगे तो बाय पॉपुलेशन लॉजिक 5,000 होने चाहिए, बिकॉज यूके की पॉपुलेशन 1/10 ऑफ इंडिया है, करेक्ट? बट एक्चुअली यूके एम्प्लॉयज 2.5 lakh people in creative industries, 5 times more than India. They are 14% of exports of GDP is from creative industries in UK. So what IT industry is for India, creative industry is for UK. और अगर आप मैन पावर ट्रेंड्स देखोगे तो सबसे लार्जेस्ट मैन पावर मार्केट इंडिया में है। बिल्कुल। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू नाउ बी एबल टू कल्टिवेट। बट ये क्यों नहीं हुआ? आई मीन ऐसा तो है नहीं यहाँ क्रिएटिविटी की कमी है या टैलेंट पूल की कमी है? नहीं, एक्चुअली क्वालिटी में डिफरेंस है। अगर आप क्रिएटिविटी ऑफ वेस्ट देखोगे आज और क्रिएटिविटी ऑफ इंडिया देखोगे, देयर इज अ चेंज। सो हम लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए हम लोग छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। जैसे हम लास्ट ईयर गए यूके में, इस साल में हम लोग ने एक छोटी सी एक बहुत हाई एंड डिज़ाइन स्टूडियो खरीद लिया एम्स्टरडेम में, नेदरलैंड्स में। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि वहाँ का जो मैं कहता हूँ मैजिक डस्ट, पिक्सी डस्ट, वहाँ का पिक्सी डस्ट थोड़ा हमारे टैलेंट पे डाल देंगे ना, और वो स्किल्स टेक्निकलिटी डाल देंगे और 1-on-1 वर्किंग डाल देंगे, तो ये जो हमारा स्किल सेट है वो काफ़ी बढ़ सकता है। पर ये क्या इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि एज एन एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री हमारे यहाँ पे क्रिएटिविटी को इन जनरल भी बहुत बढ़ावा नहीं दिया जाता है। अब शायद हो रहा है विद द ऑनसेट ऑफ एलिमेंट्स लाइक इंस्टाग्राम एंड ऑल, कॉलेज में बच्चे खुद से कर रहे हैं, बट आई थिंक 10 साल पहले या 8 साल पहले भी देखें ऐसा कुछ बहुत स्पेसिफिक या बहुत सारे ऐसे कोर्सेज या एलिमेंट्स नहीं होते। नहीं, ये एक नॉर्मल है। देखिए, अगर खाने पीने के वांदे हो घर पे, तो आप बोलोगे कि भाई तू बिजनेस करके आ, तू जो बेसिक काम है वो करके आ, पैसे घर पे लेके आ। लेकिन अभी इंडिया रहा नहीं जैसा, बहुत सारे घरों में खाने पीने का वांदा है नहीं। तो अभी लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, नाउ एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, और वही तो इसलिए कंटेंट क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं, इसलिए ये सब दूसरा हो रहा है। तो अभी एक दूसरा वेव शुरू हो रहा है इंडिया में, उस वेव में हम पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। बाय 2075 इंडिया इज गोइंग टू बी द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। वी आर गोइंग टू बी बिगर देन यूएस। सो that means that we are going to be, I think if I am not mistaken, $65 trillion economy by 2075. अगर आप कोई भी बिजनेस चला रहे हो, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आई वुड ओनली एडवाइस वन थिंग, स्टे पुट। बिकॉज जो वेव आने वाला है इंडिया ग्रोथ का, आप अगर सर्वाइव हुए, बिहेव लाइक अ कॉकरोच, अगर आप सर्वाइव हुए तो आप करोड़पति एट द एंड ऑफ द टनल। सो दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। मैं मतलब इधर बैठे कॉकरोच हूँ और आ गया हूँ भोपाल में, एंजॉय कर रहा हूँ। बिल्कुल, बट अभी आप भोपाल में हो और छोटे शहरों में फिलहाल देर आर वेरी फ्यू। सो कन्वर्जन्स फॉर एग्जांपल इज वन ऑफ द फ्यू एजेंसीज इन द सिटी जहाँ पे आप देख रहे हो कि जेन्युइनली बहुत सारा काम है। दे हैव क्लाइंटल्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑल्सो, बट इन जनरल
what is the one message that you would want to share with people or students who are studying in smaller cities, for example, a city like Bhopal, जहाँ पे limitation है एक clientele का, यहाँ पे brands limited हैं शहर में, यहाँ पे corporates limited हैं, so वो अगर यहाँ से operate करना चाहें फिलहाल तौर पे, वो कैसे इसको approach कर सकते हैं? Because see, you have been expanding your work while operating from India, you have been handling clients outside of India, a lot of them. See, very few. I am also not some share yet. I will be in few years. तभी आप अच्छी तरह से पूछ लेना. But मैं तो जहाँ जाता हूँ कि मुंबई में, you know, majority of advertising money is in Mumbai, in Delhi, in Bangalore. So though I have opened my 3 centers there. Okay. I would suggest that if you want to build a business out of here, then it's मतलब client base होना चाहिए, enterprise base होना चाहिए ताकि आप cater कर सको मेरे हिसाब से. So basically physical meetings are very important? है, I think, because it's a relationship driven business. Okay, okay. But ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप सेंट्रल इंडिया की एजेंसी मतलब स्पेसिफिकली आप सेंट्रल इंडिया में एक फुट होल्ड रखना चाहते हो, तो आप भोपाल को सर्विस करो, इंदौर को सर्विस करो, ग्वालियर को सर्विस करो, आप यहाँ पे जो भी बड़े बिजनेसेस है उसको अच्छी तरह से सर्विस करो, आप स्टाफ स्ट्रेंथ बिल्ड करो, आप स्टाफ को ट्रेन करो. बहुत सारे एंटरप्रेन्योर में बात करता हूँ ना, वो बोलते हैं कि अरे मैंने इसको 1 साल के लिए ट्रेन कर लिया, वो तो चला गया, उसने किधर और ज्वाइन कर लिया. तो मैंने बोला भाई उसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब ही इज ऑल्सो लुकिंग आफ्टर हिमसेल्फ. इफ यू आर नॉट एबल टू गिव द ग्रोथ देन पीपल विल लीव. Yes. Very simple answer to anything is the answer to all problems is growth, according to me. Yes, absolutely. So if you can keep growing, then people will stay with you. Yeah. Because you will be able to give them better salary, better growth prospects, etc., etc., etc. अभी what are your next plans? अभी एक चीज बन गई, आप कह रहे हो मैं भी और इसमें अभी तो नहीं, बहुत कुछ बचा है, बननी है, चीजें बाकी हैं. What next? सर अभी तो नेक्स्ट कंपनी को और बड़ी करेंगे. अभी प्रोसेस री इंजीनियरिंग किया है हम लोग ने फिलहाल, और हमारे 1200 लोग को 5000 लोग कैसे लेके जा सके, दैट इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. हम लोग का ग्रोथ गिव और टेक 45-50% ईयर ऑन ईयर हो रहा है लास्ट 8 ईयर्स से. तो हम वो मेंटेन करना चाहेंगे, और मेरा गोल है कि 7-8 साल में हम एक $1 बिलियन एंटरप्राइज क्रिएट कर सके इन वैल्यू, नॉट टर्नओवर येट बट वैल्यू. बट ऑफ कोर्स हमारी बिजनेसेस में इट इज ऑन टर्नओवर X मल्टीपल या पैट X मल्टीपल. तो मतलब एक यू नो लॉजिकल प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बनाना है. 8 साल में बड़ी कंपनी जितनी हो सके कर सकते. और उसके साथ मेरी एक दूसरी कंपनी भी चालू है. तो अगर आप सुबह आपका माइंडफुलनेस का एक प्रोग्राम था, मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी का प्रोग्राम था, तो मेरी जो दूसरी कंपनी है लेवल सुपर माइंड, उसमें मेरे पार्टनर है रणवीर अलाबादिया. अगर आप उसके पॉडकास्ट सुनते हो तो आपने सुना होगा कि वो प्रमोट कर रहे हैं लेवल सुपर माइंड को भी. तो हम साथ में वो बिजनेस बना रहे हैं, और वहाँ पे भी सेम फिलॉसफी है. मैं एक एंकर फिलॉसफी जिससे मैं काम कर रहा हूँ इज फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड एंड द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू इंडिया. सो इन Shebang आई एम ट्राइंग टू वर्क इट दैट best of Indian talent to the world and the best of the world talent to India to create an exchange. Same way in Level Supermind also I have the same vision, because India is a land of, you know, the home of mindfulness and spiritual practices. तो उसको modernize करके for a new world हम लोग कैसे लेके जा सके millions of लोगों के लिए बाहर, और plus millions of लोगों के लिए यहाँ पे, because we have on Level Supermind meditations in हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बंगाली. तो वी वांट टू हिट ऑल ऑफ मास इंडिया की एक प्रैक्टिस हो जाए ये मेडिटेशन प्रैक्टिस की, ताकि एक माइंड अनलॉक हो सके. इट्स वी आर पोजिशनिंग आवर सेल्फ एज अ माइंड परफॉर्मेंस कंपनी. तो आप अपने आप को माइंड परफॉर्मेंस कैसे अनलॉक कर सकते हो, उस पर हम लोग ने ज़्यादा, आई थिंक हमारा टाइम अप हो रहा है तो हम एंड करेंगे. आखिरी सवाल है और रेलेवेंट है, इसके बाद विल क्लोज इट अप. हाउ इम्पोर्टेंट हैज मेडिटेशन प्लेड अ रोल इन योर ग्रोथ एज अ पर्सन एंड द ग्रोथ ऑफ Shebang एज एन ऑर्गेनाइजेशन? आई वुड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं आपको बता देता हूँ. आई विल टेल यू सम साइंटिफिक फैक्ट्स अबाउट मेडिटेशन. This is the journal I'm referencing is the Science of Meditation by Richard Davidson and Daniel Goldman, 2 Harvard professors जिन्होंने almost 40 साल के लिए meditation पे research किया है using EEGs and various kinds of different devices. So
three or four things. One is in 2 weeks of a regular meditation practice. अगर आपने 2 हफ्ते बरकरार meditation practice की, तो you will definitely see reduced stress. If you practice for 2 months regularly every single day, you will definitely see greater focus. If you practice for 2 years every single day, you will see an increase in your memory. And if you practice for 5 to 7 years regularly, you will start seeing neuroplasticity, which means you will start seeing increase in speed of cognition and more capacity load. I would definitely say कि मतलब जो मैं जानता हूँ अपने आप को, मतलब अगर आपको मेरी कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने रणवीर के पॉडकास्ट पे भी कुछ कहा है कि एक्चुअली 2013 से 2018 मेरा एक ड्रग एडिक्शन प्रॉब्लम था और बहुत ख़राब प्रॉब्लम था. मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगा. मतलब हमारे शहरों में, बॉम्बे जैसे शहरों में ये सब बहुत रैम्पेंट है, इश्यू है. और नॉर्मलाइज हो गया, बहुत नॉर्मलाइज हो गया था और उसकी वजह से मुझे क्या इम्पैक्ट हुआ था मुझे ही पता है. और मेरी एक मेंटर है सलोनी सूरी जी, उन्होंने मुझे एक कहा था, मैंने उनको ओपन अप किया था कि ये मेरा इश्यू है और उन्होंने मुझे कहा था आई जस्ट एंड दिस वेरी क्विकली. उन्होंने मुझे कहा था कि हर्षल, यू आर गेटिंग हाई बिकॉज यू आर नॉट हाई इनफ ऑन योर ओन लाइफ. और तभी मैं संभाल रहा था कुछ 80 to 100 पीपल, अभी और एक बिजनेस आ गया और लोग आ गए. तो आई वुड से मेडिटेशन हैज हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट एंड आई वुड लाइक टू हैव दैट प्रैक्टिस होपफुली इन द हैंड्स ऑफ एज मेनी पीपल इन द वर्ल्ड एज पॉसिबल. Superb, superb. Thank you so much, Harshil. Your session was very insightful. हम और समय हो सकता था तो और समय खींचते. मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारी बातें होती. But a huge round of applause for Harshil. Thank you for taking out time, and we hope to see you more often in Bhopal. Thank you so much. And thanks to you also, Karan. If shebang was an emotion, I'm sure that's what we felt here. I would request Harshil for you to please remain on the stage. And may I invite on the stage once more Shri Vivek Tankha ji. Vivek ji, we would need your presence on the stage to present a memento from our side to Harshil. Karan, we will not give one to you. Just a humble gesture of gratitude on our behalf for Harshil, for sharing such wonderful insights and giving us a session full of so much candor and honest sharing of his stories, experiences, and opinions. Thank you. Thank you for being with us, Harshil. And Karan, you must certainly join us for a photograph for memory's sake. Can we request you for one more photo, Vivek ji? Thank you. Thank you so much. And we will move towards the next session. But before that, let me also tell you that along with these panel discussions, we do also have a wonderful performer who will be taking the stage shortly. Kavish is with us, and he will be regaling the audience with his very unique brand and variety of music very, very soon. But time now to move towards our next panel, which is called City Influencer Spotlight. For this panel, I would like to call on stage all of our esteemed guests and panelists. Can we have on stage Sushant Kaushal, Shubham Sisodia, Jyoti Ahuja, and Zainul Khatani? Can we request our esteemed guests and speakers to kindly join us on stage? I would also like to invite on stage our moderator, Shashank Shukla. Can we have everyone on the stage, please? I am sure this promises to be another conversation which will be very relevant and very entertaining for everyone. I would now like to take some time introducing each of the panelists to you, beginning with Sushant Kaushal, who is a digital creator and entrepreneur as well as a social media influencer.
He owns the Bhopal page, which has 3 lakh followers, and another page where he talks about something different with lakhs of followership as well. Sushant, you are a true social media phenomenon. So glad to have you here with us on the stage. Welcome. Can we put our hands together for Sushant, please? Next, we have with us Shubham Sisodia, who's popularly known on Instagram as Indore Sher. He's a multifaceted individual with various notable roles. He's the founder of the Sid Patel and an official partner of Indore Traffic Police handle. Shubham is also involved in the world of food, curating content for Indore Sheher Foodie, and his list of social media achievements and involvements only goes on and on and on. Shubham, so glad to have you on this stage with us. Welcome. Welcome to Udaan Conclave. Kindly put your hands together for Shubham. Please put your hands together for Shubham. I know we are coming towards the end of the day, but we have to keep the energy up, please. Our next panelist is Zainul Khatani, who is not only an accomplished airline pilot, but also the creative mind behind rentawall.in. With a passion for aviation, he has earned recognition as a certified aviation storyteller. How unique. Sharing captivating tales from the skies with all of us who sadly only inhabit the earth. Zainul, welcome on the stage with us. Thank you for coming to Udaan Conclave. And then, of course, we have with us Jyoti Ahuja, #1. How stunning you look, Jyoti. So lovely to see you. And she is a recognized mom influencer and a certified parenting coach, blending her expertise in child psychology with practical insights from her diploma in the field. Beyond her commendable knowledge in parenting, she showcases a flair for culinary arts, sharing delectable food recipes with the audience. For the versatile Jyoti Ahuja, we are so honored to have you on the stage. Welcome. And hosting and moderating this session is Mr. Shashank Shukla, who also has an entrepreneurial background and is the founder of the online clothing brand called Poshakam. Also living his passion for social media through one of the prominent city update pages called Bhopal City, which has a fan and follower base of 92,000 people. Shashank, this is your session. Over to you. Let's bring some spotlight on our city influencers now. First of all, you all are invited to Udaan Conclave और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो मैं सबसे पहले आप लोगों से एक कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ब्रांडिंग के लिए, सिटी डेवलपमेंट के लिए आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बट व्हाट मोटिवेट्स यू टू, आपको किस चीज़ ने बेसिकली मोटिवेट किया टू मेक दिस सोशल मीडिया एसेट्स? तो आई विल स्टार्ट विद सुशांत. So, for the motivation, it's like social. It is more for the social cause. जो social cause होता है, जो help होती है उससे एक social media platform से. So we have like more than 3 to 5 lakh followers and various pages. उससे बहुत सारे causes में help होती है. We can, we have done so many campaigns and initiatives for women empowerment, plantation drives, and Abhi recently, Bhopal collector called us for the to boost voting percentage, which is a very important thing right now. Abhi elections are, so voting, we're not going towards any party thing. So voting percentage बढ़ाने के लिए social media is a very effective platform. Abhi eventually after 6th आचार संहिता लागू हो जा रही है, तो बहुत सारी चीजें हो नहीं पाएंगी. Mostly things will be on social media. So that is very important. And उसके बाद promotions for the एक city का tourism promote होता है बहुत अच्छे से through social media. People get to know about various heritage places of Bhopal, various restaurants, hangouts of Bhopal, tourist attractions. So उसके लिए बहुत अच्छा रहता है. तो जब promote होती हैं, लोग हमारे पास आते हैं promote करने के लिए. So even you have a page, Shashank. So when people come to you, it's a good feeling, and you realize
you are doing well for the city. So like that. All right. Promotion में basically एक city की branding भी हो जाती है, and जी. that is our जी. first motto basically. जी. मैं पूछना चाहूँगा even शुभम से कि शुभम, what's your take on this? सबसे पहले तो मैं उड़ान कॉन्क्लेव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे यहां पर आमंत्रित किया, और आप सभी भोपाल वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे सुनने आए हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम सिटी की बात कर रहे हैं, एज अ ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, हमें क्या मोटिवेट करता है? जब आप किसी की हेल्प करते हैं ना, और उसके चेहरे पे जो एक हंसी आती है, अगर हमारी वजह से किसी के चेहरे पर हंसी आ रही है, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए वही होता है। और इंदौर से हूँ मैं, इंदौर सफाई में पिछले 6 सालों से नंबर 1 है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हमें मोटिवेट करती है, लेकिन सबसे जो मैंने आपसे कहा अभी कि अगर किसी के फेस पर आप स्माइल लेके आ रहे हो, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए काम करने का वही है कि हमारी वजह से कोई खुश हो रहा है। All right. So now I would like to ask Jyoti the same. आप कैसे इस चीज़ को represent करते हैं? सो ऑनेस्टली लोगों की एक सोच होती है कि जब एक औरत माँ बन जाती है तो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। आई मीन आई हैव हर्ड दिस अलॉट। सो मेरा पर्सपेक्टिव बेसिकली ये है, वाई ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज जिस माँ बनने को, जिस पेरेंटिंग को लोग सोचते हैं कि लड़की का करियर ख़त्म हो जाता है, समटाइम्स दे हैव टू लीव, मैंने उसी को अपना करियर बनाया है। सो दैट इज़ द मेन मोटिव, एंड आई वॉन्ट टू चेंज द स्टीरियोटाइप ऑफ दैट थिंकिंग that once you are a parent then you can do nothing. I know so many moms are doing so well, they are working outside and it's very hard. It's very, very hard, let me tell you, okay? So how I'm here, only I know that. But first of all, I'm really grateful to you. You have invited me here and I'm part of this Bhopal city, being from Indore. So thanks a lot to each and every one of you. Secondly, social media आज ऐसा platform है जो हम कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। So that kind of a thing is there कि अगर हम आकर बोलेंगे नहीं, अपना पर्सपेक्टिव दिखाएंगे नहीं, तो कोई सुनेगा भी नहीं। एंड आई थिंक इंस्टाग्राम जो मेरा मेन प्लेस है, वहाँ पर लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं बहुत अच्छे से। तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न आई एम हियर। Hello. I think so the same question for me as well, right? Thank you, Udaan, for bringing me here. I'm Captain Zainul Khatani. Been flying with multiple airlines for a long time, and I have flown about 75% of the world. The reason which motivates me to bring something here in Bhopal is being Bhopali. I really wanted to do something great in Bhopal. अगर आप लोगों ने टाइम्स स्क्वायर कभी देखा हो, न्यूयॉर्क का जो एक बड़ा अच्छा मंजर है, वहाँ पे सारी लाइट्स, सारी स्क्रीन्स होती हैं हर जगह। जो भी बंदा फ़ोटो खींचता है उसके पीछे इमारतों पे स्क्रीन लगी होती है और उस पर एडवर्टीजमेंट चल रही होती हैं। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट, वहाँ से आया कि वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी तो कर सकते हैं। सो द होल आइडिया वाज कि कभी भी किसी भी एडवर्टीजमेंट लोकेशन की MRP नहीं होती है। आज मैं आपसे बात करूँ कि कोई होर्डिंग है, उसकी कोई MRP है, तो कोई MRP नहीं है उसकी, बट एडवर्टीजमेंट्स हो रही हैं, हर जगह पे एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। सो दी होल आइडिया वाज टू ब्रिंग MRP टू दी एडवर्टीजमेंट लोकेशन। वो हाउसिंग सोसाइटीज़ की लिफ्ट हो सकती है, वो एक होर्डिंग हो सकती है, वो एयरपोर्ट के बाहर का बिलबोर्ड हो सकता है, वो एक पार्किंग टिकट के पीछे की टिकट के पीछे एडवर्टीजमेंट हो सकती है। हम इन सारी जगहों पे हम एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं, बट इसकी कोई प्राइस टैग नहीं होती है। सो आई मेड इट MRP फॉर एडवर्टीजमेंट्स, and it's easy to be just click on the mobile phone and you can book that location for a day or for hours or for a month. So the whole idea was to bring something extraordinary in Bhopal. Thank you. So next question I would like to ask from Shushan कि आप खुद भी एक सेल्फ इन्फ्लुएंसर हैं, आप खुद भी एक सेल्फ इन्फ्लुएंसर हैं और आपका एक पेज भी है माय भोपाल करके। सो बेसिकली दोनों पेजों के कंटेंट को आप कैसे प्लान करते हैं? व्हाट इज़ द क्रिएटिव प्रोसेस बिहाइंड इट? See, creative process से पहले you have to have a team. So team is very important. And creative process, उसमें consistency is the key. So, consistency and content. You have to focus on your content more. आपका content क्या है? People are liking it. The followers, your followers, those you have to reach. They want it. So you have to maintain the content first. So, पहले तो consistency,
secondly content, and then उसके बाद you have to follow the trends which are going on. So basically हमारा फोटे भोपाल से related चीज़ें हैं सारी. We have other pages too, but for भोपाल मेन ये रहता है कि भोपाल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं लाइक उसके प्रमोशंस जो अभी कंसिस्टेंट चल रहे हैं हमारे, अपार्ट फ्रॉम दैट जो वी फोकस ऑन टूरिस्ट अट्रैक्शंस, सो उसको हमें प्रमोट करना. एंड आई कम टू योर पॉइंट क्रिएटिविटी. अब क्रिएटिविटी में ये रहता है कि टीम के साथ जो हम लोग आजकल रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, वीडियोस जो कंसिस्टेंट बना रहे हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस हो और करंट टॉपिक्स पे जो बिल्कुल अपडेट रिसेंटली करंट टॉपिक्स पे चलते रहे उसके साथ प्रमोट होता रहे तो अच्छा रहता है. सो दैट्स इट. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन शुभम से है. शुभम, आप इंदौर का एक बहुत बड़ा पेज चला रहे हो, बट हम जानना चाहते हैं कि आप इंदौर के लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करते हो आपके पेज के थ्रू. इंदौर के लोगों के साथ साथ इंदौर की जो बोली है, भाषा है, जो मालवी भाषा चलती है कि हाँ भैया राम राम, क्या हाल चाल है, तो एक वो जो टच होता है, एक मालवा का जो टच होता है कि इंसान से अगर आप हालचाल पूछे तो उसको लगे कि यार क्या ही पूछ लिया इंसान ने. इसके अलावा इंदौर की संस्कृति को रिप्रेजेंट करना, इंदौर का खान पान बहुत अच्छा है, छप्पन चले जाइए, सराफा चले जाइए, तो इंदौर को ऐसे अलग अलग चीज़ों से हम रिप्रेजेंट करते हैं. और रही बात इंदौर की, तो इंदौर अभी सफाई में 6 नंबर पर आ चुका है, पिछले 6 सालों से नंबर 1 आ रहा है हमारा इंदौर. इसके अलावा जैसा आपने पूछा कि इंदौर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इंदौर में हम शिक्षा विभाग में भी काम करते हैं और इंदौर के जितने भी NGOs हैं जो ब्लड डोनेशन, फूड डोनेशन, एनिमल्स के लिए जो अच्छा काम करते हैं, मैं उनके साथ जुड़ के उनको प्रमोट करता हूँ. और अभी जो एक कोविड आया था 2020 में, कोरोना काल आया था, बहुत ही बुरी हालत हुई थी सबकी, तो वहाँ पर इकलौता ऐसा बंदा था मैं, वहाँ सब लगे हुए थे लोगों को डराने के लिए कि यार आज 100 केस आए हैं, 200 केस आए हैं, 300 केस आए हैं. वहाँ पर इकलौता बंदा मैं ऐसा था पेज के थ्रू जो ये बता रहा था कि आज की अच्छी खबर ये है कि 5 लोग स्वस्थ हुए हैं, 4 लोग स्वस्थ हुए. क्योंकि उस समय लोग टीवी नहीं देखना पसंद करते थे, क्योंकि टीवी पे इतनी नेगेटिविटी हो गई थी कि टीवी पे अगर इंसान बीमार नहीं भी है और वो टीवी देख रहा तो उसको सारे सिम्टम नजर आ रहे हैं, यार मेरा है ये भी सर दर्द भी कर रहा है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया. तो वहाँ पर हमने एक पॉजिटिविटी के साथ लोगों को अवेयर किया कि ठीक है कोरोना काल है, लेकिन उस समय में भी हमें हिम्मत के साथ काम करवाया लोगों से. और उस समय काला बाजारी भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रही थी रेमडेसिविर इंजेक्शंस की. तो वहाँ पर हमारी टीम ने, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, 2019 पास आउट हूँ, जॉब कर रहा था, लेकिन जॉब करने के साथ साथ फिर कोविड जैसे ही आया तो वहाँ पर जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था वो कंपनी शट डाउन हो गई थी. तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं अगली कहीं कंपनी में वर्क फ्रॉम होम लेके जॉब स्टार्ट कर दूं या मैं जन सेवा में अपनी भागीदारी दूं. तो मैंने वहाँ से पेज पर लोगों के साथ काम किया, डॉक्टरों से कनेक्ट किया कि सर क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या हम इलाज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे जो बड़ी दवाई थी वो थी मोटिवेशन और हम कितना खुश रह पा रहे हैं. तो वहाँ पर मैंने डॉक्टरों से, कॉमेडियन जो कॉमेडी करते हैं उनके साथ लाइव सेशन किए पेज के साथ, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया कि ठीक है समय ख़राब है लेकिन ज़िंदगी नहीं. तो वहाँ से हमने लोगों को अवेयर किया. तो यही है, हम पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मैं 4-5 सालों से काम कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद फिर जन सेवा में आना, तो बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ मैं, माता बरूडी गाँव है मेरा. तो वहाँ पर लाइक ऐसा है ना कि यार इंजीनियरिंग करने के बाद बंदा जॉब ना करते हुए जन सेवा कर रहा. लोग हंसते थे मुझ पे कि यार क्या ही कर रहा है तू, लेकिन जब चीज़ें हम लगातार किसी चीज़ को करते जाते हैं तो सफलता जो होती है, ये मैं मानता हूँ कि मेरे लिए सफलता है कि मैं आज इस स्टेज से आप सभी लोगों से, प्यारे प्यारे लोगों से अगर वार्तालाप कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है. ये मैं जॉब में नहीं कर सकता था, क्योंकि जॉब एक पैटर्न होता है और जॉब करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है. जैसे सेशन में सर ने बोला था कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, तो डिसिप्लिन लाइफ में वहीं से आया कि यार एक टाइमिंग होती है, आपको टाइम पे जाना है, टाइम पे आना है. उसी के साथ जब पेज पे डिसिप्लिन के साथ काम किया, कंसिस्टेंसी से काम किया, आप चाहे डिप्रेशन में हो, आपको कोई सा भी दुख तकलीफ कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपकी ड्यूटी है कि लोगों को आपको अवेयर करना है. तो वही काम हमने कोविड में किया और वो लगातार मैं आज करते आ रहा हूँ. तो यही चीज़ है सर. थैंक यू. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ज्योति जी से पूछना चाहूँगा. आप एक मॉम इन्फ्लुएंसर भी हो,
तो बेसिकली आप आपकी लाइफ कैसे मैनेज करते हो? आपको कंटेंट भी बनाना है, यू हैव योर किड ऑल्सो टू लुक आफ्टर हिम, तो दोनों चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हो? सो जैसे कि मैंने पहले कहा, इट्स नॉट अ केक वॉक, ऑनेस्टली इट्स नॉट अ केक वॉक, एंड आई एम श्योर सब मम्मियाँ रिलेट कर सकती हैं. सो बेसिकली आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन, सो आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग. सो मुझे ये था कि मुझे कुछ तो करना है, ऑब्वियसली नॉट फॉर द ब्रेड बटर, बट आई हैव टू डू समथिंग इन माई लाइफ कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस भी चाहिए. साथ में मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा बेबी था, हु इज़ 5 year old, अ वेरी लिटिल क्यूट चाइल्ड हु इज़ मिसिंग मी नाउ एंड कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन. सो मैंने अभी यहाँ आकर अपना फ़ोन साइलेंट किया कि उसका फ़ोन ना आ जाए इतनी देर में स्पेशली, एंड शायद वीडियो कॉल पे वो भी हो रहा होता अभी मेरे साथ अदरवाइज. सो बेसिकली इट्स नॉट अ केक वॉक. बहुत मुश्किल आती है, बट अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. सो आई हैव माई हस्बैंड एंड मदर इन लॉ हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ हिम, क्योंकि आज स्कूल की भी छुट्टी हुई, इतनी भारी वर्षा हुई है, आपको पता ही है. इट्स बीइंग लाइक ड्रेनिंग इंदौर अभी तो, बट या थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा सा स्केड्यूल बनाना पड़ता है, साथ ही पहले से प्री प्लानिंग करनी पड़ती है. मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं हूँ ऑनेस्टली, बट आई एम ट्राइंग टू कम ऑन द ट्रैक. एंड मुझे लग रहा है कि पेरेंटिंग एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें आप सिर्फ सीखते हो, एंड जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता आप सिर्फ सीखते रहते हो, एंड वो लोग ही आपको सिखाते हैं, वो ही आगे बढ़ाते हैं. वही मैं शेयर करती हूँ विद माई ऑल माई इमोशंस, लव एंड डेडिकेशन. सो यहाँ मुझे कुछ अलग नहीं करना पड़ रहा, जो मैं रियल में हूँ एज अ पेरेंट वो ही मैं अपने पेज पे दिखाती हूँ, तो वो थोड़ा सा हार्डवर्क कम हो जाता है मेरा. येस, आई डू शेयर सम हेल्दी रेसिपीज़ बिकॉज आई डोंट लाइक जंक, बच्चा सिर्फ जंक खाए या स्क्रीन देखे. मेरा बच्चा पूरे हफ्ते में एक ही बार स्क्रीन देखता है, हफ्ते में एक ही बार टीवी देखता है वो, एंड ही इज़ ओके विद इट. सो दैट इज़ बीइंग माइंडफुलनेस. मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, जस्ट बता रही हूँ कि इतनी माइंडफुलनेस इंपॉर्टेंट है. पेरेंटिंग में माइंडफुलनेस इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन पूछा नहीं था, बट मैं स्पेशली ये बोलना चाहती हूँ कि हमेशा हमारी जनरेशन में स्पेशली बोल रही हूँ कि जब भी मम्मी पापा घर आते थे तो गलती करके हम जल्दी से सो जाते थे कि पापा को फेस ना करना पड़े. बट मैं ऐसे ही परवरिश देना चाहती हूँ अपने बच्चे को कि मेरा बच्चा सबसे ज़्यादा महफूज अपने घर में महसूस करे. कल को उसके साथ कुछ बाहर हो तो सबसे पहले अपने माँ बाप को आकर बताए, रेदर देन वो हाइड करे, छुपाए और बाहर बुली होता रहे. सो दैट सेफ प्लेस आई वॉन्ट टू क्रिएट, एंड फॉर दैट आई हैव टू बी एट होम. सो इफ़ आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग आउट देयर, सो आई हैव टू बी देयर एट होम. सो मैं ऐसा करियर चुनकर यहाँ आई जहाँ मैं उसके साथ रहकर आगे बढ़ सकूँ, एंड आई थिंक दैट्स वॉट आई एम डूइंग इट हियर, एंड आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू. थैंक यू. तो मेरा आखिरी क्वेश्चन जनरल भैया से है कि आपको क्या लगता है एडवर्टाइजमेंट के डायनेमिक्स कैसे चेंज होंगे रेंट वॉल के थ्रू? वैसे ही चेंजेस हो रहे हैं. आप जैसे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हमारे सामने बैठे हैं. थिंग्स हैव चेंज. पहले ज़माना अलग था, अब ज़माना अलग हो गया है. जस्ट टू गिव यू अ बिट इनसाइट, आई विल जस्ट रैप इट अप इन 2 minutes. एक छोटा बच्चा होता है, वो एडवर्टाइज करता है रोने की, जिससे माँ दूध पिलाती है. हम आगे बढ़ते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं, वी एडवर्टाइज आवरसेल्फ दैट हाउ गुड वी आर. Similarly, everybody, each one of us have to do advertisement. So it's a very good business to get into it. So the whole idea was that was the reason I came into this. Now you're asking how the dynamics will change. So Rent-A-Wall gives you a lot of flexibility. आपने कभी सोचा है कि एक होर्डिंग जो है उस पर कभी 2 एडवर्टीजमेंट्स क्यों नहीं लगती हैं? एक बड़ी होर्डिंग है, या तो खाली पड़ी होगी या उस पर एक एडवर्टीजमेंट लगी है. सो आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी. आप उसमें 50% स्पेस ले सकते हो. आप आपके पेरेंट्स को एनिवर्सरी विश करना चाहते हो, यू जस्ट वांट दैट होर्डिंग ओनली फॉर 2 hours. मम्मी ऑफिस से बाहर निकलेंगे, उनके बाहर जो होर्डिंग है वहाँ पे उनको हैप्पी एनिवर्सरी लिखा मिलेगा. सो यू कैन नॉट अफोर्ड इट फॉर अ मंथ, बट यू कैन अफोर्ड इट फॉर 2 hours. सो वो जो रेट है वो कम होकर 30 डिवाइड बाय 30 हो जाता है, एंड देन इट कम्स टू 2 hours. सो यू कैन डू दैट. And similarly, it's more of now, it's about micro, these guys will also understand and they know it. It's more about micro advertisement now. So मैं आप तक आपकी चीज़ पहुंचा पाऊँ वो important है. जिस तरीके से हमें 40 साल लगे एक बिस्लरी पानी की बॉटल को बिस्लरी हटा के मिनरल वाटर बोलने में, बिकॉज हमें स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि एक मिनरल वाटर जो है वो बिस्लरी को बोला जाता है. तो आज जो है हम वही बिस्लरी 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 बोलते हैं. आज हम बोलते हैं भैया कोई पानी की बॉटल है क्या. सिमिलरली आज का टाइम है कि हम हमारे प्रोडक्ट को कैसे एक घर में लेके जा पाएँ और वहाँ से कभी हिले नहीं. सो इट्स जस्ट लाइक बिस्लरी विच ऑल दीज न्यू एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म्स वुड बी डूइंग.
मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ये तो आपने बता दिया कि कैसे एडवर्टाइज कर सकते हैं, बट इसका प्रोसेस क्या होगा? So the process is quite simple. It goes जैसे जोमेटो पे हम खाना देखते हैं, जोमेटो पे हम कोई भी रेस्टोरेंट के बारे में पता कर सकते हैं. इट्स एग्जैक्टली द सेम. आप ऐप खोलेंगे, आपको ऐप पे दिख जाएगा कि न्यू मार्केट की कोई होर्डिंग है या फिर कोई हाउसिंग सोसाइटी जो है उसकी लिफ्ट है या फिर एयरपोर्ट का बिलबोर्ड है या एक पार्किंग टिकट है. डीबी मॉल इज़ आवर क्लाइंट. तो डीबी मॉल में आपको अगर पार्किंग टिकट के पीछे अपनी एडवर्टीजमेंट लगानी है, ईच एंड एवरीबडी हु एंटर्स द डीबी मॉल गेट्स अ पार्किंग टिकट. पार्किंग टिकट के पीछे एडवर्टीजमेंट लगाना बहुत सस्ता है और उसमें आपने अगर अपनी एडवर्टीजमेंट लगा दी अपनी ऐप की, अपने पेज की, अपने केक की, अपनी बेकरी की, अपने एनी फॉर एनी बिजनेस, तो हर बंदा जो उस जगह पर एंटर कर रहा है ही कैन गो थ्रू इट. आपको सिर्फ एक क्यूआर कोड लगाना है एंड यू गो थ्रू इट. द होल प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल. आप वहाँ से बुक करते हो और वहीं से द प्रोसेस, द अमाउंट गोज डायरेक्टली टू द ओनर. There's no charge which I take. There's no brokerage which I take from either the advertiser or from the location owner. I give 5 services. These are 5 optional services. First is designing, second is printing, third is logistic, fourth is rental agreement between both the parties, and fifth is maintenance. Maintenance में हम आपको हर हफ्ते फोटोज और वीडियो खींच के भेजते हैं कि आपकी एडवर्टीजमेंट इंटैक्ट लगी हुई है, so that you continue working and we will take care of your advertisement. And this is where I make money. Otherwise, the brokerage is no, and you give money directly to the location owner. All right. So मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा to come to this event and make it so grand. So Most thank you so welcome. much. Thank you so much, all the esteemed panelists and our moderator. I would request you please be on stage. Would request Honorable Mr. Rajul Karsolia ji, Chairman, Shri Ram Group Jabalpur, to please join on stage and thank all the amazing panelists and moderator with us for this wonderful session on social media influencing and the insight of these pages. How they work और किस प्रकार से आपका योगदान शहर की इस खूबसूरती को और अपने इस क्षेत्र में किए जाने वाले इनोवेशंस के लिए बहुत खास है. मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा our honorable, we have just a minute. Let me thank Mr. Sushant Kaushal to please come forward and receive the memento and medal. Everyone put your hands together. Let's give a huge applause to the amazing personalities on stage. Let me call upon Mr. Shubham Sisodia from Indore Sher. Let me thank Mrs. Jyoti Ahuja ji to please join on stage, and thank you for your valuable contribution, and the way you are carrying your journey is truly remarkable. Let me thank and welcome Zainul Khatani from Rent a Wall, a very unique innovation in the field of advertising. All the best for your future journey of the success. And finally, let me welcome our amazing moderator, Mr. Shashank Shukla from Bhopal City Update. एक बार सभी की तालियां चाहेंगे जोरदार for the amazing panel on stage. I would request everyone to please be together for a group picture. Thank you so much everyone for the wonderful session once again. And now we change the format of our amazing panels to the one amazing personalities coming up together. बिल्कुल तालियों को यूं ही तैयार कर लीजिए पूरे जोश के साथ. मैं देख रहा हूँ बेताब है स्वागत के लिए. As we know, we are ready to welcome the first personality in himself, जिन्हें आपने पैनल में उनके बहुत ही शानदार विचारों के साथ सुना था. लेकिन अब किस तरीके से शख्सियत ने बचपन में कई सारी मुश्किलों के बावजूद अपनी जर्नी को एक ग्लोबल लेवल पर वो लेकर गए. Yes, we are all set to welcome the boy who started his journey from being from a very small town of Bhind, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत करी भिंड से. उसके बाद आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार से उन्हें बिना सपोर्ट के हिंदी मीडियम में पढ़ाई करने के बाद अपनी जर्नी को वो भिंड से भोपाल लाए अपनी एजुकेशन के लिए, और भिंड से बढ़ते हुए भोपाल के बाद अपने बिजनेस को लेकर उन्होंने अपने सफर को मुंबई तक पहुंचाया. सपनों की नगरी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को केवल मुंबई तक, बॉम्बे तक सीमित नहीं रखा. एंड ही वेंट टू यूएस and Canada for his business and investments purposes. Moving ahead, welcoming him on stage, the very amazing personality who has been
investing, creating businesses in India, Dubai, and Canada, and has been a true amazing investor in the field of real estate, startups, technology, along with medicine and health tech as well. So let me welcome the one amazing, our very honorable Mr. Vishal Shivari sir on stage for his amazing session and his journey of being a brand in himself. Welcoming the seasoned entrepreneur and investor. Sir, बहुत बहुत स्वागत है आपका. And this journey and stage is all set for you to go on. Hello. Thank you very much. I have been tasked to speak also by Mr. Gaurav. Thanks for giving me this opportunity. I would like to first thank Mr. Tanka, Vivek Tanka ji, for organizing this Udaan Conclave to have this wonderful event. I also wanted to thank my friend Karthik, who has just left. I'll be speaking on AI and finance and how AI is going to influence our financial journey in the life, and how Udaan is going to help you to create yourself or make yourself an entrepreneur in the life. So thanks, sir, Vivek sir, to having this event. When I was coming to this event, I was told that this is an event happening in Bhopal and I have to be part of it. So I was imagining why Udaan, what is the purpose of, what is the need of it, what is there in MP? There are no opportunities, there are not much thing, everybody studies, just goes out of Bhopal, they want to live in Mumbai, they want to do a job. But why Udaan in Bhopal? And I have been in a lot of events in MP who has been investment summits where big businessmen comes, they announce project of crores and crores of rupees, and so forth. We look for investment and then job for job. So Udaan has a different meaning, and we have been seeing this from last 20-25 years. MP still is a backward state. Everybody studies here, do graduation and go to Mumbai. Whereas nobody is going to come and help us. Nobody is going to come and give us money. We have to make and write our own destiny. हमें अपनी किस्मत खुद ही लिखना पड़ेगी और उसके लिए हमें खुद ही उड़ना पड़ेगा. कोई दूसरा हमको उंगली पकड़ के उड़ाने वाला नहीं है, ना हमको पैसे देने के लिए तैयार होगा, कुछ नहीं. किसी के सामने हाथ फैलाने से कोई फायदा नहीं होने वाला. हमको और मध्य प्रदेश के लोगों को अपनी जर्नी खुद ही बनाना पड़ेगी. So Udaan is that concept. As far as AI and money is concerned, yes. How many of you have used ChatGPT in your life? Good. Do you think it is going to change the world? Good. I think it is going to change the world you have not even imagined. It is going to entirely change the world the way we are seeing it. I'll give you a context. 30 years before, what used to be the telecom or information technology, same way we are standing at the moment in the AI field. AI will decide how we are going to earn, from where we are going to earn, where we are going to spend money, and how we are going to manage money. All three things are going to be done by AI, not by us. A robot created by AI is going to earn money for us. A robot created by someone is going to tell us how to spend the money, and a robot who is going to decide how to manage the money. We are not going to be the part of the journey of money, except being a victim of the money sometimes if we lose it to cyber crimes. From here onwards, money creation, before to go deeper into the money, we need to go a little back step and understand what money does. If you look at money, money is a barter system, where we used to have a barter system, one goods for other goods, and now we have a bitcoins. They are also doing the same thing. So from barter system to Bitcoin, the journey has been very complex. At the same time, we talk about, because of Bitcoins, there's a lot of transparency, but at the same time, we have got a lot of problems because of cryptocurrencies, Bitcoins, blockchains.
If earlier, for a crime to happen, it used to take time, but in cybercrime, your entire wealth can be vanished in a moment or a click of a matter. Cyber crimes are very, we need to be very careful about them. We cannot ignore them in any context or any means. That's another aspect of AI, which is also going to be managed by AI, not by us. That's another part of this. After all, we want to create wealth, as I have told in my previous lecture, that wealth creation is known to Indians. They can create wealth anywhere, everywhere. We are good at it. We will be creating more and more wealth in the country. This is another part. Sir, I would like to make a point to Vivek Tanka, sir. Sir, we have been waiting for state to develop from last 20, 30 years. It is not going nowhere. We are still standing in the same place where we had 20, 30 years back. We are a landlocked state. We have very limited opportunities. We have no access to seaport or good terminal or anything. But we have one important thing, which is a knowledge capital. We have resources. We are living in the world where idea is a capital. We don't need money to create money. What we need is a good idea to execute it, and MP is quite capable of doing that. Sir, I request you to create knowledge city in Madhya Pradesh. MP, having an educational center of the country, has a capacity to become a knowledge hub of the world also. All the IT which has developed in South, or in Pune, or in Chennai, has a potential in Madhya Pradesh as well. We need to create a IT hub of the world, and Bhopal and Madhya Pradesh, Indore has a huge potential for that. So I request, sir, you kindly take this into consideration to make it a IT hub, to make dreams of millions of in Bhopalis or Madhya Pradesh people to make realize. Thanks very much, sir, again. Thank you very much for your vision to create a Udaan-like event where we learn. We may fail, I'm definitely sure, but you have given us a chance to fly. Thanks very much, sir. Thank you so much, sir, for your valuable words. And actually, the way you gave us the insight and the need of the hour, we are really honored to have you with us. And thank you for sharing your journey, sir. Really, really honored. इस journey के साथ अब आगे बढ़ने की बारी, हमने बहुत businesses की बात करी है. लेकिन अगर बात हमारे बीच पर्यावरण की होती है, would request you to please join on stage. I would request Gaurav sir to please come forward and felicitate our honorable speaker, the way he came up and inspired all the lives and the way he gave the inputs about the journey. Let me welcome our very honorable Pro-Chancellor, Mansarovarglobaluniversity Global University, Gaurav Tiwari sir, to please hand over the memento to the honored speaker on stage. दोस्तों तालियां कमजोर लग रही हैं, मुझे तालियों का जोश बढ़ाइए, बेहतरीन तालियों से हम इन्हें धन्यवाद कहें यहाँ पर. And जैसे कि आप सभी जानते हैं कि music is something that energizes everyone. Honorable Vivek sir, we have a very amazing artist coming up, Kavish, after this few two showcases. Next we have the next speaker, the next personality who's going to come up on stage for his brand showcase is an amazing person when it comes to environment. Yes, I'm talking about Dr. Prateek Kankane, who is a very well-known social entrepreneur awarded with Paryavaran Ratna Award. He is trying to make a cultural shift in society by sensitizing the people towards green gifting with his e-commerce platform, the Urban Greens, which deals with pan-India delivery of living indoor plants with study and customized packaging. With another vertical in the area of agri-businesses with the name of Raj Seeds, he is working with big community of farmers for production of high-quality seeds in 5 states. Let me welcome and present you Dr. Prateek Kankane. Zabardast taaliyan, zordar saath main chahunga. Pure josh ke saath, let me welcome our very honorable Dr. Prateek Kankane, sir. An actual hero, a social entrepreneur, जिन्होंने साथ सस्टेनेबल लिविंग को अपने उस मुकाम को साथ पाया है और इस ब्रांड के साथ अपने पर्यावरण की सोच को, उस जिम्मेदारी को साथ लेकर चल रहे हैं. Dr. Prateek, very warm welcome on stage on behalf of Team Udaan Conclave. Thank you, Anuj. First of all, I would like to extend my thanks and appreciation for Team Udaan for inviting me and having me here and sharing a bit experience about my startup or company, the Urban Greens.
Since we are completely surrounded by plants with our company, so we do have a habit of saying, not saying good, we always say green morning. So green morning, everyone. Before proceeding or before telling about my company, मैं आपसे दो कोर फिलोसफीज बताना चाहूँगा जिस कारण से जो हमने सर कंपनी चालू की, जो जहाँ से इंस्पिरेशन हमको मिली। फर्स्ट सर, जैसे हम बीज बोते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है बीएनआई में, हमको यही बताया जाता है। तो एक कोर फिलोसफी यही थी जिसका कल्चरल हमेशा इंस्पिरेशन हमें मिलती रही। एंड सेकंड जो थी, महात्मा गांधी जी ने हमेशा बोला है, जो मुझे इंस्पायर करता रहा है कि मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। तो ये दो चीज़ों का इनकलकेशन था हमेशा से। जहाँ से मैं जिस परिवार से आता हूँ, तो हमेशा से मेरा फॉर्चुनेट था कि हम लोग एनवायरनमेंट के प्रति कहीं ना कहीं सजग रहते थे। छोटे छोटे इनिशिएटिव्स होते थे, छोटे छोटे इवेंट्स होते थे, तो कहीं ना कहीं ट्री प्लांटेशन या कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से हम लोग कनेक्टेड रहते थे। तो हमारा जो बिजनेस है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ ये कर देता हूँ कि विद द अर्बन ग्रीन्स वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ इंडोर प्लांट्स और वी आर इन द कैटेगरी ऑफ थॉटफुल गिफ्टिंग। जब हमने सोसाइटी में देखा कि जिस तरीके से बुके होता है, बुके खासकर सर आपके पॉलिटिकल इंडस्ट्री में कितने हज़ारों बुके रोज़ दिए जाते हैं, तुरंत फिक जाते हैं। अगर उसकी जगह अगर एक प्लांट दिया जाए एक बुके की जगह, मिनिमलिस्टिकली इन द सेम कॉस्ट, तो कितने प्लांट्स जो होंगे, वो बुके तो कचड़े में फेंक जाते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं होती, प्लांट्स वो सालों रहता है। तो इस तरीके के कुछ आइडियाज़ थे जो हमारे माइंड में थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे घर में एक शादी थी और जब हम लोगों ने इस चीज़ की स्टडी की, छोटे भाई के कार्ड्स वगैरह देने जा रहे थे, तो पता चला कि अगर 400-500 लोगों को इनविटेशन दो एक शादी में, तो अराउंड 2 और 2.5 ट्रीज़ कट होते हैं, जो हम पेपर जितना यूज़ करते हैं इनविटेशन में। तो हम लोग इस आइडिया के साथ आए कि कार्ड जिसको हम देंगे वो कार्ड इमीडिएटली फेंक देता है, अगर इसकी जगह हम कहीं ना कहीं उसको प्लांट देंगे और प्लांट इनविटेशन देंगे, तो वो प्लांट उसके यहाँ साल भर रहेगा, 2 साल रहेगा और वो हमेशा अप्रिशिएट करेगा। इस आइडियाज़ के साथ हमने ये इनिशिएटिव लिया। अपने भाई की शादी में मैंने इस तरीके से इनविटेशन दिया एंड वी वर वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज कि हमको पूरी पैन इंडिया मीडिया ने बहुत अच्छा कवरेज दिया। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने दे हैव अवॉर्डेड मी विद पर्यावरण रत्न अवार्ड सर। वहाँ से हमको मोटिवेशन मिला, चूँकि कोविड था, कोविड में एवरीवन वाज गोइंग ऑनलाइन। वहाँ हमारे लिए सर एक बहुत बड़ा धमाका करना था हमको, उसकी एक चिंगारी मिली कि चलो शुरुआत करते हैं theurban-greens.com की। ऑनलाइन मॉडल पे हम लोग पैन इंडिया प्लांट्स देते हैं। इसी तरीके से हमने urban-green.com करके हमारी जो कंपनी है उसका फॉर्मेशन किया, जिसमें तकरीबन हम लोग 2.5 लाख प्लांट्स अभी तक पैन इंडिया दे चुके हैं। और जितनी टीयर 1 सिटीज़ हैं उसमें सभी कॉरपोरेट्स को, चाहे उनका न्यू क्लाइंट इंडक्शन हो, चाहे न्यू कस्टमर इंडक्शन हो, हर तरीके के, चाहे उनके बर्थडेज हो, किसी न किसी रूप में वी आर ट्राइंग टू मेक अ कल्चरल शिफ्ट इन द सोसाइटी बाय सेंसिटाइजिंग पीपल टुवर्ड्स ग्रीन गिफ्टिंग एंड थॉटफुल गिफ्टिंग। मूविंग अहेड, अभी हम लोग को इसमें हमारी जो theurban-greens.com है, हमको इसमें जो नेशनल लेवल एजेंसीज है, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन NSC एंड हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड HIL, इन दो नेशनल PSUs के साथ वी आर द ओनली कंपनी विच आर डूइंग हैंड होल्डिंग विद दीज 2 जाइंट्स। एंड जितना भी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट में जो भी गिफ्टिंग का कल्चर होगा, जो भी किसी तरीके का इंडक्शन होगा, जो भी जेस्चर होगा, उसमें वो हमारे साथ हैंड होल्डिंग कर रहे हैं कि उसकी जगह प्लांट का कल्चर दिया जाए। एंड इसके बाद में एक अपना और मेरा जो बिज़नेस है मैं उसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा, जो राज सीड्स के नाम से है। इसमें चूँकि ये पूरा जो यहाँ का जो पूरा कल्चर है वो AI, ब्लॉकचेन और जो मॉडर्न जितने अप्रोच के बिज़नेस हैं उनके लिए है, मगर हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है और सबसे ज़्यादा जो उसमें शेयर है वो एग्रीकल्चर का है सर। तो एग्रीकल्चर में मैं चाहूँगा, हम लोग जब काम करते हैं बहुत बड़े लेवल पे अभी हम काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, दे हैव अलॉटेड अस around 50 crore rupees in advance for the production of high yielding seeds of millets, of maize, sorghum, kodo, kutki,
जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सीड प्रोड्यूस हो और मिलेट प्रोडक्शन में और एनिमल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में मोटिवेशन मिले। मगर हमको एक चीज़ देखने को मिलती है कि जब हम न्यू स्टूडेंट्स को वगैरह या हायरिंग्स के लिए जाते हैं तो एग्री बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एग्री बिजनेस से भी उतना ही कनेक्टेड रहें, इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। गवर्नमेंट भी हमको हर तरीके से इसमें सपोर्ट कर रही है। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू विवेक तनखा सर फॉर अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि सर चूँकि पॉलिटिकल सेक्टर में क्योंकि बहुत कम इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप एक इंटेलेक्चुअल हैं और मैं बहुत उसको कन्विक्शन के साथ मानता हूँ, तो आप पॉलिटिक्स में जो बुके का कल्चर है सर, इसको ट्राई करें कि जहाँ जहाँ आपकी कैपेबिलिटी है एटलीस्ट सर उसकी जगह अगर एक प्लांट दें तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा, बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Please be on stage. I would request our very honorable. You very well said, sir. ये दुनिया जब तक आगे है तब तक जब तक एनवायरनमेंट है, अगर पर्यावरण ही नहीं है तो फिर हम सब कहाँ के डेवलपमेंट की बात करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हिमांशु सर से, हिमांशु पांडे जी, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ ESR एंटरटेनमेंट, टू प्लीज जॉइन ऑन स्टेज एंड प्रेजेंट अ मोमेंटो एंड medal to our honorable speaker. Thank you so much sir for joining in. आपके सपनों की उड़ान ने हमें और ताकत दी है। जिस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, we are really honored to have you with us for this conclave. So guys, the final showcase is all set to be welcomed on stage और इसके बाद हमारा आखिरी सेशन होगा आज के दिन का. So let me welcome our very amazing personality, Mr. Dhruv Sharma, the visionary founder behind the Great Relocations, a global relocation services provider, brings a unique blend of legal expertise and extensive corporate experience to the table. With a solid educational foundation from Symbiosis Law School, Dhruv embarked on a dynamic career journey, including a significant stint at Amazon, where he had his skills in the world of business and logistics. Today, spearheads Great Relocations, offering unparalleled expertise and innovative solutions for individuals and companies navigating the complex landscape of international relocation. Dhruv's commitment to excellence and client satisfaction is at the heart of his mission, making Great Relocations a trusted name in the industry. Let me welcome, with your huge round of applause, Mr. Dhruv Sharma, presenting his showcase, his passion for this industry. Let's give a huge cheer, everyone. Put your hands together for Mr. Dhruv Sharma. Thank you so much for inviting me over here. What I essentially do can be summarized in just 3 words, that is pack, move, and store. We specialize in records management, which is basically a service where we take in all your files, all your important documents that you keep. Let's say you are a bank, you need to keep a certain amount of documents with you for a certain amount of time. We take them from you, store it with us, and whenever you need them, we'll give it to you, the particular file or the particular box. Apart from this idea really started with one very simple thing. During the pandemic, I noticed there's a lot of space crunch. Only big companies like Amazon were able to cater to everybody because they had that much amount of space possible, but it was not possible for companies or startups to really cater here. So that's where we entered in, and we started with records management services. Apart from this, the services that we also provide include international relocation and domestic relocation, and pet relocation as well. And we also help with IT assets movement and IT asset disposal. Since we do records management, we are also slowly venturing to digitalizing the whole process, whereas you just log into the system and you get the entire document in one go. So I would just like to explain a little bit more about records management because that's the core that we do. So what we do is you give us a set of files, we barcode it, it's properly indexed with us, and the file comes to us, we pick it up from your doorstep, we take it to our warehouse, and we compartmentalize it according to the system. So it's not like HDFC's bank's files are in just one corner. The system decides where that one particular box goes. So even if there's a natural calamity or an accident or a fire, everything is safe. We cater and make sure that all the proper requirements are met, whereas we meet fire safety standards. We ensure that there is enough privacy where we have everything in lockers, and also air-conditioned situations where it's required for such things.
because we also specialize in wine storage. So apart from this, let me talk about the challenges that we face. First of all, the challenge that we face is insurance companies do not take companies like us seriously because they think that we deal in things that are just second hand or are not really of so much value. The next thing is finance. There's no real support from governments or anybody else who really helps in supporting our sector. And unskilled labor and unorganized sector. This sector has been the most unorganized for quite some time. We're just synonymous to transporters, which is wrong because we specialize in something that's very skillful and very trained. Lastly, I would like to push on our achievements that we have done. We have moved consignments to 3 continents, that is Africa, Asia, and America. Apart from this, we also have leased a 6,000 square feet warehouse that is state of the art, just to keep your things safe. And we have also associations with different organizations like IPAMA that specializes in pet relocation, especially all across the globe, and IAM that specializes in relocations of employees and individuals all across USA. And we also have 70 plus partners across India. So if you need anything to be moved from, let's say, Port Blair all the way to Guwahati or Jammu and Kashmir, we got you covered. So our future plans, very simple. We want to become an aggregator for all the relocation companies, wherein the customer just logs on onto our website or our app, and he gets to choose as to who he needs to use for his next relocation requirements. And the next thing that we also want to do is deal with electronic and IT asset disposal. And lastly, we want to develop an app for our in-house customers as well, whereas it's just easier and more tech-friendly for them to interact and involve with us. And lastly, it's just our tagline, that is 1 cubic feet across the globe and around the city. Thank you so much. Hello. Yeah. Thank you so much for your remarks. I would like to invite on stage Dr. T.R. Thapak to kindly present a memento to our honorable speaker. We welcome you on stage, sir. On behalf of the Udaan Conclave, kindly present a medal and a memento to Dhruv Sharma, please. And with this, we now move to the last and a very important panel for the day, which is titled Taking Art to the Masses, Behind the Scenes of the Events Industry. For this, I would like to invite on stage our esteemed panelists, Dhara Pandey, Nikhil Dave, and Nilotpal Mrinal. May I request all of our panelists to kindly present themselves on the stage. Dhara Pandey, Nikhil Dave, and Nilotpal Mrinal. Can I request all the panelists to please join on stage for the final session? This is very anticlimactic. Do we have the panelists here with us? They are coming? Okay. Do I see my panelists coming now? Right, so I welcome on stage Dhara Pandey, Nikhil Dave, and Nilotpal Mrinal for this last and final panel, taking art to the masses behind the scenes of events industry.
And taking this conversation forward will be our very, very own Anuj. Till the time Anuj joins us on stage, allow me this moment to introduce our honorable panelists to all of you. Dhara is a versatile professional with experience as a media faculty, social worker, and emotional well-being consultant. She is the CEO of Lit Chalk, India's inaugural socio-cultural festival. Dhara also consults for Black and White Media Private Limited, working with newspapers such as Prajatantra and First Print. She is a trustee of the Mrityunjay Bharat Trust, an NGO focused on youth empowerment, Gram Swaraj, and tribal children's education. Dhara, the list of your achievement keeps going on, but we are so privileged to have you with us on the stage. A very warm welcome to you. I'd now like to introduce Nikhil Dave, who is the creative force behind Lit Chalk, a platform that unites people from all walks of life to connect and share their thoughts through the expressive mediums of poetry, music, and art. His brainchild, Lit Chalk, hosts events that span the entire spectrum of literature, from the eloquence of poetry to the harmonious world of music, along with thought-provoking panel discussions. Nikhil, welcome on stage. So happy to have you with us. And last but not the least, we have with us Nilotpal Mrinal, who is a versatile and impactful figure in the field of Indian arts and literature. His contributions extend to being an accomplished author, poet, socio-political activist, and an overall influential presence on various social media platforms. Nilotpal is renowned for his literary works, including books such as Dark Horse and his upcoming novel, Yar Jadugar. In recognition of his literary excellence, he was honored with India's prestigious Sahitya Akademi Award in 2016. Nilotpal, what a singular pleasure to have you with us on this stage. And taking care of this panel is our very own Anuj. Anuj, over to you. This is the last discussion, and I hope for this to be as powerful as was the entire day. Anuj. Absolutely. Thank you so much, Soumya, once again. And ये मेरा एक accidental moderation है. जैसे कि आशीष जी हमारे साथ होने वाले थे, पर yes, उनकी बैड थ्रोट और जितनी मेहनत उनकी पूरी टीम ने करी है इस शो को सफल बनाने में, जी हाँ, उन्हीं की वजह से मैं इस मंच पर फिलहाल हूँ. दोस्तों, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि तालियों का जोश जबरदस्त हो जाए, क्योंकि हमारे बीच वो शख्सियतें हैं जिन्होंने एक्चुअली आर्ट को उसकी रूट्स तक पहुंचाने की तैयारी करी है, इस रूट्स तक पहुंचाया है, जो अब तक केवल एक मुकाम तक बसा हुआ था, उसे भारत के हर कोने तक पहुंचाया है. वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से, अपने कार्यों से एक कहते हैं ना कि लेखनी में नए आयाम दिए हैं. वो आज हमारे साथ हैं. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस मंच पर. मैं शुरुआत करूं, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा निखिल सर से आपसे. जिस प्रकार से आपने आर्ट एंड कल्चर को जो जरूरत थी कि हम उन छोटे शहरों तक लाएं, टायर 2 सिटीज तक लाएं, जो कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े शहरों तक ही डिफाइंड थे, जिसके बाद आपने एक बहुत ही जबरदस्त ब्रांड लिट चॉक की शुरुआत करी. सर, ये नाम, ये जर्नी और अपने आप में ये जो पूरा फेस्टिवल डिजाइन हुआ, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले. और क्या सोच थी, क्यों और कितनी मुश्किलें आपने देखी हैं इसे इस शहर तक लाने में? थैंक यू. लेकिन ये मतलब मेरे ख्याल से बहुत लंबा सवाल हो गया और शायद उतना टाइम नहीं है कि मैं इतना लंबा जवाब यहाँ दूंगा. प्लीज. तो लिट चॉक की जैसे बात हुई, तो लिट चॉक हम शुरुआत अगर नाम से करें कि नाम कैसे निकला, तो एक कुछ ऐसा चीज़ हम लोग सोच रहे थे कि बेसिकली हम लोग इंदौर से हैं, इंदौर को बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं, और ये बात मैं भोपाल में कह रहा हूँ, ये अपने आप में खतरे से खाली नहीं है. लेकिन फिर भी इंदौर की पहचान सफाई में नंबर 1 थी. अनडाउटेडली इंदौर ने सफाई पे अच्छा काम किया था. इसके इतर इंदौर की जो पहचान हो गई थी वो सिर्फ पोहा जलेबी या खान पान रह गई थी. लिट चॉक जब कंसेप्चुलाइज हो रहा था, जब चीज़ें उसके लिए प्लान हो रही थी, तो हमारे दिमाग में पहली ये चीज़ थी कि ये वो शहर है, सेंट्रल इंडिया का वो हब है जहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल फैसिलिटी सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ कोई एक इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी इस तरह की नहीं बन पा रही है. आर्ट, कल्चर या सिनेमा, एंटरप्रेन्योरशिप, स्पोर्ट्स, हर तरह के लोग यहाँ से निकले हैं, लेकिन फिर भी इस शहर की एक वैसी पहचान नहीं बन पा रही है. तो लिट चॉक जब प्लान हो रहा था, तो उसके पीछे एक थॉट ये था कि हमको शहर की एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनानी है. इंदौर की पहचान सफाई या खान पान उससे इतर भी हो. इंदौर में अगर इतनी आईटी कंपनीज़ हैं तो वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात होती है. इंदौर में अगर इतना स्टूडेंट है तो वहाँ पर उनके एजुकेशन की भी बात होती है. इस तरह का कुछ चीज़ें प्लान की जाए.
नाम की जो बात आई तो नाम में जो लिट है, LIT लिट, उसको लोगों ने बहुत मायने में लोग उसको लिटरेचर से जोड़ते हैं, लेकिन वो लिटरेचर है नहीं। हम लोगों को जब यूथ में काम करना था तो लोगों से बात किया तो लोगों ने कहा कि ये जो नया लिट एक टर्म चला है, लाइटनिंग वाला या उस तरह का जो लिट है वो लिट है। और चौक से मतलब था कि चौक एक हम सभी लोग किसी न किसी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो गांव में जो एक चौक हुआ करता था, उस चौक पे बारात भी नाचती थी, उस चौक पर कपड़े की भी दुकान होती थी, उस चौक पर खाने पीने की दुकान होती थी, उस चौक पर किसी नेताजी की सभा भी होती थी, उसी चौक पर सारी सुख दुख की सारी बातें लोग वहीं इकट्ठा हुआ करते थे। जो भी उस गांव का एक केंद्र था वो चौक होता था। तो ऐसे इसका नाम पड़ा लिट चौक, जहाँ पर थोड़ा इंटेलेक्ट बातें होंगी और जहाँ सब तरह की बातें होंगी। इसलिए लिट चौक में हर सेगमेंट को हम लोग कवर करते हैं। उसमें स्पोर्ट्स के लोग भी होते हैं, उसमें डिफेंस के लोग भी होते हैं, उसमें जर्नलिज्म के लोग होते हैं, आर्ट लिटरेचर फिल्मों के लोग तो होते ही हैं, वो स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे लिट चौक को प्लान किया गया। हम अगर इसके चैलेंजेस की बात करें तो निश्चित रूप से किसी भी इवेंट को जब आप शुरुआत करते हैं, जब उसको प्लान करते हैं, तो उस कंसेप्ट को आपको इम्प्लीमेंट करना, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उसके बाद में जो एक बड़ा चैलेंज आता है अनडाउटेडली वो फंड्स का होता है, क्योंकि हम लोगों को जैसे अगर कोई नई चीज़ है तो उसको स्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, वो रिसोर्सेज आपको इकट्ठा करना, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। फिर एक जो बड़ी प्रॉब्लम जो मैं बहुत ऑनेस्टली डिस्कस करना चाहूँगा या मैं बताना चाहूँगा कि इसका कंसेप्ट था कि हम एक इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम क्रिएट करें, एक इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम हम बनाएं, लेकिन समाज की या लोगों की अपेक्षा किसी भी इस तरह के इवेंट में होती है, वो स्टारडम से होती है। वो वहाँ पर एक सेलिब्रिटी फेस चाहते हैं। सेलिब्रिटी फेस होता है, वो क्राउड पुलर होता है, वो क्राउड लेकर के आता है। उसमें कंसेप्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाता है। ये चैलेंज हम लोगों के साथ में पिछले 2 इवेंट्स में रहा। मतलब ये अब तीसरा सीजन होने जा रहा है लिट चौक का दिसंबर में। तो ये पहले 2 सेशन में हमने देखा, जो सेलिब्रिटी सेशंस थे, जैसे मान लीजिए उसमें पंकज त्रिपाठी जी थे, कुमार विश्वास जी थे, उन लोगों के सेशंस में क्राउड अच्छा होता है। बाकी जो दूसरे बहुत अच्छे जिनका कंटेंट बहुत अच्छा है, ऐसे सेशंस, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बहुत अच्छा सेशन था जिसमें श्रीलंकन आर्मी के सर्विंग ऑफिसर, भूटनीज आर्मी के सर्विंग ऑफिसर और इंडियन आर्मी के सर्विंग ऑफिसर तीनों एक साथ एक पैनल में थे। आप सोचिए कि 3 देशों के सेना के सर्विंग ऑफिसर एक साथ बैठ करके अगर बात कर रहे हैं तो उस सेशन की कंटेंट वैल्यू बहुत होती, लेकिन उसकी पब्लिक गैदरिंग उतनी नहीं हो पाती। तो ये एक बड़ा चैलेंज, अगर आप कंसेप्चुअल प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो उसमें इस तरह के आपको चैलेंजेस रहते हैं। बहरहाल उन सबसे बाहर निकलते हैं। जब पंकज त्रिपाठी होते हैं तो उस सेशन में भीड़ होती है, वो भीड़ दूसरे सेशन भी अटेंड करती है, तो ऑब्वियसली वो लोग जुड़ते हैं और धीरे धीरे आगे की चीज़ें आपकी बेहतर होती जाती है। तो ये लिट चौक के बारे में बात है। सर आपने बहुत बखूबी अपने इस बात को बताया है, और आप ही के चैलेंज से मेरा सवाल नीलोत्पल जी के लिए उत्पन्न होता है कि कलाकार के लिए मासेस तक पहुंचना, और वो बहुत ज़रूरी है, हर एक कलाकार के लिए ज़रूरी है कि वो मासेस तक पहुंचे। और जहां आपने कहा कि एक चैलेंज है कि जनता वो ब्रांड्स चाहती है, वो स्टारडम चाहती है, पर जब एक कलाकार की बात आती है, एक राइटर की बात आती है, उनकी राइटिंग्स में अपने आप में एक जादू होता है। वन ऑफ दोज प्रोमिनेंट सर वी हैव ऑनरेबल नीलोत्पल सर, आप कैसे इन फेस्टिवल्स को, इन इवेंट्स को देखते हैं एज अ प्लेटफॉर्म फॉर एन आर्टिस्ट, और किस तरीके से आप चाहते हैं कि एक तरीका ये हो सकता है टू प्रमोट इट टू मासेस? और जैसा कि मैं इससे पहले कि मैं सवाल पूरा करूं, मैं खुद, गौरव सर और यहाँ मौजूद सभी जनता आपकी पोइट्री की बहुत दीवानी है, तो कहीं ना कहीं किसी भी वे में आप अपनी एक पोइट्री को जरूर इन्वॉल्व करिएगा सर। विल बी ऑनर्ड टू बी विद यू इन दैट वेज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मैं यहाँ पे करीब करीब 12 बजे आ गया था और ये हॉल पूरा भरा हुआ था, और मैंने इस मंच पर कई युवाओं को बोलते सुना। मैं पीछे बैठ के सुन रहा था। मैं कुछ भी बताने से पहले 2 मिनट ये बताने में लेना चाहूँगा कि मैंने आज के दिन को समझा कैसे है, इस कार्यक्रम को कैसे समझा है, बतौर स्पीकर या बतौर कुछ सीखने या समझने के लिए। क्योंकि हम में से अधिकतर लोग यहाँ ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं। मतलब मैं आपको हृदय से बोल रहा हूँ, ज़बरदस्ती इसलिए कि हमारा मन जब तक ये नहीं समझेगा कि इस उड़ान के इस कार्यक्रम का फिलॉसफी क्या है। एक्चुअली आज का दिन मैं मानता हूँ कि भोपाल के लिए और मध्य प्रदेश के लिए युवाओं के लिहाज से एक संभावनाओं का दिन है, जहाँ पर आप अपने अपने हाथों को थोड़ा सा टटोलेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के हाथ में कुछ संभावनाएं लग जाएंगी।
और मैं बतौर हिंदी का लेखक यहाँ पर इसी संभावना को टटोलने के लिए मौजूद हूं। और मैं हिंदी का लेखक हूं, तो आप यूं समझिए कि मैं आपको इस मंच से एक नए स्टार्टअप के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदी में लिख के आजीविका ढूंढने वाले लेखक नहीं है। अगर मैं अभी बोलूं कि मैं हिंदी का लेखक हूं, तो मुझे 4 लोग ये समझाएंगे कि क्या आप केवल किताब लिखते हैं? तो अगर आप केवल किताब लिखते हैं तो फिर आप जीते कैसे हैं? आप फिल्मों के लिए ट्राई क्यों नहीं करते हैं? आप कंटेंट राइटिंग क्यों नहीं करते हैं? आप विज्ञापन क्यों नहीं लिखते हैं? आप किसी पार्टी, अभी तो चुनाव आ रहा है मध्य प्रदेश में, आप नारा क्यों नहीं लिख रहे हैं? वहां अच्छा पैसा मिल जाएगा आपको। आप किसी पार्टी की कैंपेनिंग के लिए क्यों नहीं लिख रहे? यानी कि एक लेखक से आपका सोसाइटी हर वो बात कहता है जो कम से कम उसको लेखक ना रहने दे, क्योंकि चिंता है सोसाइटी को कि एक लेखक भूखा ना मर जाए। तो अब आपके सवाल पे आता हूं कि लिट चौक हो या मानसरोवर यूनिवर्सिटी हो या और भी यूनिवर्सिटी हो, यहाँ भी भोपाल में भी कई यूनिवर्सिटियां हैं, देश भर में कई एनआईटी आईआईटीज के जो मंच हैं, इन मंचों ने क्या किया है? इन्होंने एक नई संभावना दी है वैसे लड़के लड़कियों की जिनकी बातें डायरी में शौक से लिखी रह जाती थी, जिनको उनके कैरियर का प्रेशर बोलता था कि लिखना प्राइमरी नहीं है, प्रेमचंद बनना प्राइमरी लक्ष्य नहीं है इस देश में, वो बाय प्रोडक्ट है। जिनको ऐसा समझाया गया, जिनको हमेशा से यह बताया गया कि निराला खून की उल्टी करते थे, इसलिए पहले घी लगी रोटियों का इंतजाम करो फिर सोचना कि तुम लेखक बनोगे। यानी क्या? यानी कि लेखन कोई पेशा नहीं है हिंदी में। अभी मेरे मित्र अक्षत यहां पर थे, वो अंग्रेजी के राइटर हैं। आप उनको जब देखेंगे मंच पर तो आपको लगेगा ये कैरियर है, लेकिन जब आप नीलोत्पल मृणाल की पीढ़ी के हिंदी के लेखकों को तो लगेगा यार यहां से जाने के बाद ही करता क्या है? यहां तो आज दिन भर इसका माला उठ गया ठीक ठाक, ठीक है ना? तो एक्चुअली क्या है कि जब ऐसे मंच आते हैं और जब आप हमको मुख्य धारा में बोलने के लिए बुलाते हैं, तो फिर हम आपसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि आप यकीन मानिए हिंदुस्तान में हिंदी पढ़ने वालों की बहुत बड़ी संख्या है जो अपने डेस्क पर इंतजार कर रही है कि आपका कंटेंट वहां तक पहुंचे। आप मानिए, मैं इस देश का ऐसा राइटर लेखक हूं जो केवल किताब से अपनी जिंदगी चलाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आपको एक नए स्टार्टअप के बारे में बता रहा हूं कि आप हिंदी में लिख के अमृत तो कब पाइएगा नहीं पता, लेकिन आप दाल रोटी के लिए भी हिंदी का लेखक बन सकें, ये संभावना टटोलने की कोशिश है। और लिट शौक जैसे कार्यक्रम इसी संभावनाओं पर विमर्श करने का मौका देते हैं, क्योंकि जब आप कभी सम्मेलनों में चले जाएंगे या हिंदी दिवस के टीवी के किसी प्रोग्राम में जाएंगे, तो आप एक खास फॉर्मेट में कुछ बात कहते हैं या कविता सुनाते हैं। आप वहां पे लोगों को यह भरोसा नहीं दिला सकते हैं कि मैं जो हिंदी का लेखक हूं, मेरी 1 मिलियन कॉपी बिकी है हिंदी की किताब आज के युग में, 1 मिलियन। मेरा पहला संस्करण 50,000 का आ रहा है, लेकिन वो चर्चा में नहीं है। वो क्यों चर्चा में नहीं है? क्योंकि आपके पास उड़ान या लिट चौक जैसे मंच नहीं है जो इस बात को इतना अच्छे वॉल्यूम के साथ बोल सके, इतने अच्छे माइक के साथ। तो वो डेस्क पर तो है वो चीजें, वो किताब में है, लाइब्रेरी में है, वो लड़के लड़कियों के कमरे में वो किताब में है, लेकिन चूंकि पाठक इतना मुखर होता नहीं है और कोई ऐसा मैकेनिज्म हमारे पास है नहीं जो हिंदी के लेखकों को ये बता के प्रमोट करे कि हिंदी में लिखना एक कैरियर है, किताब लिखना एक कैरियर है। सीधे अमृत के बारे में बताते हैं, अरे लिखिए, बिकने का मत सोचिए, लेखक बिकाऊ नहीं होता है, आत्मा को झकझोरने वाला कुछ लिखिए। भाई जब खुद ही हड्डी में दर्द होगा तो हम आपका आत्मा को कैसे झकझोरेंगे भूखे? क्योंकि किसी को यह पढ़ाया नहीं गया है कि प्रेमचंद जब प्रकाशक के पास जाते थे तो प्रेमचंद एक किताब के बदले में जो रॉयल्टी थे उसके बदले में 30 लेटर लिखते थे, 30 चिट्ठियां लिखते थे कि भाई गोदान का पेमेंट करो, कफन का पेमेंट करो, कफन खरीदने का पैसा नहीं है। ये निराला भी लिखते थे, लेकिन निराला में क्या थी भाई? निराला को पेमेंट मिलता था, लेकिन निराला की साधुता है कि जो उनको मिला वो दान कर देते थे, गरीबों को दे देते थे, फक्कड़ थे। लेकिन ये बताना कि हिंदी में कैरियर नहीं है, असल में ये सब मंच या निखिल जी का जो लिट चौक का मंच है, मैं बिहार का हूं, लेकिन मुझे मध्य प्रदेश में अगर आप देखिए कि तो एक बड़ा पाठक वर्ग जो मिला, उससे कनेक्ट करने में ऐसे मंचों का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं इस तरह से देखता हूं जहां पर आप हर तरह के उद्यमियों के बीच, हर तरह के क्षेत्र के लोगों के बीच भी इसको भी, लेखन को भी, कला को भी समानांतर खड़ा करके, बिल्कुल समानांतर खड़ा करके उस पर बात करते हैं। ये बहुत बड़ा लाभ है, इसका सदुपयोग होना चाहिए वास्तव में सर। और जैसा कि आपने कहा कि ये मासेस तक पहुंचने की, युवाओं को अट्रैक्ट करने का एक बहुत बड़ा तरीका है, ऐसा मंच है।
धरा मैम आपसे पूछूंगा इस बात पर, आप युवाओं के लिए कार्य करती हैं, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं। आर्ट एंड कल्चर कितना उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जोड़ता है अपने आप से, और बिहाइंड द सीन जैसे कि कहा गया है इस पूरे सेशन में कि एक वो सोच होती है कि हाँ युवाओं को जोड़ें और उन्हें एक सही दिशा दें, किस तरीके से लिट चौक उसके लिए कार्य कर रहा है? नीलोत्पल के बोलने के बाद किसी के लिए बोलने का कुछ रह नहीं जाता, उनको मौका कम मिला है। ये मंच, मतलब ये मैं बहुत ऑनेस्टली कह रही हूँ कि ये जो पैनल आपने तैयार किया है ये इनजस्टिस है इस तरह के कलाकार के साथ, सीरियसली। खैर सवाल पे आते हैं कि लिट चौक कैसे युवाओं को जोड़ता है। हम लोगों का, हम टीचर्स जो हैं यहाँ पे, शायद उनको समझ में आएगा कि बच्चे कैसे आजकल इन चीज़ों से दूर हो रहे हैं। ये टीचर का एक दुख है कि भाई वो पढ़ते नहीं हैं, वो अच्छी चीज़ें देखते सुनते नहीं हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो निखिल जी ने जो एक बात छोड़ दी लिट चौक के बारे में, वही इस सवाल का जवाब है कि हमने सोचा कि ज्ञान तो सब देते हैं, मंच पे जिसको भी माइक मिलता है वो उस मोड में आ जाता है कि अब मुझे पूरा ज्ञान आज दे के जाना है। तो सेशन तो ठीक बात है, लेकिन युवाओं के लिए एक्चुअली क्या होगा लिट चौक में। हमने एक पैरेलल मंच तैयार किया कि अगर आप परफॉर्मर हैं किसी भी तरह से, आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, आप एक्ट करते हैं, आप गाते हैं, और भी किसी भी तरह की विधा में आप परफॉर्म करते हैं, तो आपके लिए ये मंच है। आप परफॉर्म करिए और यहाँ से जो बन पड़ेगा हमें वो हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नए लेखकों के लिए हमने ये कोशिश की कि आप अपनी पांडुलिपियाँ भेजिए, और वाणी प्रकाशन देश का बहुत बड़ा हिंदी प्रकाशन समूह हो गया है अब, तो वो आपकी किताब छापेगा अगर आपकी पांडुलिपि यहाँ से सिलेक्ट करती है। तो केवल इतना ही नहीं कि आप आइए, ज्ञान लीजिए और घर जाइए और सो जाइए, नहीं, आपको ये हम ज़रूरत है कि हम मंच दें और हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, इसी तरह जो गाने वाले लोग हैं उनके लिए हमने कहा कि आप अच्छा गाते हैं, एक प्रोडक्शन हाउस है जो आपको बारीकी से सुन रहा है, और अगर उसको अच्छा लगा तो वो आपका एक पहला म्यूजिक एल्बम वो निकालेगा। तो ये कहाँ होता है? ये लिट चौक का एक पैरेलल मंच है जिसको हमने परफॉर्मेंस चौक नाम दिया है, और 3 दिन में, आप यकीन शायद ना माने, 300-350 के आसपास परफॉर्मेंसेस वहाँ होती हैं। कई बार ये स्थिति होती है कि हम लोगों को रोकते हैं कि भाई कुछ लोग चल के सेशन, युवाओं को जोड़ने का सही जो एक पॉइंट है वो हमें ढूंढना होता है। अब मेरे ख्याल से ये सवाल का जवाब हो गया होगा, मुझे ऐसे लगता है। आपका जो नीलोत्पल से सवाल था वो अधूरा है, नीलोत्पल की कविता रह गई थी, तो बिल्कुल मैं उसी पे जाना चाह रहा था जी। और वास्तव में सर उसके साथ साथ एक, चूंकि आप वो व्यक्ति हैं जो एक्चुअली यहाँ पे हिंदी राइटर्स को मोटिवेट कर रहे हैं टू कम फॉरवर्ड और ऐसे स्टेजेस पर आएं और परफॉर्म करें, सो एक वो एडवाइस जो आप साथ में अपनी कविता के माध्यम के बाद, कविता के बाद या जैसा भी आप चाहें जरूर दीजिएगा कि वो किस प्रकार की लेखनी, किस तरीके से आगे बढ़े उस करियर में कि वो भी इस मंच पर आपके समान आकर बैठ सकें और अपनी कविताओं के लिए मोटिवेट किए जाएं। देखिए, मेरी उम्र 38 साल है, लेखन के हिसाब से बहुत कच्चा उम्र है उसको कहा जाता है। इतने कम उम्र के लेखकों को ये सब बोलने को मत बोलिएगा कि कैसे लिखा जाए, ये बताए, बर्बाद हो जाएगा लेखक जो भी कुछ लिख रहा है। वो अभी से अगर ये सलाह देने लगेगा लोगों को ना, इसका भी करियर गया, बाकी का तो नहीं बनना है इससे कुछ, इसका भी चला जाएगा। तो हिंदी, वो मैं सिर्फ एक छोटा सा अनुभव भले साझा करूंगा, एक मैं कविता से पहले ही बता देता हूँ। देखिए, असल में जब हम हिंदी में लिखते हैं ना, तो पहला जो मुद्दा आ जाता है कि हमें कुछ ऐसा कालजयी रच देना है जो कि प्रेमचंद की आत्मा को धरती पे ला दे, और ये आपसे पहले दिन उम्मीद की जाती है। और फिर आप कुछ भी लिखते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं, इंस्टा पे डालते हैं, कभी कुछ भी लिख के, तो आपको ये कहा जाता है कि ये शुद्ध हिंदी नहीं है, ये वैसी वाली हिंदी नहीं है। उसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है कि जो भी आपको ये बता रहा है आज के पीढ़ी में, उसने प्रेमचंद को ठीक से नहीं पढ़ा है, वो रेणु को नहीं पढ़ रहा है, वो काशीनाथ सिंह को, अमरकांत को नहीं पढ़ रहा है, वो दुष्यंत कुमार को नहीं पढ़ रहे हैं गजल में। वो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि अगर वो ऐसा होता तो वो जान पाते कि उनके समय की जो भाषा थी अपने समय का प्रतिनिधि थी, अपने अपने समाज का प्रतिनिधि थी। तो हमारी जो भाषा है वो हम अपने समय को दर्ज करने के लिए अगर अपने समय की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, हम जोड़ नहीं पाएंगे आपको। प्रेमचंद जो भाषा गोदान में कह रहे हैं, नीलोत्पल मृणाल भी जब बिहार या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसी गांव की कहानी लिखता है तो वो गांव के लोगों के पात्र की भाषा लिखेगा। वो फिर जयशंकर प्रसाद की तरह दिव्या में जिस तरह से लिखा गया वैसे नहीं लिखेगा। अगर मैं मान लीजिए कि मैं आज के समाज के बारे में लिख रहा हूं और मेरी भाषा महाभारत की तरह हो कि हे विप्र,
ये धूम्रदंडिका जलाते हुए तुम शिक्षण संस्थान की ओर जा रहे हो, तो आप फिर मुझे नहीं पढ़िएगा, आप मुझे पागल घोषित कर दीजिएगा शुद्ध हिंदी के नाम पर। तो सबसे बड़ी बात है कि सामान्य भाषा में लिखिए, सामान्य अनुभव सामान्य भाषा में लिखना, यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला हालांकि बहुत गंदा शब्द है लेखन के लिहाज से, लेकिन यही एक रास्ता है जिससे आप पाठकों तक पहुंचते हैं। आंख और अनुभव का द्वार खुला रखिए, कुछ भी अद्भुत नहीं लिखा जाता है। आप गोदान को एक गाइड की तरह पढ़िए, आपको पता चलेगा कि उसमें जो लेखक जो डील कर रहा है अपने दृश्यों को, वो डील करना सीखना है हमको, हम उससे किस तरह से डील करते हैं। तो हम कोई जादूगरी नहीं करते हैं, सामान्य भाषा में लिखिए, सामान्य दृश्यों को कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है ये अगर आपको आ गया तो आप एक अच्छे लेखक हो जाएंगे, लोगों से जुड़ पाएंगे। अब बाकी एक बात छोटी सी, लेखक बनना है तो उपन्यास कम पढ़िए अगर आप उपन्यासकार हैं तो। अगर आप उपन्यास पढ़िएगा तो आप उपन्यास नहीं लिख पाइएगा। जैसे कि अभी उड़ान के कार्यक्रम में आपको अभी मिड डे अभी जो लंच मिला था, आप लंच खा के लंच बनाना नहीं सीख जाइएगा। आप पनीर मसाला खाए जहनुमा में, फिर बोले वाह कैसा बना है, लेकिन वो बनेगा कैसे आपको रेसिपी बताएगा। तो सबसे बड़ी बात, जिसको भी फिक्शन लिखना है, जिसको भी नॉवेल लिखना है, नॉन फिक्शन पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, फॉरेन पॉलिसी पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, साइंस एंड टेक पढ़िए। पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो नए समय का उपमा नहीं आएगा, बिंब भी नहीं आएगा आपके पास। आप अभी भी चांद से महबूबा का तुलना करिएगा, जहां की अभी गाड़ी उतार दिया अब हिंदुस्तान, क्योंकि आपको लगता है कि सौंदर्य का यही उपमान है ना। तो नई चीजें लाइए, क्योंकि लेखन में नया उपमान होता है। तुलसीदास जब मानस में सीता जी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं तो लिखते हैं कि सब उपमान रही जुठारी, सारे उपमान तो झूठे हो गए, अब मैं तो आपके सौंदर्य का वर्णन किससे करूं। यानी सौंदर्य पर तो लिखा जा रहा है हजारों साल से, अब मुझे माता सीता पर लिखना है, उसके सौंदर्य का वर्णन करना है, और मैं तुलसीदास हूं, ईश्वर की प्रेरणा से लिख रहा हूं। घिसे हुए उपमान लिखूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। तो यानी क्या है, सौंदर्य पर लिखना बड़ी बात नहीं है, नए उपमान लाना बड़ी बात है। तो लेखन में जो बिंब होता है वही नया होता है। दृश्य सब कुछ चल चुका है संसार में, कुछ भी नया नहीं है, सब घटित हो चुका है, कहन नया है। तो कहन नया कीजिए, नए बिंब लाइए, यही आपको एक सफल लेखक बनाएगा। अब मैं कविता आपको सुनाता हूं। मैं आप सभी युवाओं के लिए कविता, जिसको मैं मंच पर सामान्य तौर पर नहीं सुनाता हूं, मैं वही सुनाता हूं, एक थोड़ा सा, जिससे मैं खुद को भी थोड़ा मोटिवेट कर पाऊं और आप युवाओं के को शुभकामना देते हुए एक छोटा सा गीत सुनाता हूं। कि तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे। गौरव जी, ये जो उम्मीद का दिन है, जो आपने जब बात हमारी जब कल हो रही थी कि एक मध्य प्रदेश के लिए एक संभावना ढूंढते हैं, एक लोगों का जुटान करते हैं जहां पर हम बात चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश को निर्मित करने की, कि तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे। हो अरे सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, हाथ जो उठाएंगे तो चंदा नहीं दूर, अरे चंदा नहीं दूर। सूखे बादलों पर बरसात लिखेंगे, सूखे बादलों पर बरसात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। और जो लोग ये सोचते हैं, कई बार कई युवा एक निर्णय बहुत सोच समझ के लेते हैं और शुरुआती कदम अगर लड़खड़ा गए तो पीछे से धकेलने वाले कहते हैं तुमको बोलते थे मत बढ़ना, है ना। मैं खुद 8-10 साल जब यूपीएससी की तैयारी करके जब माथा पीट के बैठा मुखर्जी नगर में, तो मुझे खुद लगा मैं कहाँ जाऊंगा, है ना। तो वहां से आप जो कर रहे हैं उसको मन ला के करिए कि अरे हौसले की नैया जब दिए हैं उतार,
हमसे किनारा नहीं पूछो रे मल्हार, मत पूछो रे मल्हार। बहती नदी पर कोई बांध लिखेंगे, बहती नदी पर कोई बांध लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। अरे पीपल महुआ शीशम और पलास लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर वास्तव में आपने जो बात कही मैम, आई ट्रूली रिलेट। हाँ जी प्लीज, बिल्कुल मैं धरा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन्हें बिल्कुल पूरा करेंगे। भोपाल के लोगों को पता नहीं ये बात पता है कि नहीं कि इतना अच्छा कलाकार आजकल आपके शहर में है, तो जितना फ़ायदा लेना चाहे ले सकते हैं। साथ के जो लेखक हैं, नीलोत्पल के साथ के जो लेखक हैं, हम लोग जब आपस में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि नीलोत्पल जितना बोल के छोड़ देते हैं, हम उतना लिख के बेस्ट सेलर बन जाते हैं। ये बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। ये इतनी कमाल की बात है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बोलते वक्त। और नीलोत्पल जब मंच पे होते हैं तो वही लोग ये कहते हैं कि ये थोड़ा सा रिस्की है कि नीलोत्पल के साथ मंच शेयर करना है हमें, क्योंकि इस आदमी में वो एबिलिटी है कि वो पूरी जनता को अपने साथ बांध के चल देता है। वास्तव में मैम, और आपने सर अपने उस जवाब में जब बात कही भाषा की, तो वो जवाब भी दे दिया कि कैसे कलाकार मासेस तक पहुंच सकता है, जो कि मेरे बीच में भी था कि हम आर्ट और कल्चर को कैसे मासेस तक पहुंचाएं। आपकी उस भाषा के उपयोग ने, उस तरीके ने बता दिया कि किस प्रकार से एक कलाकार पहुंचता है मासेस तक। जब भी सर अब उड़ान का इतिहास लिखेंगे, नीलोत्पल जी का नाम सबसे पहले लिखेंगे। एक बार तालियां बनती हैं जोरदार। वास्तव में जिस प्रकार से आपने इस शाम को योगदान दिया है, आप दोनों ने मिलकर के जो इस उड़ान के आखिरी सेशन में अपनी इनसाइट्स दी हैं, इट एक्चुअली फील्स कि हाँ, हमारा आर्ट एंड कल्चर हर एक शहर के, हर एक गांव के कोने तक पहुंचने की पूरी उम्मीद रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच की ओर से। मैं वापस चलता हूं, हमारे बीच सौम्या को इन्वाइट करना चाहूंगा ऑन स्टेज, और साथ ही साथ आइए समापन की ओर चलेंगे हमारे इस अंतिम सेशन के लिए। बिल्कुल, ये इतना तगड़ा सेशन रहा है कि ऑर्गेनाइजर्स अभी पीछे बातें कर रहे हैं कि इसको और कैसे बढ़ाएं इस सेशन को। एब्सोल्युटली, और हम बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले गौरव जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज स्टेज पर आएं टू प्रेजेंट अ मेमेंटो टू आवर तनखा सर। I would request you to come on stage to present a token of gratitude on our behalf to all the lovely panelists. सर रियली ऑनर्ड कि ये मौका मुझे मिला, भले ही एक्सीडेंट। थैंक यू सो मच आशीष जी कि आपने मुझे ये मौका दे दिया यहाँ आने के लिए। सच में, वास्तव में ये मंच में, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, कुछ अच्छे कर्म है जो मुझे आप सबके साथ इस मंच को साझा करने का मौका मिला। बहुत बहुत आभार। प्लीज सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी धरा जी से। I would request Dhara to please come in front and receive this small medal and memento on behalf of Udaan Conclave. फिर मैं दरख्वास्त करूंगी निखिल जी से कि वे आगे आए और हमें मौका दें कि हम उन्हें सम्मानित करें। And last but it can't be the least, Neelotpal ji, sending a lot, sharing this with you with a lot of love and appreciation and joy. अनुज, तुम्हारा भी शुक्रिया, पर हम तुम्हें मोमेंटो नहीं देंगे। And post this, I would request everyone to join us for a group photograph, please. Can we have all the panelists and a wonderful moderator? And on that note, I am going to request Neelotpal ji to stay on the stage with us. I am so sorry for doing this, but I would need you to stay on the stage with us, and I would request you to share a little more of your creation and creativity with the audience. Sir, please, बिल्कुल, क्यों नहीं? अनुज, ये स्टेज अब सिर्फ नीलोत्पल जी का है, आप आओ। मैं मंच आप लोगों की आज्ञा से मंच का अनुशासन तोड़ते हुए एक कविता छोटा सा आप लोगों को सुनाता हूँ, उसके बाद
विदा लूँगा। देखिए हम लोग जिस समय में हम लोग का जन्म हुआ है, या तो हम लोग को 50 साल पहले पैदा होना था या 50 साल बाद। हम लोग बीच में फंस गए। इतनी रफ्तार से दुनिया परिवर्तित हो रही है, इतनी रफ्तार इस दुनिया ने कभी देखी नहीं थी। मतलब 2000 से 2020 आने के बीच में बिस्लेरी जो है तिस्लेरी हो गया, इतना फास्ट चल रहा है सब कुछ। तो आप यूँ समझिए कि बहुत कुछ तेजी से घटित हो रहा है। तो ऐसे में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यानी कि अपने समय के चीजों का उपयोग करते हुए उसको बचा के रखना, ये जिम्मेदारी हमारी है। तो ये जो जिम्मेदारी है, वहां से एक गीत सुनाता हूँ, हमारी पीढ़ी को क्या जिम्मेदारी है। नाना जी ये देखिए, हम संक्रमण काल में हुए हैं। एक पैर हमारा इक्वेटर के उधर है, कर्क रेखा की तरफ, एक है मकर रेखा की तरफ। हम कौन से लोग हैं? हम कूपन से रिचार्ज हो रहे हैं और बात करते हुए खर्च हुए जा रहे हैं। हम ऐसे लोग हैं, है ना? बस यही हमारा हो रहा है। सोशल मीडिया पर अगर किसी को बोलिए काहे इतना बोलते हो, तो कहता है बोलना मेरा अधिकार है। बोलना तुम्हारा अधिकार है, खर्च होना तो नहीं ना है। व्यक्त होने और खर्च होने में अंतर है। हम असल में व्यक्त नहीं हो रहे हैं, हम खर्च हो रहे हैं। तो ये बड़ा महीन सा अंतर है कि व्यक्त होना किसे कहते हैं और खर्च होना किसे कहते हैं। तो वहां से मैं एक गीत सुनाता हूं। क्या हमारी पीढ़ी के दायित्व क्या है? कि थोड़ा सा नदी का पानी, धरा जी आप मतलब आप ही उलझा के गई हैं, कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो, और धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो। रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, और दुअरे एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के। कि पूछेगा जो कोई तो अरे उसी को बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी। दुनिया कैसी हुआ करती थी? कि स्कूल के पीछे वाला अमरूद का पेड़ रख लो, पोखर के पीड़ खड़ा वो जामुन और बेर रख लो, एक दो तो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे, और भौरे और तितली जहां खेले मिले जुल रे। और वो पीढ़ी जिसको हैरी पॉटर जो है बॉर्नवीटा में घोल के पिला दिया गया है। और कल सर हिंदी दिवस पे मैं मुखर्जी नगर में रहता था, यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक लड़के ने मुझसे पूछा, यार तुमने लिखा है वो अवघड़? मैंने कहा हाँ। कहा यार तुम्हारी तरह एक तुम्हारे तरफ का कोई लेखक है यार, वो ऐसे ही गांव पर लिखता है, मिले हो कभी? मैंने कहा कौन? कहा वो कोई प्रेमचंद है। मैंने कहा मिले तो नहीं है, हम बहुत लेट आए। कहा भाई तेरे तरफ का है? बोला हाँ। बोला कभी मिलवा मुझे। तो जो पीढ़ी प्रेमचंद से मिलने के लिए ढूंढ रही है उसको भी पता नहीं प्रेमचंद अभी कहाँ है। ठीक है, कई लोग तो कहते हैं आपने ध्यानचंद का गोदाम पढ़ा है? मैं फिर बताता हूँ भाई वो प्रेमचंद का गोदाम है यार, वो ध्यानचंद का गोदाम नहीं है ना। आप अगर ये कह दीजिए कि रेणु का मैला आंचल, तो कई लोग समझेंगे रानू मंडल उसकी लेखिका है। अभी विवेक सर बता रहे थे कि जबलपुर में हमने हरिशंकर परसाई जी के नाम पर एक सड़क सैंक्शन करवाने के लिए अभी कोशिश की, और वो अब पटल पे आ गया है, और एक मूर्ति स्थापित करने के लिए। तो अगर सोचिए कि अगर ऐसे लोग ये मूर्तियां स्थापित नहीं करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हरिशंकर परसाई कौन थे और आपके प्रदेश से थे, पता भी नहीं चलेगा आने वाले 10-20। तो वहां से कि दादी नानी के किस्से, बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे। और क्या करना, खूब समृद्धि आ जाए,
खूब पैसा आ जाए कि सोफे तुम लाख लगाना, बाबा की चौकी रखना, उस पर एक पतला बिछौना, लोटा और पानी रखना, रखना वहीं एक लालटेन, लालटेन में तेल रे, जहां करे रात चांदनी रोशनी से मेल रे। और क्या रखना कि गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, चाट और पकौड़ी वाले एक दो तो ठेला रखना, याद रखना झाल मुढ़ी में मरचा तूफानी रे, और गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे, और होली के रंग बचा लो दिवाली के दीप रे, भोर की अजाने रखना छठ वाले गीत रे, भूल नहीं जाना अपने लोक संस्कार रे, पुरखों से मिले हुए सब तीज त्योहार रे, कि पूछेगा जो कोई तो अरे उसी को बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, हुआ करती थी, हुआ करती थी रे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नहीं बजाई? अरे नहीं, अरे बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीलोत्पल जी, ये मोमेंट हमें देने का आपका धन्यवाद। इन सबकी तरफ से जितनी तेज ताली बजा सकते हो ना अभी बजा दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए भोपाल मेरा ससुराल है, लेकिन असली प्यार तो आज मुझे मिला है जो है ना, तो असली बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या बात है, थैंक यू। नहीं, यही तो आर्ट का पावर है ना। इतना दिन भर के बाद की थकान के बाद भी जिस तरीके से सब एनर्जाइज हुए हैं, ये माहौल तो यहाँ से भी देखते ही बनता था। एंड हमने फिर ये सोचा, क्योंकि नीलोत्पल जी के परफॉर्मेंस के बाद बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स में डिस्कशन और हो गए, तो हमने ये सोचा कि परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी रखते हैं। सो विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ अ ब्रेक, मैं आप स्टेज पे बुलाना चाहूंगी कविश सेठ को। कविश के लिए एक बार ये तालियां हो जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ उनके बारे में थोड़ा सा। जब तक कविश स्टेज पे आएंगे, अपना थोड़ा सा सेटअप लगाएंगे, आई विल यूज दैट टाइम टू ऑल्सो इंट्रोड्यूस हिम टू यू। कविश एक इंडिपेंडेंट सिंगर, सॉन्ग राइटर और पोएट हैं, जो प्राइमरीली हिंदुस्तानी में ही लिखते हैं, बात करते हैं, कंपोज करते हैं। इन्होंने एक नई तरह का इंस्ट्रूमेंट इजाद किया है और पेटेंट करवाया है, जिसका नाम इन्होंने दिया है नूरी। एंड नूरी एक एवोल्यूशन है गिटार, रबाब, ऊद और सरोद के बीच में। कविश ने आज तक 72 से ज़्यादा सिटीज़, गांव और हर तरह के शहरों में परफॉर्म किया है। 2 दफ़ा ओवरसीज़ भी परफॉर्म किया है। बट जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है वो ये बात कि न केवल इन्होंने शहरों में बड़े बड़े मंचों पे, पर गाँव में, मंडलियों में, मंदिरों में भी परफॉर्म किया है। मेरा सौभाग्य था कि मैंने इनको अभी ही आई थिंक 1-1.5 हफ्ता पहले बनारस में सुना और आज दोबारा सुनने जा रही हूँ। इनके म्यूज़िकल प्रोजेक्ट का नाम है ज़बान, wherein independent artists from different musical and linguistic backgrounds come together. वो collaborate करते हैं, perform करते हैं across different locations. और इनको recently, ये बड़ी बात है, recently कविश को एक award मिला था, the award of the most talented upcoming musician at the Navbharat Times award ceremony, and the award was given by Piyush Goyal and Devendra Fadnavis themselves. So please put your hands together for Kavish and let us give him a little bit of time to just set up and present the magic of his music, his words, his verses, and his ideology, and his thought process, and his art amongst all of us.
माइक पे इस पे ना अरुण फैंटम चालू करना इस पे जो अपन ने लीड लगाई थी ना जैक वाली पॉइंट पे उसको फैंटम चालू कर दो। सिग्नल देखो देखो आया सिग्नल आया। इसको सामने से अपन उतार देते हैं, निकाल देते हैं। Kavish, are we good to go? Yes. That quickly? हाँ. So we'll once again put our hands together to welcome Kavish officially, and I invite you to take over the stage. Stage आपका, महफिल आपकी, गाने आपके, art आपका. Very excited for this. शुक्रिया। मैं अपना परिचय इस कविता से देता हूँ कि मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ। मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ। बिखरे होते हैं तो बिखर जाता हूँ, निखरे होते हैं तो निखर जाता हूँ। अपनी अना अपना होना दूसरों पे नहीं जताता हूँ। मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ। दोस्तों के संग मैं दोस्तों सा हो जाता हूँ। हवा का झोंका हूँ, हवाओं में हो जाता हूँ। अकेले होता हूँ तो खुद से हो जाता हूँ। अकेले होता हूँ तो खुद से हो जाता हूँ। मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ। आँख बंद करूँ तो पूरा हो जाता हूँ और आँख खोलूँ तो अधूरा हो जाता हूँ। मुलाकातों से मैं बनता जाता हूँ। इंसानों से मिलते मिलते मैं इंसान होता जाता हूँ। मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ। तो ये गीत है ज़ुबान पे। मुझे लगता है कुछ लोगों को मालूम होगा, साथ में भी गा सकते हैं। न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है। आ हिंदी बोले तो बोलेगे गवार है, आ हिंदी बोले तो बोलेगे गवार है। साथ में गा सकते हैं। न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है। आ हिंदी बोले तो बोलेगे गवार है, आ हिंदी बोले तो बोलेगे गवार है। आ हिंदी बोले तो बोलेगे गवार है, आ हिंदी बोले तो बोलेगे गवार है। जुबां से आज भी देखो तो ये गुलाम है, जुबां से आज भी देखो तो ये गुलाम है, जुबां से आज भी देखो तो ये गुलाम है। आ फिर भी घूमे बने राजा सरे आम है, आ फिर भी घूमे बने राजा सरे आम है। न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है। आ हिंदी बोले तो बोलेगे गवार है, आ हिंदी बोले तो बोलेगे गवार है। जताते ऐसे अंग्रेजी कोई सुनार है, जताते ऐसे अंग्रेजी कोई सुनार है, जताते ऐसे अंग्रेजी कोई सुनार है। काम आए तो भैया बस लोहार है, काम आए तो भैया बस लोहार है। न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है। क्या बात है। न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है। आ हिंदी बोले तो बोले, हिंदी बोले तो बोलेगे गवार है, आ हिंदी बोले तो बोलेगे गवार है, आ हिंदी बोले तो बोलेगे गवार है। छोरी से अंग्रेजी में जो लड़खड़ात है, प्रेमी से अंग्रेजी में जो लड़खड़ात है, प्रेमी से अंग्रेजी में जो लड़खड़ात है।
तुहार प्यार की न कौनो औकात है, तुहार प्यार की न कौनो औकात है। फुआरा आंगन में बिलायती लगात है, फुआरा आंगन में बिलायती लगात है, फुआरा आंगन में बिलायती लगात है। हाँ फिर भी फूटे बेटा पानी तो हमार है, हाँ फिर भी फूटे बेटा पानी तो हमार है। न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है। आ हिंदी बोले तो बोलेंगे गवार है, आ हिंदी बोले तो बोलेंगे गवार है, हाँ हिंदी बोले तो बोलेंगे गवार है। न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है। हिंदी तो बोलेंगे गवार है, हाँ हिंदी बोले तो बोलेंगे गवार है, हाँ हिंदी बोले तो बोलेंगे गवार है, हाँ हिंदी बोले तो बोलेंगे गवार है। अच्छा, आप में से कचहरी कौन कौन गया है? कोर्ट कचहरी। और कौन कौन नहीं गया है? तो ये गाना आप ये समझ लीजिए, जो गया है वो उसको सुना रहा है जो नहीं गया है, ठीक है? ये गाने वैसे ढोलक हारमोनियम के साथ गाने वाले हैं, और क्योंकि नीलोत्पल भाई ने एक अच्छा मिजाज बना दिया, माहौल बना दिया, तो मेरा मन करा कि मैं ऐसे गाने सुनाऊं। भले डांट घर में तू बीबी की खाना, भले जैसे तैसे गृहस्थी चलाना, भले जाके जंगल में धूनी रमाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। कचहरी की महिमा निराली है बेटे, कचहरी वकीलों की थाली है बेटे, पुलिस के लिए छोटी साली है बेटे, यहाँ पैरवी अब दलाली है बेटे, यहाँ पैरवी अब दलाली है बेटे। कचहरी शरीफों के खातिर नहीं है, उसी की कसम लो जो हाजिर नहीं है बासी मुघर से, है बासी मुघर से बुलाती कचहरी, बुला करके दिन भर रुलाती कचहरी, बुला करके दिन भर रुलाती कचहरी। कचहरी तो गुंडों की खेती है बेटे, यही जिंदगी उनको देती है बेटे, खुले आम कातिल यहाँ घूमते हैं, सिपाही दरोगा चरण चूमते हैं, सिपाही दरोगा चरण चूमते हैं। कचहरी में सच की बड़ी दुर्दशा है, भला आदमी किस तरह से फंसा है। हाँ, कचहरी में सच की बड़ी दुर्दशा है, भला आदमी किस तरह से फंसा है। यहाँ झूठ की कमाई है बेटे, यहाँ झूठ की कमाई है बेटे, यहाँ झूठ का रेट हाई है बेटे, यहाँ झूठ का रेट हाई है बेटे। साथ में आते हैं।
भले डांट घर में तू बीबी की खाना, भले डांट घर में तू बीबी की खाना, भले जैसे तैसे गृहस्थी चलाना, भले जाके जंगल में धूनी रमाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। ठीक, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ आपसे। आप मैंने और मैं अकेले नहीं गाने वाला, ठीक है? मुझे बहुत आपने जता दिया कि मैं अकेला हूँ यहाँ पे। साथ में गाएंगे? भले डांट घर में तू बीबी की खाना, भले जैसे बीबी की खाना, भले जैसे तैसे, भले जाके जंगल में धूनी, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। ठीक है, एक और लेते बचन। कचहरी की महिमा निराली है बेटे, कचहरी वकीलों की थाली है बेटे, कचहरी वकीलों की थाली है बेटे, पुलिस के लिए छोटी साली है बेटे, पुलिस के यहाँ पैरवी अब दलाली है बेटे, यहाँ पैरवी अब दलाली है बेटे। ठीक है, हो गया बस। ठीक है, अच्छा मैं एक प्रेम कविता सुना देता हूँ। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। मैं एक प्रेम कविता सुना दूँ? हाँ, ये मेरी सच्ची और मेरी पहली और आखिरी महबूबा मैंने लिखी है। मैं चाहूँगा आप गौर फरमाएं। तो भतेरे रिश्तों से गुजरने के बाद मुझे आज जाकर मेरी सच्ची महबूबा मिली है। अरे वो मेरे साथ कब से थी ये बात भी मुझे आज जाकर पता चली है। मैं जान गया हूँ कि मेरी नींद ही मेरी सच्ची महबूबा है। मैं जान गया हूँ कि मेरी नींद ही मेरी सच्ची महबूबा है। वो रात को आती है, वो रात को आती है, ख्वाब दिखाती है, अक्सर बिस्तर पे ही आती है। उससे नहीं मिलो तो पूरा दिन खराब कर जाती है। मशहूर मोहब्बतों की तरह हमारी मोहब्बत भी बदनाम है। लोग कहते हैं जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। उन्हें कौन बताएं, इनसे नखरे करें तो जाने मन जान भी ले जाती हैं। मेरी नींद दबे पांव आती है, मेरी नींद दबे पांव आती है, चोरी छुपे आती है। मैं कहीं बोर हो रहा हूँ अगर तो मुझसे मिलकर चली जाती है। कभी कभार तो शर्म हया छोड़ दिन दहाड़े आ जाती है। कभी कभार तो शर्म हया छोड़ दिन दहाड़े आ जाती है। सबके सामने पकड़े जाने पर मेरी नाक खूब कटवाती है। मेरी नींद मुझे पूरी तरह से चाहती है। बहुत उत्साहित हैं सब। खत्म नहीं करना। मेरी नींद, मैं सुनाऊं? ठीक है। मेरी नींद मुझे पूरी तरह से चाहती है। मुझे किसी और से इश्क हो जाए, मैं फिर से दोहराता हूँ,
मेरी नींद मुझे पूरी तरह से चाहती है, मुझे किसी और से इश्क हो जाए तो नींद भी नहीं आती है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। मेरी नींद मुझे पूरी तरह से चाहती है, मुझे किसी और से इश्क हो जाए तो नींद भी नहीं आती है। मेरा और नींद का साथ मेरे जितना पुराना है तो सही मायने में तो नींद ही मेरी जीवन साथी है। मुझे लगता है हम हर रोज़, हम जिंदगी भर हर रोज़ हर रात मिला करेंगे, कभी कभार चोरी छुपे दोपहर में भी मिल लिया करेंगे। और एक दिन जब से कोई दिन ना होगा, और एक दिन, और पता नहीं क्या हो रहा है, और एक दिन जब कोई दिन ना होगा, जब जीने के लिए और कुछ ना होगा, मैं नींद का पूरी तरह से हो जाऊंगा। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी नींद ही मेरी सच्ची महबूबा है। शुक्रिया। अच्छा, एक नज़्म सुनाए आपको? भोपाल है। तो मुझे नहीं लगता कि ब्रेकअप कुछ होता है, रिश्ते बस खो जाते हैं। तो ऐसे ही एक रिश्ता जब मेरा खो गया था तो मैं जगजीत जी और गालिब साहब के साथ बैठा था रात को, और कोसने लगा था ये क्या ज़माना आ गया है, लोग कैसी मोहब्बत कर रहे हैं। ससुराल है। इसकी आवाज़ मुझे कम आ रही है। अरे वो ज़माना चला गया है, वो मोहब्बत अब कहाँ है। वो ज़माना चला गया है, वो मोहब्बत अब कहाँ है। साथ सहूलियत में सब ढूंढे, सब रो इंतजार कहाँ है। वो ज़माना चला गया है, वो मोहब्बत अब कहाँ है। साथ सहूलियत में सब ढूंढे, सब रो इंतजार कहाँ है। वो ज़माना, साथ गाना है। वो ज़माना चला गया है, वो मोहब्बत अब कहाँ है। वो ज़माना, वो मोहब्बत अब कहाँ है। साथ सहूलियत में सब ढूंढे, सब रो इंतजार कहाँ है। वो ज़माना चला गया है। वो दिन कब के चले गए हैं, वो दिन कब के चले गए हैं। इंतजार करते थे कभी, वो दूरी कब की नहीं रही है। करीब लाती थी कभी, आज हमें फुर्सत कहाँ है। आज हमें फुर्सत कहाँ है। आज यहाँ है तो कल वहाँ है। वो ज़माना चला गया है, वो मोहब्बत
मोहब्बत अब कहाँ है, यहाँ सब लोग समझदार हैं। दीवानगी बोलो कहाँ है, वो जमाना चला गया है। वो मोहब्बत अब कहाँ है। होंगे कहीं, हाँ होंगे कहीं लोग जिन्हें अभी भी यकीन है, जिनको लत है खुमारी की और दिल जले हैं। ओ पूछते कि वो लोग कहाँ हैं, पूछते कि वो लोग कहाँ हैं। हम बता दें कि हम यहाँ हैं, वो जमाना चला गया है। वो मोहब्बत अब कहाँ है। साथ में गाते हैं। वो जमाना चला, वो मोहब्बत अब कहाँ है। यहाँ सब लोग समझदार हैं। दीवानगी बोलो कहाँ है, यहाँ सब लोग समझदार हैं। दीवानगी बोलो कहाँ है वो। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का। माफ़ी कचहरी वाले गाने से आपत्ति हो गई हो तो ठीक है। हेलो, हाँ बाकी मुझसे कहा गया है कि शो अभी बाकी बचा है थोड़ा सा, तो कविश हमारे साथ शायद स्टेज पे दोबारा आएंगे, आई डोंट नो, मे बी। I would like to invite on stage Parth Bansal ji, Director Bansal Group, to come and honor our artist. Parth, can we please have you on the stage? कविश, इतनी सुंदर शाम सजाने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू, और जोरदार तालियां होनी चाहिए कविश के लिए। बहुत मजा आया दोस्त, और दोबारा सुनेंगे तुम्हें। इसके साथ ही अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी उन तमाम लोगों को जिनकी वजह से आज की कॉन्क्लेव हो पाई है, वो बन पाई है। और सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूँगी श्री विवेक तनखा जी को कि प्लीज़ वे स्टेज पे आएँ। We would request you to come and address the entire audience and present some remarks about how this day progressed. Along with Shri Vivek Tankha ji, I would like to invite on stage all of the members of the organizing team, all of the people who made the Udaan Conclave possible. पहले तो Shri Tankha ji के लिए जोरदार तालियां।
और इन्हीं के साथ मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी श्री गौरव तिवारी जी को, राजुल करसोलिया जी को, आशीष मिश्रा जी को, करण कुकरेजा जी को, अनूप कृष्णन जी को, हिमांशु पांडे जी को और साथ ही अनुज पाठक को भी. These are the people who have brought the Udaan Conclave to you. So front वाले लोगों की तो सब लोग साथ ही बुलाना चाहूंगी श्री मैथिली शरण तिवारी जी को और पार्थ बंसल जी को भी. These are the people who made Udaan Conclave possible. सौम्या जी, क्यों नहीं आप भी? हाँ, मैं भी जाऊंगी. दोस्तों आपकी तालियां जोरदार चाहेंगे क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने मात्र इतने कम दिनों के समय में उड़ान को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया. एक बार तालियां बनती हैं जोरदार. सर, रियली ऑनर्ड विथ योर विजन, क्योंकि आपके मार्गदर्शन के बिना इस मुकाम तक पहुंचना बिल्कुल मुमकिन नहीं था. प्लीज सर, जॉइन अस फॉर द कंक्लूसिव स्टेटमेंट फॉर द डे. रियली ऑनर्ड. आज मैं कह सकता हूं कि दिन भर का प्रोग्राम, और मैं यहाँ सुबह 10 बजे से हूं, एक अद्भुत कार्यक्रम था. अद्भुत हर सेंस में. सौम्या जी और अनुज जी, आप लोगों की एंकरिंग वाज क्लास 1. आपने जिस तरह से पूरे प्रोग्राम को सजाया, आई थिंक मैं तो यही कह सकता हूं कि आपको अब इसके बाद बहुत इनविटेशंस मिलेंगे. और आपके जितने पैनल डिस्कशंस थे, इनोवेटर्स के थे, एनवायरमेंट for identification, respect for money, spiritual entrepreneurs, legacy business, हर्षित जी का एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड की जो बातें थी, विशाल सेवरे जी, आर एम्बेसडर फ्रॉम टोरंटो, उन्होंने, एंड ही इज अ स्टूडेंट ऑफ भोपाल. प्रतीक जी, द ग्रीन मैन, द ग्रुप ऑफ सिटी एंटरप्रेन्योर्स जो आए थे, ध्रुव शर्मा जी जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, लिट चौक इंदौर के, वो भी अद्भुत था. और मैं नीलोपत जी से तो स्पेशली बहुत ही इम्प्रेस था. उन्होंने इस महफिल में एक रंग डाला. देखिए, महफिल किस लिए सजी थी? महफिल सजी थी यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एक उनके भविष्य के बारे में सोच विचार के लिए. भोपाल, मध्य प्रदेश, देश कैसे आगे बढ़ेगा, उसके बारे में एक मंथन था. डॉक्टर त्रेहान ने जो बातें बोली, वो लंच टाइम हो गया था, बहुत सारे लोग नहीं थे. जिन्होंने उनको नहीं सुना, शायद उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बिंदु मिस की है. मेडिकल फ्यूचर के बारे में जो उन्होंने बातें बोली बहुत महत्वपूर्ण थी. जिन लजय ने जिस तरह से एआई के यूज के बारे में बताया, वो
खुद ही एक बहुत ही नामी जनरल हैं, इंडिया के सेकंड सीनियर मोस्ट आर्मी कमांडर थे, कुछ माह पहले रिटायर हुए हैं। और बहुत सारी इस वक्त जो आर्मी की टॉप रिपोर्ट्स हैं वो जनरल अजय रिपोर्ट्स हैं। सैम पेट्रोडा जी, जिन्होंने टेलीकॉम रेवोल्यूशन 1980 के दशक में लाए थे, उन्होंने भी अपनी बात रखने की कोशिश की, मगर 10 मिनट बाद टेक्नोलॉजी ने उनको रोक दिया। जब वो कनेक्ट हो रहे थे तो तब तक दूसरा स्टार्ट हो गया था। बट किसी और दिन सैम पेट्रोडा जी को हम फिर सुनेंगे। उन्होंने नॉलेज सिटी 9 देशों में एस्टैब्लिश की है। नॉलेज सिटी उन्होंने 9 देशों में एस्टैब्लिश की है। उनका जो वर्ल्ड में जो कंट्रीब्यूशन है अद्भुत है। कार्तिकेय जी ने भी बहुत मीडिया के बारे में बातें बताई। और द्रोणा चौधरी, आज वो ज्यादा नहीं बोल पाए, लंच टाइम हो गया था। द्रोणा चौधरी बड़े नामी व्यक्ति हैं, रॉयटर्स के वो यूरोपियन हेड थे, फर्स्ट बैंक ऑफ आबू धाबी के नंबर 2 मैन थे। आज वो ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड कमिश्नर हैं फॉर साउथ एशिया। उनके पिताजी वॉर हीरो हैं, जनरल चौधरी, आपने नाम सुना होगा जनरल चौधरी का। उनके पिताजी ने मुक्ति वाहिनी का निर्माण किया था फ्रॉम एज जीओसी बंगाल एरिया 72 के दशक में। तो आज जितने लोग थे सब मध्य प्रदेश से भी जुड़े थे, हम सबसे भी जुड़े थे, और एक प्रकार से आइकॉनिक लोग थे, आइकॉनिक पर्सनालिटीज थे। जो आपके पैनलिस्ट थे वो खुद एग्जाम्पल्स हैं ऑफ एक्सेलेंस समाज के सामने। तो ये एक, तभी मैं कह रहा हूं कि बहुत अद्भुत कार्यक्रम था। और उसको जिस तरह से नीलोपर जी ने अंतिम चरण में लाए और हिंदी भाषा के बारे में, जो हिंदी का महत्व है और हिंदी क्या जो सम्मान होना चाहिए, जैसे उन्होंने प्यारे शब्दों में बोला, मैं उससे बहुत प्रभावित था। और मैं कह सकता हूं कि नीलोपर जी, आपकी बात हम लोग ने बहुत ही अच्छे से सुनी, समझी, और आपकी बात को हम आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि जो आपने बात बोली है वो देश हित की बात है। कविश जी की गाने और कविताएं एक ग्रैंड फिनाले था। आपको उनकी बातों को लिटरली नहीं समझना चाहिए, नहीं तो कविश जी का अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। मगर राइटर के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है, सिंगर के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है। उनका भाव कभी गलत नहीं होता है, वो खाली समाज का दर्द अपने गानों से व्यक्त करते हैं। तो हम उसको सामाजिक दर्द समझें। और उन्होंने जब बात अपनी बोली, वो बात तो मैं सुबह भी बोल रहा था। खैर, शब्द अलग थे, गायक के शब्द और वकील के शब्द अलग होते हैं। तो आज बहुत ही अद्भुत दिन था। आप लोगों ने भोपाल में शायद जो ये कार्यक्रम हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का और इस प्रकार का कार्यक्रम शायद ही देश में कहीं हुआ होगा। इसमें जो आपने वैरायटी दी और जो बुके था आपका, वो इतना वास्ट था और इतना वेल अरेंज था कि आपने किसी को 5 मिनट बोर होने भी नहीं दिया। मैं इसके लिए मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के पूरे परिवार को और मेरे घर के ही मैं कहूंगा गौरव, मैं तो उनका मौसा जी हूं, तो मैं कहूंगा कि मैं गौरव को
आशीर्वाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और यही कहूंगा कि गौरव, इस प्रकार के प्रयास आप जैसे लोग अगर करते रहेंगे इस देश में, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ कर पाएगा। चिंतन किसी भी समाज के लिए जरूरी है। अगर हम चिंतन करना भूल जाएंगे तो हम समाज को भूल जाएंगे। अगर सामाजिक त्रुटियां होती हैं तो वो चिंतन से ही दूर होती हैं। जो लोग अपने सामाजिक बुराई को सुनने को तैयार नहीं है या समझने को तैयार नहीं है, मैं नहीं सोचता कि वो कभी समाज में चेंज ला सकते हैं। और आज एक चीज मुझे समझ आई, सुनते थे, देखते थे, पार्लियामेंट में भी मैं बोलता था ये बात, कई जगह बोलता था कि ये समाज, भारत एक यंग इंडिया है, एक युवा भारत है। जब तक हम युवाओं की प्रतिभा को आगे नहीं लाएंगे, भारत में बदलाव नहीं आएगा। और पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोच लेना चाहिए कि हम ओल्ड स्टेटस को अगर हम चलाते रहेंगे तो वो जो एस्पिरेशनल इंडिया जो हम चाहते हैं भारत में आए, वो कभी स्थापित नहीं हो पाएगा, क्योंकि देश के एस्पिरेशंस युवा पीढ़ी ही आगे ले जा सकती है, क्योंकि वो 60% है ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। 55% ऑफ इंडिया इज लेस देन 35। आज जब हाथ उठाने की बात आई, जनरल साहब ने बोला, तो 98% लोगों ने हाथ उठाया था जब उन्होंने कहा यहां 30 साल से कम के कितने लोग हैं। आप सोचो, और 3 लोगों ने उठाया था 60 साल से ऊपर कितने हैं। तो ये युवा इंडिया है, ये यंग इंडिया है, और यंग इंडिया को ही आगे बढ़ाना चाहिए। यंग इंडिया ही अपने एस्पिरेशंस को अचीव कर पाएगी, यंग इंडिया ही चीजों को बदल पाएगी, और यंग इंडिया इज द एस्पिरेशनल इंडिया दैट वी आर लुकिंग एट। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ के यंग लोगों के बीच में। पिछले हफ्ते तो एक ये भी समय था जब मैं गौरव से बोल रहा था कि गौरव, ये अपन प्रोग्राम को पोस्टपोन कर सकते हैं क्या? तो गौरव ने कहा नहीं मौसा जी, ये प्रोग्राम तो अपन करेंगे ही, चाहे नोटिस बहुत शॉर्ट हो। और इट वॉज हिज हार्ड वर्क, उसका सपना, उसका विजन, which has led to this good program. I thank all of you. I thank the participants. आप लोग सब आए, आप लोग सबको धन्यवाद। दूर दूर से पैनलिस्ट आए, उनको धन्यवाद। हमारे कीनोट स्पीकर्स को धन्यवाद। और आज जो भी आए, जो भी हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे नीलोफर जी, हमारे कविश जी, सबको धन्यवाद कि आप लोग सब आए। आपने इस प्रोग्राम को एक 4 चांद लगाए, आपने इसको सफल बनाया, और एक प्रकार से इस कॉन्क्लेव के थ्रू आपने एक मैसेज भी दिया है कि अब युवाओं का समय है। स्टेटस को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, हमको चेंज युवाओं के माध्यम से इस देश में लाना पड़ेगा। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, एंड एक्चुअली थैंक्स टू यू कि आपने पूरे समय हमारे साथ बने रहकर हर एक व्यक्ति को मोटिवेट किया है। तालियां जोरदार बनती हैं माननीय श्री विवेक तनखा जी के लिए। दोस्तों, अब ये समय है सीधे आप सभी को अवार्ड सेरेमनी, हमारे रिकॉग्निशन सेरेमनी की ओर लेकर जाने का, जहां हमारे साथ शहर के सभी तमाम जाने माने एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स को हम सम्मानित करेंगे इस मंच की ओर से। आइए इन तैयारियों को पूरा करें और साथ मिलकर के इस आगाज को हम आगे लेकर चलते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आप सभी के बीच से चुन करके निकाले गए वो इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने शहर के और शहर के नाम को और ऊंचा उठाया है। आज क्योंकि सुबह से ये सेशन चल रहा है और
यहाँ कई लोग मौजूद थे और उनकी बिजी शेड्यूल की वजह से वो शायद जा भी चुके होंगे, तो हम लगातार यहाँ से लाइंस में यहाँ पर नाम इनवाइट करेंगे और आप जो भी यहाँ मौजूद हों कृपया कर मंच पर पधारें और ये रिकॉग्निशन प्राप्त करें। सबसे पहले इन्फ्लुएंसर कैटेगरी की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में हमारे साथ सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहूंगा अंकित राजपूत। स्वागत करेंगे तालियों के साथ, अंकित राजपूत हमारे बीच आ रहे हैं। स्वागत करूंगा उनके साथ साथ आगे बढ़ते हुए लोकेश मारन। आप सभी मंच के दाएं ओर से ऊपर आएंगे और बाएं ओर से उतरकर आगे की ओर जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत। आइए तालियां सभी की ओर से जोरदार। अंकित राजपूत के बाद स्वागत करेंगे मंच पर लोकेश मारन। लोकेश जी के बाद मंच पर होंगे विपिन विश्वकर्मा। विपिन के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे यश चौधरी। आगे बढ़ते हुए स्वागत करेंगे नैनी जैन। इसी श्रृंखला में हमारे साथ होंगी राशि चौधरी और वहीं स्वागत करेंगे अंकित जोशी हमारे साथ। अंकित जी के बाद हमारे बीच मंच पर होंगे ईशान त्यागी आर्टिस्ट। आगे बढ़ते हुए स्वागत करेंगे निखिल सिंह। साथ हमारे बीच होंगी रश्मि गोलिया जी और वहीं हमारे साथ जुड़ने वाले हैं समरजीत सिंह चौहान। स्वागत करेंगे तालियों के साथ आरना भदौरिया और वहीं सर्टिफिकेट्स आप सभी को हमारी टीम बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। आप अपने मेडल्स एंड ट्रॉफीज रिसीव करें। समरजीत सिंह चौहान के बाद होंगी आरना भदौरिया और उसके बाद स्वागत करेंगे मंच पर ऋत्विक। साथ ही हमारे बीच होंगे एस्ट्रो वेदांश और उन्हीं के साथ साथ स्वागत करेंगे नितिका द फूड ब्लॉगर। नितिका लिका। इसके बाद श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए स्वागत करेंगे हिना शेख। द हिना शेख के नाम से जिनका इंस्टाग्राम पेज है। हिना जी के बाद स्वागत करेंगे मंच पर डॉक्टर आनंद श्री हमारे साथ होंगे। क्या बात है, बहुत खूब। देखिए आप हर रूप में इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर आ रहे हैं, डिफरेंट विधाओं के हमारे बीच आ रहे हैं। डॉक्टर आनंद श्री के बाद होंगे अभय भदौरिया। इसके बाद स्वागत करेंगे वकास जी फ्रॉम भोपाल की बातें। हमारे बीच होंगे अर्पित जैन। अर्पित जैन जी के साथ इसके बाद हम स्वागत करेंगे मंच पर आने वाले हैं अशरफ अंसारी। चूंकि श्रृंखला बड़ी है और हमने कोशिश करी कि हम सभी इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित करें। हर एक विधा, चाहे वो शहर की बात हो, कॉमेडी की बात हो, फूड की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, हर रूप में हमारे इन्फ्लुएंसर्स मंच पर आ रहे हैं। अमीन सिद्दीकी के बाद स्वागत करेंगे हार्दिक शर्मा द डिजिटल क्रिएटर। वहीं हमारे बीच होंगे सोहिल भिलाला उज्जैन 01। सोहिल जी के बाद इस मंच पर आने वाले हैं अनिकेत फ्रॉम द जबलपुर डायरी। क्या बात है, बहुत खूब इन्फ्लुएंसिंग बता रही है। इसके बाद हमारे बीच होंगी हमारे शहर की जानी मानी इंटरनेशनल स्पीकर, एंकर एंड अ वेरी अमेजिंग एंटरप्रेन्योर मेघा ठाकुर। स्वागत करेंगे तालियों के साथ। मेघा हमारे बीच है, स्वागत करेंगे उनका मंच पर। नेक्स्ट वी हैव संदीप मिश्रा। स्वागत करेंगे एक बहुत ही यंग एंड एन अमेजिंग इन्फ्लुएंसर मैथिली झा। हमारे बीच होंगे, स्वागत करेंगे तालियों के साथ मन बहादुर। Megha, please join us. Thank you for being an amazing part. And yes, always taking the name of Bhopal to the international platform. Moving ahead. मैंने जैसा कि आपको नाम बताया आयुष साहू, उसके बाद हमारे बीच होंगे आयुष कसेरा फ्रॉम रतलाम। हमारे बीच आए हुए हैं आयुष कसेरा। स्वागत करेंगे सिद्धार्थ स्वामी। हमारे बीच होने वाले हैं एक और शानदार इन्फ्लुएंसर सिद्धार्थ स्वामी। स्वागत करेंगे सोनम गुप्ता, हमारे साथ होंगी इस मंच पर। चलते हैं आगे, स्वागत करेंगे भविष्य राघव। हमारे बीच हैं भविष्य राघव, स्वागत करेंगे भविष्य का। हमारे साथ होंगे मोहसिन खान, जिनका नाम है एक भोपाली के नाम से। वो बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं और उर्दू के लिए बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं मोहसिन खान। स्वागत करेंगे तालियों के साथ।
हमारे बीच मोहसिन खान, बहुत खूब। आगे चलते हैं, स्वागत करेंगे राहुल सेन फ्रॉम सूरमा भोपाली। तालियां बनती हैं दोस्तों जोरदार अगर आप भोपाली हैं, तो ये वो क्रिएटर्स हैं जो आपके लिए जबरदस्त कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं भोपाल को लेकर। स्वागत करेंगे सानिध्य जैन, हमारे बीच हैं सानिध्य जैन। साथ ही साथ होगी दोस्तों, ध्यान से अपने सर्टिफिकेट आप बैक स्टेज जरूर कलेक्ट कर लें, ध्यान से। सभी क्रिएटर्स, सभी इन्फ्लुएंसर्स से रिक्वेस्ट है। हमारे बीच होंगी मुद्रा, भोपाल की वन ऑफ दोज प्रोमिनेंट फूड ब्लॉगर जिनका पेज बहुत ही सभी लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे, द सुपर चटोरी के नाम से। स्वागत करेंगे शेलू, हमारे बीच हैं। स्वागत करेंगे शेलू का आप सभी के साथ। लेट मी इनवाइट ऑन स्टेज आयुष साहू फ्रॉम द भोपाली पॉइंट। विल बी हैविंग मुजम्मिल कादिर। ऑल्सो लेट मी वेलकम दीपाली शर्मा। क्या बात है, देखिए ब्लॉगिंग अभी भी चली रही है साथ, बहुत खूब। ये होती है बात, पूरा उपयोग किया जा रहा है अपनी ब्लॉगिंग स्किल्स का। दीपाली शर्मा हमारे बीच आ रही हैं। उसके बाद होंगे अल आमिर खान। आप सभी की तालियां जोरदार चाहिए। इसके बाद स्वागत करेंगे हमारे शहर के एक और जाने माने इन्फ्लुएंसर, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, रुदाब खान। तालियां बनती हैं सभी की जोरदार। रुदाब खान हमारे बीच हैं। स्वागत करेंगे प्रतीक सोनी, हमारे बीच इस मंच पर आ रहे हैं। इसके बाद होंगी पल्लवी अग्रवाल। स्वागत करेंगे बिलाल खान फ्रॉम भोपाल न्यूज। आप सोचिए न्यूज, जी हाँ, न्यूज भी जो कि इंस्टाग्राम पर पहुंच चुकी है। बखूबी शानदार कार्य कर रहे हैं बिलाल खान फ्रॉम भोपाल न्यूज। स्वागत करेंगे कारुण्य शर्मा। हमारे बीच मंच पर होंगे, स्वागत करेंगे यूसुफ अली खान, रोहित लखेरा। चूंकि समय की कमी दोस्तों, इसलिए मैं लगातार इस श्रृंखला को आगे लेकर बढ़ रहा हूं। रूपल श्रीवास्तव हमारे बीच होंगी। स्वागत करेंगे एंकर वर्षा श्रीवास्तव। स्वागत करेंगे शुभम यादव इंदौर से। क्या बात है, इंदौरी जबरदस्त कंटेंट क्रिएटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत करेंगे आकाश अहिरवार, व्लॉगर भोपाली। हमारे बीच होंगे करीमुद्दीन। तालियां दोस्तों लगातार बजती रहे, चूंकि हमारे बीच अगली होगी महक खान। स्वागत करेंगे निखिल केशरवानी। ऑल्सो वेलकमिंग रहमान रईस एंड एन अमेजिंग फूड ब्लॉगर सृष्टि पांडे, फूड EAF। स्वागत करेंगे सौम्या गुप्ता चांडक, हमारे बीच आ रही हैं इस मंच पर। स्वागत करेंगे आप सभी के बीच अमान उर रहमान फ्रॉम चल भोपाल। जी हाँ दोस्तों, ऐसी श्रृंखला आगे बढ़ती जा रही है। स्वागत करेंगे आदित्य गर्ग, हमारे साथ हैं। और वहीं होंगे साथ ही साथ सत्या मिश्रा। आगे बढ़ते हुए स्वागत करेंगे शाश्वत वर्मा। और वहीं हमारे साथ इस मंच पर सम्मान प्राप्त करने आ रहे हैं आदित्य सिंधु। बिना देरी करे आगे बढ़ूंगा। स्वागत करेंगे, हमारे बीच होंगे नितिन सोनी, साथ ही साथ रजत पवार। जी हां, तालियां लगातार बजती रहें। हमारे बीच होंगी अपूर्वा जादौन। और वहीं आपकी तालियों के साथ स्वागत करेंगे हिमांशु साहू। वहीं इन्फ्लुएंसिंग के स्किल्स को जिन्होंने भोपाल से एक ग्लोबल मुकाम तक पहुंचाया है, ऐसे जबरदस्त आप इन इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं। सभी अपने अपने कैटेगरी के माहिर इन्फ्लुएंसर्स हैं और ये रिकॉग्निशन पा रहे हैं इस मंच के द्वारा। स्वागत करेंगे आवेश, हमारे बीच होंगे राहुल सालवे। और वहीं स्वागत करूंगा आकाश साहू फ्रॉम भोपाल टॉक। एंड फाइनली वेलकमिंग ऑन स्टेज सौरभ सिंह। अब तैयार हो जाइए, इस श्रृंखला के बाद हमारे बीच होंगे वो एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी के जरिए शहर में एक अलग मुकाम, एक अलग नाम बनाया है। मेरी जनता से अनुरोध है, जिस प्रकार से आपने दिन भर इतने शानदार सेशंस को एंजॉय किया, एक बार तालियां अपने आप के लिए बनती हैं जोरदार। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर योरसेल्फ। इतनी शानदार ऑडियंस जिसने हर एक स्पीकर को मोटिवेट किया है, हर एक पैनलिस्ट को मोटिवेट किया है, और ना केवल उन्हें सुन करके उस जर्नी को, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत कुछ सीख कर आ जा रहे हैं। तैयार हो जाइए, इसके बाद हमारी आखिरी सेट ऑफ रिकॉग्निशन है जो हमारे शहर के सभी बेहतरीन एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाना है। मैं उनका स्वागत करूंगा। यस सर, मैं हमारे सभी मजासी महानुभावों से भी अनुरोध करूंगा, बस आखिरी 15 मिनट जिस प्रकार से हम इस जर्नी को पूरा कर रहे हैं, बहुत ही जल्द मैं सभी एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ इनवाइट करूंगा आप सभी के साथ।
Let me also welcome in the influencer category Priyansh from Bhopal View. स्वागत करेंगे तालियों के साथ Priyansh from Bhopal View. जी हाँ. उम्मीद है हैशटैग उड़ान कॉन्क्लेव बहुत ऊंचाइयां छूने वाला है जब मिल करके हमारे ये सभी इन्फ्लुएंसर्स अपने इन अवार्ड पिक्चर्स को ग्लोरीफाई करने वाले हैं और एक शानदार इस धारा को, जैसे कहते हैं ना कि डिजिटली हमारी उड़ान की उड़ान बहुत ही ज्यादा ऊंची होने वाली है. आइए ध्यान रखें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स जो कि उड़ान कॉन्क्लेव के नाम से हैं, उसे टैग करना ना भूलें. हमारे साथी इंस्टीट्यूशंस आपके साथ हैं, उन्हें टैग करना ना भूलें. मैं हूं अनुज पाठक, मेरे साथ हैं सौम्या कुल ऑन इंस्टाग्राम एंड मी अनुज पाठक 24 ऑन इंस्टाग्राम. जरूरी है सर, हम जब इस कॉन्क्लेव पर हैं तो क्यों नहीं. धन्यवाद. आगे बढ़ते हैं. आज का ये दिन जैसे कि सुबह 10 बजे से शुरुआत हुई और हर एक सेशन में आपने जाना किस प्रकार से हर फील्ड के उन एक्सपर्ट्स को सुना, समझा और देख पाए कि अगर आपकी उड़ान में भी दम है तो ये आसमान आपके लिए तैयार है और आपको मदद करने के लिए ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं हमारे आसपास जो आपको हमेशा विजन को और ऊंचा लेके जाना चाहते हैं. दोस्तों स्वागत करेंगे हमारे बीच जबलपुर से आए हुए इन्फ्लुएंसर धैर्य शाह. स्वागत करेंगे तालियों के साथ. जी हाँ, धैर्य ना केवल इन्फ्लुएंसर बल्कि जाने माने एंटरप्रेन्योर है. मैं उनके नाम पर उस एंटरप्रेन्योर कैटेगरी में आने वाला था, पर चूंकि मुझे ये साथ मिला है तो क्यों नहीं शुरुआत हम आपसे करें. दोस्तों एंटरप्रेन्योर कैटेगरी में सबसे पहले आपके बीच मैंने इनवाइट किया है धैर्य शाह फ्रॉम एनेक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड. सभी की तालियां बनती हैं जोरदार एक बार धैर्य के लिए. दोस्तों तालियों का जोश बढ़ा लीजिए क्योंकि वो ये लोग हैं जिन्हें विवेक तनखा सर के विजन को और आगे बढ़ा रहे हैं. ये जॉब देने वाले व्यक्तित्व हैं. शुरुआत करता हूं, सबसे पहले इनवाइट करूंगा हमारे बीच आयुष गुप्ता फ्रॉम दैनिक डिजिटल. तालियां बजती रहे जोरदार. स्वागत करेंगे अभिषेक मिश्रा फ्रॉम टेक ग्लोबल सोल्यूशन. स्वागत करेंगे अनमोल अग्रवाल फ्रॉम एडिमाइज. स्वागत करेंगे अंश पाटीदार फ्रॉम अग्रिवा ऑर्गेनिक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड. आपके बीच इस मंच पर होंगे अनुराग अग्रवाल फ्रॉम शिक्षा कोच. हमारे बीच इस मंच पर आने वाले हैं आपकी तालियों के साथ अपूर्व शर्मा फ्रॉम 5 हर्ट्ज. स्वागत करेंगे बैसो धाकड़ फ्रॉम बैसो ऑर्गेनिक्स. स्वागत करेंगे दीपाली शर्मा फ्रॉम उत्पल द डिजाइनर स्टूडियो. स्वागत करेंगे आपके बीच दीपेश गुप्ता फ्रॉम ऑर्फिक सोल्यूशन. और जैसा कि मैंने आपसे कहा सबसे पहले हमारे बीच आए थे धैर्य, वो पूरा हो चुके हैं. स्वागत करेंगे फैज खान फ्रॉम विग्योस सेंटर. स्वागत करेंगे जगन करथार इंटरनेशनल मोशन पिक्चर्स. एंड नाउ लेट मी वेलकम, हमारे बीच होंगी जूही तिवारी फ्रॉम एक्सेल्सिया इवेंट्स, a personality who has been creating amazing events for her passion of creating unforgettable moments for vigilance, and we have privilege to witness her talent as Excelsia Utsav. She has been in faculty for teaching event management courses at JLU. Excelsia India is already creating benchmark on national, international platforms and festivals. Let me give it up for Juhi ji. हमारे बीच होंगे करण पवार from O Chai Wala Private Limited. हमारे बीच होंगे कौशल साहू फ्रॉम वर्कशॉप ओपीडिया. हमारे बीच होंगे कृष्णकांत चतुर्वेदी फ्रॉम कॉमन स्कूल. स्वागत करेंगे तालियों के साथ. हमारे बीच होंगी मदीहा रेशमवाला फ्रॉम मेट एंड माइस्ट्रो, अनदर अमेजिंग टीम इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स एंड एग्जीक्यूशन. स्वागत करेंगे आपकी तालियों के साथ मयंक नेमा फ्रॉम नेमा वेंचर्स एंड कॉर्पोरेशन. स्वागत करेंगे मयूर मुरोदिया फ्रॉम KSM ग्रुप. हमारे बीच होंगे मोहम्मद काशिफ फ्रॉम हिज ओन नेम ब्रांड एज द मोहम्मद काशिफ. चलेंगे आगे. स्वागत करेंगे आपकी तालियों के साथ मोहित कुमार त्रिपाठी फ्रॉम वेलविश. वी हैव मोहित कुमावत फ्रॉम द हीलिंग पाथ हेल्थ केयर. स्वागत करेंगे नवीन कपूर फ्रॉम आर्ट एंड आर्ट सोल्यूशन. हमारे बीच होंगे नयन जैन फ्रॉम रीड ऑन रेंट. स्वागत करेंगे नितिन राथौरिया फ्रॉम वायु रोबोटिक्स. इतने सारे नाम है सर कि वास्तव में ये विजन पूरा हो रहा है आपका और नए बहुत ही यूनिक एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हो रहे हैं हमारे साथ. जैसा कि आपने देखा
आइए चलते हैं साथ। आपके बीच स्वागत करेंगे नयन जैन फ्रॉम रीड ऑन रेंट, नितिन राठौरिया फ्रॉम बायो रोबोटिक्स। हमारे बीच होंगी, तालियों के साथ स्वागत करेंगे प्रवीण प्रजापति फ्रॉम बन्ना स्टूडियो, बन स्टूडियो। वी हैव राहुल एम फ्रॉम कॉन्सेप्ट कैंपस। वी हैव राहुल सेन फ्रॉम आई डिजिटल करियर। स्वागत करेंगे आप सभी के बीच। हमारे साथ आने वाले हैं राज गुप्ता फ्रॉम इनविटेशन वाला। स्वागत करेंगे आपकी तालियों के साथ। हमारे बीच होंगे राज यादव फ्रॉम R9 स्टूडियोज। हमारे बीच होंगे रत्नेश्वर सनोडिया फ्रॉम प्रेम प्याली अमृतुल्य। स्वागत करेंगे ऋषभ करोसिया फ्रॉम SK क्रिकेट क्लब। हमारे बीच होंगे सौरभ मंत्री फ्रॉम लोड मी लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। विल वेलकमिंग शिवराम शिवरे फ्रॉम G स्मार्ट इन्वेस्टर्स। हमारे बीच स्वागत करेंगे आपकी तालियों के साथ शुभम पंचेश्वर फ्रॉम हैपन रिसेंटली। वी हैव सिद्धार्थ भोजवानी फ्रॉम असंजी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। हमारे बीच होंगे सिमरन सिंह फ्रॉम इनसाइट एविएशंस। स्वागत करेंगे स्वामीन बैनर्जी फ्रॉम स्टार्टअप लॉजिस्ट। वी हैव सुमित सक्सेना फ्रॉम स्विफ्ट नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज। विल बी हैविंग तरुण द्विवेदी फ्रॉम एक्ट टी कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। विल बी हैविंग विजय आनंद सक्सेना फ्रॉम व्यास ग्रुप। विल बी हैविंग विकास सिंह फ्रॉम वन स्टॉप सोल्यूशन एंड कंपनी। विल बी हैविंग यश कुलश्रेष्ठ फ्रॉम फीड बॉक्स। स्वागत करेंगे फाइनली द लिस्ट। वी हैव योगेश कुशवाहा। वहीं साथ होंगे शशांक जोशी फ्रॉम ग्लोबल क्लिक। विल वेलकमिंग निलय पाराशर फ्रॉम वी लिंक। विल बी हैविंग समनजीत ऑन स्टेज विद अस फॉर हिज अमेजिंग एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। विल बी हैविंग अशोक वाक्त्रिय फ्रॉम बिस्पाई डेलुक्शाला। वी हैव अभिषेक कुशवाहा, we'll be having Rakesh Singh Thakur, the very well-known poet and writer, and doing amazingly in terms of entrepreneurship. We'll be welcoming Urmila Ahuja from GHD Oil Industry. Also welcoming on stage Rakesh Singh Thakur ji, who's a very senior maths teacher and a poet along with a writer. What an amazing combination, sir. We'll be welcoming Mudit Thakkar from Young Waiters. We'll be welcoming Raj Gyani from Currencypedia. And finally welcoming Aditya Yadav, जो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। ये है वो जबरदस्त मंच जो एंटरप्रेन्योर्स के साथ उन्हें रिकॉग्नाइज कर सम्मानित महसूस कर रहा है। और क्यों ना हो, चूंकि ये विजन ही हमारा था कि इस उड़ान के जरिए उन एंटरप्रेन्योर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को रिकॉग्नाइज किया जाए ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले इस जर्नी में आगे बढ़ने का। वहीं मीनवाइल इसी बीच एक दूसरा अनाउंसमेंट है, जरा ध्यान देंगे। यहाँ एक गाड़ी की चाबी मुझे मिली है, यदि किसी व्यक्ति को तो प्लीज आकर आप कलेक्ट करें। थैंक यू। तो दोस्तों, इसी प्रकार ये मंच अपने दोस्तों, इसके बाद कविश जी एक बार फिर इस मंच पर होंगे, चूंकि जनता की डिमांड पर, और हम सभी जिस प्रकार से एंजॉय करना चाहते हैं आप सभी के बीच। सो ये एक और सेशन ऑफ म्यूजिक एंड मस्ती, उनके बहुत ही यूनिक सॉन्ग्स, सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स जो कि हर व्यक्ति को कनेक्ट कर पाता है, ऐसे शानदार आर्टिस्ट को हम इन्वाइट करने जा रहे हैं। इस मंच पर क्रिएटिविटी हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान किया गया, और ऐसे कलाकार इस मंच पर असली क्रिएटिविटी लेकर आते हैं। स्वागत करेंगे उनका हमारे साथ इस अवार्ड सेरेमनी जो कि अपने समापन की ओर पहुंच रही है, रिकॉग्निशन सेरेमनी जो अपने समापन की ओर पहुंच रही है। सो लेट मी बी देयर एंड थैंक यू सो मच ऑनरेबल सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मैथिली शरण तिवारी जी से इस समस्त शाम की ओर से आप धन्यवाद ज्ञापित करें और हम समापन की ओर बढ़ें, जहां अब आखिरी बार एक बार फिर झूमने को, मस्ती में साथ गाने को ये पल हमें मिलने वाला है। हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम हो, हमारी द कंप्लीट टीम, मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा द टीम ऑफ मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी। एक बार तालियां बनती हैं जोरदार उनके लिए। सर प्लीज।
हेलो, सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ हम आभार व्यक्त करें मध्य प्रदेश के इस प्रथम कार्यक्रम के सूत्रधार परम आदरणीय विवेक कृष्ण तनखा जी का। जोरदार तालियों के साथ उनके प्रति हम आभार व्यक्त करें। आदरणीय तनखा जी की एक नई सोच जो आज आपने देखी, युवाओं के भविष्य के लेकर, प्रदेश और देश के भविष्य को लेकर। और मैं एक बात बता दूं कि आदरणीय तनखा जी ने इस प्रदेश में लाखों गरीब आदिवासी पीड़ितों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए हैं और करते आ रहे हैं, जिसमें दिल्ली, बम्बई, एम्स से लेके बड़े बड़े डॉक्टर जाते हैं। छिंदवाड़ा हो, शहडोल हो, मंडला हो, पिछली साल नरसिंहपुर हो, जिसमें आपके मानसरोवर के डेंटल यूनिट भी गए थे। वह हैं एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी आदरणीय तनखा साहब, जिनका विजन आपने युवाओं ने देखा और उनके इस विजन के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से मानसरोवर ग्रुप, गौरव तिवारी जी, साथ में हमारे जबलपुर के श्रीराम ग्रुप, राजू करसोलिया जी और अनेक ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने गौरव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया। एक अलग चीज आज महसूस हुई। आप देखिए, तनखा साहब इस देश के ख्याति लब्ध अधिवक्ता हैं, ख्याति लब्ध वरिष्ठ अधिवक्ता, राज्यसभा में इस प्रदेश से सांसद हैं। और आज पूरा दिन आप युवाओं के भविष्य को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में 10 बजे से शाम 6 बजे तक आपके बीच में उपस्थित रहे। हमें पूरी आशा है कि उनका यह विजन युवाओं को नई दिशा देगा, प्रदेश और देश के लिए सोचने की नई सोच देगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यह मानसरोवर ग्रुप आपके आशीर्वाद, समय समय पर आपके संरक्षण और मार्गदर्शन में ही चल रहा है। आपका आशीर्वाद इसी तरह इस संस्था और गौरव पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए, खासकर हमारे युवा आए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से एक नई दिशा लेकर वो अपने घर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय तनखा साहब को सादर प्रणाम। जय हिंद। तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोगों को आज स्टेज पे रिकॉग्निशन मिली है, अगर आपके सर्टिफिकेट्स बचे हैं तो हमसे आके कोऑर्डिनेट कर लीजिए। किसी को पार्टिसिपेशन वाले सर्टिफिकेट्स अगर लेने हैं तो हमसे कोऑर्डिनेट कर लीजिए स्टेज के पास आकर। इसी के साथ हम आज की शाम को समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस द एंटायर डे for the inaugural edition of the Udaan Conclave. This was a super successful event. Thank you everyone and see you sometime very, very soon. Absolutely, and let me thank the amazing participating organizing partners from Mansarovar Global University to ESR Entertainment, along with Dhwani Entertainment, Learn Mice, The Conversions, along with Technocrate Group of Institutions, also White Walls Media, along with Bhopal City Update, and Shriram Group, Jabalpur. धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी के प्रकार गाते रहिए, एंजॉय करते रहिए। टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे हैप्पी।